Let them write in Roman script. কারণ বাংলা মিডিয়ামও তো বড় পড়াশোনা খাই। সো যুক্তিগত দিক থেকে আমাদের দাবি ছিল যে বাংলা এবং রোমান হরফ দুইটা স্ক্রিপ্টনো সিবিএসই হবো প্রশ্ন সিলেক্ট। বিধানসভা আলোচনা নিয়ে দৈত্য মার্চ মাসনো আলোচনা খাইছে। শেষ 17 তারিখ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানো कैसे चिठी लिखे एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाक्सा नो एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नुई आंग बनो कैसे चिठी सीखे चिठी वाल साइमन नामु चुका जे we had a discussion in the assembly house on 27 March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. As per the discussion in the house, you were to instruct this Director of Secondary Education to write a letter to the CBSE authority on this issue. Both CBSE ni authority no Chithi Sri Jano Grinan Bagi Secondary Education ni Director no instruction none copies. Kindly let me know the status of the matter from your end. 17 তারিখ এপ্রিল নিয়ে আমি চিঠি জবাব রেখাবো। মোস্ট প্রবাবলি 4 তারিখ মেও ভাইয়ে ফিয়াবা আর লেটার আনি ইয়া ভাও ক্লাই বেগা 8 তারিখ মেও আছে ক্লাই বেমানি পরে না অনেক সোশ্যাল মিডিয়া নি গ্রুপ ওয়ান শেয়ার ক্লাইকা এন তাবু ত্রিপুরা গ্রাঙ্গি আবুনি চর্চা আরম্ভ হয়েছে। আর লেটারও এমন বয়ানসি দরকার বড় যে সিবিএসই কর্তৃপক্ষ বাই গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা তথা চিনি সেকেন্ডারি এডুকেশন অরনি যে ডাইরেক্টর বিসিংহ যে আদান প্রদান লেখা ক আ প্রতিলিপি তিনি আনো ত্রিপুরা সরকার নিঙ্গে খরকসা টাংফাং ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন নি খরকসা পাই মন লেটার নো রিকলাম থাকবে it has come from Central Board of Secondary Education Nidhi Chibbar IAS officer but chairperson Central Board of Secondary Education 7 তারিখ ডিসেম্বর 2022 নি মোচি চিনো বড় রাজ্য সরকার রেফারেন্স ইতিমধ্যে ডক্টর মানিক সাহানি লেটার মানমানি পরে আং দাবুক বিনি লেটার নো উত্তর নানি বাগি প্রস্তুতি আঙ্গ নাহার জাগ ডক্টর মানিক সাহানো লেটারও সাকা যে কোন স্কোপ করে সিবিএসই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বিভাগে মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট কোয়েশ্চন পেপারস নামনানি বড় গসিয়া and that was the letter in 2022 or last line of CBSE থেকে সিজার board will not be able to conduct examinations for one language in multiple scripts mono background nambi Dr. Manik Shah ano kaisa chithi log social media man. Now my question is, I want to tell Dr. Manik Shah who asked CBSE authority that multiple script kok borok subject ni proshno namdi sabasan ka baite we wanted only in by script duita script namdi multiple mane 8টা 10টা 16 100টা script namnano jono multiple if I understand English correctly the word multiple signifies it is more than 2 more than 3 no try script in man by script ke duita script single script ke একটা script তিন নি অধিক ইংরেজির multiple script ni kop hai so I want to tell honorable chief minister let us not get satisfied merely based on this letter that
multiple script of who asked them for multiple script? We wanted only in 2 scripts, very clearly. One is in Bengali script, the other one is in Roman script. Amon Hossain clear marking. Plus, ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহর অবগতির জন্য আমি বলছি, ত্রিপুরা রাজ্যের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আজকে নয় বহু বছর ধরে 2টা স্ক্রিপ্ট প্রশ্নপত্র অঙ্গিতম। উনি জানেন কিনা জানি না। নিনান ধানি অরতম যে কলেজও যে 3 ইয়ার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম নি জেনারেল সেকেন্ড সেমিস্টার 2019 অর কক বরক সাবজেক্ট নং ক্যামেরান বসকাং আং ফুনুবানো অর বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই রোমান স্ক্রিপ্ট 2টা বাই এই হলো রোমান স্ক্রিপ্ট, এই হলো সেই বাংলা স্ক্রিপ্ট। 2টা স্ক্রিপ্ট বাই নো অর প্রশ্ন অঙ্গিতম ইউনিভার্সিটি অঙ্গিতম স্কুল অঙ্গিতম অর কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি আমো অরব আইকেন শিকা কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি কক লবনি বিসিংতে বল আমানি কগ্ন সাজাকা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই ব কগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আইকেন সিজাকা তাবু ডক্টর মানিক শাহ হোসেন মা সানাই যে মিয়ারলি মোর চিঠি কেছে দুর্বল একটা চিঠি রিমা পাই বজে ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে হাজার হাজার কক বরফ পরে নাই তে কক বরফ নো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ছাড়া সেই মায়া আচারের উনি ভবিষ্যৎ মানসুকিয়া বড় বড় ডাইরেক্টরেট অফ কক বরফ এন্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে চিঠি রহরজাকা আরো শিখা বড় যে গভর্নমেন্ট ডিসিশন অনুযায়ী বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই নো খ্লাইজাক ওয়াই গভর্নমেন্ট ডিসিশন বুপুরুঙ্গা বোর নোটিফিকেশন রিজাক্ট খাইতে 2019, 20, 21, 22, 23 পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার নিয়ে নিজস্ব কলেজ স্কুল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত 2টা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন অঙ্গিত কোনো বিতর্ক করে হঠাৎ কে বুপুরু ত্রিপুরা সরকার ডিসিশন না কা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিমিনার প্রশ্ন খাইয়ানি Mr. Chief Minister, he should know about this. এবং আঙ্গিনি জরাসান নাই বনা মালাই নাই ব্রিফ খাইনি আমি কাউকে ছোট করার জন্য খাটো করার জন্য কাউকে অপমান করা এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। উনি যদি না জেনে থাকেন আমি যাব ওনার কাছে, বিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নাই ওনাকে আমি বুঝাবো ব্যাপারটা, সমস্ত দলিল দেওয়ার। ওনার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ত্রিপুরা রাজ্য বহু শিক্ষিত লোক, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ত্রিপুরা রাজ্য তম 1979 যখন কক বড় স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হবো আজ ওরা আই স্টিল হ্যাভ দি বিল দি ত্রিপুরা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1979 পুইলা কক বরগ্ন সরকারি ভাষা হিসাবে ওরও এমএন খ্লাইজাকা যেখানে যেখানে বেঙ্গলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আর বেঙ্গলি এন্ড কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ সিজি নেই অ্যামেন্ডমেন্ট ক্লাই কক বরক 1979 থেকে ত্রিপুরা রাজ্যটি গেছে সরকারি ভাষা এন্ড ইন দিস বিল ও বিল ও আইনস নাম কোনো জায়গা সিজা করে যে কক বরক ন বাংলা হরফ বাইনে মা সিনে এনে কোনো উল্লেখ নেই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এই বিলের মধ্যে কক বরক ভাষা লেখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো লিপির উল্লেখ নেই, কোনো স্ক্রিপ্টের উল্লেখ নেই। তার মানে ত্রিপুরা রাজ্য যারা কক বরক শিখবেন, যারা কক বরক বলবেন, যারা কক বরক শেখাবেন তাদের একটা মতামত নিয়ে লিপিটা তৈরি করা যাবে। আমি আরো বলছি ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে একটা সার্ভে হয়েছে, তিনটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন, পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন, আরো একটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে।
তিনটা ভাষা কমিশনই বলেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কক বরককে সঠিকভাবে লিখতে গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট সিনিয়র নাম নাই, এটা তাদের কনক্লুশনে ওনারা এটাই বলেছে। এবং কলেজও যে সার্ভের রিপোর্টটা আমার কাছে আছে, প্রত্যেকটা কলেজ ওর যেভাবে সার্ভে ফুনুক জাকা ওয়ান্ডারফুল ও সার্ভে ও কাসাই বেকার যে ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট অরনা সার্ভেনি রিপোর্ট বিজাক নর কাম কে পরীক্ষা রেখে নর বেলায় এখনো ক্লিয়ারলি বুঝি নাই যে বুসুক বড় ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্ট ইনকবাই নাই আবার উল্লেখ খাইজাক তোমায় ওকে अपनो और दस्तावेज नो आई एम गिविंग यस अब मान का एमबीबी कॉलेज टोटल नंबर ऑफ कॉक बरक लैंग्वेज स्टूडेंट 536 जन मो 21/22 सर्वे opted for roman script all 536 students बरो roman script by সিনিয়র পক্ষে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট 0 বিবিএম কলেজ আগরতলা 622 জন 622 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই 0 ওমেন্স কলেজ আগরতলা 910 জন 910 জন বড় বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে। এইভাবে জিডিসি গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ খুমলুং 1274 জন সংজাকা এবং বড় যতন 1274 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে শাখাইছে। একমাত্র একটা কলেজ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ শান্তির বাজার রো 113 জন ছাত্র নিবিসিংহ 4 জন অর্থাৎ 109 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে 4 জন স্টুডেন্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে। ত্রিপুরা রাজ্য সর্বমোট 22টা কলেজ 9147 জন ছাত্রছাত্রী সার্ভে ক্লাইজাকা তার মধ্যে 4 জন বাদ দিয়ে 9143 জন ছাত্রছাত্রী রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায় দিয়েছে। ও জায়গাও বসাওই ডক্টর মানিক শাহ যদি সাকায় যে বাংলা স্ক্রিপ্টেই লেখা হবে, we don't agree, we have to take the issue for the interest of the students, next generation যারা ভাষা না পড়ে নাই সেই নাই বরং স্বার্থে, এটা তো কেউ স্বার্থ ক্ষতি হবে না। যারা বাংলা দিয়ে যা লিখতে পারবে লিখবে, যারা বাংলা দিয়ে লিখতে পারবে না ওয়ানসান অবশ্যই গোবাং মত যারা হোলি ক্রস স্কুলে ডন বস্কো স্কুলে পড়ে বাঙালি অথচ নিজেরাই বাংলা লিখতে জানে না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই খবরগুলো রাখতে হবে। বাবু মা সিনাই আমি মন্ত্রী হয়ে গেলাম, আমি বিরোধী দলনেতা হয়ে গেলাম, আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলাম, মানুষের যন্ত্রণা মানুষের চাহিদা আমি বুঝতে চেষ্টা করব না, আবার একটা সরকার দৃষ্টিভঙ্গি সরকার has to take the interest of the people into account and take decision, and we have to write another letter, আমাদের লিখতে হবে বলতে হবে সিবিএসসি কে we are not demanding for multiple script, we are demanding only in 2 script and that is possible. মিজোরামও বাহিংতম বড়োল্যান্ডও বাহিংতম সিবিএসসি সেখানেও প্রশ্ন করছে, রোমান স্ক্রিপ্টে করছে, দেবনাগরীতে করছে, 22 স্ক্রিপ্টে করছে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন হবে না? ও প্রশ্ন অনুযায়ী মা সিন্নাই এবং মুখ্যমন্ত্রী আন বিরোধী দল রাঙ্গিব কাইসা মেমোরেন্ডাম রেনাই লিখিতভাবে বিন বুঝিনানি। আমি জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের বিপক্ষে যাবেন না, উনি রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা রাজ্যের মানুষের যে ডিমান্ড সেই পক্ষে উনিও যাবেন, কিন্তু খবর নিয়ে সঠিকভাবে জেনে চিঠিগুলি যেন উনি লিখতে পারে দপ্তরের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। এবং বিভিন্ন যারা সংস্থা তন্নেও যিনি এনজিও কক বরক হুকুম মিশন কক বরকনতেই যারা চর্চা খাইত নাই বিভিন্ন সংগঠন, আমি ওনাদেরও আমন্ত্রণ করব ওনারা যেন এগিয়ে আসুন মুখ্যমন্ত্রীর নজরও যে তিনি ত্রিপুরানি বরকনি লম্হো কি গুজারিশ সময় নিজে
सानमुं नायमुं रोमान स्क्रिप्ट मनोजों चालु खालायनो बागै जतन मा जायो बेलाय बेलाय abo ki ang khalsa tipra sangai ang khalsa dabuna answer na nangnai na so full tipra saro abuna answer na na abo noron wan sukti tipra sano ma wan sukti thlai tabo je nini je question je issue no te je tabo salen thangto abo wan suna nang sini borok tabo kok sana thanga sai politics ni kok mang phai bu hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field site se kok sabla ni no omo political climate hangke tamo aw bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Tripura thakai CPM khayo ni a politics yo all politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sen political right no te sen soba khaito nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba sinai wan ko ba da sinai taini ni sanskrit ba da sinai just ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamu sung abu ban ang siman tom khai tini nang kharsa hasten mantri noi tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla ban ma sina hina impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 point nai betu no joton nai ara close 1 2 3 4 5 ni kama to no ST khorsa borong no bengai maya no ST khorosana nung lama kidati him tokhon bono mokali khaimenya nung tini ST khorosana amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau honi bunung sai bengai manya pun bubuk chau honi bunung sai bengai manya tai kebama tongo nun khlaimen khala kya keno bine against direction complaint case khlaimanu tam bo kharsa hasten mutrin tongoi jeng 12-13 lakh ko borok sanai bo sabo je sungno bangla scriber mas sine ni sanai thajin nung saw ko ma social media ro borok ko ma salai to hai to a social media o salai tamung nai je kunung khakeno social media phai joton salai hing oba himang nai oba himang la oba haisma khainai joton la salai ken sabla khainai sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act no ko sentini 2013 no ko sin borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family ho judino 100 kani jaga to khakai a jaga o nung sarabar kani bisik tongi mangla ake lo selamu tongka abno sung coba khana ang to kabama ko bosaka 2500 sung memory na submit khamin yaglo hang strike tongka abun yaglo sung tini abo success nu phunu normal phunung man overall newspaper to
newspaper dong aro kabama khati to so joint action committee ngai the land reform act aro khaipur pusu joti publication ka bahake publication ka news so ang apro hunai chengma khane ken mas man ground phai ke khane kilbe samo nga samno chengma khane sab ka khane samno ka ma khane ni sa similarly tabo o borone roman script ho hai sung japro 2002-3-4 naikal kok pin hune newspaper sung puila pro ka weekly hati basa kaisa kati klai sung pa 3000 sung naikal kok pin paper no balku humorous organization sung tiklai ang niji thane babu tau sini bang kundri borok tong ta dilip song tong sungo ba heke dai hebor song sini dr mohan sung tong abuna sung thang kaisa nogo babu a heke no rango thuthum khong ni khai apru hunu suno tamo mukhra bura no kok phurung tai mukhra bura bua ka thangno o kong sung tai ring siu haida hani apru sal tamna bagen ni semla no roman script siu hungka ni so ngata musik poriban sa ka bangla script the ajar rogo aba hakesin boro khasia khai bangla script ni chiru khaka even je bol sinero bo bangla script no sina surung ka even sini XM dr abdul the burma bo haino 1980 dang na bono bangla script by suya kui award prize of woman ka tai plus bo borok ni tamo chairman tong purbo bangla script by no master ni bon CBC budong mo sine suru khai kya anga tabu nang sabno du sunai ni boro se kemung tong ka do tabu ni generation ka juda agi bom TSF TUJS मुझे सारे सारे चलन ने सिर्फ हो गई तेने रोमन स्क्रिप्ट में संग टाइप दिखाई दी संग तेने क्या में एजेंट से या बेंगुल स्क्रिप्ट में एजेंट से बया संग तो मुझे संग ताम नाय जिन को बरनो रोमन स्क्रिप्ट सीखे जाता है प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे क्वालिफाई तो नहीं रो कि बा जे बांग्ला मीडियम कोई तो खनो रोमन स्क्रिप्ट बेन के बरते कहां के परिबो मानु ए आवा हाय खाय तिनि चिन को बरनो तेम सागा कुजगति साना हंका काय जों रोमन स्क्रिप्ट ने मास यु ताम बागि हंका काय ओ बरन ति साना हंका फुल पृथ्वीबो फुल वालो ताबो तामो ने ब्रिटिश फाना फाइक्या यूरोपियन काटने फाना फाइक्या ने लैटिन अमेरिका ने हते फाना फाइक्या जे बरो ओ बरनो संना थागा काय जगत बरो रोमन स्क्रिप्ट बोलते बरो माने तो alphabet tam abo saina man tong kai o borono boro automatically boro serni manu kiba boro saino manu poribo manu nga tini bangla ni judun sikya kai puila a bangla sabama wan je box khane wan sana bangla man nga afruse nang tini puila togro suna ka bangla smas nai bangla serng man porosa ko boro serng nai Engkai bangla sereng pakai ke boko boro sereng na musuh bini ki jora to bini একটা time period tong na engkai interest ma tong na engkai tini nini ane kogna sana ni script sudah thangte ni tini manik saha khandi tini jekono government no jatong jekono boro khandi boro sabo ane kogna kam ka sine aba ane boro se di sana na bin thane kono right kre बस सरकार ने चीफ मिनिस्टर तिनी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर पान तंथो बिनि थाने कुनो राइट करे जे अब आके सुने आबन बागन ताबना खाके जों बिनि अगेंस्ट मालिक साहाने अगेंस्ट जों एस्ट एट्रोसिटी केस जों खालायनो मानोता हायबानो आनस्टेन बिसिङो डायलॉग बिसिङो डिबेट नि बिसिङो जुदिनो ब अबनो
withdraw khai out borong je demand khai mani abon jeng mar nai hne bo judi no sawi ingya ka ka kai otipra hawo tini ko borok roman script sinani saba kaswiman aban tini challenge khara kem kaswiman la tini bangla ko borok jogote jefru official declare jago ko borok bai bengali official language nei ajara কোন স্ক্রিপ্ট নকো সাজা তো কোন স্ক্রিপ্ট নকো সাজা করে নকা বব্বা জাগনা তুমি তিন স্ক্রিপ্ট বাইনো স্ক্রিপ্ট নমাগনা হনি সাকা nga chung tini saka je wan ju kok sana no tini kok boro just ka ma sa se na romdi edisi sarkar je wan ji chai khai to na ro tini kok boro ma sanai kok boro roman script no ma se hin la tam no boro tini accept khai no boro accept khai me nga tini sing every man lewa tin traditional dress ma kanai hini ka kok boro dress ma kanai ka bor kana kano kainya ngobor khai tongmano seketang ba khai tongmano abon bagina antini sanamu songo cinti prasarangno paguno wan subsidi nang social media o simi ahake silai je hlai tong kasen du suni tong basa tongnai tini ko anthin del mo kok sai tong ka ulta pulta hune mo kulai mo tongnai kentu tini sanamu songo tini jeng ahe borok je tiba sang je dokon ni samu khai tong borok keri hingga kai tinu je borok kulnai jaja gengnai hnai abrok tini or ko bor saibo kathang tong nagla haino komor thangku যেমন টাউন এর ko borok sayawui wani kok sana শুরু হইকে এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়ামানটা একটু আনো উনি সাসে বেগে হনানি आ borong tin be kamai thangmake abul bagino tini sana musu sin borong no tini obo khorsa political leader bini samung simia tini khorsa activist ka bini samung simia tini khorsa writer ka bini samung simia tini ko borong movement for ko borong bini samung simia ko borong sahitya sabha bini samung simia Tesan sini samuyago joto individual every individual tiprasa dokar ong samu momo tino oba hake bo tini sui tini ko sungno oba hake rajo chief minister ni kwa kana sung geru khaina nang tini bosabo bar tera lokho tiprasa no unko nijin ko borong romance ke sine bo bata khaina kenu sung khai menya taun bangen kai chin bor thansa kari joto jaga no politics thung huni so kento asol ni political right to nung thungna sengya ku political right chini ani kongna tamo be sina ba ani right that is my political right abun bagino khu wana ma sisa je chin bor ko bor roman script ba hamje ga ne bagne script ba ni sai tong na ro tini nor sau ao chini to parok sung kong na ken no tini bon ka sa no nang nai to bon ka sa no nang practice khai to bon sa no sai to bon ko sa no nang ko sai to bon sima no nang si to na ka nang ti prasa nang pa hai ke nang tini ni odhikar nang manai ni odhikar manya agabu munuka goria khuru goria ter khai hune se tini daga sautri wo ha tini warji MLA no tini khamplaya yakung bera woi ha age khai tuilui yakung su bor thang soikya chini ti prasaro kintung bunia ku sunaja kento abono no omosi chini kalcha aha age dino chunugui phai wajini yakung su se brahmani tamo yakung su se yakung tuinumu bor thang soikya buni molla buni sitra abun hanga kai sing nang nai chini sobiwo chini ngo thuya chung abo dal bunai bo ba hai ching ti prasa ka hanu dharma phu tamo dharma chini ti prasa dharma tamo
जों हिन्दु बया ख्रिस्टान बया जों तामो सिनि हापुं हाथाय तिमा तिसाना जों खुलुम फाइनाल बरंबाय दं फाइनाल तिमाबा दं फाइनाल जों वाथब खाय के मताय खाय गलिया खाय मालिमारा खुनि जों इंको गोबां मानसि इंको दं दं जों आबनखा जों रेसपेक्ट खायलिया अथच बुनि काजानो जों रमनानि सुरुखा आबन बागन तिनि आबाहाय खायमा बागन तिनि आनो कक बरक आं तिनि सेनजाबि दं आबन बागन आं तिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मास यानो बांला स्क्रिप्ट बाय मास यानो सितो अबन तिनि को जहते बुबागरा गबनानो सामिट खायके मेमोरियन रोमान स्क्रिप्ट बागन आपु अनरबा हाइकोर्ट समतो केस खायके केस खायबा परे आंगासन एडवोकेट ने आं एडीसी पार्टी इंखा एडीसी ने आं एपीआर इंखा वान जा खबर खरसा को बरक 12-13 रको को बरक साराय ताफन स्क्रिप्ट ठिकरि बाकेनि न कमन न प्रोटेक्शन खाइना रनाय आबनि यागलो हंगाका हियरिंग मां तिनि गवर्नर सरि हाइनिया गवर्नर फाइमेया गवर्नर रिप्लाई निमे हमा दुई बसर लाइ थाका आबनि यागलो काइसा एक्टिंग ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस तंफुर हंगाकेनो साका आरे इमीडिएट अबनो जों सल्मा खाइने ताउन बाके तिनि अबा हाके स्क्रिप्ट करि गनो उलखाय त्रिपुरा गवर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गवर्नमेंट उलखाय सेंट्रल गवर्नमेंट सामन खाइका सेंट्रल गवर्नमेंट साका इट इज नथिंग टू डू विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज द स्टेट चार्टर स्टेट से डिसीजन मानना अबनो जोंनिया हनि साजा आबो पर हंकानो ऑनरेबल को एक्टिंग चीफ जस्टिस ताउन बागे जिनि केस सुनते कंटिन्यू खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायगा कार संका अम ताउन बागे उधर देने रीजन ना अब कोर्ट से केस करना कोर्ट नीचा अब तक कुनो रीजन नंगे जों डिस्प्यूट खायगा अब न तैनो जों ताइसा आफ्रोम सावजे नर खायना नर खायति न हेते न लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो अब न तै ओंखाय तब जों कोर्ट माध्यमिक थाना दालम माध्यमिक थाना किंतु तिनि तिब्रासा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला रफान सुइतो जों बयकट खायना आबन यागलो हंगाखाय जों प्रेसार खायना तिनि बरो सभा खायसे तिनि तालिंगना हाय जारखाना हाय सचकर हाय के क्षेत्र स्तर के खायनाय मान हंगाखाय तिनि जों तिनि पक बरनो स्क्रिप्ट बागे जों सिरि खके जों तिनि मान्या तान बागे जों खाय जत जागनो फेलियर कायसाना कारण जों थानसानि बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताई दरसा फाइ सापायनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दरसा फाइ सापायनाय देवनागरी से कहा इनको बर थान सोके जतन सेल्फ सेंटर जों चिन्ति प्रसा निजी जे हामजामन सिमि जों सानामु जों दिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजाना बन सार नंबर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जागाव सैनाय सीबीएसई बोर्ड न पे सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय बदिनी निजिन बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बो रोमान स्क्रिप्ट सिबले बकि बांग्लादेश के बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय सायमाना नांनाय तिन ताकसा सानमसु थाइसेमनो उदयपुर कोर्ट ने सकाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानून नाय तखा डिसेम्बर बिसं बो रिटायर बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 कानि तो बिनि नक थाय दालां दं आरो नक तांजा आबनो से तिनि खरसा थुरसा केस खाय बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि रो जागा पाय माफु हने कायसा 67 दलिल फुनु न दलिल फुनु बर केस हारि थाका
केस हारिमान परे के बराव ताबो एपिल थां nga abon sate sate execution thang jaw ka execution tamka tabo commission chongre jaka commission no inquiry khaika ko khaika tabo hungka ka execution jeng sela bong no ar no no khlai no sbaya koi or thusar no jaga de sela nga tabo 67 no jaga payu nang tabo laga nini prosa khaimanya ko তাই জায়গা দখল খাই মাইনা কো তাও 2019 से आबा हाके फाइ बर क्लेम खाइ बर नाइन फाइके तिनी बर मिया नर फाइके गां साका ठीक आसा आं थाना फाइनो आं मा तिनी बिकास थाङो जों फाइ ऑब्जर्व खाइनो तां nga जों थाङो एपिल कोर्ट को थाङो जों रेकर्ड नायखे एग्जीक्यूशन नि जागा जों थाङ रेकर्ड नायखे nga जों नु पाइखे जतो ताबो आइन मते के 69 निजे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसापन जेकुन बर एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा काका आ जागानो संथाय रेस्टोरेशन थाइमेनिया आ जागानो संग याफान मारना आबा हाय आइन केतु 69 नि परे आबोनि ताबुनि परे हंकाय नंताय without permission without kuno 187 ni je section mutabik ni land kuno no transfer movement nga tini o borro sirisi tinsim tongo phaine ro bu pha phale kon thaga hme se dol khunugui bor jaka mansi de hme bor tini education muto nga na kya bo ukil loki बर जलकिल हार खामनो ठीक देखा के खाया जों फालतु भातिनि तिनि परि नायले बागेला नों 67 नो दलिल फुनुगो नों तालागा म्यूटेशन खाइमिया पोजीशन म नायमेनिया नों बागेके बिन बुफा थैथागा दुहागा सद बुफा फाल कलां थागा नों ताव केस खाइमोन बसा आमोस बरसे केस हारि जा नों जोंआरो नुबु दं ए अबा केस गोबां दंना आंसिन ताको बुरो सानो मुसो अब केस दं का न केस चैलेंज मा खाइना ता 16 तारिख नेक्स्ट डे जों केस तिनिन सिमके चिनियाबो हेनोवर का बंग जागि नुके वानजि दंमोन बो नो अब्जर्व सदे सेबे याफा ने ता अब हा सिचुएशन चलि तो ने ताउनि नि कग्नो सुदु से बुनि द फासे नने जबरदस्त इनफोर्स खाइसे बनो ना कुन आइन करे ani decision ani singna nangna ani choice ani singna nangna bini kuno right kri sono begun script by mas kine hene impose khainen ba abun bagai ka tini sanamu subu ni kogna tamna bagai bongna kogwa script ni dagi to ekta na ka nung bini script no bai dong ni accept ma khaye second nang nung bin kogno surung thangsene nin kong ka kogi thangsene kal nin ko ulur plorung thangsene karan chaudhary ang to wan ko mai aphan chaudhary sine thaga ka se belung script by kaham ka se exact pronunciation khai experience khai manya even ang tinan mung Anthony hone sine thaga bui rasa ka rabo Anthony Bangladesh kibabe legbo nga to saimenya kibabe lekhi ta am jana dai abor aga buibasa na kya Anthony explain ke amoni Bangladesh rokno buiban ga agaban bagene kun jaga wan ani mungno bangla besine thaka bono abdul satubui angna ka angno sirna ya bakara sarkar ga bang makhai na thik abon bagene tini sanamusu tini Manipuri rok maite rok age ekdin sacha bon script kamai thang bor bahina begun script be suno suru khaike ulaka bor saiman ka bon script no bor nutuk mati khlaina hanu kubia bor script khlamoi ikhlai tabu textbook newspaper media joton bongni script un khlamoi bor tabu umi thangmai ke buso balkha bor script khlaman kentu bor joton thangsa khoroksa intellectual script funo ka obose sini joton university bongni Manipur university Manipur bor gosina baikha kedi finti prasad hangkai gosimaya khorsa tahu rumah student segosi magarai ko nin script samu ning sana takaba nokaba hani tolabai tafat ahai sing thabai abun bagino
তিনি সানামু সুবু উসুর অর্গানাইজেশন হন্তু যে পরি তংনাই রক ন হন্তু নর আজাগাও নর বাংলা বা ফানো প্রশ্ন খাইতো নর রোমান স্ক্রিপ্ট বেসে সিফুনো যদি ন মাসা ফেলতা রেখাঙ্গা কাকা আবুন বচিন কাইসা চ্যালেঞ্জ দङ না কাকা তাবু বড় ইন্টারপ্রেটার সমানা নাই তিনি খরচা বড় ওয়ান জপং নায়া ও বড় তিনি কুটো উইটনেস সাবমিশন থাকা কা বড় ইন্টারপ্রিটেশন খাইনানি বাইদ তা বড় जों सिना ना जों tin tan बा बाहाय खायजा सिनि बड़ सिया जों परिमान हिंगाका कायसन कारण पासंगे सार्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागै सिपुर केतु जों परिमाननि आं सिना बागै होनो जों परियाना ना खाखौ तमका सानमु जों तिनि आं परिउ माने साख्रि मानांगो परिया होनो जों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागै आं नलेज बागै आं परिउ होनो मा खायनाय ए आबागा जुदि नों सि परिखा काय आबो गुबुन नि intellectuality दंनाय गाबा हायनो नों निनि सेन्टिमेन्ट दं थाना निजिनो को रोमान स्क्रिप्ट बायसि सिने होनो जों जबा खाय दं मजा गाबो ना बांला बायसि मा सिने होनो डाइरेक्ट सोननाय जों सेन्टिमेन्ट ना रिंगिया जों थै दंना रिंगिया आन फ्यूचर बसि दि सना सनाय बर थां सयके आबुनो वासुसुका बेलाखे जलिवा साक्षात जलु आङो जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आनो 50% ताको ताइ बुकु बर ताइसे सिना ना मावनसु तान बागै हिंगाखाय जत जागोन न जोंखाय थुइतु जत जागोन न सिनि याक मटो जत जागोन न सिनि ब्रेन डिस्टार्ब तान बागै हिंगाखाय जेकुनु सादा सिनि बागै चाया खाना सिनि बखर क्लिन खायाव सुजुबे सुजामा हिं थां ओंखाय जोंनो सिलियाना जे सिनाय रावखौ तो कुन बखर मुजायो जे सिनाय रावखौ बांला स्क्रिप्ट थाने दं ओंखा बरखौ इंटेलेक्चुअल ना आबो नांगो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाहाके ना किसा नरसन सिजा नुजा तंगा कलाबो किसा फुनु आबो बागै न खूब वानाव आबो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन है यूनेस्को बरक से जे बरनो कक कमामानि इन डेंजर उमानो बर प्रोटेक्शन खाई वर्ल्ड वाइड जतने एग्री खाइजा गाव बाहाके प्रोटेक्शन खाइना आ को से सालायतो आ जागाव सिन नका बार लकते लक को बर सिरिसित सिमास जतन से रिसर्च लैंग्वेज इन द वर्ल्ड होनो हिनजामन आ बरक से तिनिखाय नों रोमान स्क्रिप्ट सिदिनि साजा तंनाय हा दताबो नों साला बांला स्क्रिप्ट आं सैसिनाय सिरिकदि बागे सिने रबि नों बांला माना के साला सिरिकदि बागे बांला बा सिने चेरेकदि बागे नों को बांला बा सिने हा चिरदि बागे सिने सिनेमा apa rono wansung na gusto ngatam na mga sin borok keben ang guno dusuya ko an borona sang dus maru bule jatan thangsa tinna no khana wanji ro busuk bon ka sana bor raspa go tini Rabindra songit dangkum Rabindra rasamu akab joto jaga bor jekun program khobor ekdom thik thangsa Sengkacin kebawa dar bidar tamu sudu sengkai abno usta dekat seng abno protection khai abno mani ui kahan kai seng respect unar nya wa sumbol tang sudu kaisana haina sanani kaisana kulani kaisana ukluga haina sanani kaisana bahake sa kana thang ka bono sokla nangmani abro mas se mali election phaikan ka bo Bono kibi bosa thang mana, angsa thana, amti ra humana sing serlai tu. Buli to pakai tamu, je sinai dub nai, borong no se maro honai kok satini, borong no se maro honai decision making natini, borong no se maro honai a meeting attend khanya bagi, huni ro borong selection, sinoro hangka ka, jotona self independent angseng nai, angseng nai. Othersa only thang kabo, arasun
কোনো কন্ট্রিবিউশন थाइमानि आरो जों थैयो आबोन बागै आं सानो मोसौ सिनि बर'नि फारि खासेबायसि फारि पाल खायै अ हुमान स्क्रिप्ट खाया हंगागाय जों चीफ मिनिस्टार नि नंग नंग खोया सेक्रेटारिएट लाबानि जोंनो जेसेबां कासुनाथ जोंथाय अंखया हने फारि जत सारा तिफ्राव तलायसिनि बुकुमबार जत फारि जों नाखाय जत जानो ब्लक लाले नागेना बसुनो रुमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा ह खरसा बरो दिसनाव सारतिफ्रा सानि कालचार पावन दस खायले हैने अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खायले खाया अब बनो लाइट बरो खाय फारि जों ताइ जत तिफ्रा सार थाजा उलायै और रुमान स्क्रिप्ट बागै फारि कायसे जागाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाय ता मुमु फको को बरो बागै सब खाय और बरो साइट सब को बरो बागै सब खाय तो ताव ता कैसे तमो दा बिखर राय प्रेसिडेंट अब ग्रुप तैसे जतन न तुबे कैसे ग्रुप खाबेन बरो बाहाय न कमप्लेन दुबे प्रोटेस्ट खाय आन खुलाय तो तिनी यूनिवर्सिटी रो बाहाय न आबनो तै बर साइट जे स्टूडेंट द आबनो साइट बर प्रोटेस्ट खाय तो हंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाय तो मसाय कासे जतन तिप्रा सांगै नाका बुमुलिया तिनी मुमु फको बरो हंगा बाहाय प्रॉब्लम को तिनी तेसा हंगा बाहाय प्रॉब्लम को तिनी कब्र साइट सब खाय के बाहाय प्रॉब्लम को हने गाखाय आबु मुबु नासना लिया फाय जत कासे जत तिप्रासा अंखुरि सब खालिसिने नागेना सिनि ककबरनो साबसुनो बांला स्क्रिप्टनि मासिने सुनो इनफोर्स खायमा आमति थांसा दंमनो आबाखौ सबदा खायमा गाखाय जों थांसा फादिताय केवनो नासिलायै कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तग फिनाल हुनयावै फादि सब खलालाय आबसे थांसा न आं साजानो सब समय नों बीजेपी दा खायतं सीपीएम दा खायतं कांग्रेस दा खायतं तिफ्रा मत दा खायतं पार्टी जेकोनो पार्टी किंतु तिफ्रा सान कायसा थांसा निजिने कालचार फायफ्रु निजिने कमनि फायफ्रु निजिने मुकुमन फायफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता होनासिले पाल खासे फायसन सब खायनो न उनि दामा फादि आबो हंगाय साखलाय बायदि बुफुर सिम खायने जों सीआईबी फ्रु मीडिया थुप्रो साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा तिरपा 3 दिन जों पारलास खायनो कबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर दुई डायलॉग आसुबो आ परस जों दिल्ली थां केन जों अप्रूव होननाय का दिल्ली थांगा रातुबो रह जाखाना बुबुको आ बागल सिरि बाय तिनी सानो मुसु रातुबो रह जागिया साइ रहरु नर थांनै पाल खाय जतन रेडी प्लान खाय फाइनल एग्रीमेंट से खाय जों सलाम जा प्लान थांजा सब केदुंबा चिन बस केदुंबला अबस जों मा थाया अबस जों एग्रीमेंट सैमा खाय हायपनो आको होनो जों आप्रुव सारा लिया आव बगे जों सिरि चुप खामा तंखा आ बगे बुइसाव तां चुप बुंताव सिसि जों बुजिया बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाय स्लामै आको एग्रीमेंट अफ साइन फाइनल रेडी जों जत सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बरो सारे केबेनले आ बगे जों तिना एग्रीमेंट साइन खायमिया nga tini जों जतन सक्सेस जों थांबाखौ जेकुनु जागाव चिन बरकसे ऑफिस करने कासो आ कासमा बगसे चिंतिनि सक्सेस इंडिया आबन बाय तिनि सानमु सुबो हारि आबन जनरेशन ले आमतिले लंगिया ना खाखाव कारण जों जतन थानसा जतन जतन अबो नायु तिनि क बरनो ति आगे सीपीएम सरकार तंफ्रुबो कमिशन सलामजाका पवित्र सरकार कमिशन सलामजाका तिनि पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खायमन जागलो बो पाइसा साटिस्फाइड क्वेश्चन
salam jaka a questioner university level college level school level intellectual level bureaucrat level ko da question bag jaka bagjaman yagulo bor tamonai bor joton soy unko rekha কিন্তু যত না জানে বিসিমো 75% ন তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট ন ঠিক ক বরম বাং কাহামনি সাজাকা নকেন আমনা আবা আকেন তিনি পবিত্র সরকারি পুর সাবমিশন খাইকা তিনি মানুষ সরকার আপনা ইমপ্লিমেন্ট খাইদান নি সামসরণ কমিশন নিব সালাম জাকা সামসরণ ত্রিপুরা তংফুর আবো রিপোর্ট খাইজাকা nge tamu kumu mukuda kumukondo Chaudhary bini ha kumudranjan Chaudhary bini furubongko jaka joto roman stri mangseble tinnar khaimanum sakai chinthani a question to bor sab answer ka anono pura phal sun tikla riman nga tini sin ko bor sinena gawama tong bor busuk jorte ko borono hambagai boy simang sito tini university bangken ko bor soikya tini jesin intellectual ko bor sinai right of joton governor ne thangin salai puru governor near about 35 boy 35 boy niji rangni paina rakha muno for unka ko bor abni ya lo log no vice chancellor ringi ko bor khulu dini makluka ake tini ko bor university mle ab governor se kala sasan salo I phayo bahino NITU bahino na tini ke khaljak mu ko bor na abun bagino tini sin boro sinana je jaga sin boro cabin eu to ka sin joto jaga successful cabin ma ta ka ani khoroksa self center service bagise tini sin ti prasar kulugu mato mo bin self interest bagi bin pocket na bagi bothane pano derri de bar lokho kok saito diman khaito karo খরচা পন আমরা থান কেমন না এই আবা হাসি সুসরিত শুধু আবশ্যক না তাতে সানামসু এসটিজিটি টিআরবিটি গভর্নমেন্ট অফিশিয়াল ক্লার্ক হুন্দি অফিশিয়াল উনকা অফিসার হুন্দি চাকরি তং তংমনি দিনকা বড় ফাইকা আনথানি এসটিজিটি র টিআরবিটি র 230 বুঝিনি এসটি রং সিট ও এসটি রং সিট you are on something 60 84 nge S0 keto abno advertise mote khaye boro exam rubai kya abatam khaka khorsa dipok dar ko dipai hone cash khaire likha cash khaire mone jaglo kamun kha cash khakya cash khamen jaglo ngaka put sai rekha amna abo 50% existing to reservation ab bahken ma as per reservation system ka khla de no put rai likha अगर 230 बीस को 17टा समान से ना मैं 230 टा मनबा 230 टा अब तिप्रा सारनि एस तिरनि आमो कोटा सीट खाली तंग बैकलॉग आमनो फुल खाइने बागैसि मैं दिन आमनो ति तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खाइ आमनो तो बरो फाइट खेले आमले मैं जे एसटीजीटी सिनियर टीआरबीटी पर के सिनियर बरता को तो केस को देखाया तब लगा तो 40 खाइने नंबर छ प्रमोशन क्षेत्र में हमति न ST সিট আছে না সুপার সিট খাই ইউআর যত নাই তো মাইথা তো বাবা জায়গা চিন্তা আমি থই তো কিন্তু চিন বড় বুঝিয়া না চিন খাই তাই বসে খাই না বা না চিন যত দল সাপুর মান আছে চিন ফারমানে বলে রে কে বো ফারি চিন ন লগিল না কে বো ফাইনে করে এই অবা হাই সিচুয়েশন আমন বাগিনো তিপ্রাসারা নিজে কালচার হুকুম হুকুমদার নিজে কংনার না নে और मन स्क्रिप्ट बाले सन खाइ सिन कौनो आब्रिब खाइना गाखा सन बेलाके इम्पोर्टेन्ट नागि त कारण ताबो बो पर बांग्लामेन को नै त कामिन बरो जे चुजा गे रहन सिन बांग्लामेन मा रहबले nga tai to joton je chuna ke joton english medium mo nga बांग्लामेन mo ko ule nen bu zo sa kai mana ba ha aung bang na chuklu tong le ulo english পরিবাইছে নং তিনি সিন বড় আমেরিকা বনুক নাই অস্ট্রেলিয়া বনুক নাই
Germany bo nungnai, Canada bo nungnai, Delhi, Mumbai, যখন নুঙ্গাই নং বাংলাদেশি পড়ে ইংলিশ পড়ে থাকে রোমান স্ক্রিপ্ট পড়ে থাকে নং তিনি थांना खुनु जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा वान सुते खलायो वान सुबि जों सामु बता थांना आम सुजु कोंगा परिणाम के लिए बेहतर व्यवस्था और नीतिगत पहल की दरकार होती है। 2014 के बाद से ही देश में वैज्ञानिक परिदृश्य में अविश्वसनीय बदलाव के प्रेरणा स्रोत हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। करतल ध्वनि के साथ आइए एक बार फिर अभिनंदन करें अति सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी हम सहृदय स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य और हमारे साथ विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी प्रख्यात शख्सियतों विशिष्ट अतिथिगण का भी हार्दिक अभिनंदन। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तरुण मन में प्रज्वलित नवोदित विचार अनुसंधान की धरा में फल फूल रहे हैं। छात्र इनोवेटर से एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। नन्ही आंखों के सपने वास्तविकता के धरातल पर साकार हो रहे हैं। देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति खुलकर सांस ले रही है। आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर चलते हुए नवीन प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की ओर अग्रसर है भारत देश। इसलिए नेशनल टेक्नोलॉजी वीक का विषय है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से सबसे पहले विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया पौधा भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। And now I request Dr. Jitendra Singh to kindly present the welcome address. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका आभार। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। प्रधानमंत्री जी, गत 9 वर्षों में आपके नेतृत्व में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण और नवाचार के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने एक लंबी छलांग लगाई है और इस लंबी छलांग का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ देर के लिए हम ये अंदाज़ा कर सकें कि सन 2014 से पहले का क्या आलम था और आज 2023 में क्या दृश्य है। सन 2014 से पहले इस देश में मात्र 350-400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आपने कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, और आज इसकी संख्या 97,000 से अधिक हो गई। 115 यूनिकॉर्न और हिंदुस्तान इकोसिस्टम स्टार्टअप में दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़ा हुआ। सन 2014 से पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर हम 81वें पैदान पर खड़े थे। आज 41 का जंप लगा करके हम 40वें पैदान पर हैं। सन 2014 से पहले हिंदुस्तान की बायो इकॉनमी $10 बिलियन थी, आज 8 गुना बढ़ करके $80 बिलियन हो गई है। सन 2014 से पहले पूरे देश में कुल मिलाकर के बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र और मात्र 50-55 थी, आज बढ़कर के 6,000 हो गई। सन 2014 से पहले किसी ने सुना ना था अरोमा मिशन का अर्थ क्या है, पर्पल रेवोल्यूशन का अर्थ क्या है। आज लेवेंडर कल्टीवेशन के साथ जुड़े हुए किसानी के माध्यम से एग्रीटेक स्टार्टअप्स का एक नया वर्ग उभर करके आया है। सन 2014 से पहले हिंदुस्तान में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट ना था, आज उसी हिंदुस्तान को दुनिया का वैक्सीन हब कहा जाता है। सन 2014 से पहले हमारे यहाँ कभी कभी अखबार में खबर आती कि श्रीहरिकोटा नाम के एक स्थान से एक रॉकेट लॉन्च हुआ है। आपने उस श्रीहरिकोटा के दरवाजे खोल दिए। आज उसी श्रीहरिकोटा में
लगभग 130 प्राइवेट स्टार्टअप्स इसरो के साथ काम कर रहे हैं और हमारा गगनयान भारतीय मूल के एक व्यक्ति को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी में है। सन 2014 से पहले किसी को मालूम ना था कि पृथ्वी विज्ञान का अर्थ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का मैंडेट क्या है। आपने डीप सी मिशन की घोषणा की। आज हिंदुस्तान के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के साथ बसे हुए सागर के भीतर की अपार संपत्ति खोजने के लिए हमारा समुद्र यान निकल चुका है। एक के बाद एक अनेकों ऐसी क्रांतिकारी उपलब्धियां और यह सिलसिला निरंतर जारी है। अभी इसी वर्ष में सन 2023 में आपने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। लाइगो, जिसका लॉन्च आज आप कर रहे हैं, इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 और अभी हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन, जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के चंद एक गिने चुने देशों के एलीट क्लब में ला करके खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जहां आपने हिंदुस्तान को विज्ञान की ताकत से दुनिया में लोहा मनवाया, वहां साथ ही साथ आम नागरिक के जीवन में सरलता लाने के लिए सेक्टोरल डेवलपमेंट में विकास के कार्यों में साइंस टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाने का रास्ता भी हमें दिखाया। और आज जब हम ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहे हैं और ये अटल जी की स्मृति के साथ जुड़ा है, तो ये आप ही की कल्पना थी, अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, ताकि कम अवस्था में, बचपन में, स्कूल के समय में बच्चे अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को खोज सकें, तलाश सकें, तराश सकें और आने वाले जीवन में उसे देश की सेवा के लिए समर्पित कर सके। आज का बच्चा कल सन 2047 के हिंदुस्तान का युवा होगा और 2047 का युवा शताब्दी भारत का निर्माता होगा। और इसलिए आज जब ये 25वां नेशनल टेक्नोलॉजी डे, पहली बार भारत सरकार के 12 मंत्रालयों और विभागों द्वारा सामूहिक तौर पर होल ऑफ गवर्नमेंट मंत्र का पालन करते हुए मनाया जा रहा है, तो ये मात्र एक सांकेतिक अवसर न रह करके एक उत्सव का रूप धारण कर चुका है, एक फेस्टिवल का रूप धारण कर चुका है। इट इज़ अ सेलिब्रेशन of India's scientific supremacy. It is a celebration of India's growth story under Prime Minister Modi. It is a celebration of Prime Minister Modi's new India. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh. देवी और सज्जनों, रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को हासिल करने की ओर तीव्र गति से अग्रसर है हमारा देश। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को भी संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियों के साथ स्वागत करें केंद्रीय रक्षा मंत्री जी का। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, भारत सरकार के सभी अधिकारी वर्ग, वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट्स, अन्य सम्मानित अतिथिगण, देवियों व सज्जनों, आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब के बीच होना हम सब के लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की और इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे विशेष खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। वैश्विक परिदृश्य में भारत एक नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन सबके पीछे अगर कोई प्रेरक शक्ति है तो वह है आपके आह्वान की शक्ति, आपके संकल्प की शक्ति और आपके समर्पण की शक्ति। साथियों, आज हम सब यहाँ देश के साइंटिफिक अचीवमेंट्स का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सब ने ग्लोबल स्टेज पर लोगों द्वारा यह कहते हुए सुना है कि 21वीं सदी यह भारत की सदी है। वर्तमान में दुनिया को भारत में आशा की एक नई किरण नजर आ रही है
और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दुनिया को यह दिखाया भी है कि भारत रूपी सूर्य का उदय हो चुका है और हमारा सूर्य अब अपने पूरे तेज के साथ चमकने को तैयार है। मैं यहाँ सूर्य का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं में देखें तो हम पाएंगे कि सूर्य के साथ हमारे बड़े अद्भुत संबंध रहे हैं। हम सभी बजरंगबली के उपासक हैं। एक प्रसंग तो आप सबने सुना ही होगा कि बजरंगबली ने किस प्रकार फल समझकर सूर्य को ही निगल लिया था। बाद में देवताओं के मनाने के बाद उन्होंने सूर्य को मुक्त कर दिया था। इस कार्य से बजरंगबली ने अपनी अपार शक्ति का परिचय तो दिया ही, साथ ही उन्होंने हमें यह भी संदेश दिया कि अगर हम अपनी ताकत को बढ़ाएं तो सूरज भी हमारी मुट्ठी में आ सकता है। 1998 में दुनिया ने भी देखा कि श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन शक्ति के तहत कैसे भारत ने अपनी वह ताकत दिखाई और पोखरण और रेगिस्तान में एक नहीं 5-5 सूरज बो दिए। प्रधानमंत्री जी, पोखरण के परमाणु परीक्षण पर मुझे केवल जीआई साहब की लिखी पंक्तियां याद आती हैं जब उन्होंने यह लिखा था कि अब न छोड़ेंगे कमी, अब न छोड़ेंगे कमी, कोई भी अपनी शान में 5 सूरज बो दिए हैं हमने रेगिस्तान में। रेत के सागर में बसे हुए पोखरण की हम यदि ज्योग्राफी और क्लाइमेट देखें तो यह भले ही एक रेगिस्तान की तरह दिखता है, लेकिन रेगिस्तान की इस रेत में भारत के परमाणु शक्ति की हरी भरी फसलें आज भी लहलहा रही हैं। साथियों, हमारा देश शांति प्रिय संस्कृति और सभ्यता का देश रहा है। इस देश ने न केवल स्वयं के लिए शांति की कामना की, बल्कि समस्त विश्व को शांति का संदेश दिया। दुनिया को बुद्ध और गांधी जैसे शांति पुरुष ही इस देश की देन है। यह देश वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म को मानने वाला देश है। हमने किसी भी देश पर उसको गुलाम बनाने के उद्देश्य से कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन इतिहास में हमें कई बार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। और आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही ज्ञान पर आधारित रहे इस समाज ने दुनिया को शांत आचार, विचार और व्यवहार का पाठ पढ़ाया है। हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज ने देश ही नहीं विदेश के शिक्षार्थियों को भी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी, जिसमें नालंदा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। पर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हश्र हुआ। एक बख्तियार खिलजी अपने दलबल के साथ आता है और इस महान विश्वविद्यालय का ध्वंस करके चला जाता है। पुस्तकों के रूप में ज्ञान की ऐसी अगाध संपदा कि बताते हैं महीनों तक यहाँ किताबें जलती रहीं। इसी तरह सोमनाथ मंदिर का उदाहरण लिया जा सकता है। यह मंदिर देश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का एक विशाल केंद्र है, लेकिन हमारी शांति प्रियता का फायदा उठाकर इसे भी 1-2 बार नहीं अनेक बार तोड़ा गया और इस मंदिर के माध्यम से अनेकों भारतीयों का विश्वास और उनकी आस्था को यह तोड़ा गया। ऐसे में इस देश ने पुनः अपने उन आराध्यों की ओर देखा जिनके एक हाथ में ज्ञान के प्रसार के लिए शास्त्र होता है तो दूसरे हाथ में अधर्म का नाश करने के लिए शस्त्र भी होता है। ऐसे में हमारे परमाणु परीक्षणों ने दुनिया को यह मैसेज कन्वे किया कि हम भले ही शांतिपूर्ण राष्ट्र हैं, लेकिन हम नालंदा दोबारा जलते हुए नहीं देखेंगे और हम दोबारा अपने सोमनाथ के सांस्कृतिक वैभव को किसी गजनवी द्वारा कुचले जाते नहीं देखेंगे। हमने इतिहास में सीख ली है और यह सुनिश्चित किया है कि हम ऐसा इतिहास कभी रिपीट नहीं होने देंगे। हम अपने आत्मसम्मान के खिलाफ उठे हुए हर कदम का पुरजोर जवाब देंगे। साथियों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमें हमारी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट को एक्नॉलेज करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की यह प्रेरणा देता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा भी गया है कि बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात शक्ति का स्रोत विज्ञान ही है। जब हम देश में साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देते हैं तो इससे राष्ट्र तो प्रगति करता ही है, साथ ही यह हमारी युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। साथियों, भारत अभी डेमोक्रेटिक डिविडेंड के फेज से गुजर रहा है। हमारे पास एक सामर्थ्यवान ह्यूमन रिसोर्स है। हमारे इसी ह्यूमन रिसोर्स ने हमें इस स्थिति में पहुंचाया है कि आज हम दुनिया के सामने गर्व से सिर उठाकर खड़े हो सकते हैं, और यही ह्यूमन रिसोर्स हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक भी पहुंचाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। बस आवश्यकता है तो इस ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करने की। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने इस विजन में पूरी तरह से कामयाब होंगे और एक नए भारत के निर्माण की ओर कदम आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं एक बार पुनः हमें अपना मार्गदर्शन देने हेतु यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और यही अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय रक्षा मंत्री जी। Ladies and gentlemen, Government of India is working on the strategy to transform India through science and technology. विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश नए आयाम हासिल करते हुए नए कीर्तिमान रच रहा है। कैसे देश में ये परिदृश्य बदल रहा है, आइए इसी पर देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। आधुनिक भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में से एक है। पिछले 9 सालों में सरकार ने देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में पेश करने के लिए साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसी का नतीजा है कि आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर लंबी छलांग लगाकर 81 से 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 2014 के मुकाबले आज स्टार्टअप्स की संख्या 300 गुना बढ़कर 97,000 हो गई है। 115 यूनिकॉर्न के साथ आज भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों के जरिए देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। अटल इनोवेशन मिशन में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और इंस्पायर स्कॉलरशिप के जरिए स्कूली बच्चों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया गया। हमारा प्रयास है कि 6ठी क्लास से ही विद्यार्थी अटल टिंकरिंग लैब में जाएं और फिर कॉलेज से निकलते ही उसको इंक्यूबेशन का, स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार मिले। आज भारत सरकार के 11 मंत्रालयों और विभाग मिलकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। यहाँ आप मिलेंगे मशहूर टेक्नोप्रेन्योर्स और उनके हैरत अंगेज नवाचारों से। साक्षी बनेंगे देश की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों के और करीब से समझेंगे भारत के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को। भारत में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्यमियों को उनके विचारों को बाजार के लिए तैयार उत्पादों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार ये माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आजादी के अमृत काल में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब नए नए कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता आने वाले अगले 25 सालों में देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के तौर पर स्थापित करना है। सही नीतियों और कार्यक्रमों के साथ भारत विश्व में अग्रणी प्रौद्योगिकी केंद्र बनने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। देवी और सज्जनों, 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत द्वारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाना शुरू किया गया। इन 25 वर्षों के सफर को चिन्हित करते हुए आज एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि पहले अपने कर कमलों द्वारा डाक टिकट का विमोचन एल्बम द्वारा करें। भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा 25वें नेशनल टेक्नोलॉजी डे के उपलक्ष्य में विशेष रूप से इस डाक टिकट को तैयार किया गया है। And now may I please request Honorable Prime Minister to kindly release the commemorative coin. Thank you, Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, Government of India is continuously upgrading and creating science and technology infrastructure in the country. विज्ञान के क्षेत्र में सुविधाओं और ढांचागत विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई पहल का उद्घाटन व शिलान्यास किया जा रहा है। The facilities which are being dedicated to the nation by Honorable Prime Minister are Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center, Visakhapatnam, Women and Children Cancer Hospital, Navi Mumbai, National Hadron Beam Therapy Facility, Navi Mumbai, Radiological Research Unit, Navi Mumbai, Fission Moly 99 Production Facility, Mumbai, and Rare Earth Permanent Magnet Plant, Visakhapatnam. और जिन फैसिलिटीज का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है वे हैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जटनी, ओडिशा, Platinum Jubilee Block of Tata Memorial Hospital, Mumbai, and Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, India. May I please humbly request Honorable Prime Minister to kindly dedicate to the nation and lay the foundation stone for these facilities by pressing the button of remote.
एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन फैसिलिटीज को राष्ट्र को समर्पित किया गया है या जिनका शिलान्यास किया गया है, ये सभी फैसिलिटीज, इनकी विशेषता क्या है और किन मायनों में ये खास है, महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। एम्स के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों में वृद्धि और टीकाकरण अभियानों सहित कई महत्वपूर्ण पहलों ने इस प्रगति में योगदान दिया है। देश में कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स और 20 टर्सरी केयर कैंसर सेंटर्स भी स्वीकृत किए गए। ऐसे में टाटा मेमोरियल सेंटर, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है, देश भर में स्थित अपने विभिन्न केंद्रों के माध्यम से कैंसर के आधुनिकतम इलाज को सुलभ बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ओडिशा के खुर्दा जिले के जटनी में 200 बेड वाला होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। 650 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली इस परियोजना में 400 करोड़ रुपए का योगदान परमाणु ऊर्जा विभाग तथा 250 करोड़ रुपए का योगदान टाटा ट्रस्ट कर रहा है। ओडिशा सरकार इस परियोजना में कई तरह से योगदान दे रही है, जिसमें परियोजना के लिए 42 एकड़ भूमि शामिल है। मुंबई, महाराष्ट्र में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का प्लैटिनम जुबली ब्लॉक स्थापित किया जा रहा है। 938 करोड़ रुपए की लागत वाली इस सुविधा में 880 करोड़ रुपए बिल्डिंग के निर्माण में तथा 58 करोड़ रुपए सामान्य उपकरणों के लिए लगाए जाएंगे। सीएसआर के तहत अतिरिक्त 390 करोड़ रुपए सुपर स्पेशलिटी उपकरणों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। 557 करोड़ रुपए की लागत से बना 100 बेड का यह अस्पताल कैंसर के निदान और उपचार के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। टीएमसी के नवी मुंबई स्थित एक्ट्रैक परिसर में 38 करोड़ रुपए की लागत से बना 270 बेड का कैंसर अस्पताल देश का पहला एकीकृत केंद्र है, जो महिलाओं और बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए समर्पित है। 3 गैंट्रियों को एक साथ संचालित करने वाली देश की पहली नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी एक्ट्रैक नवी मुंबई में स्थित है। 468 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये एक अत्याधुनिक प्रोटॉन थेरेपी इकाई है। भारत की सबसे बड़ी नाभिकीय चिकित्सा सुविधा रेडियोलॉजिकल रिसर्च यूनिट 93 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये यूनिट विभिन्न प्रकार के कैंसरों के उपचार के लिए सेवाएं प्रदान करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग प्राचीन भारतीय उक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संकल्प धारण किए प्रगति पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ठोस कदम उठाते हुए अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं। बीते 9 वर्षों में हमारी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। नए मेडिकल कॉलेजों और एम्स शाखाओं की स्थापना, अस्पतालों को अपग्रेड करके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना तथा आधुनिकतम इलाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता इन सफलताओं के आधार स्तंभ हैं। इस उद्देश्य में अपना योगदान देते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय चिकित्सा और कैंसर उपचार के क्षेत्रों में अग्रणी कार्य करते हुए उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। 300 क्यूरी के मेडिकल ग्रेड हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी मोलिब्डेनम 99 के उत्पादन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में ब्रिट द्वारा फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी की स्थापना
इस दिशा में की गई एक प्रभावशाली शुरुआत है जो भारत को ऐसी क्षमता रखने वाले विशिष्ट देशों में से एक बनाती है। मोलिब्डेनम 99 डायग्नोस्टिक रेडियो आइसोटोप टेक्नीशियम 99M का जनक होता है, जिसका प्रयोग 85% से भी अधिक डायग्नोस्टिक स्कैनों के लिए किया जाता है और इसीलिए इसे न्यूक्लियर मेडिसिन का वर्क हॉर्स कहा जाता है। विभिन्न रोग प्रभावित हिस्सों पर विशिष्ट अपटेक वाले बायोमोलिक्यूल्स का उपयोग करते हुए टेक्नीशियम 99M का प्रयोग टेक्नीशियम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के फॉर्मुलेशन के लिए किया जाता है। इन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का उपयोग करते हुए स्पेक्ट स्कैन से किडनी, लीवर, हृदय और मस्तिष्क जैसे विभिन्न अंगों में रोगों के शीघ्र निदान में मदद मिलती है। 295 करोड़ रुपए की लागत से बनी फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी घरेलू मांग को पूरा करने के साथ ही अन्य जरूरतमंद देशों की रेडियो आइसोटोप आवश्यकताओं को भी पूरा करने की क्षमता रखता है। Our goal is to make healthcare accessible and affordable not only for our citizens but for the whole world. Reducing disparity in India's priority, serving the unserved is an article of faith for us. मेडिकल रेडियो आइसोटोप के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर करने की दिशा में फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी की स्थापना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को उच्च तकनीक क्षेत्र में दुनिया के विकसित देशों के समकक्ष लाने और संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ निश्चय निहित है। आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस संदर्भ में रेयर अर्थ तत्व विशेष महत्व रखते हैं। रेयर अर्थ तत्व स्वच्छ ऊर्जा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर, बैटरियों सहित अनेक अति विशिष्ट क्षेत्रों में अपरिहार्य रूप से प्रयुक्त होने के कारण अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। इनके महत्वपूर्ण उपयोगों में से एक समैरियम कोबाल्ट स्थायी चुंबकों का उत्पादन है। समैरियम कोबाल्ट स्थायी चुंबकों में असाधारण गुण होते हैं जो इन्हें रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे सामरिक क्षेत्रों में उपयोग के अनुकूल बनाते हैं। स्थायी चुंबकों का आयात प्रायः प्रतिबंधों और आपूर्ति अवरोधों से प्रभावित रहता है, क्योंकि इन्हें बनाने की तकनीक विश्व के कुछ विशेष देशों के पास ही उपलब्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में भारत सरकार के समन्वित प्रयासों और लक्ष्योन्मुख समग्र सरकार के दृष्टिकोण ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिणाम स्वरूप रेयर अर्थ चुंबकों के क्षेत्र में भारत अब पूरी तरह से स्वदेशी सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके औद्योगिक पैमाने पर समैरियम कोबाल्ट स्थायी चुंबकों के उत्पादन की जटिल तकनीक में महारत हासिल कर चुका है। विकसित की गई इस प्रौद्योगिकी को आधार बनाकर विशाखापट्टनम के अच्युतापुरम स्थित BARC कैंपस में परमाणु ऊर्जा विभाग की एक औद्योगिक इकाई IREL इंडिया लिमिटेड द्वारा एक आधुनिक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट की स्थापना की जा रही है, जहां प्रतिवर्ष 3000 किलोग्राम समैरियम कोबाल्ट मैग्नेट का उत्पादन किया जा सकेगा। 197 करोड़ रुपए की लागत से बना ये प्लांट सामरिक क्षेत्रों के लिए समैरियम कोबाल्ट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट की स्थापना उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में देश पिछले 8-9 वर्षों में अनुसंधान और विकास में अभूतपूर्व वृद्धि का साक्षी रहा है। इस वृद्धि ने कई वैज्ञानिक उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें लाइगो इंडिया की परियोजना उल्लेखनीय है। लाइगो इंडिया अमेरिका और भारत के बीच एक सहयोगी परियोजना है, जिसका उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना है।
लाइगो इंडिया का निर्माण और स्थापना उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है। The greatest scientist of the last century, Albert Einstein, had given the theory about gravitational waves. It is a matter of immense pride for all of us that 37 Indian scientists from 9 Indian institutions participated in the International Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory LIGO collaboration and proved this theory correct 3 years ago. लाइगो इंडिया परमाणु ऊर्जा विभाग DAE और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के परस्पर सहयोग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली एक मेगा साइंस परियोजना है। लाइगो इंडिया कैलटेक और MIT अमेरिका की लाइगो लेबोरेटरी के सहयोग से बनाई जा रही है और ये इन 2 वेधशालाओं के साथ ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टरों के एक वैश्विक नेटवर्क के रूप में काम करेगी। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में लाइगो इंडिया के लिए 428 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और परियोजना के लिए राज्य सरकार से पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लाइगो इंडिया भारत में स्थापित होने वाली पहली मेगा साइंस परियोजना होगी। ये बड़ी संख्या में भारतीय शोधकर्ताओं और छात्रों को इस उभरते हुए क्षेत्र में योगदान देने का अवसर प्रदान करेगी। ये परियोजना एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक क्षेत्र में हिंगोली को वैश्विक मानचित्र पर पहचान देने के साथ साथ विश्व भर के शोधकर्ताओं को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। लाइगो इंडिया से अर्जित क्लीन रूम निर्माण की विशेषज्ञता, सेमीकंडक्टरों और बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों में दक्षता प्राप्त करने और प्रगत अनुसंधान परियोजनाओं के लिए आवश्यक बड़े अल्ट्रा हाई वैक्यूम सिस्टमों के निर्माण में योगदान देकर राष्ट्र की महत्वपूर्ण सेवा करेगी। ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने के प्रति समर्पित अत्याधुनिक शोध की दिशा में लाइगो इंडिया की स्थापना देश के लिए एक गौरवशाली एवं उन्नतिशील कदम है। तो देश में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र को रफ्तार देंगी ये सभी फैसिलिटीज। तो रुख हवाओं का मोड़ दे, लोगों के भरम को तोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, मंजिल की ओर अब कदम बढ़ा, हासिल कर मुकाम नया पन्ना इतिहास में जोड़ दे, तो रुख हवाओं का मोड़ दे। देश के छात्रों और युवाओं की कल्पना शक्ति की परवाज को ठोस आधार प्रदान करने वाले, प्रत्येक देशवासी के हृदय में राष्ट्र समर्पण के संकल्प की लौ को प्रज्वलित करने वाले, हर जन की आंखों में कुछ कर सकने का विश्वास जागृत करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्रतापूर्ण आग्रह करती हूं कि अपने सुवचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। करता ध्वनि से स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, साइंस और टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के सभी सम्मानित सदस्य और मेरे युवा साथियों, आज 11 मई का ये दिन भारत के इतिहास के सबसे गौरवमयी दिनों में से एक है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने पोखरण में वो उपलब्धि हासिल की थी जिसने मां भारती की हर संतान का सिर
गर्व से ऊंचा कर दिया था। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी। पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया, बल्कि भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी। अटल जी के शब्दों में ही कहूं तो अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के समक्ष कभी झुके नहीं हैं। मैं सभी देशवासियों को आज के दिन की नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर कई फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। मुंबई में नेशनल हेड्रोन बीम थेरेपी फैसिलिटी पर रेडियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर हो, विशाखापट्टनम से के बार्क कैंपस में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट हो, मुंबई की फ्यूजन मौली 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, या विभिन्न शहरों के कैंसर हॉस्पिटल हो, ये सभी संस्थान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से मानवता की और भारत की प्रगति को गति देंगे। आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी लाइगो इंडिया का शिलान्यास भी हुआ है। लाइगो 21वीं सदी के सबसे बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव में से एक है। दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही इस तरह की ऑब्जर्वेटरी आज है। भारत के स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट के लिए ये ऑब्जर्वेटरी आधुनिक रिसर्च के नए अवसर लेकर आ रही है। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी देश के वैज्ञानिक समुदाय को, सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, इस समय हम आजादी के अमृतकाल के शुरुआती महीनों में हैं। हमारे सामने 2047 के स्पष्ट लक्ष्य हैं। हमें देश को विकसित बनाना है, हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं, बल्कि देश की प्रगति को गति देने का एक टूल मानता है। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस बार की थीम स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट ये रखा गया है। आजादी के इस अमृतकाल में भारत का भविष्य, हमारी आज की युवा पीढ़ी,
हमारे आज के स्टूडेंट्स ही तय करेंगे। आज की इस युवा पीढ़ी के पास नए सपने हैं, नए संकल्प है, उनकी ऊर्जा, उनका जोश, उनका उत्साह, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, हमारे देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम कहा करते थे, नॉलेज विथ एक्शन कन्वर्ट्स एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी। आज जब भारत एक नॉलेज सोसाइटी के तौर पर सशक्त हो रहा है, तो उतनी ही तेजी से एक्शन भी ले रहा है। भारत के यंग माइंड्स को इनोवेशन की तरफ प्रेरित करने के लिए बीते 9 वर्षों में देश में एक मजबूत बुनियाद बन चुकी है। कुछ साल पहले शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब्स ATL आज देश की इनोवेशन नर्सरी बन रही है। आज देश के 35 राज्यों में 700 जिलों में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंक्यूबेशन का ये मिशन केवल बड़े शहरों तक सीमित है। करीब 60% अटल टिंकरिंग लैब्स सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में खुली है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में बच्चों के लिए पढ़ाई के मायने बदल रहे हैं, वो इनोवेशन की तरह प्रेरित हो रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज अटल टिंकरिंग लैब में 75 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 12 लाख से ज्यादा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर जी जान से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में लाखों जूनियर साइंटिस्ट स्कूलों से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं। इनकी हैंड होल्डिंग करना, हर तरह से मदद करना, इनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में सहायता देना, ये हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व है। आज सैकड़ों की संख्या में स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनका इंक्यूबेशन अटल इनोवेशन सेंटर्स में हुआ है। अटल टिंकरिंग लैब की ही तरह अटल इनोवेशन सेंटर्स AICs भी न्यू इंडिया के लेबोरेटरी बनकर उभर रहे हैं। आप देखिएगा, भारत के ये टिंकरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स हम देखते थे, ये टिंकरप्रेन्योर्स हैं। कल ये लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं। साथियों, महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, परमाणु परम महत्व अंतः अस्य वशीकारः। यानी जब हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ वश में आ जाता है। 2014 के बाद से भारत ने जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देना शुरू किया है, वो बड़े बदलावों का कारण बना है। हमने जो स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया, जो डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसने भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की सफलता को नई ऊंचाई दी है। पहले जो साइंस केवल किताबों तक सीमित थी, वो अब
एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स में बदल रही है। भारत में 10 साल पहले एक वर्ष में 4000 के आसपास पेटेंट ग्रांट होते थे। आज इनकी संख्या सालाना 30,000 से भी ज्यादा हो गई है। भारत में 10 साल पहले सालाना 10,000 डिजाइन रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना 15,000 से ज्यादा डिजाइन रजिस्टर हो रहे हैं। भारत में 10 साल पहले सालाना 70,000 से भी कम ट्रेडमार्क रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो रहे हैं। साथियों, आज भारत हर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो एक टेक लीडर कंट्री के लिए जरूरी होता है। आप में से कई साथी जानते हैं 2014 में हमारे देश में करीब 150 के आसपास ही इंक्यूबेशन सेंटर्स थे। आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या 650 भी पार कर चुकी है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पे था, वहां से ऊपर उठ करके 40वें स्थान पर पहुंच चुका है। आज देश के युवा, हमारे स्टूडेंट्स अपने डिजिटल वेंचर्स खड़े कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहां स्टार्टअप की संख्या भी कुछ 100 के आसपास थी। आज हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप की संख्या भी करीब करीब 1 लाख पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है, भारत का टैलेंट दिखाता है। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, पॉलिसी मेकर्स के लिए, हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए, देश भर में फैली हजारों रिसर्च लैब्स के लिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल टू स्टार्टअप्स की यात्रा हमारे स्टूडेंट्स करेंगे, लेकिन आपको उन्हें निरंतर गाइड करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। और इसमें मेरा आप सभी को पूरा सपोर्ट रहेगा। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी के सामाजिक संदर्भ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और असंतुलन को मिटाने का भी माध्यम बनती है। एक समय था जब टेक्नोलॉजी सामान्य भारतीय की पहुंच से बाहर थी। आपको भी याद होगा, कभी जेब में क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर चलना स्टेटस सिंबल हुआ करता था, लेकिन भारत का यूपीआई आज अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से न्यू नॉर्मल बन गया है। आज रेहड़ी पटरी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट डाटा इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। इसे लोगों के सामने
जानकारियां, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है। जेम ट्रिनिटी हो, जेम पोर्टल हो, कोविन पोर्टल हो या किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट इनैम, हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग एजेंट ऑफ इंक्लूजन के रूप में किया है। साथियों, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से सही समय पर उपयोग समाज को नई शक्ति देता है। आज भारत में जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए कोई न कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तैयार हो रहे हैं। जन्म के समय ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट की सुविधा है। बच्चा जब स्कूल की शुरुआत करता है तो उसके पास ई पाठशाला और दीक्षा जैसे फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, और आगे बढ़ने पर वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। जब वो अपनी नौकरी शुरू करता है तो उसके पास यूनिवर्सल एक्सेस नंबर की सुविधा है, ताकि जॉब बदलने पर भी उसे कोई भी दिक्कत ना आए। किसी बीमारी की स्थिति में वो तुरंत आज ई संजीवनी की मदद से अपनी उपचार की व्यवस्था कर सकता है। बुजुर्गों के लिए बायोमेट्रिक एनेबल्ड डिजिटल सर्विस जीवन प्रमाण की सुविधा है। आप सोचिए, पहले बुजुर्गों को पेंशन जैसे कामों के लिए अपने जिंदा होने का सबूत देना होता था। चाहे तबीयत खराब हो या चलना मुश्किल हो, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए खुद जाना होता था। अब ये सारी परेशानियां टेक्नोलॉजी की मदद से समाप्त हो रही है। डे टू डे लाइफ में हर कदम पर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देश के नागरिकों की मदद कर रहे हैं। अगर उसे जल्दी पासपोर्ट बनवाना है तो एम पासपोर्ट सेवा है। अगर उसे एयरपोर्ट पर हैसल फ्री एक्सपीरियंस सुनिश्चित करना है तो डीजी यात्रा ऐप है। अगर उसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है तो डीजी लॉकर है। इन सारे प्रयासों से सोशल जस्टिस सुनिश्चित करने और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में मदद मिली है। साथियों, आज हर दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। भारत के युवा ही इस स्पीड को मैच करने में, इस स्पीड को क्रॉस करने में देश का नेतृत्व करेंगे। आज एआई टूल्स नए गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। हेल्थ सेक्टर में आज हम कितनी असीम संभावनाओं को देख रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी हर रोज नए इनोवेशंस हो रहे हैं। ऐसे ही थेरेपेटिक्स सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी में लीड लेनी होगी। आज भारत अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बना रहा है। इससे भी हमारे युवा स्टार्टअप्स को बहुत से मौके मिल रहे हैं। डिफेंस में इनोवेशन के लिए हमने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स भी शुरू किया है। मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स के 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के 14 इनोवेशंस को प्रोक्योर किया है। साथियों, आई क्रिएट हो या फिर डीआरडीओ, यंग साइंटिस्ट लैब जैसे इनिशिएटिव आज इन प्रयासों को नई दिशा दे रहे हैं। स्पेस सेक्टर में भी न्यू रिफॉर्म्स के जरिए भारत एक ग्लोबल गेम चेंजर की भूमिका के सामने आ रहा है। अभी मैं एसएसएलवी और पीएसएलवी ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म जैसी टेक्नोलॉजी देख रहा था। हमें स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप्स के लिए, यूज के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने होंगे। हमें कोडिंग से लेकर गेमिंग और प्रोग्रामिंग तक हर क्षेत्र में लीड लेनी होगी। इस समय भारत सेमीकंडक्टर जैसे नए एवेन्यूज में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पॉलिसी लेवल पर हम पीएलआई स्कीम जैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं। इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि इस फील्ड में टैलेंटेड यूथ्स को सपोर्ट करें। साथियों, आज इनोवेशन से लेकर सुरक्षा तक के लिए हैकेथॉन्स की एक बड़ी भूमिका है।
सरकार ने लगातार प्रमोट कर रही है। हमें हैकेथॉन कल्चर को आगे बढ़ाना होगा, स्टार्टअप्स को नए चैलेंजेस के लिए तैयार करना होगा। इन प्रतिभाओं की हैंड होल्डिंग हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष न करना पड़े, हमें इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। खासकर अटल टिंकरिंग लैब से जो युवा निकल रहे हैं, उन्हें इन्वॉल्व रखने के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। क्या हम इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में देश की 100 लैब्स को चिन्हित कर सकते हैं जिन्हें यूथ ड्रिवन बनाया जाए? क्लीन एनर्जी और नेचुरल फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में जहां देश का खास फोकस है, हमें रिसर्च और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना होगा। इसके लिए भी युवाओं को मिशन मोड में जोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे भरोसा है नेशनल टेक्नोलॉजी वीक इन संभावनाओं को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को एक बार फिर इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। टिंकरप्रेन्योर्स से भारत के एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने, विज्ञान से आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने, तकनीक के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने जैसे प्रेरणादायक शब्द Organization Commission Atugi Mano Atuna Sekang Jumbo Triprani Tabuk Joto de Tongairno Hosangui Power Nibaga cover by Yawui Tiprasar no permanent settlement solution Klangan Bagui Jung Matai Tongai Jung Witongo Tabuk de Tin Borok Sulu Power Omahai Bodol Tongo Atai February March सांबादिक सम्मेलनो टिप्रालेन नि प्रश्न खाइजाकाय बसाई खालका ताव मंत्री मंखा उसुखांकाय राजा टिप्रालेन नो हाइजाक खायोनि साव राजा तो हाइके हाइजाक खाया नोंसे आबनो याखारि रुबले नों सांबादिक सम्मेलनो काय सिंलांमानि खारि थांका ताई इंकाय बिप्लब देव चीफ मिनिस्टर टंगफ्रुबो बर टिप्रालेन सालिया जों उनाव दिनखाने आरोबाव मन्त्रि खरंनै आबनो हायनो खिरिं खालाय दङ एबं उनखौबो कायसा महाराष्ट्रनिया उनको फायनाय प्रभारी फायनाय बबो तिप्रा मे एनसी बाबू तिप्रालेन नेहुगानि साका Saitung ga obahai yo umani jeng dini mokolo hasimsa buli chonbai chatin ti prasarang no saitung obo ungla to phanse arono gedali chonglayu obahai umani no ang jeng sanamusungo ti prasarok kia sodak sijalai hidi sijai tung tanjangi tung a tanjani kuno meaning krei tabu Bisibangka High Power Modality Committee Tamka Mania Aroni Muntri Korunoi Tonka Tabo Saimia Terrorist Manka Tam Klaleno Aboni Bagino Kaisatun Unko One Fugi Matongo Overbo Kabang Juchaglat Nui Sijagi Tongmana Hainugu Unbreaking Tau One Suka Sung Tau Kaisa Yapri Sanai Tipra Sarong Bagui Statehood Demand Committee of Tripura Nui Jung Sengnani Tantongo Jung Oroni Tangangkai Jung Kutumui Chini Party ni member एवं port total declaration ना नहीं फिटनेस है कमजोरी है लेकिन कुछ नहीं होने वाला मैं ठीक हूँ
मैं एकदम ठीक हूँ। सर अभी मणिपुर में जो सिचुएशन चल रहा है उसका क्या मिशन? मैंने बात किया है और मणिपुर में जितने भी हमारे इंडिजिनस लोग हैं, लड़के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा है कि उनका अगर उनको वापस आना है तो मैं उनका पूरा प्लेन का टिकट का पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। ख़राब समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। मेरा ख़राब समय में भी मेरे लोगों ने मेरे संग खड़ा रहा। तो आज अगर उनके लिए वहाँ में मणिपुर में जो सिचुएशन है अच्छा नहीं है तो मैं उनके लिए आने के लिए पूरा प्लेन का बंदोबस्त करने की कोशिश करूँगा और करूँगा है 100%। और रहा बात वायलेंस का, वायलेंस से कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। आई अपील टू ऑल माई मैते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कुकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो इसके पीछे है कोई और है। आप लोग सामने एक संग मिलकर ठंडा शांति रखकर एक दूसरे से बात कीजिए। वायलेंस से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा और ये नुकसान का फायदा कोई और उठाएगा। मणिपुर का सीएम के साथ बातचीत हुआ क्या? मैं मणिपुर के सीएम को जानता नहीं हूँ, मैं उनसे क्यों बात करूँगा, लेकिन मणिपुर में बहुत लीडर्स हैं जो नॉन पॉलिटिकल भी है, मैते कम्युनिटी से भी है और कुकी कम्युनिटी से भी है। मैंने उन सब से बात किया है और अगर वो चाहते कि मैं इसमें कुछ करूँ तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू इंटरवीन। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि शांति रहना चाहिए। किसी का घर, किसी का चर्च, किसी का मंदिर को नहीं जलाना चाहिए। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा और सोसाइटी डिवाइड होगी। अभी त्रिपुरा का बाहर का सिचुएशन क्या है? आप देखिए 8 तारीख को क्या होने वाला है। 8 तारीख को आप देखिए क्या होगा, उसके बाद आप बात कीजिए। मैंने आज ही होम मिनिस्टर से सवेरे बात किया है और 10 तारीख को मैं होम मिनिस्टर से मिल रहा हूँ और 8 तारीख को इंटरलोकेटर त्रिपुरा आ रहा है। और जो लोगों ने मेरे ऊपर मजाक उड़ाया था कि नहीं होगा, कहाँ गया, 28 दिन हो गया, 1 महीना, मैं 1 महीना चुप रहा हूँ, लेकिन जब मैं जवाब देता हूँ ना तो मैं ठीक तरीके से जवाब देता हूँ। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 8 तारीख को इंटरलोकेटर्स आ रहे हैं। मैं आज समाजपति से मिल रहा हूँ, अपने पार्टी के लीडर से मिल रहा हूँ। त्रिपुरा का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए मैं फाइट करते रहूँगा। ये फाइट मेरा नहीं है, मेरा कम्युनिटी का है और मैं अपना कम्युनिटी के लिए हमेशा फाइट करूँगा। ये नहीं होगा, कहाँ गया, 28 दिन हो गया, 1 महीना, मैं 1 महीना चुप रहा हूँ, लेकिन जब मैं जवाब देता हूँ ना तो मैं ठीक तरीके से जवाब देता हूँ। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 8 तारीख को इंटरलोकेटर्स आ रहे हैं। मैं आज समाजपति से मिल रहा हूँ, अपने पार्टी के लीडर से मिल रहा हूँ। त्रिपुरा का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए मैं फाइट करते रहूँगा। ये फाइट मेरा नहीं है, मेरा कम्युनिटी का है और मैं अपना कम्युनिटी के लिए हमेशा फाइट करूँगा। আজকে ছোট্ট একটা প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। যদিও এই তৎক্ষণাৎ সময়ের মধ্যে অনেক মিডিয়া হাউসকে খবর দিতে আমরা পারিনি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস, এই রাজ্যের অনেকেই জানেন যে মণিপুরে জাতি দাঙ্গায় অনেক এলাকা এখন দাঙ্গার কবলে। আমাদের চিন্তা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের more than 100 students, they are studying in different schools and colleges in Manipur এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় মণিপুরে অবস্থানরত। খবর পাওয়া যাচ্ছে যে সেখানে সেফটি এন্ড সিকিউরিটির অভাব বোধ করছে আমাদের ছেলেমেয়েরা এবং in some hostels, in some colleges, ফুড সাপ্লাই না হওয়ার কারণে খাদ্যাভাব এটাও দেখা দিয়েছে। and in the last 1 week মণিপুরে যে সময়টাতে এই কমিউনাল ভায়োলেন্সটা হয় সেই দিন থেকে আজ অবধি এখন যে সময়টাতে আমি কথা বলছি, there is no response and reaction, any step taken by state government যে সেখানে stranded students তাদেরকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার কোনো ব্যবস্থা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ আমার নজরে আসে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আজকে সকালবেলা এসে I reached the office of leader of opposition in the assembly house
at around 11 AM এবং একটা চিঠি ইস্যু করেছি। চিঠিতে আমি খুব পরিষ্কারভাবে, আপনারা যেহেতু এখানে আছেন, আমি পড়ছি যে চিঠির বয়ান। I would like to draw your urgent attention to the stranded students in Manipur due to a state of disturbance or communal violence in that area. There are more than 100 students from Tripura presently studying in Manipur. They are facing tremendous security and safety problems at present in their school and colleges. They need to be brought back to Tripura at the earliest till situation becomes normal. এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছে। আপনাদের মাধ্যমে আমি রাজ্যের মানুষের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এখানে বিরোধী দলের অফিস গ্রহণ করার পর এ যাবৎ 37টা চিঠি বিরোধী দলের অফিস থেকে আমি বিরোধী দলনেতা হিসেবে জনস্বার্থে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনেকগুলো চিঠি লিখেছি। এবং এটাও আমি বলতে ভুলব না যে এই সমস্ত চিঠির অ্যাকনোলেজমেন্ট, একটা চিঠিরও অ্যাকনোলেজমেন্ট আমি পেলাম। আমার মনে আছে আমি যখন এমএলএ ছিলাম 2003-2008, সেই সময়কার যে সরকারকে আমি বিরোধী দলনেতা ছিলাম না, আমি বিরোধী একজন বিধায়ক ছিলাম। Any letter we write to the ministers, any ministers, even the secretaries, তৎসময়ে কমিশনার পোস্ট আউট ছিল, যারা আজকে সেক্রেটারি, আই এম শিওর at that time it was known as commissioner. কমিশনারদের যখন আমরা চিঠি লিখি, at least they acknowledge our letter, যাহা আপনার চিঠিটা পেয়েছি এবং চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তর বা সরকার কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে, পদক্ষেপ নিয়েছে, এই বিষয়ে ওনারা চিঠি দিয়ে আমাদেরকে জানাবেন। গতকাল এখানে এমএলএ হোস্টেলের গৃহপূজন পূজা উপলক্ষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি কাছে পেয়ে ওনাকে বলেছি এই কথা যে কোনো দপ্তরের থেকে, কোনো মন্ত্রী মহোদয়গণ থেকে বা ইভেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে আমাদের লেটারগুলো কি হয়েছে এই খবর কিন্তু আমাদেরকে জানানো হয়নি। আমি বলছি, আমি চিঠি দিয়েছি, যেমন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি 17/4/2023 একটা চিঠি ইস্যু করেছি বেঙ্গলি এন্ড রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরকে যেন প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। সিবিএসই বোর্ডে এই চিঠি আমাদের হায়ার এডুকেশন বা এডুকেশন দপ্তর থেকে যাবে, এটা বিধানসভাতে আমরা আলোচনা করেছি। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপটা গ্রহণ করেছে এই বিষয়ে জানতে চেয়েছে। Till date, I have not been acknowledged or I have not been replied যে এই লেটারের কি হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে খোয়াই হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ভিজিট করার পর, যেহেতু স্বাস্থ্য দপ্তর উনারই হাতে, উনি নিজেও একজন ডক্টর, ওনাকে আমি চিঠি দিয়েছি যে ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনটা সেখানে অচলাবস্থার মধ্যে আছে, সারা জেলার রোগীরা সেই সুবিধা পাচ্ছেন এবং অত্যন্ত কম্প্যাক্ট এরিয়াতে এই হাসপাতাল চলছে। এটাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় কিনা, সেখানে পরিষেবা, ডাক্তারদের সংখ্যা আরো বেশি করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আমি চিঠি দিয়েছি। অফিসে বসে আমি এটা চিঠি লিখিনি। ফার্স্ট I visited, interacted with the patients and doctors, আলোচনার পর যেটা আমার করণীয় অফিসে এসে আমি ওনাকে চিঠি দিয়েছি। এটার কোনো উত্তর পেলাম না। আরডি পঞ্চায়েত, যেহেতু আরডি এবং পঞ্চায়েত ওনার কাছে আছে, এডিসি ভিলেজ কমিটি এবং পঞ্চায়েত, ইট ইজ অলসো
with the Honorable Chief Minister of the state, অনেকগুলো জায়গায় এডিসি ভিলেজ কমিটি গুলোকে পার্শ্ববর্তী এডিসির অন্তর্ভুক্ত বা এডিসির এরিয়ার ভেতরে যে সমস্ত রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লক আছে সেইখানে ওই সমস্ত এডিসি ভিলেজকে রিঅর্গানাইজেশন করে তাদের আওতায় আনার জন্য এই সরকারের আগের যে সরকারটা ছিল 5 বছরে বিজেপি এবং আইপিএফটি সরকার, তদানীন্তন যিনি রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী ছিলেন যিশু দেববর্মা, উনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে রাজ্যে 33টি এডিসি ভিলেজ যাদের এডিসির ভেতরে যে রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লকগুলো আছে তার ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তো এটা কার্যকর হচ্ছে। এটাকে রিমাইন্ডার দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছি, এটারও কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না। এবং আজকে একটা চিঠি, এই চিঠি ইস্যু করার পর সাংবাদিক সম্মেলন করার আগে আমি ভাবলাম যে ওনার সাথে একটু কথা বলবো। উনি একটা মিটিংয়ে ব্যস্ত আছেন, আমার নাম্বার ওনার পিএস দিয়েছেন। আমি ওনাকে জানাতে চেয়েছিলাম যে চিঠির আর্জেন্সি কি, কারণ আই ডোন্ট নো এই চিঠি যাওয়ার পর যদি এই চিঠিটা আজকে না দেখে উনি 3 দিন বাদে 4 দিন বাদে দেখে, দিস ইজ আ ম্যাটার অফ আর্জেন্সি। ছেলেমেয়েরা, গার্জিয়ানরা এখন অনেকেই চিন্তায় আছেন, বিশেষভাবে ইন্ডিগোর যে বিমান পরিষেবা ইম্ফল এবং আগরতলার মধ্যে চালু আছে, দেখা গেছে যে আগামী 10 তারিখ পর্যন্ত কোনো টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে ইন্ডিগোর কর্তৃপক্ষের সাথেও রাজ্য সরকার এই বিষয়ে কথা বলতে হবে যে বাড়তি ইন্ডিগো সার্ভিসের চালু করার জন্য মণিপুরের যে সমস্ত এলাকায় ইম্ফল থেকে দূরে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আছে, এসকর্টিং করে তাদের ইম্ফল এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এনে রাজ্যে আনার জন্য এই বিষয়ে মণিপুর সরকারের সাথে কথা বলতে হবে। তো এই বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম, তবে আমি আশা করছি উনি মিটিং শেষে নিশ্চয়ই কথা বলবেন, আমি ব্রিফ করব। বাট রাজ্যের মানুষকে এটাই আমি বলতে চেষ্টা করছি যে দি গভর্নমেন্ট ইজ নট প্লেইং এ অ্যাক্টিভ রোল। জনস্বার্থে আরো চিঠি লিখেছি যে খোয়াই জেলার অন্তর্গত অনেকগুলো জায়গায় শিলাবৃষ্টিতে যখন মানুষের ঘর বাড়ি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই সমস্ত এলাকায় আপনারা যারা সংবাদ মাধ্যমের লোক আপনারা দেখেছেন, আমি নিজে কোনো জায়গায় পায়ে হেঁটে আমাদের পার্টির যারা কর্মীরা বা ভিলেজ কমিটির যারা চেয়ারম্যান মনোনীত মেম্বারসদের নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে পরিদর্শন করার পর আমি চিঠিগুলো দিয়েছিলাম। আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব যে সরকার যে কোনো মাননীয় বিধায়কগণ যখন চিঠি লিখবেন বা নিজের এলাকার উন্নয়নের জন্য জনস্বার্থের কথাগুলো যখন উল্লেখ করে চিঠি দেবেন, অন্তত এই বিষয়ে সরকারকে মাননীয় বিধায়কদের জানানো উচিত, এটাই পরম। So I don't know why this culture has been abolished, এবং আমি অনুরোধ করব এবং সরকারের কাছে এটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই বিষয়ে সরকার অতি সত্বর পুনরায় যে সুস্থ কালচার, বিরোধীদেরও একটা ভূমিকা আছে, ওনারাই বলছেন যে আপনারা দেখান যে বের উন্নয়নের কোথায় দরকার, আমরা দেখাতে চেষ্টা করছি। We'll cooperate with the government wherever they want us to show where development is required. এবং যখন মানুষের দরকার হবে, প্রয়োজন হবে, মানুষের স্বার্থের কথা যখন বঞ্চিত হবে, তখন সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা মানুষের জন্য লড়াই করব। ধন্যবাদ। Sir, in that case, what is the scenario? The government, when we ask them, they say the scenario is not that. Even I asked the question that there are 3 states that is I know who are already evacuating their students. The government said there is no official
support of any state to evacuating the students, but today we have seen some of the states already received their students. What is the scenario right now? What is the threat perception over there? How panicked are the See, students? one thing Honorable Chief Minister must understand. Sitting in Agartala or sitting somewhere in this state, we cannot feel the heat of communal violence in Manipur. We must have to understand the pain and the fear and the problem of safety and security through those people who are presently in Manipur. If there is no problem and if there is no heat of the communal violence faced by the students, why the students will call their parents? Why the parents will approach to us? Maybe no one has approached to Honorable Chief Minister directly, but it does not mean that there is no problem in Manipur. As you say, already 3 states they started evacuating their students. It is the wise step actually. Should we wait? আমরা কি অপেক্ষা করব যে something happens there, then only we start evacuating our students? Wiser step will be, before any accident takes place, before anyone dies, আমাদের কোনো স্টুডেন্ট মারা যাওয়ার আগে তাদেরকে ইভাকুয়েট করার প্রয়োজন। And that is why, to bring the attention of the government, I have called this press meet. এটা আমাদের কর্তব্য। If I was in his position, probably 2-3 days back itself, I would have taken all these steps. এটা তো আমি ব্যক্তিগতভাবে স্টেপটা নেব না। The government machinery, secretaries are there, transport department is there, government is having money for all these kinds of situation to take it. So I'm not going to spend, or Honorable Chief Minister is not going to spend money from his own pocket or his own salary. It is a matter of instruction and to make a strategy to combat this situation. So I think whatever Honorable CM is telling, I think I cannot agree personally. Before anything happens, we have seen so many churches, so many villages are under attack, under fire. In this situation, we cannot allow our students to be in Manipur. Till this situation becomes normal, they should be evacuated and they should be brought back. They should be handed over to their parents. That is why government is required. যদি আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য নিজেরাই সব কিছু করতে হয়, তা সরকার কেন দরকার? কেন মেশিনারি দরকার? তাহলে কেন্দ্রের থেকে যে টাকাগুলো আসছে স্ট্রেট ওইখান থেকে প্রতি ঘরে প্রতি অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে দিলেই পারে। কমিশনারের দরকার নেই, ডিজিপিরও দরকার নেই, মুখ্যমন্ত্রীরও দরকার নেই, বিরোধী দলনেতারও দরকার নেই। যা বাজেট হবে 26,800 কোটি টাকা ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ফ্যামিলি দিয়ে দাও সবাইকে। গভর্নমেন্ট হ্যাজ গট এ রোল টু প্লে। এই সমস্ত সিচুয়েশনে কোনো ব্যক্তি বিশেষ এটাকে সমাধান করতে পারবে। Here is the role of the government. So I appeal to the government. Government should take immediate action and should take step to bring back the students here. Thank you. One of the elected representative of TTADC has taken a step. I have seen in the social media some 50 students are being brought back. So how do you see to that? Yeah, see, this is what is a positive step. If TTADC, much smaller administration than the state, TTADC's budget is only 2% of the state budget. If TTADC can do this, why the state government is sitting quietly? It means state government is waiting some students to die there and then only they will take this step. This is wrong. Honorable CM himself is a doctor, well qualified chief minister, among the chief ministers in the whole of the country, and I am sure after this press meet, he will definitely take the needful action. Thank you. কিন্তু এই স্ট্যান্ডটা যে আছে স্ট্যান্ডটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তার চিন্তা করতে হবে। আমার ভিত ঠিক আছে কিনা আমরা সেটা ভুলে যাই। ভূতে আলোচনা খুবই কম হয়। আমরা সবসময় বলি আমার ভোট শক্তিশালী ভোট, এই দিয়ে তো শুরু হয়েছিল আমাদের
15-16 থেকে আমরা শুরু করেছি। অনেকেই জানতো না যে বুথের শক্তিশালী বুথ কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং কারা থাকবে, মেম্বার কারা কারা থাকবে এবং তাদের কি করণীয়। বিভিন্ন সময়ে আমাদের যে প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছে সেখান থেকে বিভিন্ন যে আমাদের সাবজেক্ট আছে অনেকে শুনেছেন, অনেকে তার ব্যবহারও করেছেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে যে রাস্তায় তার কি প্রয়োগ, বাস্তবে তার কি প্রয়োগ, ঘরে তার কি প্রয়োগ, তার বাড়িতে বা তার বুথে এবং সে পাড়াতে কি প্রয়োগ, সেটা সম্পর্কে কিন্তু অনেকেই ওয়াকিবহাল ছিল না। বর্তমানে আমাদের যখনই দেখা যায় তোমার বুথ আমি যাব, বুথ সশক্তিকরণের কথাবার্তা হচ্ছে, কিন্তু তাকে নিয়মিত যে ওয়ারিং করা, চর্চা করা, সেটা কিন্তু অনেকবার যখনই আমরা বিভিন্ন সময় যখন বুথ নিয়ে আমরা কথা বলি, পরবর্তী সময় দেখা যায় এমন সব আমাদের কার্যক্রম চলে আসে, সেখান থেকে আমরা প্রথমে বলা হয়েছে প্রতি সপ্তাহে আমরা বুথে বসবো, সেখানে প্রথমে বিবেকানন্দজিকে প্রণাম করব, ফুল দেব, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে ফুল দেব এবং পণ্ডিত দীনদয়ালজিকে দেবো, এরপর আলোচনা করবো অনেক রকমের যে বর্তমান যে পলিটিক্যাল সিচুয়েশন কি, আমাদের কি নির্দেশ আছে, এইসব বিষয়ে আলোচনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একদিন দুদিন হলো, এখন সবাই ভুলে যায়, সবাই যে যার কাজেও ব্যস্ত। কারণ বুথের যারা মেম্বার্স বিভিন্ন, এখানে তো পেইড এমপ্লয়ি বলে কিছু নেই, মনের তাগিদে এবং কমিউনিস্টদের অত্যাচারে যারা অত্যাচারিত তাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে কিন্তু আজকের এই পার্টিতে ওরা সবাই সামিল হয়েছে। এবং এর আগেও যেসব পার্টির যারা করেছেন বা দেখেছেন, তাদের কার্য প্রণালী দেখে তাদের বিরক্ত হয়ে কিন্তু একটা আদর্শের কথা চিন্তা করে, আদর্শের স্থান হিসাবে সেটাকে যখন ওরা বুঝতে পারলো যে এখানে গেলেই একটা মন্দিরের মতো একটা অবস্থান, যেখানে ভালো কথা শুনবো, ভালো কাজ করব, মানুষের জন্য কাজ করব, তবেই মানুষ এসেছে। কিন্তু তারপরেও কিন্তু একটা খামতি আছে। যদি খামতি না থাকতো তা কেন আবার বুথ সশক্তিকরণ আবার আমরা করব? আমাদের বুথ তো অলরেডি শক্তিশালী। তো আজকের এই সাংগঠনিক বৈঠকে আমাদের এই বুথের বিষয়ে কথাবার্তা বলতে হয়, কারণ বুথের মধ্যে আমাদের সব মোর্চারাও আছে, মূল যে আমাদের 11 জনের কমিটি আছে সেটা আছে, কিন্তু তারপরেও এখন অন্যান্য সব ঢুকে গেছে, আমাদের মোর্চা গুলো ঢুকে গেছে এখন, এবং বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কার কি কাজ। কাউকে দেওয়া হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রীজির যে প্রতি মাসে যে লাস্ট সানডেতে যে ওনার যে মন কি বাত সেই অনুষ্ঠান দেখার জন্য, কাউকে দেওয়া হয়েছে পৃষ্ঠা প্রমুখের ইনচার্জ, কাউকে দেওয়া হয়েছে ইন্টেলেকচুয়াল যারা আছে তাদের ইনচার্জ ওই বুথে। কিন্তু কতটা হয় এখনো কিন্তু আমার মনে হয়, আমি সন্দিহান, আমি জানি না। এবং এর জন্য আমাদের কি কি করণীয় তার কিন্তু পুরো একটা মডেল, কেননা এই ডিস্ট্রিক্ট থেকে শুরু, আমি যেহেতু এই ডিস্ট্রিক্টে এসেছি, কেননা ওই মন্ডলেই শুরু হোক, আর কেপুর মন্ডলেই শুরু করে একটা দেখাক না যে আমার বোধ আমরা এইভাবে চলি, একটা মডেল গুজরাটের কথা বলি, তো মডেল এটা মন্ডল হতে পারে না, করা যায়, ইচ্ছে করলেই সেটা সম্ভব। আর যখন এই মজবুত যখন হবে, তখন যত ইলেকশনই আসুক, সে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতেই হোক, মন্ডল মানে আমাদের সেই বিধায়কের এই ইলেকশনে আসুক, অ্যাসেম্বলি ইলেকশনই হোক বা এমপি ইলেকশন হোক, কোনো সমস্যা নেই, লোকাল বডির ইলেকশনই হোক, তো আমাদের আসলে ওই জায়গাটায় আমাদের যেতে হবে। এখানে অনেক বিষয়ে কথা হয়েছে, আমি আমার এতদিনের যে অভিজ্ঞতা সেই নিরিখে আমি বলবো, অনেকে আমি দেখি যে রাজনীতিতে তাহলে তো কংগ্রেস করলেই পারতো, কংগ্রেসের একটা বিরাট একটা সংখ্যক লোক এখন বিজেপিতে এসছে, তারপরেও কিন্তু দেখা যায় সেই অতীত যে কালচার, যে আমি রাজনীতি করতে আসবো সেটা অর্থ উপার্জনের একটা মাধ্যম, এই যে একটা বিষয়, সেটার থেকে কিন্তু কেউ বেরিয়ে আসতে পারছে না। দুঃখ হয় অনেক সময় যদি আমরা বলি যে এইভাবে
আমরা অর্থ উপার্জন করতে দেব না, তাহলে আমরা কি করব? পার্টি করতে এসছো, কি করতে হবে সেটা কি পার্টি বলবে? তুমি কিভাবে অর্থ উপার্জন করবে এর জন্য এসছো যে পার্টি বলে দেবে তোমাকে? কারণ ওই যে কমিউনিস্টরাও করে এসছে, কংগ্রেসও করে এসছে, আমরা দেখেছি এইভাবে। যখন যেটা হওয়ার সেটা ঠিকভাবে সরকারই দেখবে কাকে কি দিতে হবে না দিতে হবে। তোমার চিন্তা করতে হবে না। মোদিজি এখানে, আমাদের এখানে ডাবল ইঞ্জিনের যে সরকার আমরা বলি, আমরা গেলেই সব পাই। রেল লাইন থেকে শুরু করে এই যে মোদি আমাদের হীরা, আমাদের মডেল দিয়েছেন, হীরা আমাদের প্রেজেন্ট করেছেন, সেটা তো দাবি করতে হয়নি, দিয়েছেন। সেইভাবে সময়ের সাথে সাথে 35 বছর পরে গিয়ে সিপিএম মানুষকে দিতে পেরেছে, যে কারণে আমাদের সমস্যা হচ্ছে অনেক জায়গায়। ইলেকশন লড়তে গেলে কোন একটা আধিকারিককে কোথাও দিলে আর এত নাম্বার 1 সিপিএম, তো 35 বছরে তো এরাই ছিল, কে কোথায় রাখবো? গ্রেডেশন তো করা যায় না, তো আমাদেরও তো সময় লাগবে। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। এই বছরও আমরা, এই 5 বছরে ওদের দেখাও যায়নি কোথাও। এই কোভিডের মোকাবেলা করতে গিয়ে ওদের চেহারাও দেখা যায়নি কোথাও। আর আমরা সব সময় সবাই আমরা কাজ করেছেন। তারপরেও দেখুন, যখন 16 তারিখ ইলেকশন, 15 তারিখের খবর দিল যে রাত্রিবেলায় সকালবেলায় সবাই, মানে 16 তারিখ সকালবেলায় 5টার মধ্যে সমস্ত বুথে বুথে পৌঁছতে হবে। ওদের সংগঠন কোন জায়গায়, এবং সবাই পৌঁছে গেছে, আপনারা দেখেছেন সবাই, এবং আমরা সেই জায়গায় নেই। কিন্তু মাঠেও নেই, তারা হাটেও নেই, তারপরেও কিন্তু এদের সংগঠন স্ট্রং ছিল। ভাবার বিষয় যে আমরা কিভাবে তাহলে চলবো। এরা এখনো জীবিত। এমন অনেক জায়গায় আছে যে কেন্দ্রগুলোর নাম বললেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ওখানকার যে বিধায়ক যিনি জিতেছেন, একবারের জন্য মানুষের কাছে যায়নি, মানে কোনো জায়গায় ওদের দেখাও যায়নি, অথচ জিতে গেল। আর আমরা সারা বছর কাজ করলাম এখানে, ওদের কয়েকবার আমি এসেছি, এর আগেও আমরা অনেকবার, যখন আমি বুথ ম্যানেজমেন্টের ইনচার্জ ছিলাম, তাছাড়া মেম্বারশিপ ড্রাইভের সময় আমি এসেছি। কবে থেকে আমরা কাজ করছি, এবং এই কাজের সুবাদে একদিকে যেমন আমরা হেরেছি, আবার আরেক দিক দিয়ে আমরা দুজন আরো নতুন এমএলএ এখানে পেয়েছি, এবং সেই পরিশ্রমের ফসল কিন্তু এটা সহজে আসেনি। এটা তো কাজ তো আমাদের করতে হবে, কিন্তু হারানোর যে বিষয়টা, সেটা নিয়ে একটা বিরাট প্রশ্ন। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলার চেষ্টা করেছেন যে আমি যদি থাকি কোনো জায়গায় তবেই ঠিক, আর আমি যদি কিছুতে না থাকি সব বেঠিক। এই যে একটা চিন্তা ভাবনা, এবং আমার মতোই চলতে হবে। এর থেকে আমাদের যারা সিকোয়েন্স অফ বর্ডারে যে আমাদের সংগঠনের মধ্যে সমস্যা হয়, বুঝতে পারছে না কি হয়, ভয় দেখানো হয়। এ তো কংগ্রেস বা সিপিএম এর যে এখন একটা অ্যালায়েন্স হয়েছে, অশুভ অ্যালায়েন্স আমরা বলি, তারা বলে আর কয়েকদিনের মধ্যে আমরা চলে আসছি। আমাদের মধ্যে বলে আর 2 মাস আমি আসছি, আরেকজন বলে আরে 2-3 মাস, এই বলে আমাদের মধ্যে আবার কনফিউজ করা। কি কারণে? যখন যে জায়গায় উপর থেকে আমাদের দেওয়া হবে, আমরা সেই দায়িত্ব পালন করব। যখন তুমি আসবে আবার আমরা সালাম দেব, বাস হয়ে গেল। এখন থেকে এত কেন? এই যে বিষয় নিয়ে আমাদের পুরো ত্রিপুরার মধ্যে এই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করার ফলেই কিন্তু আমাদের আজকে 41 যদি থাকতো, আমাদের 42 চেহারাটা ঠিকভাবে চিনিয়ে দিতাম। চেহারাটা ঠিকভাবে চিনিয়ে দিতাম। এই যে বললো না, আমরা এমন একটা জায়গার মধ্যে আছি, উপায় নেই, কম্পালশন। একজন তো বসেই ছিল কিং মেকার হওয়ার জন্য, দেখলো হলো না, তারপর নানা রকম গুটি চালাচ্ছে, এর সাথে কথা বলে, এর সাথে কথা বলে, আবার এর সাথে মানে ফোনেও কথা বলে, অদ্ভুত এক সিচুয়েশন করে রেখেছে। আমাদের পার্টির যে চিন্তা ভাবনা, যদি আমরা সমস্ত পার্টিকে ছেড়ে আমরা এমন এক পার্টিতে যদি এসে থাকি, তাহলে আমাদের মস্তিষ্ক ঠিক থাকা দরকার। আমরা কেন মাঝে মাঝে ডেভিয়েট হব? এমন কোনো কাজ
আমাদের নেতৃত্ব এরকম কোনো কাজ করছে না, আমাদের সরকার এরকম কোনো কাজ করছে না যেখানে আমার মাইন্ডেরও ডেভিয়েশন হবে। সরকার ভালো কাজ করছে, আমরা সবাই মিলে কাজ করছি, তো ভালো যদি কাজ করে থাকি তো ভালোর দিকেই যাবেন, আলোর দিকে যাবেন, অন্ধকারের দিকে কেন যাবেন? আর অন্ধকারের লোকগুলো আজকে আলোর কিছুটা আভাস পেয়ে ভাবছে যে আমি আলোকিত, ভুল করছে। আসলে ওরা অরিজিনালি অন্ধকারের লোক ছিল এবং ওইগুলোই ভালো বুঝে। বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টির অনেক কার্যকর্তা ইচ্ছে করে এখানে যখন সিন্ডিকেটের যে বিষয়, সিন্ডিকেট করে রাখে এক এক জায়গায়, এবং ওই সিন্ডিকেটদের আমি রাজা। আমাদের পার্টির সমস্ত লোকের আমি নেতা না, আমি কার নেতা? ওই সিন্ডিকেটদের নেতা, এবং সবাইকে আমি চিনি, আমি সবাইকে জানি। তো ন্যাচারালি সিন্ডিকেটে তো পয়সা দেবে, পয়সার আদান প্রদান থাকবে। তা আমরা কি এই রাজনীতি করব? তাহলে তো পশ্চিমবঙ্গে এখন যে মমতা ব্যানার্জি যে রাজনীতি করছে এটা করলেই পারে। আমরা তো এটা চাই না। আমরা তো চাই যে ত্রিপুরাতে ভারতীয় জনতা পার্টির একটা মডেল রাজ্য হিসেবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমরা সবাই মিলে সেটা চেষ্টা করি। আর সেটা 5 বছরের জন্য না, এটা চলবে। বেতন দিয়ে দেবো আরেকজনকে, আরেকজন চালাবে, তবেই তো চলবে। আর কেউই স্থায়ী না। আমি যদি মনে করি যে আমার ছাড়া এই ত্রিপুরা রাজ্য চলবে না, তো মূর্খের সঙ্গে আমি বাস করব, অসম্ভব, হয় না এটা। বর্তমান 4 বছর 5 বছরের মুখ্যমন্ত্রীর কি অবস্থা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, আস্তে আস্তে মলিন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে কাজ ভালো করলে সেটা স্মরণ রাখে মানুষ, ব্যক্তি আনইম্পর্টেন্ট। এবং আমাদের ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, পণ্ডিত দীনদয়ালজি, তবেই তো আমরা ওনাদের আজকে ফুল চড়িয়ে আমরা কথাবার্তা বলি। এখন আমাদের সামনে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের সাথে আছে, আমাদের সাথে অমিত শাহজি আছে। এত বড় একজন, সবাই বলে চাণক্য, কি সুন্দরভাবে একটার পর একটা প্রদেশে আমরা ইলেকশন যখন আসে, আমাদের জেপি নাড্ডাজি কিভাবে সর্বভারতীয় সভাপতি, কি পরিশ্রমটাই না করছে। সকাল থেকে রাত্র অব্দি আপনারা দেখুন, যে কোনো জায়গায় যাচ্ছে, সারাক্ষণ পরিশ্রম করছে। ওনাদের কিছুটাও যদি আমরা সবাই মিলে, ওনাদের মতো আমি পারবো না, আমার মতো হয়তো বা নিচের পারবে না, কিন্তু খানিকটা তো করতে পারে, বা বেশিও করতে পারি, অনেকের বেশি যদি ইচ্ছা থাকে। তো সেটাও আমরা যদি করতে পারি আগামী দিন। আর মানে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের পরে গোমতী ডিস্ট্রিক্ট সব দিকে কিন্তু উৎকৃষ্ট মানে, সব দিকে উৎকৃষ্ট মানে। এখানে আমাদের সবচেয়ে যে সব যেই যে জায়গায় থাকুক, প্রথমে এসে মা ত্রিপুরা সুন্দরীকে প্রণাম করে তারপরে যা সবাই কাজ করে। দিল্লির থেকে পর্যন্ত লোক আসে। আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য অলরেডি 31 to 32 করোড় খরচ করেছি, আরো করছি আমরা, ডেভিয়েশন হয়েছে, আরো হবে। 4-4টে এখানের সারা ত্রিপুরাতেই হবে, এখানে রোপওয়ে লাগছে এখানে। তো এই ফিউচারই বেটার এখানে। আর আমাদের যখন সেই গেটওয়ে সাউথ ইস্ট এশিয়ার হয়ে যাবে, মৈত্রী সেতুর ওপেনিং, দুটো মঙ্গল পোর্ট এবং মঙ্গলা পোর্ট আর চিটাগাং পোর্ট অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন, খালি একটু ওয়েট করতে হবে। অবস্থা চেহারে পাল্টে যাবে পুরো ত্রিপুরা, সব দিক দিয়ে আমাদের উন্নত ডেভেলপমেন্ট। আমি ভুজন নগরে, আপনারাও যাবেন মাঝে মাঝে, আমরা অনেক সময় খালি বলি যে ত্রিপুরাতে ইন্ডাস্ট্রি নেই, ইমুক নেই, তেমুক নেই, গিয়ে দেখবেন একবার। আমি নিজেও অবাক হয়ে গেছি ওখানে গিয়ে। এই যে রাবার থেকে আমাদের মানে কি ধরনের প্রোডাক্টস হয়, টায়ার কোম্পানির সাথে আমরা অলরেডি মৌ হয়েছে, ইলাস্টিক বেরোয়, ইলাস্টিক কত সুন্দর তার ফিনিশিং, ইলাস্টিক, রাবার গাছের ফার্নিচার, আমাদের আগর থেকে, আগর গাছের থেকে এত প্রেসিয়াস যে ম্যাটেরিয়াল বেরোয়, সেটা এখন আমরা এটাকে মৌ করেছি বাইরে যাওয়ার জন্য। বিভিন্ন যে ইনভেস্টমেন্ট সামিট আমরা করেছি, এখানে বাস ভিত্তিক বিভিন্ন যে ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করছে। ধূপকাঠি হচ্ছে, ধূপকাঠি আগে 4টে তাদের সারফেস ছিল, এখন এটাকে সিঙ্গেল গোলাকৃতি বিভিন্ন যে মেশিন এখানে এখন নিয়ে আসা হয়েছে, তাদের মশলাটা কম লাগে।
তো সেগুলো বাইরে যাচ্ছে এখন ধূপকাঠি। মানে ইচ্ছে থাকলে আমরা চাকরির কথা বলি, কিন্তু এত সুন্দর ত্রিপুরাতে স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে আমরা যেটা বলেছি বারবার যে আমরা কর্মসংস্থান করব, আমাদের মধ্যে ওই যে সিপিএম এর মতো কংগ্রেসের যে চিন্তা ভাবনা এখনো ঢুকে আছে মস্তিষ্কে, কিন্তু যারা করার কিন্তু করছে। এখানে আইটিতে এত ডেভেলপ, এত কাজ হচ্ছে, ভাবা যায় না। আমরা পুরো ত্রিপুরাটাকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না এখনো। একটু বেরোতে হবে, যেতে হবে, খালি মানে শুধু বসে থাকলে হবে না, দিতে হবে এই মানসিকতাতে বেরোতে হবে। উল্টো বলতে হবে আমরা দিতে পারবো এখন, এরকম অবস্থা দাঁড়ানো উচিত। ব্যাংক ফাইন্যান্স করবে, কোথাও কোনো সমস্যা হলে আমরা এইভাবে নিয়মিত কাজ করছি আমরা, এবং তার জন্য অ্যাওয়ারনেস দরকার। আমাদের সরকারের তরফ থেকে আমরা চেষ্টা করছি। কিছুদিন আগে, আজকে 2-3 দিন আগে আমাদের আইটি মিনিস্টার তথা অর্থমন্ত্রী এবং আমরা গিয়ে একটা এখানে যে আইটি ভবনে একটা ট্রেনিং সেন্টার আমরা করেছি, অত্যাধুনিক ট্রেনিং সেন্টার। সমস্ত পেপারলেস হবে, সমস্ত কাজকর্ম এখন সারা ত্রিপুরা, এবং অন্যরাও যেতে পারবে। টুইট করা মাত্র প্রধানমন্ত্রী যে প্রথম বোধহয় টুইট করার আধা ঘন্টার মধ্যে উনি টুইট করেছেন যে ত্রিপুরা এগিয়ে গেছে, আগামী দিন আরো এগিয়ে যাবে। সেই দিশায় আমরা কাজ করছি একটার পর একটা। আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে চাই, কিন্তু এই বক্রপথের যে রাজনীতি সেটা আমাদের দলেই হোক, আমি অন্য দলের কথা বলবো না, তার দিকে সবাই সজাগ থাকবে। কারণ এই রাজনীতি দিয়ে বেশি দিন চলা যায় না। অনেকে যারা পুরনো ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আছেন, ওনাদের মধ্যে একটা আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কোনোদিন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এই ত্রিপুরাতে হবে, এবং ওনাদের সম্মানার্থে যারা অনেক, আমি সবার কথা বলছি না, সবাই ভালো এরকম না, আমরা যথেষ্ট বুদ্ধি মানে আমাদের আছে, এবং আমরা ম্যাচিওর্ড ওইসব লোকদের সাথে কথা বলা যে আপনারা যা চেয়েছিলেন সেটা হতে যাচ্ছে কিনা, দেখবেন আপনাদের ভালো পরামর্শ দেবে। আর মিথ্যা কথা না বলা, কিছু লোক আছে আমাদের মধ্যে আছে এমন সব বানিয়ে মাস্টারপিস, এত মিথ্যা কথা বলে, এত মনে হবে যেন কালকেই বুঝি এটা সত্য হচ্ছে। এইসব লোকের থেকে দূরে থাকা, সবসময় সত্য কথা বলা, মিথ্যা কথার কোনো অবস্থা নেই। পয়সা আসবে, পয়সা আবার থাকবেও না, কিন্তু যে আদর্শ ভিত্তি করে আমরা পার্টি করতে এসেছি, সেই আদর্শে আমরা আদর্শিত হয়ে আমরা কাজ করব এবং সমাজের জন্য কাজ করব, সেটা বড় কথা। সবাই সবকিছু সব পদ পাবে তারও কিন্তু গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না, কাজের মাধ্যমে আসবে এখানে। এর আগে আমি কয়েকবার এসেছি, এইসব কথাবার্তা হয়েছে এখানে, কিন্তু এই আজকের এই সাংগঠনিক বৈঠকে আমি এক কথাই বলবো, যারা জুনিয়ররা আছে, যারা এখানে বিভিন্ন যারা মোর্চারা আছে, বিশেষ করে মহিলা মোর্চা, বিশেষ করে আমার যুব মোর্চা ভাইয়েরা যারা আছে, এবং অন্যান্য সব মোর্চারই সবারই, উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু অল দ্য মোর্চা, আমি বলবো তাদের অনেক দায়িত্ব, বডি আছে কিন্তু কাজকর্ম কিন্তু সমস্ত মোর্চাদেরই করতে হবে, এবং সেই তাদের কাজের ফসলেই আগামী দিন এই যে দুটো সিটের কথা বলছে, তবেই এটা আবার আমরা এখানে প্রধানমন্ত্রীজিকে পুরো উপহার দিতে পারবো এই 2 সিট আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আগামী দিনে, এবং সেটা আমরা করতেই হবে বাই এনিমিজ। উনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, বারবার এসছেন বিধানসভাতে, বারবার কথা হচ্ছিল যে আমরা কিভাবে বিধানসভা আমরা জয়ী হই, এবং আমরা যে আশা করেছিলাম হয়তো সেই এক্সপেকটেশন আমাদের ফুলফিল হয়নি, এবং তার কারণগুলো কিন্তু অলরেডি আমাদের হাতে চলে এসছে। কারা কারা এর পিছনে ছিল সব চলে এসছে। যে আগামী দিন আমি শিওর যে আপনারা বিশেষ করে এই গুমতি জেলার সবাই অত্যন্ত মানে পুরনো কার্যকর্তা, এবং অনেক কিছু আপনারা বুঝেন, এবং একটা সংস্কার আপনাদের আছে। এখানের সবাই পড়াশোনা শিক্ষিত লোক, এবং আমি চাই যে আগামী দিন এই গুমতি জেলা এবং তার যে মন্ডলগুলো আছে একটা ओम शांति। आदरणीय राजयोगिनी दादी
रतन मोहिनी जी, ब्रह्मा कुमारी के सभी वरिष्ठ सदस्यगण और इस सभा में भारत के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य रहा है, मुझे कई बार आपके बीच आने का अवसर मिलता है। मैं जब भी यहां आता हूं, आपके बीच आता हूं, तो मुझे हमेशा एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। और ये पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार है जब मुझे ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला है। इसके पहले अभी फरवरी में ही आपने मुझे जल जन अभियान को प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित किया था। मैंने तब विस्तार से इस बात को याद किया था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से कैसे मेरी आत्मीयता में एक निरंतरता रही है। इसके पीछे परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद भी है और राजयोगिनी दादी जी से मिला स्नेह भी है। आज यहां सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ है। आज शिवमणि होम्स और नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का भी काम शुरू हुआ है। मैं इन सभी कार्यों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था और उसके सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में भारत की सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी का यह अमृत काल देश के हर नागरिक के लिए कर्तव्य काल है। इस कर्तव्य काल का मतलब है हम जिस भूमिका में हैं उसका 100% निर्वहन और उसके साथ साथ समाज के हित में, देश के हित में अपने विचारों और जिम्मेदारियों का विस्तार, यानी हम जो कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ करते करते ये भी सोचना है कि हम अपने देश के लिए और क्या ज्यादा कर सकते हैं। आप सभी इस कर्तव्य काल के प्रेरणा पुंज की तरह हैं। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था के तौर पर समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करती है, लेकिन साथ ही आप समाज सेवा से लेकर साइंस एजुकेशन को प्रमोट करने, सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह समर्पित है। माउंट आबू में आपका ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, ये वाकई उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे बताया गया है कि इंस्टीट्यूट के जरिए यहां आसपास के गांवों में हेल्थ कैंप किए जाते हैं,
रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। अब जिस सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल का संकल्प आपने लिया है, वो भी इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने में मदद करेगा। आप सभी इस मानवीय प्रयास के लिए अभिनंदन के पात्र हैं। साथियों, आज हमारा पूरा देश स्वास्थ्य सुविधाओं के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। पिछले 9 वर्षों में पहली बार देश के गरीब से गरीब को भी एहसास हुआ है कि देश के अस्पताल उसके लिए भी आसानी से उपलब्ध है। और इसमें एक बड़ी भूमिका आयुष्मान भारत योजना ने निभाई है। आयुष्मान भारत योजना ने सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे भी गरीबों के लिए खोल दिए हैं। आप भी जानते हैं कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाती है। इस योजना का लाभ देश के 4 करोड़ से ज्यादा गरीब उठा चुके हैं। अगर आयुष्मान भारत योजना न होती तो इसी इलाज के लिए उन्हें 80,000 करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह जन औषधि केंद्रों पर मिल रही सस्ती दवाइयों की वजह से भी गरीब और मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। और मैं हमारे ब्रह्म कुमारी संस्थान की जितनी इकाइयां देश के गांव-गांव में हैं, अगर आप लोगों को जानकारी दें कि सरकार की तरफ से ऐसे जन औषधि केंद्र चलते हैं, स्टैंडर्ड दवाइयां होती हैं, लेकिन बाहर जो दवाएं आपको 100 रुपये में खर्च होता है, यहां आपको 10-15 रुपये मिल जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं गरीबों की कितनी सेवा होगी। तो हमारी सभी इकाइयां, हमारी सभी ब्रह्मा कुमार हो या ब्रह्मा कुमारी हो, वे लोगों में ये जागरूकता लाएं और देश में स्थान स्थान पर ये जन औषधि केंद्र बने हुए हैं। आपके संपर्क में आए हुए लोग आपको हमेशा आशीर्वाद देंगे। अब जैसे किसी परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति है, डायबिटीज की बीमारी है, तो उसको दवाई के पीछे जो खर्चा होता है 1200, 1500, 2000 रुपये तक हो जाता है। लेकिन इसी जनऔषधि केंद्र से अगर वो दवाई लेगा तो उसको शायद वो खर्चा 1500, 2000 से कम होकर के 100 रुपया हो जाएगा। उसका जीवन में बहुत बड़ी मदद होती है। यानी इस बात को आप हर दूर पहुंचा सकते हैं। साथियों, आप सभी इतने वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं कि हेल्थ सेक्टर की एक चुनौती डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल कर्मियों की कमी भी रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी कमी को सुधारने के लिए भी देश में अभूतपूर्व काम हुआ है। पिछले 9 वर्षों में औसतन एवरेज हर महीने एक नया मेडिकल कॉलेज खोला है। 2014 से पहले के 10 सालों में 150 से भी कम मेडिकल कॉलेज बने थे। बीते 9 वर्षों में देश में 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। - 2014 से पहले हमारे पूरे देश में एमबीबीएस की 50,000 के आसपास सीटें थी।
50,000 स्टूडेंट्स के लिए जगह थी। आज देश में एमबीबीएस की सीटें 1 लाख से भी ज्यादा हो गई हैं। 2014 के पहले पीजी की भी 30,000 के आसपास ही सीटें थी। अब पीजी सीटों की संख्या भी बढ़कर 65,000 से ज्यादा हो गई है। जब इरादा नेक हो, समाज की सेवा का भाव हो, तो ऐसे ही संकल्प लिए जाते हैं और संकल्प सिद्ध भी किए जाते हैं। साथियों, आज भारत सरकार हेल्थ सेक्टर में जो प्रयास कर रही है, उसका एक और बड़ा प्रभाव आने वाले दिनों में दिखेगा। देश में जितने डॉक्टर आजादी के बाद 7 दशकों में बने, उतने ही डॉक्टर अगले 1 दशक में बन जाएंगे। और हमारा फोकस सिर्फ मेडिकल कॉलेज या डॉक्टर तक सीमित नहीं है। आज ही यहां नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का काम शुरू हुआ है। भारत सरकार भी नर्सिंग के क्षेत्र में भी युवाओं को नए अवसर दे रही है। हाल में ही सरकार ने देश में 150 से अधिक नए नर्सिंग कॉलेज को स्वीकृति दी है। इस अभियान के तहत यहां राजस्थान में भी 20 से ज्यादा नए नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। इसका लाभ निश्चित तौर पर आपके सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल को भी होने वाला है। साथियों, भारत में हजारों वर्षों से समाज में शिक्षा से लेकर गरीब और असहायों की सेवा तक की जिम्मेदारी हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं ने संभाली है। मैं तो गुजरात भूकंप के समय से और उसके भी पहले से आपकी निष्ठा और हमारी बहनों की मेहनत का कार्य स्वयं साक्षी रहा हूं। आप लोग जिस प्रकार से काम करते हैं, उसे बहुत निकट से देखा है। मुझे याद है कच्छ के भूकंप की उस संकट की उस घड़ी में आपने जिस सेवा भाव से काम किया, वो आज भी प्रेरणा देने वाला है। ऐसे ही नशा मुक्ति के लिए आपके अभियान हो, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ब्रह्मा कुमारी के प्रयास हो, जल जन अभियान जैसे मिशन हो, एक संस्था कैसे हर क्षेत्र में एक जन आंदोलन तैयार कर सकती है, ब्रह्मा कुमारी ने ये करके दिखाया है। विशेष रूप से मैं जब भी आपके बीच आया हूं, मैंने देश के लिए आपसे जो अपेक्षाएं की हैं, उन्हें पूरा करने में आपने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपने जिस तरह देश भर के आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जब आपने पूरी दुनिया में योग शिविरों का आयोजन किया, जब दीदी जानकी जी स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी, जब सभी बहनों ने स्वच्छ भारत की कमान संभाल ली, तो इससे कितने ही लोगों को देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिली है। आपके ऐसे कार्यों ने ब्रह्मा कुमारी में मेरे विश्वास को
और भी कई गुना कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि जब विश्वास बढ़ता है तो अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, और इसलिए स्वाभाविक है कि आपके प्रति मेरी भी अपेक्षाएं जरा ज्यादा बढ़ गई है। आज भारत श्री अन्न यानी मिलेट्स को लेकर एक वैश्विक आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। आज देश में हम प्राकृतिक खेती जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें हमारी नदियों को स्वच्छ बनाना है, हमें भूजल का संरक्षण करना है। ये सारे विषय ऐसे हैं जो कहीं न कहीं हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ते हैं। इसलिए इन प्रयासों में आपका जितना ज्यादा सहयोग मिलेगा, उतनी ही देश की सेवा और अधिक व्यापक होगी। मुझे आशा है राष्ट्र निर्माण से जुड़े नए विषयों को ब्रह्मा कुमारीज इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ाएगी। एक विकसित भारत के निर्माण के जरिए हम विश्व के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र को साक्षात करेंगे। और आप जानते हैं, अभी यहां G20 समिट की बात हुई। हम G20 समिट में भी दुनिया के सामने, दुनिया जब विमेन डेवलपमेंट की बात करती है, हम G20 में दुनिया के सामने विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। महिलाओं की अगुवाई में विकास, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके एक बहुत ही उम्दा संगठन, व्यापक रूप से फैला हुआ संगठन देश की इन प्राथमिकताओं के साथ जुड़ करके नई शक्ति और सामर्थ्य के साथ अपना विस्तार भी करेंगे और राष्ट्र का विकास भी करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे आपने यहां बुलाया, निमंत्रण दिया। मैं हमेशा कोशिश करता हूं जितना समय निकाल सकूं आपके बीच आऊं, क्योंकि यहां मैं आता हूं तो कुछ लेकर के जाता हूं। चाहे वो आशीर्वाद हो, प्रेरणा हो, ऊर्जा हो, जो मुझे देश के लिए काम करने के लिए दौड़ाती है, नई शक्ति देती है। तो मुझे यहां आने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी व्यक्त करता हूं। ओम शांति। ओम शांति। आपके शब्दों ने, आपके वचनों ने हम सभी के अंदर एक अलौकिक शक्ति और ऊर्जा भर दी है। आपकी सकारात्मक सोच, मधुर वाणी और प्रेरणादायक शब्द सुनकर हम सभी कृतज्ञ हुए। आज ये इस कार्यक्रम का समापन नहीं, एक शुरुआत है एक दिव्य संबंध का, जो सदा हमें आपके साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरणा देती रहेगी। सभी भारत माता की, भारत माता की, आबूराज की इस धन्य धरा पर सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मां अंबा, अर्बुदा मां और भगवान दत्तात्रेय के चरणों में
कोटि कोटि प्रणाम। ये धरती तप और तपस्या की है। विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करती ये धरा है। मेरा सौभाग्य है कि एक सेवक के रूप में बार बार आपके दर्शन का अवसर मिलता है। और आपसे किए हुए वादे को भला मैं कैसे भूल सकता हूं। जब मैं नवरात्र के दौरान आया था तब आपसे कोई बातचीत नहीं कर पाया था। कानून की मर्यादाएं थी और डिसिप्लिन में रहना मेरा स्वभाव और संस्कार है। लेकिन उस दिन आपके दर्शन करने का मुझे जरूर सौभाग्य मिला था। और अब भारी संख्या में, रात देर हो गई थी, उसके बावजूद भी आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मुझे लग रहा था कि मैं बिना बात किए इतनी बड़ी तादाद में आए, आपको नाराज करके जा रहा हूं। पता नहीं आपका गुस्सा कितना निकलेगा। लेकिन ये आपके संस्कार है, ये आपके मन का बड़प्पन है, ये आपकी ऊंचाई है कि आपने उस परिस्थिति को स्वीकार किया और मुझे आशीर्वाद दे करके आपने यहां से विदाई दी। वो दृश्य मेरे जीवन में एक संस्कार देने वाला महत्वपूर्ण दिवस रहा था। और वो आप सबके उदार व्यवहार के कारण। वरना सार्वजनिक जीवन में तो पल दो पल में जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाता है। और आज मैं देख रहा हूं आपने उस प्यार को अनेक गुना बढ़ा करके इतनी गर्मी में आप आशीर्वाद बरसाने के लिए आए हैं। मैं राजस्थान की धरा को, यहां के संस्कारी भाई बहनों को और आबू के विशेष करके मेरे भाई बहनों को मैं आज शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज 10 मई है। आज के ही दिन 10 मई को 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी उठी, जिसने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था। आज के दिन विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे संघर्ष को एक नई दिशा मिली थी। इसलिए आज के दिन वीर भूमि राजस्थान आना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम के जो वीर नायक थे, कई वीर नायक उस समय
राणा प्रताप की इस पवित्र धरती पर आकर के अपनी योजनाएं बनाते थे। राजस्थान की माताओं और उनके वीर संतानों ने मां भारती के मस्तक को हमेशा गर्व से ऊंचा रखा है। मैं आजादी के लिए समर्पित पूरे देश के हर वीर वीरांगना को इस वीर धरा से आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। कल ही देश ने महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती भी मनाई है। पूरे देश ने, पूरे राजस्थान ने महाराणा प्रताप के शौर्य को नमन किया है। साथियों, आप लोगों को संभवतः पता हो, उस समय जो महाराणा प्रताप के साथी थे, सहयोगी थे, वो युद्ध भूमि में महाराणा के साथ अपना भी योगदान दे रहे थे। लेकिन इतिहास ने करवट बदली, स्थितियां बदली, लेकिन स्वाभिमानी लोग मुगल सल्तनत के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। और इसलिए उस समय के राणा प्रताप के जो साथी थे, उसमें जो आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़ करके राणा प्रताप को साथ दिया था, उन्होंने अपने प्राण प्रिय धर्म के लिए, अपने प्राण प्रिय महाराणा के लिए या तो मौत चाहिए या तो जीवन भर जूझने का सामर्थ्य चाहिए, ऐसा कह करके फिर से विजय प्राप्त करने का संकल्प लेकर के गुजरात के यहां से सटे हुए इलाके के लोग हो, राजस्थान के हमारी इस आदिवासी धरा के लोग हो, वे लोग यहां से चल दिए थे और निकल करके कुछ लोग महाराष्ट्र गए, कुछ लोग कर्नाटका गए। और उसमें कर्नाटका में आज भी वो गौरव से जीते हैं। उस समाज को वहां के लोग हक्की पिक्की समाज के नाम से जानता है और वो जड़ी बूटियों का काम करते हैं और कई पीढ़ियों से वहां रहते हैं। आज भी राणा प्रताप का गौरव गान करते रहते हैं। इनमें से बहुत सारे साथी अब अपने काम के लिए जंगलों से जड़ी बूटियां लेकर के सूडान और अफ्रीका के देशों में जाकर के कुछ न कुछ छोटा मोटा व्यापार करते हैं। ऐसे ही हक्की पिक्की समुदाय के सैकड़ों साथी कुछ सप्ताह पहले सूडान में चल रही लड़ाई में फंस गए थे। बीजेपी की हमारी सरकार इन भाइयों बहनों को सूडान से निकालने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी राजनीति को देखते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, हो हल्ला करना शुरू कर दिया। अब आप कल्पना कर सकते हैं, दूसरा महाद्वीप, दूसरा देश, चारों तरफ गोलियां चल रही है, बंदूकें चल रही है, बम फूट रहे हैं, आग लगी हुई है, हर तरफ लड़ाई चल रही है और यहां कांग्रेस शोर मचा रही थी इन समाजों के लिए। और उसका परिणाम ये आया कि यहां की चिल्लाहट का पता वहां चलने लगा। अच्छा भाई, कुछ लोग यहां पर है, चलो ढूंढो। अब ये लोग मौत के साए में जीते थे, चुपचाप बाहर लाना था, लेकिन ऐसी कांग्रेस वालों ने गलतियां करके उनका चेहरा जग जाहिर कर दिया।
कांग्रेस ने इस आदिवासी साथियों की जान खतरे में डाल दी थी। और ये क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि सूडान में इतनी गोलियां चल रही थी, एक आध को तो लग ही जाएगी, और अगर एक आध को लग गई और वो भी हक्की पक्की आदिवासी भाई को लग गई, फिर तो उनको कर्नाटक के चुनाव में खेल खेलने का मजा आ जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाए, उसी का इंतजार था ताकि फिर मोदी का गला पकड़ सके। लेकिन इस पूरी राजनीति में कांग्रेस एक बात भूल गई। मुझे लगता है अभी भी वो मोदी को पहचान नहीं पाई है। कांग्रेस वालों को पता होना चाहिए था ये मोदी है, संकट में फंसे एक एक हिंदुस्तानी की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। साथियों, मोदी का नुकसान करने के लिए, बीजेपी का नुकसान करने के लिए कांग्रेस देश का नुकसान करने से भी बाज नहीं आती। जब देश में कोरोना महामारी आई, 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया, तब भी कांग्रेस ने अफवाह फैलाने की कोशिश की, वैक्सीन के मुद्दे पर लोगों को भड़काया। कांग्रेस चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो और वो मौके की तलाश में थे कि मोदी की गर्दन कैसे पकड़े। लेकिन मोदी इन लोगों की धमकियां और साजिशों के आगे न झुका है न झुकता है। अगर मोदी झुकता है तो 140 करोड़ देशवासियों के सामने झुकता है। आप ही मेरे मालिक हैं। साथियों, भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, अपने लोगों की जान बचाई, इतना ही नहीं दूसरे देशों को भी मदद की। साथियों, कांग्रेस की स्वार्थ की राजनीति का परिणाम राजस्थान को भी उठाना पड़ रहा है। आप पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में राजनीतिक लड़ाई का भद्दा रूप देख रहे हैं, भद्दा रूप देख रहे हैं। जनता के हित के बजाय यहां कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगाए बैठे हैं। जब कुर्सी पूरे 5 साल संकट में ही पड़ी रही हो, तो ऐसे में राजस्थान के विकास की किसे परवाह होगी। इसलिए ही आज कांग्रेस शासन में राजस्थान में कानून और व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जिस राजस्थान में गंभीर अपराध सुनने में कम ही आते थे,
वहां अब अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और अपने वोट बैंक की गुलामी कर रही कांग्रेस कुछ लोगों के तुष्टीकरण करने के लिए कार्रवाई करने से भी डर रही है। साथियों, कांग्रेस सरकार के इस रवैये की राजस्थान के माताओं, बहनों, बेटियों को सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। राजस्थान में महिलाओं से जुड़े अपराध चरम पर है। यहां तक कि उन्हें तीज त्योहार भी शंका आशंका के बीच मनाने पड़ते हैं। भाइयों और बहनों, 2 दिन बाद 13 मई को जयपुर बम धमाकों की बरसी है। 2 दिन बाद जयपुर में सीरियल ब्लास्ट करके आतंकियों ने हमसे अनेकों स्वजन छीन लिए। आज भी उनके परिवार इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि एक ना एक दिन उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने वही किया जिसके लिए कांग्रेस कुख्यात रही है, उसका इतिहास कुछ कुख्यात रहा है, उसके कारनामे कुख्यात रहे हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए हमेशा आतंकियों पर नरम रुख अपनाया है। कांग्रेस आतंकी विचारधारा के साथ खड़े होने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसी सोच की वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जयपुर बम धमाके के केस में कमजोर पैरवी की। इसके कारण धमाकों के आरोपी छूट गए। कांग्रेस अब लीपापोती की चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जिस प्रकार की राजनीति की है, उसमें दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज का सबसे अधिक अहित हुआ है। आदिवासी समाज ने तो बरसों तक कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन क्या मिला? सिर्फ अभाव, असुविधा और अवसरहीनता। सिरोही जिला हो, जैसलमेर हो, करौली हो, बारां हो, इन जिलों में कांग्रेस के कुशासन के कारण विकास नहीं हुआ। कांग्रेस ने जिलों को पिछड़ा घोषित करके पल्ला झाड़ दिया था, जबकि जिलों में ज्यादातर आदिवासी समाज भी था। आपने बीजेपी को अवसर दिया तो हमने इन जिलों में विकास की आकांक्षा जगाई, इनको आकांक्षी जिला घोषित किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते काम शुरू किया। आज सुबह ही मैंने नाथद्वारा में, अभी हमारे अध्यक्ष जी इसका वर्णन कर रहे थे, आज नाथद्वारा में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसका भी सबसे अधिक लाभ राजस्थान के आकांक्षी जिलों को होगा। उदयपुर और शामलाजी 6 लेन हाईवे से राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर
और बांसवाड़ा क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। बिलाड़ा जोधपुर सेक्शन बनने से जोधपुर और बॉर्डर एरिया तक पहुंच सुलभ हो जाएगी। चार भुजा और निचली ओड़न के प्रोजेक्ट से कुंभलगढ़, हल्दी घाटी और श्रीनाथ जी के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। साथियों, तारंगा हिल आबू रोड रेल लाइन की डिमांड अंग्रेजों के समय से चल रही थी। इसे भी अब बीजेपी सरकार ही पूरा कर रही है। मावली मेवाड़ को ब्रॉड गेज से जोड़ने की मांग भी लंबे समय से हो रही थी। ये काम भी बीजेपी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार में आज का नया भारत नए हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। आजादी के इस अमृतकाल में हम भारतीयों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है, बहुत मेहनत करनी है। लेकिन इसके साथ ही अतीत में कांग्रेस सरकारों से जो गलतियां हुई, हमें उससे भी सबक लेना है। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे मालूम है क्या बोलेंगे। कोई कहेगा 2G घोटाला, कोई कहेगा कोयला घोटाला, कोई कहेगा बोफोर्स घोटाला, कोई कहेगा हेलीकॉप्टर घोटाला, कोई कहेगा यूरिया घोटाला। सबके अपने अपने जवाब हो सकते हैं, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में एक और बड़ा घोटाला, एक और बड़ा फ्रॉड, एक और जबरदस्त धोखा जनता के भावनाओं पर, उनके जीवन पर 50 साल पहले हुआ था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये फ्रॉड था कांग्रेस द्वारा 50 साल पहले देश में गरीबी हटाने की गारंटी। कांग्रेस की हर गारंटी के साथ कांग्रेस के नेता और अमीर हो जाते हैं और देश का नागरिक और गरीब हो जाता है। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण 2014 तक देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास शौचालय नहीं था। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण 2014 तक करीब 50 करोड़ लोगों का बैंकों में खाता तक नहीं था। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण देश के लाखों गांव सड़क संपर्क से वंचित थे। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण आजादी के इतने दशकों बाद भी 16 करोड़ घरों में नल से जल नहीं पहुंच रहा था। कांग्रेस ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का ये फ्रॉड शुरू करके बरसों तक हर चुनाव में इसे बुनाया, गरीब को झूठा वायदा कर बरसों तक तरसाया। साथियों, 2014 के बाद से बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के इस सबसे बड़े फ्रॉड की सच्चाई देश के सामने रख दी है। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने गरीब कल्याण के जो काम किए हैं, वो अब तक देश में जितनी भी कांग्रेस सरकारें बनी है,
वो उनके काम से ज्यादा है दोस्तों। ये बीजेपी सरकार की मेहनत है जिसकी वजह से आज देश के करीब 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुले हैं। ये बीजेपी सरकार की मेहनत है जिसकी वजह से आज देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। ये बीजेपी सरकार की मेहनत है जिसकी वजह से आज देश में 9 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से साफ पानी पहुंचने लगा है। मैं इस क्षेत्र की माताओं बहनों को याद दिलाना चाहता हूं, मैंने आपसे वायदा किया था कि आपके जीवन से मुश्किलें कम करूंगा। आज राजस्थान के 40 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है। राजस्थान की लाखों ग्रामीण बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल रहा है। राजस्थान के लगभग 19 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर की सुविधा मिली है। इनमें से अधिकतर हमारी माताओं बहनों के नाम पर है, वरना हम तो जानते हैं हमारे यहां तो परंपरा रही, घर होगा पुरुष के नाम पर, दुकान होगी पुरुष के नाम पर, खेत होगा पुरुष के नाम पर, गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर, स्कूटर होगा पुरुष के नाम पर, महिला के नाम पर कुछ होता ही नहीं। मोदी ने बदल दिया। हमने जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, ये घर ज्यादातर महिलाओं के नाम कर दिया हमने। और आपको मालूम है आजकल जो घर बनते हैं ना, वो मामूली नहीं बनते। एक एक घर के पीछे लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च होता है, लाखों रुपए का खर्च हो रहा है। और जब ये घर की मालिक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाली मेरी गरीब माँ, मेरी दलित माँ, मेरी आदिवासी माँ जब उस घर की मालिक बन जाती है ना, लाखों के घर की मालिक बनती है, तो मुझे संतोष होता है कि वाह, मेरी ये बहनें लखपति दीदी बन गई है, लखपति दीदी। कोई सोच सकता है कि कोई सरकार करोड़ों की तादाद में लखपति दीदी बना दे? ये आपका भाई है जिसने काम करके दिया है। भाई और बहनों, कांग्रेस ने गरीबों को सिर्फ और सिर्फ चिंता दी, असुरक्षा दी। बीजेपी सरकार ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दिया। बीमा और पेंशन से जुड़ी 3 जन सुरक्षा योजनाओं को कल ही 8 वर्ष पूरे हुए हैं। 8 वर्ष पहले मैंने उसको लॉन्च किया था और प्रीमियम कितना था? ₹1.25 प्रतिदिन प्रीमियम। उसके अंतर्गत चलती थी पीएम जीवन ज्योति योजना और ₹1.5 महीना वो प्रीमियम वाली चल रही थी, एक पीएम सुरक्षा बीमा योजना। और इनसे पहली बार सामान्य परिवारों को दुर्घटना और जीवन बीमा की सुरक्षा मिली। इन दोनों योजनाओं से 30 करोड़ से ज्यादा देशवासी जुड़े हैं। इन योजनाओं के तहत उन परिवारों में संकट आने के कारण और ये ₹1 वाला बीमा होने के कारण, ₹1.5 वाला बीमा होने के कारण अब तक मुसीबत में आए हुए इन परिवारों को 15,000 करोड़ रुपए इन गरीब परिवारों को हम दे चुके हैं भाइयों। 15,000 करोड़ रुपया, यानी लाखों परिवारों को बहुत संकट के समय में ये पैसा मिला है। जब सरकार संवेदनशील होती है, गरीबों की चिंता करने वाली सरकार होती है, तो उसके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, कल्याण किसी का करने का तरीका,
वो गरीबों से, दलितों से, पीड़ितों से, आदिवासियों से, समाज के पीछे हुए जो समाज है उनके हित में काम करने की होती है। और भाइयों बहनों, बीते दशकों में कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों ने सामाजिक न्याय के नाम पर, सोशल जस्टिस, उस नाम पर भी देशवासियों से विश्वासघात किया है। आजादी के बाद से ही सबसे अधिक पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पर बनी, सोशल जस्टिस का नारा लगाकर बनी, लेकिन इन पार्टियों ने देश को क्या दिया, समाज को क्या दिया? इन्होंने देश को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद दिया, गौर परिवारवाद दिया और भ्रष्ट इकोसिस्टम दिया। जब ये दल सत्ता में आते हैं तो अपनी वोट बैंक की भलाई के लिए, समाज के नाम पर जो वोट बैंक बनाई है उसके नाम पर आते तो हैं, लेकिन उनका भला नहीं करते हैं, भावनाएं भड़काते हैं, भला सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हित साधने में लगे जाते हैं। जिस समाज को ये अपना वोट बैंक बनाते हैं उसको तो और भी नुकसान हो जाता है। एक तो उनको कुछ मिलता नहीं, कोई कुनवाई खा जाता है, लेकिन लोगों को लगता है इन्हीं को मिल रहा है, तो बाकी समाज भी उनके प्रति उनकी सद्भावना कम होने लगती है, तो समाज में भी तनाव पैदा हो जाता है। और भाइयों बहनों, इतिहास गवाह है कि जो भी इन राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक बना उसका विकास रुक गया। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, सही विकास के लिए वोट बैंक बनने की गलती मत कीजिए। अच्छा होगा कि आप कर्तव्यनिष्ठ वोटर बने, भेड़िए की चाल चल करके वोट बैंक बनाई में जुड़ सकते हैं, लेकिन शेर की चाल चलनी है ना, तो वोट बैंक का हिस्सा मत बनिए, वोटर बनिए, सीना तान के वोटर बनिए, वोट बैंक मत बनिए। साथियों, कांग्रेस कैसे जनता से ठगी करती है ये राजस्थान के किसानों से बेहतर कौन समझ सकता है। आप याद कीजिए, राजस्थान में चुनाव से पहले किसानों से क्या वायदा किया गया था? 10 दिन के भीतर सभी किसानों को कर्ज माफी करेंगे। ये गारंटी दी गई थी कि नहीं दी गई थी, मुझे बताइए। ये गारंटी के ढोल पीटे थे कि नहीं? राजस्थान के लोग बताइए, उन्होंने कहा था ऐसा? कहा था? ये गारंटी दी थी? 10 दिन तो छोड़िए, अब तो 5 साल पूरे होने को है। कितने किसानों का वाकई में कर्ज माफ हुआ है, ये आप राजस्थान के लोग, मेरे किसान भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। बीजेपी सरकार किसान के हितों को प्राथमिकता देती है, उनके लिए मेहनत करती है। हम छोटे से छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं ताकि उन्हें बैंकों से आसानी से मदद मिल सके। हम पीएम फसल बीमा योजना लेकर आए ताकि सूखा हो, बाढ़ हो या अन्य प्राकृतिक आपदा हो, किसान के नुकसान की भरपाई हो सके। हमारी नीयत का सबसे बड़ा प्रमाण पीएम किसान सम्मान निधि है। इसके तहत बीजेपी सरकार ने राजस्थान के छोटे छोटे किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा कराए हैं। अब उन्हें खेती से जुड़े छोटे छोटे खर्चों के लिए दूसरों के पास जाना नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, भारत सरकार की एक और नीति की वजह से राजस्थान के किसानों को बड़ा लाभ होने वाला है। मोटे अनाज को
बीजेपी सरकार श्री अन्न के रूप में देश दुनिया तक पहुंचाने जा रही है। यहां का बाजरा, ज्वार और दूसरे मोटे अनाज यानी श्री अन्न जब दूसरे देशों में जाएंगे तो किसानों का भी लाभ बढ़ेगा। साथियों, कांग्रेस किसानों की दिक्कतों को कम करने के लिए, सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कभी गंभीर नहीं रही। ये मेरा सौभाग्य है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने सरदार सरोवर डैम के लिए जो काम किया उसका लाभ राजस्थान के किसानों को भी मिल रहा है। आज राजस्थान के भी अनेक गांव और शहरों तक नर्मदा का पानी पहुंच रहा है, वरना कांग्रेस ने तो कदम कदम पर ये कोशिश की है कि सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा योजना के साथ जुड़ा हुआ है उसका काम अटक जाए। साथियों, कांग्रेस ने किसानों को कैसे धोखा दिया, इसका एक उदाहरण सालगांव बांध परियोजना भी है। ये परियोजना 4.5 दशक पहले तब बनी थी जब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए ये कभी धरातल उतरी ही नहीं पाई। ये बांध पहले बन जाता तो 30 लाख रुपए से भी कम खर्च होते। आज इसी बांध का खर्च बढ़कर 300 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र को तो प्रकृति ने भी समृद्ध किया है और यहां हमारी धरोहरें भी मौजूद है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यहां पर स्थित है। पास में दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। पहाड़ियों के बीच नक्की झील का एक आकर्षण भी अलग है। हम देश भर में ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। विकास को गति और विरासत को सम्मान, यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है। इसी रास्ते पर हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना है। एक बार फिर आप सभी का ये प्यार और इतनी तमतमा की धूप में इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज पूरे राजस्थान में गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष भाई नारायण प्रोत जी से कि वो सभी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी अपने किए हुए वादे के अनुसार पधारे और पिछले कुछ दिन से मैंने न्यूज़पेपर में सुना है और मैंने देखा भी है फेसबुक सोशल मीडिया पोस्ट में, जिन लोगों को मैंने कैंडिडेट नहीं देके एमएलए बनाया, जैसे कि साबरूम से बुरुंगनांग जितेंद्र चौधरी, अगर तिपरा मोथा कैंडिडेट देता तो वो आज असेंबली में बैठता नहीं। वो मुझे फ्रॉड कहता है, वो हमारे तिपरा मोथा के लीडर्स को फ्रॉड कहता है। 25 साल तक सीपीएम ने हमारे ऊपर शासन किया, उससे पहले 10 साल और किया निपेन चक्रवर्ती के अंदर। तिपरासा का वोट लेकर सीपीएम पावर में आता था, लेकिन हमको मिला क्या सीपीएम से? आइडियोलॉजी। आपने पेट में खाना नहीं दिया, आपने घर के ऊपर छत नहीं दिया, बच्चे को शिक्षा ठीक से नहीं दिया। आज भी हमारे लोग पीछे हैं क्योंकि 35 साल तक सीपीएम ने राज किया। पहले 10
उसके बाद 25 साल हमारे वोट से जीतते थे। हमको क्या मिला, हमारे कम्युनिटी को क्या मिला? और आज वो मुझे फ्रॉड कहता है, जिसने सब कुछ दाव में लगा दिया अपने लोगों के लिए फाइट करने के लिए। बीजेपी से भी 1-2 लीडर्स लोग बोल रहे कि तिपरा मोथा खत्म हो चुका है, तिपरा लैंड का डिमांड अब बुबागरा नहीं करेगा। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के अंदर तिपरा लैंड है, ग्रेटर तिपरा लैंड है। मैंने किसी को उकसाया नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे दिल के अंदर जो बात है, हमारे तिपरासा के अंदर जो दिल का बात है, वो खत्म हो चुका है। अगर मुझे पोस्ट चाहिए होता तो मैं इलेक्शन के पहले भी ये पोस्ट ले लेता, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने कम्युनिटी के लिए फाइट करना चाहता हूं। मुझे इलेक्शन में, मुझे पॉलिटिक्स में कोई लोभ लालच नहीं है। अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूं। गलत बात है ये। अगर आपको गलत बात लगता तो ये गलती मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरा नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य के बारे है। मैंने बहुत दिन से बात नहीं किया है, आज करना चाहता हूं। ये लोग बीजेपी किसी भी 1-2 जो जनजाति लीडर्स है, 100 को ले लिया। अरे आप 100 को लो, हमारे लोग के पास भी पैसा का कमी है, जा रहे हैं क्योंकि उनको सुविधा चाहिए। हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप तिपरा मोथा को तोड़ना चाहते हो, कोशिश करो। तिपरा मोथा टूट जाएगा, लेकिन ग्रेटर तिपरा लैंड का डिमांड नहीं टूटेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का भी डिमांड खत्म नहीं होगा। और शर्म करो, अपना ही तिपरासा होकर अपना ही तिपरासा को कुछ नहीं दे रहा है आप लोग। इलेक्शन के पहले मैक्सिमम ऑटोनॉमी का बारे बात किया, आज क्या बात कर रहे हो? आप बीजेपी सेंटर में है, स्टेट में है, डिमांड करो, नहीं होगा। क्योंकि दिल्ली का बीजेपी अलग है, स्टेट का बीजेपी अलग है। दिल्ली का सीपीएम अलग है, स्टेट का सीपीएम अलग है। दिल्ली का कांग्रेस अलग है, स्टेट का कांग्रेस अलग है। तिपरासा के बारे कोई परवाह नहीं करता स्टेट में, क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है। मैं अपने लोगों का अधिकार के लिए फाइट करूंगा। हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फाइट करूंगा। और बुबागरा डरता नहीं है। जब शेर चुप हो जाता है ना, वो अपना नेक्स्ट अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो मेरा चुप रहना आप डर मत समझिए। आई लव माई तिपरासा पीपल। और जो लोग हमें फ्रॉड कहते हैं, मैं फिर से बोलता हूं, मणिपुर से स्टूडेंट किसने लाया अपने पॉकेट लगाकर? आप तो पावर में है ना, आप तो एमएलए भी है। आप क्यों नहीं एक स्टूडेंट को भी वापस क्यों नहीं ला सकते खुद का पॉकेट का रुपया लगाकर? कोरोना के टाइम कितने हजार को लेके आए, आपने एक को लाया? नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट देना बहुत आसान है, खुद के जेब के अंदर हाथ डालकर पैसा निकालकर अपने कम्युनिटी को हेल्प करना बहुत मुश्किल है। मंत्री थे, एमपी थे, अब क्या हुआ? बुबागरा will keep on fighting for his people. Bubagra loves his people and his community. And Bubagra is not a politician. He is here to help his community. अपना लोगों को हेल्प करना चाहता हूं। आपको नेतागिरी करना है, करो। मैं अपना काम करता हूं। और जो कांच के घर में रहते हैं ना, किसी और के घर में पत्थर मत फेंको, नंगे हो जाएंगे। इसके लिए ये मेरा वार्निंग ले लो और देखो मैं क्या करता हूं अपने लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बेलाइनो हम भाई अब खनादी थांनाय चौमारियो चौमारनि सिगां अब जों साख्लायखा त्रिपुरानि गोबांखौ बरफ भाजपानि हाफांनो नायस्लायखा भारतीय जनता पार्टी सामुं सित्रा बरक चिनी कन्स्टिट्यूशन चिनी त्रिपुरासारावहाय जरा बैकवर्ड बा अंडर प्रिविलेज सेक्शन बरंनि जे राइट कन्स्टिट्यूशनल राइट हिंदी बा सिविल राइट हिंदी आबनो बरक गसिया बरक जे त्रिपुरा हास्तिनि जरा बिग्रा बरक
borongni bagui je socio economic development ni kok सबका साथ सबका विकास borok sao किन्तु kubui je samung butang ba je yapri sanan nango abu borok khaya sida phunungnani simi advertise khenani simi kichu samung borok tango chongmani result nukjakha je chung je saklaimani kokno kubui भारतीय जनता पार्टी बाय IPFT नि जे alliance थांनाय 2018 नि चंगमारियो बरक 51% भोट मानो ताकलेनि चंगमारियो बरक 40% मानका 11% बरकनि भोट डाउन अंका अर्थात मेजॉरिटी जे 60% त्रिपुरा राज्यनि लोकरक बीजेपी नो नासलियो अब नुकजाखा किंतु तोफानो बीजेपी टाइप ऐसे हापांगो सकपाइखा बाहाय खाई जे बीजेपी नो नासलेनाय जे बरकनि डिमांड जुदा जुदा जेमन जों लेफ्ट फ्रंट चिनि मेन डिमांड अंका रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ ताई borok jara bigra khangra borokni bagui overall development kitu mothani demand borok bo against BJP borok bo BJP no nasli oi BJP no masendi hne borok awai khlaika kitu borokni demand ongkha BJP no mesenui greater Tripura land ni lama sainani khaidi enkai demand juda juda kitu बीजेपी ने अगेंस्ट मथाबो सुं लैब ताई कांग्रेस बो कांग्रेस चेनखा ए बीजेपी भोट कम मानखा किंतु भोट बागजाखा डिविजन अंखा तिनी ओ लामने बिसिंतई भारतीय जनता पार्टी IPFT भोटो माइनॉरिटी अंफानो बरक मेजॉरिटी सीट तुई कोनो रकम 33 मेजॉरिटी नि किसा काइनई सीट माने बरक सरकार थांखा इनखाय अब जे ओ गवर्नमेंट अब जंखा बीजेपी IPFT बरक जे लुकरनि बागै सामुं काहाम तांगिया खाइया अब नंनाय आं तिनि न लंथराय बेलिनि होते किफेलो आं तिन फुङो थांमानि आं लंथराय बेलिनि बरक तिनि गोविंदबारी मानिकपुर चाकबेहा लंथराय हाथाय सगारगो ब्रक माइमुसाइया तुइक्रुई मलेरिया गैस्ट्रोएंटेरिटिस अंतंगो डाक्टर क्रुई मानिकपुर हॉस्पिटल बंद आगे आमते खरान दिन लुमनाय तुई टैंकारो खाई आबुक जागो ई गवर्नमेंट सागो जे अटल जल धारा 90 चुं पाइपलाइन देखा बड़ पाइपलाइन बड़ तुई बरक तुई मानुंगिया ओंखाय बीजेपी गवर्नमेंट हाथा अब हाफांनि कोनो खबर क्रुई केबो थांगियाव जागारागो बरक शुद्ध उत्सव खाइयो बरक तंथक जागो किन्तु खा खाममाने कगंखा त्रिपुरा मथा बरंनि ताबक 13 जना बरंनि MLA दङ बरंनो ताबक जे 19% भोट मानफानो जों कांग्रेस लैब चुं 36% भोट मानफानो चुं तबक ऑफिशियली अपोजिशन पार्टिया चुं सेकेंड लार्जेस्ट अंगिबो जे भोट बागजागबानि कारण शुद्ध बीजेपी जितिया मथा तबक ऑफिशियली बरक अपोजिशन पार्टी अपोजिशन लीडर मथानी लीडर न अपोजिशन लीडर किंतु ब जागा बरंनि कक ब जागा बरंनि अब खरां जों खोनाया बोले बरंनि आगो ADC बरक तो तबक थांनान नांगो कंग साख्लाय नांगो तामनि बगे रेगा रांक्रुई तामनि बगे रेगा सामुं तांगै वेजेस मान्याव तामनि बगे सिनि त्रिपुरा सामसे रगो तुइक्रुई तामनि बगे तबक जे साक हामनि बगे बिथि वाथि मान्या बरक माइमासे थुइतों इनखाय त्रिपुरा हास्तिनि लुकरंनि बगे फाइनाय बिसिबा बेलाय
खाई चाया कुक अंसिनाई थांनाय बिसिबा जे चाया अंका आबुनि सोलायबो ताबुक ताइबो चाया कुक নাই কারণ বিজেপি তাবুক বিন্দাস আরে আমরা কামনা করলে কি হইব আবার গভর্নমেন্ট আইছি কি হইছে কেবন বরক তাই ড্যাম কেয়ার বরক হাই কাজে ত্রিপুরালনি লুকরক ইজ এ রেজাল্ট যে ভোট ডিভিজন হই যে ভোট বাগজাগই যে বিজেপি এমপি পিপল বরক বা আসুক নাচলে জাগইব বরক তাই হইছে ফাইমানখা আবো চিনি বাগই বেলাইখে বিস্কামনি বাগই চাইয়াম নাই আবনতি নুকজাক্তম Desa kami yang saya tahu bahwa baksa kalau saya macam sabun kok kamu lama kasus itu bagi masa yang mana yang tu. Kamu pi tahu edisi yang saya je kami yang saya village council election ini itu mana. Kamu dah main reason ni kata. না আবো ভিলেজ কাউন্সিলে ভোট যে আবো অংখা তাই গেছে আবো যে আবো ভোট অমিয়াউই ন তুইক্রই বা এই সামুংক্রই মাই মসাইয়াং আবো কও গিয়া আবো অংফান অংখাম কিন্তু ভিলেজ কাউন্সিলনি ভোট অংনা নাঙো কারণ যে কাবি আমসেনি বরক ডেমোক্রেটিক্যালি বরংনি ইলেক্টেড বরকনো বরংনো তুদুলনি নাঙো তামনি বাগৈ বিজেপি নি গুন্ডা সান্ডা শিকক বাংকক বরক সরকারি রাং বা সরকারি স্কিম ন বরক চালং নানি আবো তংমানিয়া যিনি কনস্টিটিউশন আবনো পারমিট খাইয়া ओंखाय आबोबो कारण তিনি তৈকুরিয়ং মানি তিনি লামা করিয়ং মানি মাই মুসিয়ং মানি ইজ এ ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশন আবো ক্রুই আবো কুথুই তাবো নো হেয়ার কাজে আবো কারণ কিন্তু আবনো একমাত্র কারণ ইয়া আবো ওয়ান অফ দ্য রিজনস আবো ওंखाय ও যে ইলেক্টেড বরক বরক তাইবো খরাংতে সেইমান খামু কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি বরক চিনি কনস্টিটিউশন ন চিনি যে ডেমোক্রেটিক রায়দানো আবো বরক বসিয়া বুকুক বাই সাগো ও রাজানি মূর্তি নামই রাজানি বুমুই কিছু আবো এই ছুটি ডিক্লেয়ার খাই কিছা বুখা নানা নাইও কিন্তু কবি কবি খাই ঠিক আছে আবো কাহাম সামুং তাংখা বরক ঠিক আছে আবো সায়াং হিন্দিয়া আবো খালাইকা কিন্তু আবো সিমি ভাই চিনি ত্রিপুরা রংনি হামকারাই রংগিয়া নং চিনি ত্রিপুরা আমচই রংনি লামা তুই ফেরাং সামুং তাই ডেভেলপমেন্ট আবনি যে স্কিম চলে তংমানি আবনো কন্টিনিউ খাইনান নাং আবো তা করিখা মুংসা করিখা উনসা আনসুমং করি শুধু মুগজাগো ফ্ল্যাক্স পোস্টার তাই লেকচার আবো সিমি কিন্তু সামুং খাই মুংসা করি Jasa kamu tiba-tiba hampir berbagai tiba mod kali je kasih kok kasih temen yang bahasa kami kasih dia boleh interlocutor kasih cami apa nanti lagi interlocutor tumang na interlocutor ni meaning tamo বাংলা বাইংখাই মধ্যস্থতাকারী চিনি কক বড় হিংখাই হ্যাঁ মণিপুরের যে সমস্ত এলাকায় ইম্ফল থেকে দূরে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আছে এসকর্টিং করে তাদের ইম্ফল এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এনে রাজ্যে আনার জন্য এই বিষয়ে মণিপুর সরকারের সাথে কথা বলতে হবে তো এই বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম তবে আমি আশা করছি উনি মিটিং শেষে নিশ্চয় কথা বলবেন আমি ব্রিফ করব বাট রাজ্যের মানুষকে এটাই আমি বলতে চেষ্টা করছি যে the government is not playing an active role জনস্বার্থে আরো চিঠি লিখেছি যে খোয়াই জেলার অন্তর্গত অনেকগুলো জায়গায় শিলাবৃষ্টিতে যখন মানুষের ঘর বাড়ি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সমস্ত এলাকায় আপনারা যারা সংবাদ মাধ্যমের লোক আপনারা দেখেছেন আমি নিজে কোনো জায়গায় পায়ে হেঁটে আমাদের পার্টির যারা কর্মীরা বা ভিলেজ কমিটির যারা চেয়ারম্যান মনোনীত মেম্বারদের নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে পরিদর্শন করার পর আমি চিঠিগুলো দিয়েছিলাম আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব
যে সরকার যে কোনো মাননীয় বিধায়কগণ যখন চিঠি লিখবেন বা নিজের এলাকার উন্নয়নের জন্য জনস্বার্থের কথাগুলো যখন উল্লেখ করে চিঠি দেবেন, অন্তত এই বিষয়ে সরকারকে মাননীয় বিধায়কদের জানানো উচিত। এটাই পরম। So I don't know why this culture has been abolished, এবং আমি অনুরোধ করব এবং সরকারের কাছে এটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই বিষয়ে সরকার অতি সত্বর পুনরায় যে সুস্থ কালচার, বিরোধীদেরও একটা ভূমিকা আছে, ওনারাই বলছেন যে আপনারা দেখান যে বের উন্নয়নের কোথায় দরকার, আমরা দেখাতে চেষ্টা করছি। We'll cooperate with the government wherever they want us to show where development is required, এবং যখন মানুষের দরকার পড়বে, প্রয়োজন হবে, মানুষের স্বার্থের কথা যখন বঞ্চিত হবে, তখন সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা মানুষের জন্য লড়াই করব। ধন্যবাদ। So, in that case, what is the scenario? The government, when we ask them, they say the scenario is not that. Even I asked the question that there are 3 states at least I know who are already evacuating their students. The government said there is no official report of any state evacuating the students, but today we have seen some of the states already received their students. What is the scenario right now? What is the threat perception over there? How panicked are the See, one thing Honorable Chief Minister must understand. Sitting in Agartala or sitting somewhere in this state, we cannot feel the heat of communal violence in Manipur. We must have to understand the pain and the fear and the problem of safety and security through those people who are presently in Manipur. If there is no problem and if there is no heat of the communal violence faced by the students, why the students will call their parents? Why the parents will approach to us? Maybe no one has approached to Honorable Chief Minister directly, but it does not mean that there is no problem in Manipur. As you say, already 3 states they started evacuating their students. It is a wise step actually. Should we wait? আমরা কি অপেক্ষা করব যে something happens there, then only we start evacuating our students? Wiser step will be before any accident takes place, before anyone dies. আমাদের কোনো স্টুডেন্ট মারা যাওয়ার আগে তাদেরকে ইভাকুয়েট করার প্রয়োজন। And that is why, to bring the attention of the government, I have called this press meet. এটা আমাদের কর্তব্য। If I was in his position, probably 2-3 days back itself, I would have taken all these steps. এটা তো আমি ব্যক্তিগতভাবে স্টেপটা নেব না। The government machinery, secretaries are there, transport department is there, government is having money for all these kinds of situation to take it. So I'm not going to spend, or Honorable Chief Minister is not going to spend money from his own pocket or his own salary. It is a matter of instruction and to make a strategy to combat this situation. So I think whatever Honorable CM is telling, I think I cannot agree personally. Before anything happens, we have seen so many churches, so many villages are under attack, under fire. In this situation, we cannot allow our students to be in Manipur. Till this situation becomes normal, they should be evacuated and they should be brought back, they should be handed over to their parents. That is why government is required. যদি আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য নিজেরাই সব কিছু করতে হয়, তা সরকার কেন দরকার, কেন মেশিনারি দরকার? তাহলে কেন্দ্রের থেকে যে টাকাগুলো আসছে স্ট্রেট ওইখান থেকে প্রতি ঘরে প্রতি অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে দিলেই পারে। কমিশনারের দরকার নেই, ডিজিপিরও দরকার নেই, মুখ্যমন্ত্রীরও দরকার নেই, বিরোধী দলনেতারও দরকার নেই। যা বাজেট হবে 26,800 কোটি টাকা ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ফ্যামিলি দিয়ে দাও সবাইকে। গভর্নমেন্ট হ্যাজ গট এ রোল টু প্লে। এই সমস্ত সিচুয়েশনে কোনো ব্যক্তি বিশেষ এটাকে সমাধান করতে পারবে। Here is the role of the government. So I appeal to the government
government should take immediate action and should take step to bring back the students. Thank you. One of the elected representative of TTADC has taken a step. I have seen in social media some 50 students are being brought back. So how do you see that? Yeah, see, this is what is the positive step. If TTADC, much smaller administration than the state, TTADC's budget is only 2% of the state budget. If TTADC can do this, why the state government is sitting quietly? It means state government is waiting some students to die there and then only they will take this step. This is wrong. Honorable CM himself is a doctor, well qualified chief minister, among the chief ministers in the whole of the country, and I am sure after this press meet he will definitely take the फंडिंग का प्रॉब्लम हेल्थ का हमने बहुत स्कीम उठाया है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक फंड रिलीज नहीं किया। उस विषय में बात की और बहुत चीज़ था, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बड़ी बात है, तो बहुत चीज़ों में बात। तो कल इंटरलोकेटर आने वाले थे, क्या आएगा क्या या नहीं? कल नहीं आएगा क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम है। मणिपुर में सिचुएशन बहुत ही खराब है और इंटरलोकेटर से भी मेरा बात हुआ है, सीएम का भी बात हुआ है और वो थोड़े दिन के बाद आएंगे। उन्होंने मुझे 2 बार आज फोन किया और रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा समय दीजिए क्योंकि मणिपुर में सिचुएशन बहुत खराब है और उनको इमीडिएटली मणिपुर जाना पड़ रहा है। जैसा मणिपुर में थोड़ा सा शांति होगा, वो अगले हफ्ते या थोड़े दिन के बाद आकर हमसे सबसे नॉट ओनली विद मी, विद ITF, विद समाजपति, विद मुख्यमंत्री सबसे मिल करना। और जो 10 तारीख को आप जाने वाले थे होम मिनिस्टर से मिले? 10 तारीख को होम मिनिस्टर से दिल्ली में सीएम साहब का डायरेक्ट मुझसे तो अच्छी तरीके से बात हुआ, लेकिन मैंने अपना स्पेसिफिक पॉइंट रखा है। सीएम साहब ने कहा है वो जैसे कि फाइनेंस का हो या जो बिल्स गवर्नर के संग पड़े, जो हमारे ट्राइबल कस्टमरी लॉ बिल्स हो, हमारा जो भी बिल्स गवर्नर के पड़े वो बात वो अपने चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी से बैठ कर बात करके मालूम करेंगे कि स्टेटस क्या है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है सर Neither Roman script এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট এই বিতর্ক অনেক বছর ধরে চলিত যখন MLA নি ফাইখা বিরোধী দল নি স্বীকৃতি মাখা বিধানসভা Tipra Motha is not only state recognized political party, also Tipra Motha party has been recognized as the opposition party inside the assembly. Our bagino sugno birudhi dolonata post bo ma rakha hai. Mono opportunity manei kok borokno roman script by sinjani bagei ত্রিপুরা রাজ্য বিশেষভাবে চিনি তীব্রাসারক দীর্ঘদিন দাবি খাই দমন আ দাবিনো উত্থাপন খাইনো সুযোগ মান খাইছে সারা ত্রিপুরায় সারা পৃথিবীও যারা ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া তমের বরক স্রাই স্রাই খাই নুকা রোমান স্ক্রিপ্ট নি স্ট্যান্ড ন রেনাথনি তীব্রামথানি one and all MLAs including the leader of opposition and 12 other MLAs, chini bhumika tam chung hunukai. Chung dabi khlaika je Tripura o kok borok subject college thum, university thum, school thum, eba CBSE, ICSC bibhinno secondary education ni board question paper ebong bini পঠন পাঠন সিনানিতে পড়েনানি দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই নমতো কাইসাংনে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তাই কাইসাংনে বাংলা বাংলাকে আমরা মর্যাদা দিচ্ছি বাংলা হরফকে আগেও মর্যাদা দিতাম এখনো দিচ্ছি তাতে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই বাংলায় যারা পড়াশোনা করছেন তারা বাংলায় লিখবেন বাংলা স্ক্রিপ্ট যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে
বিশেষভাবে সিবিএসসি ও যারা পরিতঙ্গের, let them write in Roman script, কারণ বাংলা মিডিয়ামও তো পড়াশোনা খাই। সো যুক্তিগত দিক থেকে আমাদের দাবি ছিল যে বাংলা এবং রোমান হরফ দুইটা স্ক্রিপ্ট সিবিএসসি হব প্রশ্ন শিখাত। বিধানসভা আলোচনা নিয়ে দৈত্য মার্চ মাসনো আলোচনা খাইছে, শেষ 17 তারিখ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানো কাছে চিঠি রেখে এজ এ লিডার অফ অপোজিশন বাক্সা নয় এলওপি লিডার অফ অপোজিশন আং বনো কাছে চিঠি শিখা চিঠিও আং সাইমান নামু চুঙ্কা যে we had a discussion in the Assembly House on 27 March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. As per the discussion in the House, you were to instruct this Director of Secondary Education to write a letter to the CBSE authority on this issue. Both CBSE ni authority no chithi Sri Jano Grinan Bagi secondary education ni director no instruction nan ko. Kindly let me know the status of the matter from your end. 17 তারিখ এপ্রিল নিয়ে আমি চিঠি জবাব রেখাবো, মোস্ট প্রবাবলি 4 তারিখ মেও ভাইয়ে ফিয়াবা আর লেটার আনি ইয়া ভাও ক্লাই ভেগা 8 তারিখ মেও আছে ক্লাই ভাই মানে পরে না অনেক সোশ্যাল মিডিয়া নি গ্রুপ আন শেয়ার ক্লাইকা এন তাবু ত্রিপুরা গ্রাঙ্গি আগুনি চর্চা আরম্ভ হয়েছে। আর লেটারও এমন বয়ানসি রহর কাপড় যে সিবিএসসি কর্তৃপক্ষ বাই গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা তথা চিনি সেকেন্ডারি এডুকেশন অরনি যে ডাইরেক্টর বিবিসিংহ যে আদান প্রদান লেখা আ প্রতিলিপি তিনি আনো ত্রিপুরা সরকার নিঙ্গে খরচা টাংফাং Directorate of School Education ni khorcha pai more letter no reclantan beketa. It has come from Central Board of Secondary Education Nidhi Chibbar IAS officer but chairperson Central Board of Secondary Education 7 তারিখ ডিসেম্বর 2022 নি মোচি চিনো বড় রাজ্য সরকার রেফারেন্স ইতিমধ্যে ডক্টর মানিক সাহানি লেটার মানমানি পরে আং দাবুক বিনি লেটার ন উত্তর নানি বাগে প্রস্তুতি আঙ্গ নাহার যাক ডক্টর মানিক সাহান লেটার সাকা যে কোনো স্কোপ করে সিবিএসসি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বাগে মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট কোয়েশ্চন পেপারস নামনানি পরক গসিয়া and that was the letter in 2022 or last line of CBSE থেকে সিজার board will not be able to conduct examinations for one language in multiple scripts mono background nambi Dr. Manik Shah ano kaisa chithi log social media man. Now my question is, I want to tell Dr. Manik Shah who asked CBSE authority that multiple script Kokborok subject ni proshno snamdi sabasanka baite. We wanted only in by script duita script snamdi multiple mane 8টা 10টা 16 100টা script snamnano no multiple. If I understand English correctly, the word multiple signifies it is more than 2, more than 3 no try script in man by script ke duita script single script ke একটা script तीन ni odi इंग्लिश multiple script ni kop hai. So I want to tell Honorable Chief Minister, let us not get satisfied
merely based on this letter that multiple script of organ. Who asked them for multiple script? We wanted only in 2 scripts. Very clearly. One is in Bengali script, the other one is in Roman script. Amonosan clear marking. Plus, ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহর অবগতির জন্য আমি বলছি, ত্রিপুরা রাজ্যের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আজকে নয় বহু বছর ধরে 2টা স্ক্রিপ্ট প্রশ্নপত্র অঙ্গিতম। উনি জানেন কিনা জানি না। নিনান ধানিয়তম যে কলেজও যে 3 ইয়ার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম নি জেনারেল সেকেন্ড সেমিস্টার 2019 और कक बरक सब्जेक्ट नौ कैमरा बसकांग आं पुरुबानो और बांग्ला स्क्रिप्ट बाय रोमान स्क्रिप्ट 2টা बाय এই হলো রোমান স্ক্রিপ্ট, এই হলো সেই বাংলা স্ক্রিপ্ট। 2টা স্ক্রিপ্ট বাই নো और প্রশ্ন হইতো ইউনিভার্সিটি হইতো স্কুল হইতো और कक लबनाय रामचरण देवबर्मा बाई सीजाक लामाओ फायदी आमो अरब आइकेन सिका कगलबनाय रामचरण देवबर्मा बाई सीजाक लामाओ फायदी कगलबनि बिसिंते बल आमानि कगनो साजाका बेंगली स्क्रिप्ट बाई ब कगनो रोमान स्क्रिप्ट बाई आइकेन सीजाका ताबु डॉक्टर मानिक शाहनो जों मा सानाय যে মিয়ারলি মোট চিঠি কেছে দুর্বল একটা চিঠি রিমা পাই বজে ত্রিপুরা রাজ্য নি হাজার হাজার কক বরক পরে নাই তে কক বরক নো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ছাড়া সেইমায়া আচারের উনি ভবিষ্যৎ মানসুকিয়া বড় বড় ডাইরেক্টরেট অফ কক বরক এন্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে চিঠি রহরজাকা আরো সিগা বড় যে গভর্নমেন্ট ডিসিশন অনুযায়ী বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই নো খ্লাইজাক ওয়াই गवर्नमेंट डिसीजन बुफुरुं का बो नोटिफिकेशन रिजेक्ट खाइते 2019 20 21 22 3 পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার নি নিজস্ব কলেজ স্কুল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত 2টা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন নিত কোনো বিতর্ক করে হঠাৎ কে বুফুরু ত্রিপুরা সরকার ডিসিশন না কা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিমিনার প্রশ্ন খাইনি Mr. Chief Minister, he should know about this. এবং আমি বিনি জরাসান নাই বনা মালাই নাই ব্রিফ খাই নাই আমি কাউকে ছোট করার জন্য খাটো করার জন্য কাউকে অপমান করা এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। উনি যদি না জেনে থাকেন আমি যাব ওনার কাছে, বিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নাই ওনাকে আমি বুঝাবো ব্যাপারটা সমস্ত দলিল দেওয়ার। ওনার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ত্রিপুরা রাজ্য বহু শিক্ষিত লোক শিক্ষাবিদ অর্থনীতিবিদ রাজনীতিবিদ ত্রিপুরা রাজ্য তম 1979 যখন কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হবো আজ ওরা আই স্টিল হ্যাভ দি বিল দি ত্রিপুরা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1979 পুইলা কক বরক নো সরকারি ভাষা হিসাবে और एमएन क्लाइजाका যেখানে যেখানে বেঙ্গলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আর বেঙ্গলি এন্ড ককবরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ সিজি নেই অ্যামেন্ডমেন্ট ক্লাই ককবরক 1979 থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে গেছে সরকারি ভাষা এন্ড ইন দিস বিল অ বিল ও আইনস নাম কোনো জায়গা সিজা করে যে ককবরক ন বাংলা হরফ বাইনে মা সিনে কোনো উল্লেখ নেই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এই বিলের মধ্যে কক বরক ভাষা লেখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো লিপির উল্লেখ নেই, কোনো স্ক্রিপ্টের উল্লেখ নেই। তার মানে ত্রিপুরা রাজ্য যারা কক বরক শিখবেন, যারা কক বরক বলবেন, যারা কক বরক শেখাবেন তাদের একটা মতামত নিয়ে লিপিটা তৈরি করা যাবে। আমি আরো বলছি ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে একটা সার্ভে হয়েছে, তিনটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন, পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন,
আরো একটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে। তিনটা ভাষা কমিশনই বলেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কক বরককে সঠিকভাবে লিখতে গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট সিনিয়র নাম নাই, এটা তাদের কনক্লুশনে ওনারা এটাই বলেছে। এবং কলেজও যে সার্ভে রিপোর্টটা আমার কাছে আছে, প্রত্যেকটা কলেজ ওরা যেভাবে সার্ভে ফুনুক জাকা ওয়ান্ডারফুল ও সার্ভে ও কাসাই বেকার যে ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট অরনা সার্ভেনি রিপোর্ট বিজাক নর কাম কে পরীক্ষা রেখে নর বেলায় এখনো ক্লিয়ারলি বুঝি নাই যে বুসুদ বড় ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্ট ইনকবাই নাই আবার উল্লেখ খাইজাক তোমায় ओके अब नो और दस्तावेज नो एमबीबी यस अब मान का एमबीबी कॉलेज टोटल नंबर ऑफ कॉक बरक लैंग्वेज स्टूडेंट 536 जन मो 21/22 सर्वे opted for roman script all 536 students बरो roman script by সিনিয়র পক্ষে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট 0 বিবিএম কলেজ আগরতলা 622 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই 0 ওমেন্স কলেজ আগরতলা 910 জন বড় বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে। এইভাবে জিডিসি গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ খুমলন 1274 জন সংজাকা এবং বড় যতন 1274 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে শাখাইছে। একমাত্র একটা কলেজ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ শান্তির বাজার 113 জন ছাত্র নিবিসিংহ 4 জন অর্থাৎ 109 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে 4 জন স্টুডেন্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে। ত্রিপুরা রাজ্য সর্বমোট 22টা কলেজ 9147 জন ছাত্রছাত্রী সার্ভে ক্লাইজাকা তার মধ্যে 4 জন বাদ দিয়ে 9143 জন ছাত্রছাত্রী রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায় দিয়েছে। ও জায়গাও বসাওই ডক্টর মানিক শাহ যদি সাকায় যে বাংলা স্ক্রিপ্টেই লেখা হবে, we don't agree, we have to take the issue for the interest of the students, next generation, যারা ভাষা না পড়ে নাই সেই নাই বড় স্বার্থে, এটা তো কেউ স্বার্থ ক্ষতি হবে না। যারা বাংলা দিয়ে যারা লিখতে পারবে লিখবে, যারা বাংলা দিয়ে লিখতে পারবে না ওয়ানসান অবশ্যই গোবাংমা তো যারা হোলি ক্রস স্কুলে ডন বস্কো স্কুলে পড়ে বাঙালি অথচ নিজেরাই বাংলা লিখতে জানে না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই খবরগুলো রাখতে হবে। বাবু মা সিনাই আমি মন্ত্রী হয়ে গেলাম, আমি বিরোধী দলনেতা হয়ে গেলাম, আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলাম, মানুষের যন্ত্রণা মানুষের চাহিদা আমি বুঝতে চেষ্টা করব না, আবার একটা সরকার দৃষ্টিভঙ্গি সরকার হ্যাজ টু টেক দি ইন্টারেস্ট অফ দি পিপল ইনটু অ্যাকাউন্ট এন্ড টেক ডিসিশন এন্ড উই হ্যাভ টু রাইট অ্যানাদার লেটার। আমাদের লিখতে হবে, বলতে হবে সিবিএসসি কে we are not demanding for multiple script, we are demanding only in 2 script and that is possible. মিজোরাম বাহিত বড়োল্যান্ড বাহিত সিবিএসসি সেখানেও প্রশ্ন করছে, রোমান স্ক্রিপ্টে করছে, দেবনাগরীতে করছে, বাই স্ক্রিপ্টে করছে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন হবে না? ও প্রশ্ন রয়েছেন মা সিন্নাই এবং মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দল রাঙ্গিব কাইসা মেমোরেন্ডাম রেনাই লিখিতভাবে বিন বুঝিনানি। আমি জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের বিপক্ষে যাবেন না, উনি রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা, রাজ্যের মানুষের যে ডিমান্ড সেই পক্ষে উনিও যাবেন, কিন্তু খবর নিয়ে সঠিকভাবে জেনে চিঠিগুলি যেন উনি লিখতে পারেন দপ্তরের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। এবং বিভিন্ন যারা সংস্থা তন্নের যিনি এনজিওস ককবরক হুকুম মিশন ককবরকতেই যারা চর্চা খাইত নাই বিভিন্ন সংগঠন, আমি ওনাদেরও আমন্ত্রণ করব, ওনারা যেন এগিয়ে আসুন। মুখ্যমন্ত্রীর নজরও যে তিনি ত্রিপুরানি বরকনি
लम्हो की गुजारिश समय निजे सानमुं नायमुं रोमान स्क्रिप्ट मनोज चालू खालायनो बागै जतन माचाय दालाय बेलाय abo ki ang kharoksa tiprasangni ang kharoksa dabuna answer na nangnai na so full tiprasaro abuna answer nanna abo noron wansukti tiprasano ma wansukti khlai tabo je nini je question je issue no te je tabo salen thangto abo wansuna nango sini borok tabo kok sana thanga khai politics ni kok mang phai bu hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field site je kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Tripura thakai CPM khayo ni a politics yo all politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right no te sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai jes ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusu abu ban ang siman tom khai tini nang kharsa hasten mantri ngai tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasano nang bangla ban ma sina hina impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3.92 no joton nadi ara close 1 2 3 4 5 ni kaba mato nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorsa nang lama kita tihin tohon bono mo kali khaimenya nung tini ST khorsa no amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai menya khala kya keno bini against direction complaint case khlai manu tam bo kharsa hasten mutrin tongoi jeng 12-13 lakh ko borok sanai bo sabo je jungno bangla script ma sine ni sanai thajin nung saw ko ma social media ro borok ko ma salai to hai to a social media o salai tamong nai je kunung khakeno social media phai jotono salai hing oba himang nai oba himang la oba haisma khainai jotono salai ken sabla khainai sa agisin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act no ko sentini 2013 ko sin borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family wo judino 100 kani jaga to thakai a jaga o nung sarabar kani bisi tongi mangla ake no slamu tongka abno sung choba khama ang to kabama ko bo saka 2500 sung memorandum samin khamin yaglo hang strike to ka abun yaglo sung tini abo success nu phunu nomang
hunungmanu awara newspaper tongo arawa kabama khati tongo joint action committee ngai the land reform act aw khaipuru busu joti publication ka bahake publishing ka news ho ang approve hunai jengma khane ken mas ban ground phai ke khane kilbe samo nga sabna jengma khane sab ka khane sabna ka ma khane nisa similarly tabo o borone roman script ho phai jeng japro 2002-3-4 नाइकल कॉक पेन होने न्यूज़पेपर जों पुइला प्रुखा वीकली हाते बासा कायसा काटिखलाई जों प्राय 3000 जों नाइकल कॉक पेन पेपर न बरफ बिखुमरा सरकारनासो जों तिखलाई आंनिजि थाङै बाबु ताउसिनि बांकुन्द्रि बरफ दं ता दिलीप सं दं जों बाहायके दायहबर सं जेनि डॉक्टर मोहन ससुन दं आबनो जों थाङो कायसा नगो बागो आहायके न रांग थुथुम खरनिखाय आफुर हुनु सुनो तमो मुखरा बुरा न कक फोरोंथाय मुखरा बुरा बुआ का थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सानो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट सियो हुनका हने सब न तामो सिको परिमाण से का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आज रगो आबा हकेसिन बर खासिया खाइ बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो चिरो खका इवन जे बल सिनेर ब बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो सिने सुरुंका इवन चिनि एक्सएमएल डॉक्टर अतुल द बर्मा ब हाइनो 1988 दांगना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सिया कुइ अवार्ड प्राइज को मनका ते प्लस ब borokni tamo chairman tongfurubo bangla script by no master ni bon CBSE budong mo sine suru khaikya anga tabu nang sabno dusunai nin borose kemung tong ka do tabu ni generation ka juda agi bom TSS TUJS मुए साले साले नि सिरि खोगै तेने रोमन स्क्रिप्ट जों दाय खायदि जों तेने केम नेगेट छया बेंगुर स्क्रिप्ट नेगेट छबया जों तमखे जों तामनाय जिन कक बरनो रोमन स्क्रिप्ट सिखे जाकाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे क्वालिफाई तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखनो रोमन स्क्रिप्ट बेंगेखाय बरते काहनका परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनि चिन कक बरनो तेम सागा कुजगो दिसाना हंकाकाय जों रोमन स्क्रिप्ट नि मासयु ताम बागे हंकाकाय कक बरन दिसाना हंका हुल पृथ्वीबो हुल वालो ताबो तामो नि ब्रिटिश फाना फायका यूरोपियन काट्रिन फाना फायका नि लैटिन अमेरिका नि हते फाना फायका जे बरक कक बरनो संना थाकाकाय जगत बरक रोमन स्क्रिप्ट बलदे बरक माने तंतों alphabet tam abo saina man tong kai ko borongno boro automatically boro serni manu kiba boro saibo manu poribo manu enga tini bangla re judun sikya kai puila a bangla sabama wan je box kane wan saban bangla man anda apruse nang tini puila ko suna ka bangla smas nai bangla serng man porsa ko boro serng nai engkai bangla sereng pakai ke boko guru sereng na musuh bini ki jora to bini ekta time period tong na engkai interest tong na engkai tini ane kogna sana ne script sudah thang tini malik saha handi tini jekuno government no jatong jekuno baru handi baru sabo ane kogna tam ke sine aba ane baru sedih sana bin thane kuno right kiri बस सरकार चीफ मिनिस्टर तिनी त्रिपुरा गभर्नमेन्ट नि चीफ मिनिस्टर पान तंथो बिनि थाने कुनो राइट करे जे अबाके सुने आबन बागे ताबना घाटे जों बिनि अगेंस्ट मालिक साहान अगेंस्ट जों एस्ट एट्रोसिटी केस जों खालायबो मानुता हायबानो आन्डारस्टैंड बिसिङो डायलॉग नि बिसिङो
डिबेट नि बिसुङा जुदि न ब अबनो विथड्र खाइ आव बरं जे डिमान्ड खाइमानि आबनो जों मार नाय हनै ब जुदि न सावै इंया का काय अतिप्रा हावो तिनि क बरक रोमान स्क्रिप्ट सैनानि साबा कासुइमान आबां तिनि चैलेंज खालामा केम कासुइमान गला तिनि बांग्ला क बरक जगते जेफ्रु ऑफिशियल डिक्लेयर जागो क बरक बाय बेंगली ऑफिशियल लैंग्वेज हनै आजरा कुन स्क्रिप्ट न क साजा तो कुन स्क्रिप्ट न क साजा करे का बब्बा जागन तुबि तिनि स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट न मागन हनै साका nga जों तिनि साका जे वान क साना न तिनि क बरक जेस क बरक से जेस का न मा सासे न रमनि एडिसी सरकार जे वानि चाइ खाइ तंना र तिनि क बरक माने मा सानाय क बरक रोमान स्क्रिप्ट न मा सेने हनै लाहा ताम न बरक तिनि एक्सेप्ट खाइमन बरक एक्सेप्ट खाइमैने nga तिनि जों एवरी मान लेव जों ट्रेडिशनल ड्रेस मा कानाय हनै का क बरक ड्रेस मा कानाय के बर काना कानो काइनिया बर खाइ तंगमान सततां बे खाय तंगमान आबन बागैना आं तिनि सानमु सङो चिन्ति प्रसारनो पागुनो वान सुखसिदि नों ससियेल मीडिया सिमि आहाय आहाके सैलाय जों होलाय दङ कासे कासे दुसुनि दङ बासा तंनाय तिनि को एन्थन देबो क साइ दङका उल्टा पुल्टा हनै कुनाय ब तंनाय केतु तिनि सानमु सङो तिनि जों आहाय बरर जे तिब्रा सार जे दखन सामु खाइ तंनो बरर करि हिंगा काय तिनु जे बरर कुलनाय जाजा गेंनाय हनाय आबर तिनि और क बर साइबो गथां तंनो नागला हायनो कमर थागो जेमन टाउन यार क बर सायावै वाने क साना सुरु खाइया ए पाहारेला तुमरा बारि गेले आवाज जन ओइ गुरियामा ते एकटु आनो हनि सासे बेगे रहनानि आ बरं तिन बे कमाय थांमैया आबुन बागैनो तिनि सानामुसु सिन बरनो तिनि अब खरसा पॉलिटिकल लीडर बिनि सामुसिमिया तिनि खरसा एक्टिविस्ट का बिनि सामुसिमिया तिनि खरसा राइटर का बिनि सामुसिमिया तिनि क बरं मुमेन्ट फर क बरं बिनि सामुसिमिया क बरं साहित्य सभा बिनि सामुसिमिया तेसन सिमी सामुयाबो जत इंडिविजुअल एवरी इंडिविजुअल तिप्रासा दफरनो सामुङमो तिनि अबा हाके बतिनि सही तिनि को जोंना अबा हाके राजो चीफ मिनिस्टर नि क्वार्टर जों गेरु खायना नां तिनि बसाबो 12-13 नखर तिप्रासा न उनको निजिनो कबरनो रोमान्स के बसिना हने बाटा खायने केनु जों खायमेन्या ताउन बागै चिन बर थानसा करै जत जागन जों पॉलिटिक्स थु हुनि साव किन्तु आसलनि पॉलिटिकल राइट त नों थुना जोंनियाखौ पॉलिटिकल राइट चिनि आनि कगना तामबो सिनाबा आनि राइट दैट इज माय पॉलिटिकल राइट आबुन बागैनो को वाना मासिसा जे चिन बर क बर रोमान स्क्रिप्ट हामजे हनै बागले स्क्रिप्ट हनै साइ तंना र तिनि नर साउ आ चिनि द पार जों गमना केन न तिनि बन काजा न नों नाय दङ बन काजा न नों प्रेक्टिस खाय दङ बन सामु साइ दङ बन क सामु नों क साइ दङ ब सुमन नों सि दङ का नों ति प्रसा नों बाहाय के नों तिनि नि अधिकार नों मानाय नि अधिकार मान्या आगाबो नुका गोरिया फुरु गोरिया तेर खाय हुने जों तिनि दगा चौधरी हो ह तिनि वारजि एमएलए न तिनि खामप्लाय याकुं बेरावै हा आगे खाय तैलुयै याकुं सु बरखां सयके चिनि तिप्रा सार कि जों बुनियाकुं सुनाया किन्तु आबनो न अमसिसिने कालचार आहाय आगे दिन जों नुगै फाय वाजनि याकुं सुसे ब्राह्मणनि तामो याकुं सुसे याकुं तैनुमु बरखां सयके बुनि मल्ला बुनि सित्रा आबन हंगाय जों नंनाय चिनि सबिव चिनि थुयो जों आबो दाल बुनाय बो आहाय जों तिप्रासा काहनु धर्मफु ताम धर्म चिनि
जों त्रिपुरा धर्म तामो जों हिन्दु बया ख्रिस्टान बया जों तामो जोंनि हाबु हाथाय दैमा दैसानो जों खुलुम फाइनाल बरंबाय दं फाइनाल दैमाबो दं फाइनाल जों वाथब खाय के मताय खाय गलिया खाय मालिमारा हुनै जों नंगौ गोबां मानसि नंगौ दं जों आबोनखौ जों रेसपेक्ट खायलियो अथच बयनि काजानो जों रमनानि सुरुखा आबोन बागन तिनि आबाहाय खायमा बागन तिनि आनो कक बरक आं तिनि सेजागै दं आबोन बागन आं तिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मास कियानो बांला स्क्रिप्ट बाय मास कियानो सितो अबन तिनि को जगते बुबगरा गबनानो सामिट खायके मेमोरियल न रोमान स्क्रिप्ट बागन आपु अनरबा हाइकोर्ट समोटो केस खायके के खायबा परे आंगासन एडवोकेट ने आं एडीसी पार्टी इनका एडीसी ने आं एपीआर इनका वन हजार खबर खरसा को बरक 12-13 रको को बरक साराय ताफन स्क्रिप्ट ठीक करी बाकी नि कॉग्न न प्रोटेक्शन खाइना नाय आबन यागलो हंगा का हियरिंग मांग तिनी गवर्नर सरी हाइमिया गवर्नर फाइमिया गवर्नर रिप्लाई दिमिया हमा दुई बस लाई थांका आबन यागलो पैसा एक्टिंग ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस तंपुर हंगा केनो साका अरे इमीडिएट अबनो जों सल्व मा खाने ताउन बागै तिनी अबा हाके स्क्रिप्ट करी खनो बोलखाय त्रिपुरा गवर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गवर्नमेंट बोलखाय सेंट्रल गवर्नमेंट सम्मान खायका सेंट्रल गवर्नमेंट साका इट इज नथिंग टू डू विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज द स्टेट चार्टर स्टेट से दी सम्मान ना बनो जोंनिया हनि साजा आबो करे हंकानो ऑनरेबल को एक्टिंग चीफ जस्टिस ताउन बागै जिनि केस सुनते कंटिन्यू खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायगा कान संका अम ताउन बागै उदर देने रिजन ना अब कोर्ट से केस करना कोर्ट नीसा अब तक कुनो रिजन नंगे जों डिस्प्यूट खायका अब न तैनो जों ताइसा आफरो सावो जे न खायना न खायति न हेते न लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो अब न तै ओंखाय तब जों कोर्ट माध्यमिक थाना दालंग माध्यमिक थाना किंतु तिनी त्रिपुरा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला रेपान सुइतो जों बयकट खायना आबन यागलो हंगाखाय जों प्रेसार खायना तिनी बरक सभा खाय से तिनी तेलंगाना है झारखंड है छत्तीसगढ़ है के क्षेत्र स्टेट के खायनाय मान हंगाखाय तिनी जों तिनी कक बरनो स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खक जों तिनी मानिया तान बागै जों खाय जत जागन फेलियर कायसाना कारण जों थानसाय बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताई दलसा फाइ सापायनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दलसा फाइ सापायनाय देवनागरी से कहा इनको बर थान सोके जतन सेल्फ सेंटर जों चिन्ति प्रसार निजी जे हामजामन सिमि जों साना मुसुं दिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजाना बर सार नंबर जतो इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जगह सैनाय सीबीएसई बोर्ड न सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय बतिनी निजिनो बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साइट में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बो रोमान स्क्रिप्ट सिबले बके बांग्ला सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय दिन ताकसे साना मुसु दिन थाइसेमनो उदयपुर कोर्ट ने फाइल सफाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बोरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 कानि तो बिनि नकथाय दालान दं आरो नक तांजा आबोनसे तिनी खरसा थुरसा केस खाय बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि रो जागा पाय माफु हनै कायसा 67 ना दलिल फुनु ना दलिल फुनुगो बर
केस हारि थाका केस हारि मन परे के बरो ताबो अपील थां nga abon sata sata execution thang jaw ka execution tamuka tabu commission chongre jaka commission of inquiry khaika ko khaika tabu ka ka execution jeng sela bong no ar no no khlai nok sbaya koi or thusar no jaga de sela nga tabu 67 no jaga payu nang tabu laga nini prosa khaimenya ko তাই জায়গা দখল খাই মাইনা কো তাও 2019 से आबा के फाइ बर क्लेम खाइ बर नाइन फाइके तिनी बर मिया नर फाइके गां साका ठीक আছে आं थाना फाइनो आं मा तिनी बिकास थाङो जों फाइ ऑब्जर्व खाइनो तां nga जों थाङै अपील कोर्ट को थाङै जों रेकर्ड नायखे एक्जिक्यूशन नि जागा जों थाङ रेकर्ड नायखे nga जों नु पाइखे जत ताबो आइन मते के 69 निजे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसापन जेकुन बरो एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा काका आ जागानो संताय रेस्टोरेशन खाइमानिया आ जागानो सं याफान मारना आबा हाय आइन केतु 69 नि परे आबो ताबुनि परे हंकाय नंताय without permission without kuno 187 ni je section mutabik ni land unino transfer humen nga tini o borro sirisi tinsi tongme phaile ro bu pha phale kon thaga ne se dolu ka hunuge bor jaka mansi de ne bor tini education mute nga na kya bo ukil loki बल जे उकिल हार खाम ठीक देखा के खाया जों फालतु घातिनि तिनि परि नायले बाकेले नों 67 नो दलिल फुनुगो न ताला म्यूटेशन खाइमिया पोजीशन म नायमेनिया नों बाके बिन बुफा थैथा का दुहा सद बुफा फाल कलाम थाका नों ताब केस खाइमा बसा आमस बरसे केस हारि जा न जोंवालो नुगु तो ए अबा केस गोबामा तंगना आंसिन ताको बुरो सानो मुसो अब केस त का न केस चैलेंज मा खाइना ता 16 तारिख नेक्स्ट डे जों केस त 3 दिन सिम का सिन याबा हेनोवर का बंग जायदि नुके वानजि तंगनि बो नो अब्जर्व सदे छले यापा ने ता अब हा सिचुएशन चलि तो ने ताउनि नि कम न सुतु से बुनि द फासे न जबरदस्त इनफोर्स खाइसे बरो ना कुन आइन करे ani decision ani sungna narna ani choice ani sungna narna bini kuno right kri suno bengali script by mas ne hene impose khainen ba abun bagai ta tini sanamu subu ni kogna tamna bagai bongna kogo sini ni dagi to ekta na ka nung bini script no bai nongi ne accept ma khaye second ntai nung bini kogna surung thangsene ni kogna ka kogi thangsene kal ni ko ulur plorung thangsene karan chaudhary ang to wan ko ma fan chaudhary sine thaga kase belung script by kaham ka chen exact pronunciation khai spelling se khai manya even antinan mung anthony hone sine thaga bui rasa ka rabo anthony bangladesh ki babe legbo nga to saimenya ki babe lekhi ta ami jana dai abor aga buibasa na khani anthony explain ke amoni bangladesh rokno buiban ja agaban bagane kun jagawan ani mungno bangla basine thaka bono abdul satubui angna ka angno sirena ya bakara sankar ga bangma khai na thik abon bagane tini sanamusu tini manipuri rok maite rok age ekdin thata bon script kamai thang bor bahina bengal script ba suno shuru khai ulaka bor saiman ka bon script no bor nutu mati khlaina hanu kubida bor script lamoi tikhlai tabu textbook newspaper media jotan bongni script un salamoi bor tabu umi thangmai ke busu balka bor script salaman kentu bor joton thangsa khoroksa intellectual sri phuno ka obose sini joton university bongni manipur university manipur bor gosina baikhe kedifin tiprasa hangkai gosimaya khorsa tabu rumal student gosima garai ko nin script salamun ning sana thaka ba nokaba khani
tolabai tafat ahai sing thalai abun bagino tini sanamu sugu ustura organization huntu je pori tongai rok no huntu noro ajagao noro bangla ba phano course khai to noro roman script se sifnu যদি no master friend ta rekhanga ka abun bochin kaisa challenge to na thaka tabu boro interpreter semana nai tini khorsa boro wan jepong nai o boro tini kuto witness submission thaiga ka boro interpretation khaina ni baido nta boro sung sina na sung tin tam ba ba hai khaija sini boro sia sung poriman hinga ka kaisa na karan pasangnya certificate mana sing sakri de mano am bagai sing pur ketu sing poriman ni ang sina bagai ni sing poria na khako tom kan sanamu sung tini ang pori umane sakri mana poria ni sing baka mana thik makai nei ang sina bagai san knowledge bagai sang pori ni makai nei ya bagai judu nang si pori khen kai abo kubine ni intellectuality tong nai ta ba ke nang ni sentiment tong tham ni jin ko roman script ba sine ni sin choba khai tong ma jaga bo na bangla ba chama sine hne tarang sunur nai sung sentiment na ringya sin thri tung na ringya an fusion bo si di sana sinai bor thang soike abuno wasu ka bela khe joliwa chak chak jolu amo joton se murkho kana siang kana an te prasad takotai buku bor ta se sina na mawan su tan bagi hinga kai joto jaga no jerkai thuitu joto jaga no sini yak moto joto jaga no sini brand distabu tan bagi hinga kai jekono thada sini bagi saya kana sini pokro clean khayawo suchwe sujama hin thang ngai jengmo siliana je sinai ra ke to kun pokro unjaiya je sinara ka bangla script thani to ngam bor kha intellectual na abu na go intellectual na musu abu bahken ma kisa norosel sijan uja to ka labu kisa phunu abun bagino khub wanao abu UNESCO United Nations UNESCO borok se je borong no ko kamamani in danger ngano bor protection khai worldwide jotone agree khaija ga bahke protection khaina a ko se salai to a jaga o sin ngaka bar lokote lokko bor asirisit ni simas joton se research language in the world ni hinjaman a borok se tini khai nang roman script se ni saja to nai ha jotabun sala bangla script ang sisinai siriti bage sine Robin Bangla mana क्या साल सिरिक दी बाके बांग्ला बस सिने चेरेक दी बाके नंगको बांग्ला बा सिने हाँ चीर दी बाके सिने सिने मा आप रोनो वांसुनो ना दोस्तों नताम नमके सिन बरक किसी सिन बरक केबेन आम गुने दूसरिया को an borong sang dos maru bule jatan thangsa tinno nokhana wanji ro busuk bon kasana bor respect tini Rabindra Sangit dangkum Rabindra Rasabu akab joto jaga bor jekun program khobor ekdom thik thacha sekachin kabara tar bidar tamusudu se sankai abno uste dekhe singabuno protection thai abno manu kahan tai sin respect udah dengan, mas sumber transfer. Sudah kaisana hanya sana nih, kaisana pulang nih, kaisana ukluga hanya sana nih, kaisana bahkan saya karena tak akan bono soklan nangma nih, apa rumah sesuatu mana? Election fight yang kamu, bono kibi bos thang mana, answer thana, antir rumah nih sincere lah itu. Bunyi tak pakai tamu, jadi sinai duk nai. Borong no se maro honai kok satini borong no se maro honai decision making natini borong no se maro honai a meeting attend khanya bagi khuni ro borong selection sinoro hangka jotona self independent angseng na
অথচ উনি থাকাखौबो आरो जों কোনো কন্ট্রিবিউশন थायो माने आरो जों थैयो आबोन बागै आं सानो मोसौ सिनि बर'नि फारि खासिबायसि फारि पाल खायै और हुमान स्क्रिप्ट खाया हंगागाकाय जों चीफ मिनिस्टर नि नं नं खोया सेक्रेटारिएट लाबोनि जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंथाय अंखया हने फारि जत सारा तिफ्राव तबाय सिनि बुकुमबार जत फारि जों नाखाय जत जानो ब्लक लाले नागेना बसनो हुमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायबा खरसा बड़ा दिसनाव सारति प्रसानि कालचार पगनो दस खाइले हैन अब बमन खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खाइले खाया अब बन लाइट पर खायन फादि जों ताइ जत तिप्रा सार थाजा उलायै और हुमन स्किल बागे फादि काइसे जागाव एम खाइ ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाइ ता मुमु फको को बरन बागे सब खाइ कौन साहित्य सब कौन बाइबल सब खाइतो ताव ताकसे तब दा बिकर राय प्रेसिडेंट आबो ग्रुप तासे जतन न तुबे कासे ग्रुप खाबन बर बाहायनो कमप्लेन दुबे प्रोटेस्ट खाइ आन खुलाइतो तिनि यूनिवर्सिटी रो बाहायनो आबनो तै बर साहित्य जे स्टूडेंट द आबनो साहित्य बर प्रोटेस्ट खाइतो हंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाइतो मसाय कासे जतन तिप्रा सानै नाका बुमुरलिया तिनि मुमु फको बर खंका आके प्रॉब्लम फु तिनि तेसा खंका आके प्रॉब्लम फु तिनि पब्र साइड सब खाइके का आके प्रॉब्लम फु हने गाखाय आबु मुबु नासना लिया फै जत कासे जत तिप्रा सा अंखुर सब खाले सिने नागेना सिनि ककबरनो साबसनो बांग्ला स्क्रिप्ट मासिने निसनो इनफोर्स खाइमा आमति थांसा दंमनो आबाखौ सबदा खाइमानो खाइमा गाकाय जों थांसा फादिताय केवनो नासिलै उइ कुलायै सारे कलायखनो सिलायै मुसुक सुइ तग फिनल खुनयावै फादि सब खलालाय आबसे थांसा न आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खाइतो सीपीएम दा खाइतो कांग्रेस दा खाइतो तिप्रा मथादा खाइतो नि पार्टी जेकोनो पार्टी किंतु तिप्रा सान काइसा थांसा निजिने कल्चर फाइफ्रु निजिने कमनि फाइफ्रु निजिने मुकुमन फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता होनासिले पाल खासे फाइसिन सब खाइनो न उनि दामा फादि आबो हंकाय साखलाय बेदि बुफुन सिमे खाइने जों सीआईबी फ्रु सीआईबी फ्रु मीडिया थ्रू साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा तिरपा 3 दिन जों पैरालाइज खाइ रखबले आबो पर सुनो ऑफिशियल लेटर दुई डायलॉग आसुबो आ पर जों दिल्ली थां केने जों अप्रूव होननाय का दिल्ली थांगा रातुबो रह जाखाना बुकुको आ बागर सिरि बाय तिनि सानो मुसु रातुबो रह जागिया साइ रहरु नर थांनै पाल खाइ जतन रेडी प्लान खाइ फाइनल एग्रीमेंट से खाइ जों सलाम जा तलाम थां जा सब केदुंबा सिन बस केदुंबला अबस जों मा थाया अबस जों एग्रीमेंट सैमा खाय हाइपनो आको होनो जों आफुरो सारा लिया आवर बगे जों सिरि के चुखामा तंखा आ बगे बुइसाव तां चुबु त सिसुसन बुजिया बोसर स्ट्रेटेजी प्लान खाइ स्लामै आको एग्रीमेंट और साइन फाइनल रेडी जों जत सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारे केबेनले आ बावसे जों तिना एग्रीमेंट साइन खाइमिया nga tini sing joton success sing thangma khu je kun jago sin borok se obstacle ni kaswo a kasma bagse sing tini success sing ngiam abun bag tini sanamu sumo hari parun generation ole amtile lengya na khakau karo sing jotono thansa jotono jotono obo nayu tini ko borono tui agi CPM sarkar tongkrubo commission selamjaka पवित्र सरकार कमिशन खालामजाखा दिनै पवित्र सरकार रिपोर्ट साबमिशन खालामन जागलबो
paisa satisfied dengan questionnaire salam jaka a questionnaire university level college level school level intellectual level bureaucrat level ko da question bang jaka bang man ya golo bor tamonai bor joton soi unko odkha কিন্তু যত না জানে বিসিমো 75% no তিনি roman script no ঠিক ক বড় মানে কাহামনি সাজাকা নকেন আমনা আবা কেন তিনি পবিত্র সরকার রিপোর্ট সাবমিশন খাইকা তিনি মানুষ সরকার আপনা ইমপ্লিমেন্ট খাইদানি সামসরণ কমিশন হনি সালাম জাকা সামসরণ ত্রিপুরা তংপুর আবো রিপোর্ট খাইজাকা nggak tahu kumu Mukunda, Kumukondo, Chaudhary, Kumukondo Chaudhary, bini purubong ko jaka. Joto roman istri mang seble. Dinner Chaiman Sakai, Chin Tanik, a question tone, but Sab answer ka, are no pura pipe, declared Riman. Not in the city cover, Sinero, Gawama Tong, but Busuk Zorti, cover no. hamdagai boy simang sito tini university bangken ko cover soi kya tini jesin intellectual lo cover sinai right of joton of governor no thang salai pro governor near about 35 boy 35 boy bo niji rang ni paina rakha muno for unko cover abni ya lo log legi no vice chancellor ringi cover di khuluk dini makluka akhir tini koprong university mulai abu governor se kala sasan salo I fayo bahino NITU bahino na tini ke kaljak mu koprong na abu bagino tini sini boro sinana jajar sini boro cabin yo to ka sing joto jang successful cabin man ka ani khoraksa self center service bagise tini sen ti prasar kulugi matong mo bini self interest bagi bini pocket bagi bothane pano derri de 12 লক্ষ কক সাইতো দিবেন খাইতো কারো খরচা পন আমরা থান কেমন এ আবা হাসি সুসরিত শুধু আবশ্যক তাতে সানামসু এসটিজিটি টিআরবিটি গভর্নমেন্ট অফিশিয়াল ক্লার্ক हुndi official उनका officer हुndi साके त्रंग तंगमन दिन का बरो फाइजा आनथनि एसटीजीटी रो टीआरबीटी रो 230 दा बुझिले एसटी रो सीट ओ एसटी रो सीट उनका यूआर उनका समथिंग 60 दा 84 उनका एसटी रो नाके तो आपनो एडवर्टाइज मोटर खाए बरो एग्जाम रुबाय क्या पावताम खाका खर्चा दीपक दा को दीपायर हुने कैश खाइले लिखा कैश खाइले मन जागलो कामखा कैश खाया कैश खाइले जागलो ngaka कोड साइड का हमना अब 50% एग्जिस्टिंग तो रिजर्वेशन अब बाकी में आस पास रिजर्वेशन सिस्टम का खला दे नो कोड राय लिखा अगर 230 20 में 17 समान से ना 230 टा नंबर 230 टा अब तिप्रा सारनि एसटी रोनि अब कोटा सीट खाली तंग बैकलॉग आपनो फुल खाइने बागैसि ना दिन आपनो तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खाया आपनो तो बरो फाइट खेलिया बले न जे एसटीजीटी सिनियर टीआरबीटी पर से बर्ता को तो केस को देखाया तब लगा तो चैलेंज खाने नंगे छ प्रमोशन क्षेत्र में हमति न एसटी सीट नो वाछनो सुपर सीट खाय यूआर जतन नाय तो मैथा तो बाबा जागा जों ताबो थैथौ केन्तु छिन बरो बुजिया ना जों थाय बिसो खायनाबा ना जों जदो दल साफुरमा आसे जों फारमाने बले केबो फारि जों न लगिरना केबो फाइने करे ए ओबा हाइसिसुस आबन बागैनो दिपासार निजिन कालचार हुकुम मुनार निजे पाउन नारना नका और मन स्क्रिप्ट बाले जों खाइ सिन पाउन आब्लिप खाइना गाखा जों बेलाके इम्पोर्टेन्ट नागै त कारण ताबो बो बरो बांगमेनो पनाय त काबिन बरो जे चुजाय गर हंगा सिम बांगमेनो मार हबले हंगा तातो जतन जे चुनाके जतन इंग्लिश मीडियम हंगा बांग्ला मीडियम परिबले नंबु जर सा कायमाना बा ह आउन बागै त गलग तंगले उला इंग्लिश
परिबाइसे नोंतिनि सिन बरफ अमेरिका बो नुकनाय अस्ट्रेलिया बो नुकनाय जार्मानी बो नुकनाय कैनाडा बो नुकनाय दिल्ली मुंबई जत नुकनाय नों बांग्ला बेसि पढ़ इंग्लिश पढ़ या रोमन स्क्रिप्ट पढ़ या नोंतिनि थांना मा खम जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय याबन बागैनो मा वानसु तेखलायो वानसु जों साबुन पता तामा आम से कॉफ परिणाम के लिए बेहतर व्यवस्था और नीतिगत पहल की दरकार होती है। 2014 के बाद से ही देश में वैज्ञानिक परिदृश्य में अविश्वसनीय बदलाव के प्रेरणा स्रोत हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। कर्तव्य ध्वनि के साथ आइए एक बार फिर अभिनंदन करें अति सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी हम सहृदय स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य और हमारे साथ विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी प्रख्यात शख्सियतों विशिष्ट अतिथिगण का भी हार्दिक अभिनंदन। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तरुण मन में प्रज्वलित नवोदित विचार अनुसंधान की धरा में फल फूल रहे हैं। छात्र इनोवेटर से एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। नन्ही आंखों के सपने वास्तविकता के धरातल पर साकार हो रहे हैं। देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति खुलकर सांस ले रही है। आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर चलते हुए नवीन प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की ओर अग्रसर है भारत देश। इसलिए नेशनल टेक्नोलॉजी वीक का विषय है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से सबसे पहले विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया पौधा भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। And now I request Dr. Jitendra Singh to kindly present the welcome address. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका आभार। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। प्रधानमंत्री जी, गत 9 वर्षों में आपके नेतृत्व में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण और नवाचार के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने एक लंबी छलांग लगाई है और इस लंबी छलांग का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ देर के लिए हम ये अंदाज़ा कर सकें कि सन 2014 से पहले का क्या आलम था और आज 2023 में क्या दृश्य है। सन 2014 से पहले इस देश में मात्र 350-400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आपने कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, और आज इसकी संख्या 97,000 से अधिक हो गई। 115 यूनिकॉर्न और हिंदुस्तान इकोसिस्टम स्टार्टअप में दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़ा हुआ। सन 2014 से पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर हम 81वें पैदान पर खड़े थे। आज 41 का जंप लगा करके हम 40वें पैदान पर हैं। सन 2014 से पहले हिंदुस्तान की बायो इकॉनमी $10 बिलियन थी, आज 8 गुना बढ़ करके $80 बिलियन हो गई है। सन 2014 से पहले पूरे देश में कुल मिलाकर के बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र और मात्र 50-55 थी, आज बढ़ करके 6,000 हो गई। सन 2014 से पहले किसी ने सुना ना था अरोमा मिशन का अर्थ क्या है, पर्पल रेवोल्यूशन का अर्थ क्या है। आज लेवेंडर कल्टीवेशन के साथ जुड़े हुए किसानी के माध्यम से एग्रीटेक स्टार्टअप्स का एक नया वर्ग उभर करके आया है। सन 2014 से पहले हिंदुस्तान में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट ना था, आज उसी हिंदुस्तान को दुनिया का वैक्सीन हब कहा जाता है। सन 2014 से पहले हमारे यहाँ कभी कभी अखबार में खबर आती कि श्रीहरिकोटा नाम के एक स्थान से एक रॉकेट लॉन्च हुआ है। आपने उस श्रीहरिकोटा के दरवाजे खोल दिए। आज उसी श्रीहरिकोटा में
लगभग 130 प्राइवेट स्टार्टअप्स इसरो के साथ काम कर रहे हैं और हमारा गगनयान भारतीय मूल के एक व्यक्ति को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी में। सन 2014 से पहले किसी को मालूम ना था कि पृथ्वी विज्ञान का अर्थ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का मैंडेट क्या है। आपने डीप सी मिशन की घोषणा की। आज हिंदुस्तान के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के साथ बसे हुए सागर के भीतर की अपार संपत्ति खोजने के लिए हमारा समुद्र यान निकल चुका है। एक के बाद एक अनेकों ऐसी क्रांतिकारी उपलब्धियां और यह सिलसिला निरंतर जारी है। अभी इसी वर्ष में सन 2023 में आपने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। लाइगो जिसका लॉन्च आज आप कर रहे हैं, इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 और अभी हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के चंद एक गिने चुने देशों के एलीट क्लब में ला करके खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जहां आपने हिंदुस्तान को विज्ञान की ताकत से दुनिया में लोहा मनवाया, वहां साथ ही साथ आम नागरिक के जीवन में सरलता लाने के लिए सेक्टोरल डेवलपमेंट में विकास के कार्यों में साइंस टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाने का रास्ता भी हमें दिखाया। और आज जब हम ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहे हैं और ये अटल जी की स्मृति के साथ जुड़ा है, तो ये आप ही की कल्पना थी, अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, ताकि कम अवस्था में बचपन में स्कूल के समय में बच्चे अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को खोज सकें, तलाश सकें, तराश सकें और आने वाले जीवन में उसे देश की सेवा के लिए समर्पित कर सकें। आज का बच्चा कल सन 2047 के हिंदुस्तान का युवा होगा और 2047 का युवा शताब्दी भारत का निर्माता होगा। और इसलिए आज जब ये 25वां नेशनल टेक्नोलॉजी डे, पहली बार भारत सरकार के 12 मंत्रालयों और विभागों द्वारा सामूहिक तौर पर होल ऑफ गवर्नमेंट मंत्र का पालन करते हुए मनाया जा रहा है, तो ये मात्र एक सांकेतिक अवसर न रह करके एक उत्सव का रूप धारण कर चुका है, एक फेस्टिवल का रूप धारण कर चुका है। इट इज़ अ सेलिब्रेशन of India's scientific supremacy. It is a celebration of India's growth story under Prime Minister Modi. It is a celebration of Prime Minister Modi's new India. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh. देवी और सज्जनों, रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को हासिल करने की ओर तीव्र गति से अग्रसर है हमारा देश। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को भी संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियों के साथ स्वागत करें केंद्रीय रक्षा मंत्री जी का। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, भारत सरकार के सभी अधिकारी वर्ग, वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट्स, अन्य सम्मानित अतिथिगण, देवियों व सज्जनों, आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब के बीच होना हम सब के लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की और इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे विशेष खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। वैश्विक परिदृश्य में भारत एक नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन सबके पीछे अगर कोई प्रेरक शक्ति है तो वह है आपके आह्वान की शक्ति, आपके संकल्प की शक्ति और आपके समर्पण की शक्ति। साथियों, आज हम सब यहाँ देश के साइंटिफिक अचीवमेंट्स का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सब ने ग्लोबल स्टेज पर लोगों द्वारा यह कहते हुए सुना है कि 21वीं सदी यह भारत की सदी है। वर्तमान में दुनिया को भारत में आशा की एक नई
किरण नजर आ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दुनिया को यह दिखाया भी है कि भारत रूपी सूर्य का उदय हो चुका है और हमारा सूर्य अब अपने पूरे तेज के साथ चमकने को तैयार है। मैं यहाँ सूर्य का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं में देखें तो हम पाएंगे कि सूर्य के साथ हमारे बड़े अद्भुत संबंध रहे हैं। हम सभी बजरंगबली के उपासक हैं। एक प्रसंग तो आप सबने सुना ही होगा कि बजरंगबली ने किस प्रकार फल समझकर सूर्य को ही निगल लिया था। बाद में देवताओं के मनाने के बाद उन्होंने सूर्य को मुक्त कर दिया था। इस कार्य से बजरंगबली ने अपनी अपार शक्ति का परिचय तो दिया ही, साथ ही उन्होंने हमें यह भी संदेश दिया कि अगर हम अपनी ताकत को बढ़ाएं तो सूरज भी हमारी मुट्ठी में आ सकता है। 1998 में दुनिया ने भी देखा कि श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन शक्ति के तहत कैसे भारत ने अपनी वह ताकत दिखाई और पोखरण और रेगिस्तान में एक नहीं 5-5 सूरज बो दिए। प्रधानमंत्री जी, पोखरण के परमाणु परीक्षण पर मुझे केवल जीआई साहब की लिखी पंक्तियां याद आती हैं, जब उन्होंने यह लिखा था कि अब न छोड़ेंगे कमी, कोई भी अपनी शान में, 5 सूरज बो दिए हैं हमने रेगिस्तान में। रेत के सागर में बसे हुए पोखरण की हम यदि ज्योग्राफी और क्लाइमेट देखें तो यह भले ही एक रेगिस्तान की तरह दिखता है, लेकिन रेगिस्तान की इस रेत में भारत के परमाणु शक्ति की हरी भरी फसलें आज भी लहलहा रही हैं। साथियों, हमारा देश शांति प्रिय संस्कृति और सभ्यता का देश रहा है। इस देश ने न केवल स्वयं के लिए शांति की कामना की, बल्कि समस्त विश्व को शांति का संदेश दिया। दुनिया को बुद्ध और गांधी जैसे शांति पुरुष ही इस देश की देन है। यह देश वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म को मानने वाला देश है। हमने किसी भी देश पर उसको गुलाम बनाने के उद्देश्य से कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन इतिहास में हमें कई बार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। और आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही ज्ञान पर आधारित रहे इस समाज ने दुनिया को शांत आचार, विचार और व्यवहार का पाठ पढ़ाया है। हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज ने देश ही नहीं विदेश के शिक्षार्थियों को भी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी, जिसमें नालंदा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। पर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हश्र हुआ। एक बख्तियार खिलजी अपने दलबल के साथ आता है और इस महान विश्वविद्यालय का ध्वंस करके चला जाता है। पुस्तकों के रूप में ज्ञान की ऐसी अगाध संपदा कि बताते हैं महीनों तक यहाँ किताबें जलती रहीं। इसी तरह सोमनाथ मंदिर का उदाहरण लिया जा सकता है। यह मंदिर देश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का एक विशाल केंद्र है, लेकिन हमारी शांति प्रियता का फायदा उठाकर इसे भी 1-2 बार नहीं अनेक बार तोड़ा गया और इस मंदिर के माध्यम से अनेकों भारतीयों का विश्वास और उनकी आस्था को यह तोड़ा गया। ऐसे में इस देश ने पुनः अपने उन आराध्यों की ओर देखा जिनके एक हाथ में ज्ञान के प्रसार के लिए शास्त्र होता है तो दूसरे हाथ में अधर्म का नाश करने के लिए शस्त्र भी होता है। ऐसे में हमारे परमाणु परीक्षणों ने दुनिया को यह मैसेज कन्वे किया कि हम भले ही शांतिपूर्ण राष्ट्र हैं, लेकिन हम नालंदा दोबारा जलते हुए नहीं देखेंगे और हम दोबारा अपने सोमनाथ के सांस्कृतिक वैभव को किसी गजनवी द्वारा कुचले जाते नहीं देखेंगे। हमने इतिहास में सीख ली है और यह सुनिश्चित किया है कि हम ऐसा इतिहास कभी रिपीट नहीं होने देंगे। हम अपने आत्मसम्मान के खिलाफ उठे हुए हर कदम का पुरजोर जवाब देंगे। साथियों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमें हमारी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट को एक्नॉलेज करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की यह प्रेरणा देता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में विज्ञान की बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा भी गया है कि बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात शक्ति का स्रोत विज्ञान ही है। जब हम देश में साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देते हैं तो इससे राष्ट्र तो प्रगति करता ही है, साथ ही यह हमारी युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। साथियों, भारत अभी डेमोक्रेटिक डिविडेंड के फेज से गुजर रहा है। हमारे पास एक सामर्थ्यवान ह्यूमन रिसोर्स है। हमारे इसी ह्यूमन रिसोर्स ने हमें इस स्थिति में पहुंचाया है कि आज हम दुनिया के सामने गर्व से सिर उठाकर खड़े हो सकते हैं, और यही ह्यूमन रिसोर्स हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक भी पहुंचाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। बस आवश्यकता है तो इस ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करने की। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने इस विजन में पूरी तरह से कामयाब होंगे और एक नए भारत के निर्माण की ओर कदम आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं एक बार पुनः हमें अपना मार्गदर्शन देने हेतु यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और यही अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय रक्षा मंत्री जी। Ladies and gentlemen, Government of India is working on the strategy to transform India through science and technology. विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश नए आयाम हासिल करते हुए नए कीर्तिमान रच रहा है। कैसे देश में ये परिदृश्य बदल रहा है, आइए इसी पर देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। आधुनिक भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में से एक है। पिछले 9 सालों में सरकार ने देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में पेश करने के लिए साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसी का नतीजा है कि आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर लंबी छलांग लगाकर 81 से 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 2014 के मुकाबले आज स्टार्टअप्स की संख्या 300 गुना बढ़कर 97,000 हो गई है। 115 यूनिकॉर्न के साथ आज भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों के जरिए देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। अटल इनोवेशन मिशन में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और इंस्पायर स्कॉलरशिप के जरिए स्कूली बच्चों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया गया। हमारा प्रयास है कि 6ठी क्लास से ही विद्यार्थी अटल टिंकरिंग लैब में जाएं और फिर कॉलेज से निकलते ही उसको इंक्यूबेशन का, स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार मिले। आज भारत सरकार के 11 मंत्रालयों और विभाग मिलकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। यहाँ आप मिलेंगे मशहूर टेक्नोप्रेन्योर्स और उनके हैरत अंगेज नवाचारों से, साक्षी बनेंगे देश की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों के और करीब से समझेंगे भारत के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को। भारत में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्यमियों को उनके विचारों को बाजार के लिए तैयार उत्पादों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
इस प्रकार ये माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आजादी के अमृत काल में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब नए नए कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता आने वाले अगले 25 सालों में देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के तौर पर स्थापित करना है। सही नीतियों और कार्यक्रमों के साथ भारत विश्व में अग्रणी प्रौद्योगिकी केंद्र बनने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। देवी और सज्जनों, 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत द्वारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाना शुरू किया गया। इन 25 वर्षों के सफर को चिन्हित करते हुए आज एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि पहले अपने कर कमलों द्वारा डाक टिकट का विमोचन एल्बम द्वारा करें। भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा 25वें नेशनल टेक्नोलॉजी डे के उपलक्ष्य में विशेष रूप से इस डाक टिकट को तैयार किया गया है। And now may I please request Honorable Prime Minister to kindly release the commemorative coin. Thank you, Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, Government of India is continuously upgrading and creating science and technology infrastructure in the country. विज्ञान के क्षेत्र में सुविधाओं और ढांचागत विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई पहल का उद्घाटन व शिलान्यास किया जा रहा है। The facilities which are being dedicated to the nation by Honorable Prime Minister are Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center, Visakhapatnam, Women and Children Cancer Hospital, Navi Mumbai, National Hadron Beam Therapy Facility, Navi Mumbai, Radiological Research Unit, Navi Mumbai, Fission Moly 99 Production Facility, Mumbai, and Rare Earth Permanent Magnet Plant, Visakhapatnam. और जिन फैसिलिटीज का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है वे हैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जटनी, ओडिशा, Platinum Jubilee Block of Tata Memorial Hospital, Mumbai, and Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, India. May I please humbly request Honorable Prime Minister to kindly dedicate to the nation and lay the foundation stone for these facilities by pressing the button of remote.
एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन फैसिलिटीज़ को राष्ट्र को समर्पित किया गया है या जिनका शिलान्यास किया गया है, ये सभी फैसिलिटीज़, इनकी विशेषता क्या है और किन मायनों में ये खास है, महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। एम्स के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों में वृद्धि और टीकाकरण अभियानों सहित कई महत्वपूर्ण पहलों ने इस प्रगति में योगदान दिया है। देश में कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स और 20 टर्सरी केयर कैंसर सेंटर्स भी स्वीकृत किए गए। ऐसे में टाटा मेमोरियल सेंटर, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है, देश भर में स्थित अपने विभिन्न केंद्रों के माध्यम से कैंसर के आधुनिकतम इलाज को सुलभ बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ओडिशा के खुर्दा जिले के जटनी में 200 बेड वाला होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। 650 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली इस परियोजना में 400 करोड़ रुपए का योगदान परमाणु ऊर्जा विभाग तथा 250 करोड़ रुपए का योगदान टाटा ट्रस्ट कर रहा है। ओडिशा सरकार इस परियोजना में कई तरह से योगदान दे रही है, जिसमें परियोजना के लिए 42 एकड़ भूमि शामिल है। मुंबई, महाराष्ट्र में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का प्लैटिनम जुबली ब्लॉक स्थापित किया जा रहा है। 938 करोड़ रुपए की लागत वाली इस सुविधा में 880 करोड़ रुपए बिल्डिंग के निर्माण में तथा 58 करोड़ रुपए सामान्य उपकरणों के लिए लगाए जाएंगे। सीएसआर के तहत अतिरिक्त 390 करोड़ रुपए सुपर स्पेशलिटी उपकरणों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। 557 करोड़ रुपए की लागत से बना 100 बेड का यह अस्पताल कैंसर के निदान और उपचार के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। टीएमसी के नवी मुंबई स्थित एक्ट्रैक परिसर में 38 करोड़ रुपए की लागत से बना 270 बेड का कैंसर अस्पताल देश का पहला एकीकृत केंद्र है, जो महिलाओं और बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए समर्पित है। 3 गैंट्रियों को एक साथ संचालित करने वाली देश की पहली नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी एक्ट्रैक नवी मुंबई में स्थित है। 468 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये एक अत्याधुनिक प्रोटॉन थेरेपी इकाई है। भारत की सबसे बड़ी नाभिकीय चिकित्सा सुविधा रेडियोलॉजिकल रिसर्च यूनिट 93 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये यूनिट विभिन्न प्रकार के कैंसरों के उपचार के लिए सेवाएं प्रदान करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग प्राचीन भारतीय उक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संकल्प धारण किए प्रगति पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ठोस कदम उठाते हुए अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं। बीते 9 वर्षों में हमारी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। नए मेडिकल कॉलेजों और एम्स शाखाओं की स्थापना, अस्पतालों को अपग्रेड करके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना तथा आधुनिकतम इलाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता इन सफलताओं के आधार स्तंभ हैं। इस उद्देश्य में अपना योगदान देते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय चिकित्सा और कैंसर उपचार के क्षेत्रों में अग्रणी कार्य करते हुए उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। 300 क्यूरी के मेडिकल ग्रेड हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी मोलिब्डेनम 99 के उत्पादन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में ब्रिट द्वारा फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी की स्थापना
इस दिशा में की गई एक प्रभावशाली शुरुआत है जो भारत को ऐसी क्षमता रखने वाले विशिष्ट देशों में से एक बनाती है। मोलिब्डेनम 99 डायग्नोस्टिक रेडियो आइसोटोप टेक्नीशियम 99M का जनक होता है, जिसका प्रयोग 85% से भी अधिक डायग्नोस्टिक स्कैनों के लिए किया जाता है और इसीलिए इसे न्यूक्लियर मेडिसिन का वर्क हॉर्स कहा जाता है। विभिन्न रोग प्रभावित हिस्सों पर विशिष्ट अपटेक वाले बायोमोलिक्यूल्स का उपयोग करते हुए टेक्नीशियम 99M का प्रयोग टेक्नीशियम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के फॉर्मुलेशन के लिए किया जाता है। इन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का उपयोग करते हुए स्पेक्ट स्कैन से किडनी, लीवर, हृदय और मस्तिष्क जैसे विभिन्न अंगों में रोगों के शीघ्र निदान में मदद मिलती है। 295 करोड़ रुपए की लागत से बनी फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी घरेलू मांग को पूरा करने के साथ ही अन्य जरूरतमंद देशों की रेडियो आइसोटोप आवश्यकताओं को भी पूरा करने की क्षमता रखता है। Our goal is to make healthcare accessible and affordable not only for our citizens but for the whole world. Reducing disparity in India's priority, serving the unserved is an article of faith for us. मेडिकल रेडियो आइसोटोप के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर करने की दिशा में फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी की स्थापना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को उच्च तकनीक क्षेत्र में दुनिया के विकसित देशों के समकक्ष लाने और संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ निश्चय निहित है। आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस संदर्भ में रेयर अर्थ तत्व विशेष महत्व रखते हैं। रेयर अर्थ तत्व स्वच्छ ऊर्जा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर, बैटरियों सहित अनेक अति विशिष्ट क्षेत्रों में अपरिहार्य रूप से प्रयुक्त होने के कारण अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। इनके महत्वपूर्ण उपयोगों में से एक समैरियम कोबाल्ट स्थायी चुंबकों का उत्पादन है। समैरियम कोबाल्ट स्थायी चुंबकों में असाधारण गुण होते हैं जो इन्हें रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे सामरिक क्षेत्रों में उपयोग के अनुकूल बनाते हैं। स्थायी चुंबकों का आयात प्रायः प्रतिबंधों और आपूर्ति अवरोधों से प्रभावित रहता है, क्योंकि इन्हें बनाने की तकनीक विश्व के कुछ विशेष देशों के पास ही उपलब्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में भारत सरकार के समन्वित प्रयासों और लक्ष्योन्मुख समग्र सरकार के दृष्टिकोण ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिणाम स्वरूप रेयर अर्थ चुंबकों के क्षेत्र में भारत अब पूरी तरह से स्वदेशी सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके औद्योगिक पैमाने पर समैरियम कोबाल्ट स्थायी चुंबकों के उत्पादन की जटिल तकनीक में महारत हासिल कर चुका है। विकसित की गई इस प्रौद्योगिकी को आधार बनाकर विशाखापट्टनम के अच्युतापुरम स्थित BARC कैंपस में परमाणु ऊर्जा विभाग की एक औद्योगिक इकाई IREL इंडिया लिमिटेड द्वारा एक आधुनिक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट की स्थापना की जा रही है, जहां प्रतिवर्ष 3000 किलोग्राम समैरियम कोबाल्ट मैग्नेट का उत्पादन किया जा सकेगा। 197 करोड़ रुपए की लागत से बना ये प्लांट सामरिक क्षेत्रों के लिए समैरियम कोबाल्ट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट की स्थापना उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में देश पिछले 8-9 वर्षों में अनुसंधान और विकास में अभूतपूर्व वृद्धि का साक्षी रहा है। इस वृद्धि ने कई वैज्ञानिक उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें लाइगो इंडिया की परियोजना उल्लेखनीय है। लाइगो इंडिया अमेरिका और भारत के बीच एक सहयोगी परियोजना है, जिसका उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना है।
लाइगो इंडिया का निर्माण और स्थापना उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है। The greatest scientist of the last century, Albert Einstein, had given the theory about gravitational waves. It is a matter of immense pride for all of us that 37 Indian scientists from 9 Indian institutions participated in the International Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory LIGO collaboration and proved this theory correct 3 years ago. लाइगो इंडिया, परमाणु ऊर्जा विभाग DAE और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के परस्पर सहयोग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली एक मेगा साइंस परियोजना है। लाइगो इंडिया, कैलटेक और MIT, अमेरिका की लाइगो लेबोरेटरी के सहयोग से बनाई जा रही है और ये इन 2 वेधशालाओं के साथ ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टरों के एक वैश्विक नेटवर्क के रूप में काम करेगी। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में लाइगो इंडिया के लिए 428 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और परियोजना के लिए राज्य सरकार से पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लाइगो इंडिया भारत में स्थापित होने वाली पहली मेगा साइंस परियोजना होगी। ये बड़ी संख्या में भारतीय शोधकर्ताओं और छात्रों को इस उभरते हुए क्षेत्र में योगदान देने का अवसर प्रदान करेगी। ये परियोजना एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक क्षेत्र में हिंगोली को वैश्विक मानचित्र पर पहचान देने के साथ साथ विश्व भर के शोधकर्ताओं को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। लाइगो इंडिया से अर्जित क्लीन रूम निर्माण की विशेषज्ञता, सेमीकंडक्टरों और बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों में दक्षता प्राप्त करने और प्रगत अनुसंधान परियोजनाओं के लिए आवश्यक बड़े अल्ट्रा हाई वैक्यूम सिस्टमों के निर्माण में योगदान देकर राष्ट्र की महत्वपूर्ण सेवा करेगी। ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने के प्रति समर्पित अत्याधुनिक शोध की दिशा में लाइगो इंडिया की स्थापना देश के लिए एक गौरवशाली एवं उन्नतिशील कदम है। तो देश में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र को रफ्तार देंगी ये सभी फैसिलिटीज। तो रुख हवाओं का मोड़ दे, लोगों के भरम को तोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, मंजिल की ओर अब कदम बढ़ा, हासिल कर मुकाम नया पन्ना इतिहास में जोड़ दे, तो रुख हवाओं का मोड़ दे। देश के छात्रों और युवाओं की कल्पना शक्ति की परवाज को ठोस आधार प्रदान करने वाले, प्रत्येक देशवासी के हृदय में राष्ट्र समर्पण के संकल्प की लौ को प्रज्वलित करने वाले, हर जन की आंखों में कुछ कर सकने का विश्वास जागृत करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्रतापूर्ण आग्रह करती हूं कि अपने सुवचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। करता ध्वनि से स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, साइंस और टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के सभी सम्मानित सदस्य और मेरे युवा साथियों, आज 11 मई का ये दिन भारत के इतिहास के सबसे गौरवमयी दिनों में से एक है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने पोखरण में वो उपलब्धि हासिल की थी जिसने मां भारती की हर संतान का सिर
गर्व से ऊंचा कर दिया था। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी। पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया, बल्कि भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी। अटल जी के शब्दों में ही कहूं तो अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के समक्ष कभी झुके नहीं हैं। मैं सभी देशवासियों को आज के दिन की नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर कई फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। मुंबई में नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी पर रेडियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर हो, विशाखापट्टनम से के बार्क कैंपस में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट हो, मुंबई की फ्यूजन मौली 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, या विभिन्न शहरों के कैंसर हॉस्पिटल हो, ये सभी संस्थान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से मानवता की और भारत की प्रगति को गति देंगे। आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी लाइगो इंडिया का शिलान्यास भी हुआ है। लाइगो 21वीं सदी के सबसे बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव में से एक है। दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही इस तरह की ऑब्जर्वेटरी आज है। भारत के स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट के लिए ये ऑब्जर्वेटरी आधुनिक रिसर्च के नए अवसर लेकर आ रही है। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी देश के वैज्ञानिक समुदाय को, सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, इस समय हम आजादी के अमृतकाल के शुरुआती महीनों में हैं। हमारे सामने 2047 के स्पष्ट लक्ष्य हैं। हमें देश को विकसित बनाना है, हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं, बल्कि देश की प्रगति को गति देने का एक टूल मानता है। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस बार की थीम स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट ये रखा गया है। आजादी के इस अमृतकाल में भारत का भविष्य, हमारी आज की युवा पीढ़ी
हमारे आज के स्टूडेंट्स ही तय करेंगे। आज की इस युवा पीढ़ी के पास नए सपने हैं, नए संकल्प है, उनकी ऊर्जा, उनका जोश, उनका उत्साह, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, हमारे देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम कहा करते थे, नॉलेज विथ एक्शन कन्वर्ट्स एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी। आज जब भारत एक नॉलेज सोसाइटी के तौर पर सशक्त हो रहा है, तो उतनी ही तेजी से एक्शन भी ले रहा है। भारत के यंग माइंड्स को इनोवेशन की तरफ प्रेरित करने के लिए बीते 9 वर्षों में देश में एक मजबूत बुनियाद बन चुकी है। कुछ साल पहले शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब्स ATL आज देश की इनोवेशन नर्सरी बन रही है। आज देश के 35 राज्यों में 700 जिलों में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंक्यूबेशन का ये मिशन केवल बड़े शहरों तक सीमित है। करीब 60% अटल टिंकरिंग लैब्स सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में खुली है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में बच्चों के लिए पढ़ाई के मायने बदल रहे हैं, वो इनोवेशन की तरह प्रेरित हो रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज अटल टिंकरिंग लैब में 75 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 12 लाख से ज्यादा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर जी जान से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में लाखों जूनियर साइंटिस्ट स्कूलों से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं। इनकी हैंड होल्डिंग करना, हर तरह से मदद करना, इनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में सहायता देना, ये हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व है। आज सैकड़ों की संख्या में स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनका इंक्यूबेशन अटल इनोवेशन सेंटर्स में हुआ है। अटल टिंकरिंग लैब की ही तरह अटल इनोवेशन सेंटर्स AICs भी न्यू इंडिया के लेबोरेटरी बनकर उभर रहे हैं। आप देखिएगा, भारत के ये टिंकरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स हम देखते थे, ये टिंकरप्रेन्योर्स हैं। कल ये लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं। साथियों, महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, परमाणु परम महत्व अंतः अस्य वशीकारः। यानी जब हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ वश में आ जाता है। 2014 के बाद से भारत ने जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देना शुरू किया है, वो बड़े बदलावों का कारण बना है। हमने जो स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया, जो डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसने भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की सफलता को नई ऊंचाई दी है। पहले जो साइंस केवल किताबों तक सीमित थी, वो अब
एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स में बदल रही है। भारत में 10 साल पहले एक वर्ष में 4000 के आसपास पेटेंट ग्रांट होते थे। आज इनकी संख्या सालाना 30,000 से भी ज्यादा हो गई है। भारत में 10 साल पहले सालाना 10,000 डिजाइन रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना 15,000 से ज्यादा डिजाइन रजिस्टर हो रहे हैं। भारत में 10 साल पहले सालाना 70,000 से भी कम ट्रेडमार्क रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो रहे हैं। साथियों, आज भारत हर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो एक टेक लीडर कंट्री के लिए जरूरी होता है। आप में से कई साथी जानते हैं 2014 में हमारे देश में करीब 150 के आसपास ही इंक्यूबेशन सेंटर्स थे। आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या 650 भी पार कर चुकी है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पे था, वहां से ऊपर उठ करके 40वें स्थान पर पहुंच चुका है। आज देश के युवा, हमारे स्टूडेंट्स अपने डिजिटल वेंचर्स खड़े कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहां स्टार्टअप की संख्या भी कुछ 100 के आसपास थी। आज हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप की संख्या भी करीब करीब 1 लाख पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है, भारत का टैलेंट दिखाता है। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, पॉलिसी मेकर्स के लिए, हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए, देश भर में फैली हजारों रिसर्च लैब्स के लिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल टू स्टार्टअप्स की यात्रा हमारे स्टूडेंट्स करेंगे, लेकिन आपको उन्हें निरंतर गाइड करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। और इसमें मेरा आप सभी को पूरा सपोर्ट रहेगा। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी के सामाजिक संदर्भ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और असंतुलन को मिटाने का भी माध्यम बनती है। एक समय था जब टेक्नोलॉजी सामान्य भारतीय की पहुंच से बाहर थी। आपको भी याद होगा, कभी जेब में क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर चलना स्टेटस सिंबल हुआ करता था, लेकिन भारत का यूपीआई आज अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से न्यू नॉर्मल बन गया है। आज रेहड़ी पटरी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट डाटा इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। इससे लोगों के सामने
जानकारियां, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है। जेम ट्रिनिटी हो, जेम पोर्टल हो, कोविन पोर्टल हो या किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट इनैम, हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग एजेंट ऑफ इंक्लूजन के रूप में किया है। साथियों, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से सही समय पर उपयोग समाज को नई शक्ति देता है। आज भारत में जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए कोई न कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तैयार हो रहे हैं। जन्म के समय ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट की सुविधा है। बच्चा जब स्कूल की शुरुआत करता है तो उसके पास ई पाठशाला और दीक्षा जैसे फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, और आगे बढ़ने पर वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। जब वो अपनी नौकरी शुरू करता है तो उसके पास यूनिवर्सल एक्सेस नंबर की सुविधा है, ताकि जॉब बदलने पर भी उसे कोई दिक्कत ना आए। किसी बीमारी की स्थिति में वो तुरंत आज ई संजीवनी की मदद से अपनी उपचार की व्यवस्था कर सकता है। बुजुर्गों के लिए बायोमेट्रिक एनेबल्ड डिजिटल सर्विस, जीवन प्रमाण की सुविधा है। आप सोचिए, पहले बुजुर्गों को पेंशन जैसे कामों के लिए अपने जिंदा होने का सबूत देना होता था। चाहे तबीयत खराब हो या चलना मुश्किल हो, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए खुद जाना होता था। अब ये सारी परेशानियां टेक्नोलॉजी की मदद से समाप्त हो रही है। डे टू डे लाइफ में हर कदम पर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देश के नागरिकों की मदद कर रहे हैं। अगर उसे जल्दी पासपोर्ट बनवाना है तो एम पासपोर्ट सेवा है। अगर उसे एयरपोर्ट पर हैसल फ्री एक्सपीरियंस सुनिश्चित करना है तो डीजी यात्रा ऐप है। अगर उसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है तो डीजी लॉकर है। इन सारे प्रयासों से सोशल जस्टिस सुनिश्चित करने और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में मदद मिली है। साथियों, आज हर दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। भारत के युवा ही इस स्पीड को मैच करने में, इस स्पीड को क्रॉस करने में देश का नेतृत्व करेंगे। आज एआई टूल्स नए गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। हेल्थ सेक्टर में आज हम कितनी असीम संभावनाओं को देख रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी हर रोज नए इनोवेशंस हो रहे हैं। ऐसे ही थेरेपेटिक्स सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी में लीड लेनी होगी। आज भारत अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बना रहा है। इससे भी हमारे युवा स्टार्टअप्स को बहुत से मौके मिल रहे हैं। डिफेंस में इनोवेशन के लिए हमने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस यानी आईडेक्स भी शुरू किया है। मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स के 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के 14 इनोवेशंस को प्रोक्योर किया है। साथियों, आई क्रिएट हो या फिर डीआरडीओ, यंग साइंटिस्ट लैब जैसे इनिशिएटिव आज इन प्रयासों को नई दिशा दे रहे हैं। स्पेस सेक्टर में भी न्यू रिफॉर्म्स के जरिए भारत एक ग्लोबल गेम चेंजर की भूमिका के सामने आ रहा है। अभी मैं एसएसएलवी और पीएसएलवी ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म जैसी टेक्नोलॉजी देख रहा था। हमें स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप्स के लिए, यूज के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने होंगे। हमें कोडिंग से लेकर गेमिंग और प्रोग्रामिंग तक हर क्षेत्र में लीड लेनी होगी। इस समय भारत सेमीकंडक्टर जैसे नए एवेन्यूज में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पॉलिसी लेवल पर हम पीएलआई स्कीम जैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं। इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि इस फील्ड में टैलेंटेड यूथ्स को सपोर्ट करें। साथियों, आज इनोवेशन से लेकर सुरक्षा तक के लिए हैकेथॉन्स की एक बड़ी भूमिका है।
सरकार ने लगातार प्रमोट कर रही है। हमें हैकेथॉन कल्चर को आगे बढ़ाना होगा, स्टार्टअप्स को नए चैलेंजेस के लिए तैयार करना होगा। इन प्रतिभाओं की हैंड होल्डिंग हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष न करना पड़े, हमें इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। खासकर अटल टिंकरिंग लैब से जो युवा निकल रहे हैं, उन्हें इन्वॉल्व रखने के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। क्या हम इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में देश की 100 लैब्स को चिन्हित कर सकते हैं, जिन्हें यूथ ड्रिवन बनाया जाए? क्लीन एनर्जी और नेचुरल फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में जहां देश का खास फोकस है, हमें रिसर्च और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना होगा। इसके लिए भी युवाओं को मिशन मोड में जोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे भरोसा है नेशनल टेक्नोलॉजी वीक इन संभावनाओं को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को एक बार फिर इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। टिंकरप्रेन्योर्स से भारत के एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने, विज्ञान से आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने, तकनीक के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने जैसे प्रेरणादायक शब्द ऑर्गेनाइजेशन कमिशन आतुगि मानो आतुना सिगां जोंबो त्रिपुरानि ताबुक जत्त जे तंनाय रंनो हजांगै पावारनि बागै खबर बायजाव एवुइ त्रिपुरा सारनो पार्मानेंट सेटलमेंट सल्यूशन खालामनायनि बागै जों माथाय तंनाय जों नुगै दङ ताबुक जे थिन बररक सुदु पावार अमहायबो दल दङ 28 तारिख फेब्रुवारि मार्च सांबादिक सम्मेलन त्रिपुरालेण्डनि प्रश्न खायजाखाय बुजाय खारका तावबो मन्त्रि मांखा उसुखांखाय राजा त्रिपुरालेण्ड हाइजाक खायौनि साव राजा तो हाइजाक खाया नोंसे आबनो यागारि रुबले नों सांबादिक सम्मेलन खाय सोंलांमानि खारि थांखा ताय इंखाय बिप्लब देव चीफ मिनिस्टार तंफुरबो बर त्रिपुरालेण्ड सालिया जों उन्नति खाने आबो मन्त्रि खरङै आबनो हायनो खिरिं खिरिं खाय दङ एवं उनखौबो कायसा महाराष्ट्रनिया उनको फायनाय प्रभारी फायनाय बबो त्रिपुरा में एनसी बाबू त्रिपुरालेण्ड नेहुगा निसाका साइटों गा अबहाय जो उमनी जों दिनै मकल हासिंसा बुलिचन बायसा थिन त्रिपुरा सारनो साइटों अब उंगला तो फानसे आरोनो गोदालि दंलायो अबहाय उमनी न आं जों सानामुसुङो त्रिपुरा सारक किया सदाक सिजालायसिदि सिजाय दङ थानजाङै दङ आ थानजानि कुनो मिनिं गरै ताबु बिसिबांखा हाई पावर मडेलिटी कमिटी तमखा मानिया आरो नि मंत्री खरङै तंखा ताबो साइमिया 13टा सीट मंखा ताम खलायलायनो आबोनि बागैनो कैसा जों उनको वान सुगि मा दङ अबरबो गोबां 2 लाख नै सिजागै दंमोन हायनुगु आं बागै जों ताव वान सुका जों बताबो कैसा यापरि सानाय त्रिपुरा सारंनि बागै स्टेटहुड डिमांड कमिटी ऑफ त्रिपुरा नै जों चेंनानि थां दङ जों अरनि थांगा हकाय जों गुथुमै जोंनि पार्टीनि मेंबर एवं पद जतनो डिक्लेरेशन ना हनै वीकनेस है, कमजोरी है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मणिपुर में जो सिचुएशन चल रहा है उसका
क्या मैंने बात किया है, और मणिपुर में जितने भी हमारे इंडिजिनस लोग हैं, लड़के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा है कि उनका अगर उनको वापस आना है तो मैं उनका पूरा प्लेन का टिकट का पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। ख़राब समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। मेरा ख़राब समय में भी मेरे लोगों ने मेरे संग खड़ा रहा। तो आज अगर उनके लिए वहाँ में मणिपुर में जो सिचुएशन है अच्छा नहीं है, तो मैं उनके लिए आने के लिए पूरा प्लेन का बंदोबस्त करने की कोशिश करूँगा और करूँगा है 100%। और रहा बात वायलेंस का, वायलेंस से कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। आई अपील टू ऑल माई मैतेई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कुकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो इसके पीछे है कोई और है। आप लोग सामने एक संग मिलकर ठंडा शांति रखकर एक दूसरे से बात कीजिए। वायलेंस से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा, और ये नुकसान का फायदा कोई और उठाए। मणिपुर का सीएम के साथ बातचीत हुआ? मैं मणिपुर के सीएम को जानता नहीं हूँ, मैं उनसे क्यों बात करूँगा। लेकिन मणिपुर में बहुत लीडर्स हैं जो नॉन पॉलिटिकल भी है, मैतेई कम्युनिटी से भी है और कुकी कम्युनिटी से भी है। मैंने उन सब से बात किया है, और अगर वो चाहते कि मैं इसमें कुछ करूँ तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू इंटरवीन। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि शांति रहना चाहिए। किसी का घर, किसी का चर्च, किसी का मंदिर को नहीं जलाना चाहिए। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा और सोसाइटी डिवाइड होगी। अभी त्रिपुरा का बाहर का सिचुएशन क्या है? आप देखिए 8 तारीख को क्या होने वाला है। 8 तारीख को आप देखिए क्या होगा, उसके बाद आप बात कीजिए। मैंने आज ही होम मिनिस्टर से सवेरे बात किया है, और 10 तारीख को मैं होम मिनिस्टर से मिल रहा हूँ, और 8 तारीख को इंटरलोकेटर त्रिपुरा आ रहा है। और जो लोगों ने मेरे ऊपर मजाक उड़ाया था कि नहीं होगा, कहाँ गया, 28 दिन हो गया, 1 महीना, मैं 1 महीना चुप रहा हूँ, लेकिन जब मैं जवाब देता हूँ ना, तो मैं ठीक तरीके से जवाब देता हूँ। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 8 तारीख को इंटरलोकेटर्स आ रहे हैं। मैं आज समाजपति से मिल रहा हूँ, अपने पार्टी के लीडर से मिल रहा हूँ। त्रिपुरा का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए मैं फाइट करते रहूँगा। ये फाइट मेरा नहीं है, मेरा कम्युनिटी का है, और मैं अपना कम्युनिटी के लिए हमेशा फाइट करूँगा। थैंक यू। कि नहीं होगा, कहाँ गया, 28 दिन हो गया, 1 महीना, मैं 1 महीना चुप रहा हूँ, लेकिन जब मैं जवाब देता हूँ ना, तो मैं ठीक तरीके से जवाब देता हूँ। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 8 तारीख को इंटरलोकेटर्स आ रहे हैं। मैं आज समाजपति से मिल रहा हूँ, अपने पार्टी के लीडर से मिल रहा हूँ। त्रिपुरा का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए मैं फाइट करते रहूँगा। ये फाइट मेरा नहीं है, मेरा कम्युनिटी का है, और मैं अपना कम्युनिटी के लिए हमेशा फाइट करूँगा। আজকে ছোট্ট একটা প্রেস মিটের আয়োজন করেছি, যদিও এই তৎক্ষণাৎ সময়ের মধ্যে অনেক মিডিয়া হাউসকে খবর দিতে আমরা পারিনি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস, এই রাজ্যের অনেকেই জানেন যে মণিপুরে জাতি দাঙ্গায় অনেক এলাকা এখন দাঙ্গার কবলে। আমাদের চিন্তা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের more than 100 students, they are studying in different schools and colleges in Manipur, এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় মণিপুরে অবস্থানরত। খবর পাওয়া যাচ্ছে যে সেখানে সেফটি এন্ড সিকিউরিটির অভাব বোধ করছে আমাদের ছেলেমেয়েরা, এবং in some hostels, in some colleges, ফুড সাপ্লাই না হওয়ার কারণে খাদ্যাভাব এটাও দেখা দিয়েছে। and in the last 1 week মণিপুরে যে সময়টাতে এই কমিউনাল ভায়োলেন্সটা হয়, সেদিন থেকে আজ অব্দি এখন যে সময়টাতে আমি কথা বলছি, there is no response and reaction, any step taken by state government যে সেখানে stranded students তাদেরকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার কোনো ব্যবস্থা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ আমার নজরে আসে, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আজকে সকালবেলা এসে I reached the office of leader of opposition in the assembly house at around 11 AM, এবং একটা চিঠি ইস্যু করেছি
চিঠিতে আমি খুব পরিষ্কারভাবে, আপনারা যেহেতু এখানে আছেন, আমি পড়ছি যে চিঠির বয়ান। I would like to draw your urgent attention to the stranded students in Manipur due to a state of disturbance or communal violence in that area. There are more than 100 students from Tripura presently studying in Manipur. They are facing tremendous security and safety problems at present in their school and colleges. They need to be brought back to Tripura at the earliest till situation becomes normal. এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ চেয়েছে। আপনাদের মাধ্যমে আমি রাজ্যের মানুষের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এখানে বিরোধী দলের অফিস গ্রহণ করার পর এ যাবৎ 37টা চিঠি বিরোধী দলের অফিস থেকে আমি বিরোধী দলনেতা হিসেবে জনস্বার্থে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনেকগুলো চিঠি লিখেছে। এবং এটাও আমি বলতে ভুলব না যে এই সমস্ত চিঠির অ্যাকনোলেজমেন্ট, একটা চিঠিরও অ্যাকনোলেজমেন্ট আমি পেলাম না। আমার মনে আছে আমি যখন এমএলএ ছিলাম 2003-2008, সেই সময়কার যে সরকারকে আমি বিরোধী দলনেতা ছিলাম না, আমি বিরোধী একজন বিধায়ক ছিলাম। এনি লেটার we write to the ministers, any ministers, even the secretaries, তৎসময়ে কমিশনার পোস্টও ছিল যারা আজকে সেক্রেটারি, আই এম শিওর at that time it was known as commissioner. কমিশনারদের যখন আমরা চিঠি লিখি, at least they acknowledge our letter, যাহা আপনার চিঠিটা পেয়েছি এবং চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তর বা সরকার কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে, পদক্ষেপ নিয়েছে, এই বিষয়ে ওনারা চিঠি দিয়ে আমাদেরকে জানান। গতকাল এখানে এমএলএ হোস্টেলের পূজা উপলক্ষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি কাছে দিয়ে ওনাকে বলেছি এই কথা যে কোনো দপ্তরের থেকে, কোনো মন্ত্রী মহোদয়গণ থেকে বা ইভেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে আমাদের লেটারগুলো কি হয়েছে এই খবর কিন্তু আমাদেরকে জানানো হয়নি। আমি বলছি, আমি চিঠি দিয়েছি, যেমন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি 17/4/2023 একটা চিঠি ইস্যু করেছি বেঙ্গলি এন্ড রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরকে যেন প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। সিবিএসই বোর্ডে এই চিঠি আমাদের হায়ার এডুকেশন বা এডুকেশন দপ্তর থেকে যাবে, এটা বিধানসভাতে আমরা আলোচনা করেছি। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপটা গ্রহণ করেছে এই বিষয়ে জানতে চেয়েছে। Till date, I have not been acknowledged or I have not been replied যে এই লেটারের কি হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে খোয়াই হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ভিজিট করার পর, যেহেতু স্বাস্থ্য দপ্তর ওনারই হাতে, উনি নিজেও একজন ডক্টর, ওনাকে আমি চিঠি দিয়েছি যে ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনটা সেখানে অচলাবস্থার মধ্যে আছে, সারা জেলার রোগীরা সেই সুবিধা পাচ্ছেন এবং অত্যন্ত কম্প্যাক্ট এরিয়াতে এই হাসপাতাল চলছে। এটাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় কিনা, সেখানে পরিষেবা ডাক্তারদের সংখ্যা আরো বেশি করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আমি চিঠি দিয়েছি। অফিসে বসে আমি এটা চিঠি লিখিনি, ফার্স্ট I visited, interacted with the patients and doctors, আলোচনার পর যেটা আমার করণীয় অফিসে এসে আমি ওনাকে চিঠি দিয়েছি। এদের কোনো উত্তর পেলাম না। আরডি পঞ্চায়েত, যেহেতু আরডি এবং পঞ্চায়েত ওনার কাছে আছে, এডিসি ভিলেজ কমিটি এবং পঞ্চায়েত, ইট ইজ অলসো with the honorable chief minister of this state, অনেকগুলো জায়গায়
এডিসি ভিলেজ কমিটিগুলোকে পার্শ্ববর্তী এডিসির অন্তর্ভুক্ত বা এডিসির এরিয়ার ভেতরে যে সমস্ত রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লক আছে সেইখানে ওই সমস্ত এডিসি ভিলেজকে রিঅর্গানাইজেশন করে তাদের আওতায় আনার জন্য এই সরকারের আগের যে সরকারটা ছিল 5 বছরের বিজেপি এবং আইপিএফটি সরকার, তদানীন্তন যিনি রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী ছিলেন যিশু দেববর্মা, উনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে রাজ্যে 33টি এডিসি ভিলেজ যাদের এডিসির ভেতরে যে রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লকগুলো আছে তার ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তো এটা কার্যকর হচ্ছে। এটাকে রিমাইন্ডার দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছি, এটারও কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না। এবং আজকে একটা চিঠি, এই চিঠি ইস্যু করার পর সাংবাদিক সম্মেলন করার আগে আমি ভাবলাম যে ওনার সাথে একটু কথা বলবো। উনি একটা মিটিংয়ে ব্যস্ত আছেন, আমার নাম্বার ওনার পিএস দিয়েছেন। আমি ওনাকে জানাতে চেয়েছিলাম যে চিঠির আর্জেন্সি কি, কারণ আই ডোন্ট নো এই চিঠি যাওয়ার পর যদি এই চিঠিটা আজকে না দেখে উনি 3 দিন বাদে 4 দিন বাদে দেখে, দিস ইজ আ ম্যাটার অফ আর্জেন্সি। ছেলেমেয়েরা, গার্জিয়ানরা এখন অনেকেই চিন্তায় আছেন, বিশেষভাবে ইন্ডিগোর যে বিমান পরিষেবা ইম্ফল এবং আগরতলার মধ্যে চালু আছে, দেখা গেছে যে আগামী 10 তারিখ পর্যন্ত কোনো টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে ইন্ডিগোর কর্তৃপক্ষের সাথেও রাজ্য সরকার এ বিষয়ে কথা বলতে হবে যে বাড়তি ইন্ডিগো সার্ভিসের চালু করার জন্য মণিপুরের যে সমস্ত এলাকায় ইম্ফল থেকে দূরে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আছে, এসকর্টিং করে তাদের ইম্ফল এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এনে রাজ্যে আনার জন্য এই বিষয়ে মণিপুর সরকারের সাথে কথা বলতে হবে। তো এই বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম, তবে আমি আশা করছি উনি মিটিং শেষে নিশ্চয় কথা বলবেন, আমি ব্রিফ করব। বাট রাজ্যের মানুষকে এটাই আমি বলতে চেষ্টা করছি যে দি গভর্নমেন্ট ইজ নট প্লেইং অ্যাক্টিভ রোল। জনস্বার্থে আরো চিঠি লিখেছে যে খোয়াই জেলার অন্তর্গত অনেকগুলো জায়গায় শিলাবৃষ্টিতে যখন মানুষের ঘর বাড়ি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই সমস্ত এলাকায় আপনারা যারা সংবাদ মাধ্যমের লোক আপনারা দেখেছেন, আমি নিজে কোনো জায়গায় পায়ে হেঁটে আমাদের পার্টির যারা কর্মীরা বা ভিলেজ কমিটির যারা চেয়ারম্যান মনোনীত মেম্বারসদের নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে পরিদর্শন করার পর আমি চিঠিগুলো দিয়েছিলাম। আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব যে সরকার যে কোনো মাননীয় বিধায়কগণ যখন চিঠি লিখবেন বা নিজের এলাকার উন্নয়নের জন্য জনস্বার্থের কথাগুলো যখন উল্লেখ করে চিঠি দেবেন, অন্তত এই বিষয়ে সরকারকে মাননীয় বিধায়কদের জানানো উচিত, এটাই পরম। So I don't know why this culture has been abolished, এবং আমি অনুরোধ করব এবং সরকারের কাছে এটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই বিষয়ে সরকার অতি সত্বর পুনরায় যে সুস্থ কালচার, বিরোধীদেরও একটা ভূমিকা আছে, ওনারাই বলছেন যে আপনারা দেখান যে উন্নয়নের কোথায় দরকার আমরা দেখাতে চেষ্টা করছি। We'll cooperate with the government wherever they want us to show where development is required, এবং যখন মানুষের দরকার পড়বে, প্রয়োজন হবে, মানুষের স্বার্থের কথা যখন বঞ্চিত হবে, তখন সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা মানুষের জন্য লড়াই করব। ধন্যবাদ। So in that case, what is the scenario? The government, when we ask them, they say the scenario is not that. Even I asked the question that there are 3 states at least I know who are already evacuating their students. The government said there is no official report of any state evacuating the students, but today we have seen some of the states already received their students.
what is the scenario right now? What is the threat perception over there? How See- panicked are the See, one thing Honorable Chief Minister must understand. Sitting in Agartala or sitting somewhere in this state, we cannot feel the heat of communal violence in Manipur. We must have to understand the pain and the fear and the problem of safety and security through those people who are presently in Manipur. If there is no problem and if there is no heat of the communal violence faced by the students, why the students will call their parents? Why the parents will approach to us? Maybe no one has approached to Honorable Chief Minister directly, but it does not mean that there is no problem in Manipur. As you say, already 3 states they started evacuating their students. It is a wise step actually. Should we wait? আমরা কি অপেক্ষা করব যে something happens there, then only we start evacuating our students? Wiser step will be before any accident takes place, before anyone dies. আমাদের কোনো স্টুডেন্ট মারা যাওয়ার আগে তাদেরকে ইভাকুয়েট করার প্রয়োজন। And that is why, to bring the attention of the government, I have called this press meet. এটা আমাদের কর্তব্য। If I was in his position, probably 2-3 days back itself, I would have taken all these steps. এটা তো আমি ব্যক্তিগতভাবে স্টেপটা নেব না। The government machinery, secretaries are there, transport department is there. Government is having money for all these kinds of situation to take it. So I'm not going to spend, or Honorable Chief Minister is not going to spend money from his own pocket or his own salary. It is a matter of instruction and to make a strategy to combat this situation. So I think whatever Honorable CM is telling, I think I cannot agree personally. Before anything happens, we have seen so many churches, so many villages are under attack, under fire. In this situation, we cannot allow our students to be in Manipur. Till this situation becomes normal, they should be evacuated and they should be brought back. They should be handed over to their parents. That is why government is required. যদি আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য নিজেরাই সব কিছু করতে হয়, তা সরকার কেন দরকার? কেন মেশিনারি দরকার? তাহলে কেন্দ্রের থেকে যে টাকাগুলো আসছে স্ট্রেট ওইখান থেকে প্রতি ঘরে প্রতি অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে দিলেই পারে। কমিশনারের দরকার নেই, ডিজিপিরও দরকার নেই, মুখ্যমন্ত্রীরও দরকার নেই, বিরোধী দলনেতারও দরকার নেই। যা বাজেট হবে 26,800 কোটি টাকা ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ফ্যামিলি দিয়ে দাও সবাইকে। গভর্নমেন্ট হ্যাজ গট এ রোল টু প্লে। এই সমস্ত সিচুয়েশনে কোনো ব্যক্তি বিশেষ এটাকে সমাধান করতে পারবে। Here is the role of the government. So I appeal to the government. Government should take immediate action and should take step to bring back the students. Thank you. One of the elected representative of TTADC has taken a step. I have seen in social media some 50 students are being brought back. So how do you see that? Yeah, see, this is what is a positive step. If TTADC, much smaller administration than the state, TTADC's budget is only 2% of the state budget. If TTADC can do this, why the state government is sitting quietly? It means state government is waiting some students to die there and then only they will take this step. This is wrong. Honorable CM himself is a doctor, well qualified chief minister, among the chief ministers in the whole of the country, and I am sure after this press meet he will definitely take the needful action. Thank you. কিন্তু এই স্ট্যান্ডটা যে আছে স্ট্যান্ডটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তার চিন্তা করতে হবে। আমার ভিত ঠিক আছে কিনা আমরা সেটা ভুলে যাই। ভূতে আলোচনা খুবই কম হয়। আমরা সবসময় বলি আমার ভূত শক্তিশালী ভূত, এই দিয়ে তো শুরু হয়েছিল আমাদের 2015-16 থেকে আমরা শুরু করেছি।
অনেকেই জানতো না যে বুথের শক্তিশালী বুথ কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং কারা থাকবে, মেম্বার কারা কারা থাকবে এবং তাদের কি করণীয়। বিভিন্ন সময়ে আমাদের যে প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছে সেখান থেকে বিভিন্ন যে আমাদের সাবজেক্ট আছে অনেকে শুনেছেন, অনেকে তার ব্যবহারও করেছেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে যে রাস্তায় তার কি প্রয়োগ, বাস্তবে তার কি প্রয়োগ, ঘরে তার কি প্রয়োগ, তার বাড়িতে বা তার বুথে এবং সে পাড়াতে কি প্রয়োগ, সেটা সম্পর্কে কিন্তু অনেকেই ওয়াকিবহাল বলছিল না। বর্তমানে আমাদের যখনই দেখা যায় তোমার বুথ আমি যাব, বুথ সশক্তিকরণের কথাবার্তা হচ্ছে, কিন্তু তাকে নিয়মিত যে ওয়াইলিং করা, চর্চা করা, সেটা কিন্তু অনেকবার যখনই আমরা বিভিন্ন সময় যখন বুথ নিয়ে আমরা কথা বলি, পরবর্তী সময় দেখা যায় এমন সব আমাদের কার্যক্রম চলে আসে, সেখান থেকে আমরা প্রথমে বলা হয়েছে প্রতি সপ্তাহে আমরা বুথে বসবো, সেখানে প্রথমে বিবেকানন্দজিকে প্রণাম করব, ফুল দেব, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে ফুল দেব এবং পণ্ডিত দীনদয়ালজিকে দেবো, আলোচনা করব অনেক রকমের যে বর্তমান যে পলিটিক্যাল সিচুয়েশন কি, আমাদের কি নির্দেশ আছে, এইসব বিষয়ে আলোচনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একদিন দুদিন হলো, এখন সবাই ভুলে যায়, সবাই যে যার কাজেও ব্যস্ত। কারণ বুথের যারা মেম্বার্স বিভিন্ন, এখানে তো পেইড এমপ্লয়ি বলে কিছু নেই, মনের তাগিদে এবং কমিউনিস্টদের অত্যাচারে যারা অত্যাচারিত তাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে কিন্তু আজকের এই পার্টিতে ওরা সবাই সামিল হয়েছে। এবং এর আগেও যেসব পার্টি যারা করেছেন বা দেখেছেন, তাদের কার্য প্রণালী দেখে তাদের বিরক্ত হয়ে কিন্তু এটা আদর্শের কথা চিন্তা করে, আদর্শের স্থান হিসাবে সেটাকে যখন ওরা বুঝতে পারলো যে এখানে গেলেই একটা মন্দিরের মতো একটা অবস্থান, যেখানে ভালো কথা শুনবো, ভালো কাজ করব, মানুষের জন্য কাজ করব, তবেই মানুষ এসেছে। কিন্তু তারপরেও কিন্তু একটা খামতি আছে, যদি খামতি না থাকতো তা কেন আবার বুথ সশক্তিকরণ আবার আমরা করব? আমাদের বুথ তো অলরেডি শক্তিশালী। তো আজকের এই সাংগঠনিক বৈঠকে আমাদের এই বুথের বিষয়ে কথাবার্তা বলতে হবে, কারণ বুথের মধ্যে আমাদের সব মোর্চারাও আছে, মূল যে আমাদের 11 জনের কমিটি আছে সেটা আছে, কিন্তু তারপরেও এখন অন্যান্য সব ঢুকে গেছে, আমাদের মোর্চা গুলো ঢুকে গেছে এবং বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কার কি কাজ, কাউকে দেওয়া হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রীজির যে প্রতি মাসে যে লাস্ট সানডেতে যে ওনার যে মন কি বাত সেই অনুষ্ঠান দেখার জন্য, কাউকে দেওয়া হয়েছে পৃষ্ঠা প্রমুখের ইনচার্জ, কাউকে দেওয়া হয়েছে ইন্টেলেকচুয়াল যারা আছে তাদের ইনচার্জ ওই বুথে। কিন্তু কতটা হয় এখনো কিন্তু আমার মনে হয়, আমি সন্দিহান, আমি জানি না। এবং এর জন্য আমাদের কি কি করণীয় তার কিন্তু পুরো একটা মডেল, কেননা এই ডিস্ট্রিক্ট থেকে শুরু, আমি যেহেতু এই ডিস্ট্রিক্টে এসেছি, কেননা ওই মন্ডলেই শুরু হোক, আর কেপুর মন্ডলেই শুরু করে একটা দেখাক না যে আমার বোধ আমরা এইভাবে চলি, একটা মডেল গুজরাটের কথা বলি, তো মডেল এটা মন্ডল হতে পারে না, করা যায়, ইচ্ছে করলেই সেটা সম্ভব। আর যখন এই মজবুত যখন হবে, তখন যত ইলেকশনই আসুক, সে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতেই হোক, মন্ডল মানে আমাদের সেই বিধায়কের এই ইলেকশনে আসুক, অ্যাসেম্বলি ইলেকশনই হোক বা এমপি ইলেকশন হোক, কোনো সমস্যা নেই, লোকাল বডির ইলেকশনই হোক, তো আমাদের আসলে ওই জায়গাটায় আমাদের যেতে হবে। এখানে অনেক বিষয়ে কথা হয়েছে, আমি আমার এতদিনের যে অভিজ্ঞতা সেই নিরিখে আমি বলবো, অনেকে আমি দেখি যে রাজনীতিতে তাহলে তো কংগ্রেস করলেই পারতো, কংগ্রেসের একটা বিরাট একটা সংখ্যক লোক এখন বিজেপিতে এসছে, তারপরেও কিন্তু দেখা যায় সেই অতীত যে কালচার যে আমি রাজনীতি করতে আসবো, সেটা অর্থ উপার্জনের একটা মাধ্যম, এই যে একটা বিষয়, সেটা থেকে কিন্তু কেউ বেরিয়ে আসতে পারছে না। দুঃখ হয় অনেক সময় যদি আমরা বলি যে এইভাবে আমরা অর্থ উপার্জন করতে দেব না,
তাহলে আমরা কি করব? পার্টি করতে এসছো, কি করতে হবে সেটা কি পার্টি বলবে? তুমি কিভাবে অর্থ উপার্জন করবে এর জন্য এসছো যে পার্টি বলে দেবে তোমাকে? কারণ ওই যে কমিউনিস্টরাও করে এসছে, কংগ্রেসও করে এসছে, আমরা দেখেছি এইভাবে। যখন যেটা হওয়ার সেটা ঠিকভাবে সরকারই দেখবে কাকে কি দিতে হবে না দিতে হবে। তোমার চিন্তা করতে হবে না। মোদিজি এখানে, আমাদের এখানে ডাবল ইঞ্জিনের যে সরকার আমরা বলি, আমরা গেলেই সব পাই। রেল লাইন থেকে শুরু করে এই যে মোদি আমাদের হীরা আমাদের মডেল দিয়েছেন, হীরা আমাদের প্রেজেন্ট করেছেন, সেটা তো দাবি করতে হয় না, দিয়েছেন। সেইভাবে সময়ের সাথে সাথে 35 বছর পরে গিয়ে সিপিএম মানুষকে দিতে পেরেছে, যে কারণে আমাদের সমস্যা হচ্ছে অনেক জায়গায়। ইলেকশন লড়তে গেলে কোন একটা আধিকারিককে কোথাও দিলে আরে এত নাম্বার 1 সিপিএম, তো 35 বছরে তো এরাই ছিল, কে কোথায় রাখবো? গ্রেডেশন তো করা যায় না। তো আমাদেরও তো সময় লাগবে। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। এই বছরও আমরা, এই 5 বছরে ওদের দেখাও যায়নি কোথাও। এই কোভিডের মোকাবেলা করতে গিয়ে ওদের চেহারাও দেখা যায়নি কোথাও। আর আমরা সব সময় সবাই আমরা কাজ করেছেন। তারপরেও দেখুন, যখন 16 তারিখ ইলেকশন, 15 তারিখের খবর দিল যে রাত্রিবেলায় সকালবেলায় সবাই, মানে 16 তারিখ সকালবেলায় 5টার মধ্যে সমস্ত বুথে বুথে পৌঁছতে হবে। ওদের সংগঠন কোন জায়গায় সবাই পৌঁছে গেছে, আপনারা দেখেছেন সবাই। এবং আমরা সেই জায়গায় নেই, কিন্তু মাঠেও নেই, তারা হাটেও নেই। তারপরেও কিন্তু এদের সংগঠন স্ট্রং ছিল। ভাবার বিষয় যে আমরা কিভাবে তাহলে চলবো। এরা এখনো জীবিত। এমন অনেক জায়গায় আছে যে কেন্দ্রগুলোর নাম বললেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ওখানকার যে বিধায়ক যিনি জিতেছেন, একবারের জন্য মানুষের কাছে যায়নি, মানে কোনো জায়গায় ওদের দেখাও যায়নি, অথচ জিতে গেল। আর আমরা সারা বছর কাজ করলাম। এখানে বোধহয় কয়েকবার আমি এসেছি, এর আগেও আমরা অনেকবার, যখন আমি বুথ ম্যানেজমেন্টের ইনচার্জ ছিলাম, তাছাড়া মেম্বারশিপ ড্রাইভের সময় আমি এসেছি। কবে থেকে আমরা কাজ করছি, এবং এই কাজের সুবাদে একদিকে যেমন আমরা হেরেছি, আবার আরেক দিক দিয়ে আমরা দুজন আরো নতুন এমএলএ এখানে পেয়েছি। এবং সেই পরিশ্রমের ফসল কিন্তু এটা সহজে আসেনি। এটা তো কাজ তো আমাদের করতে হবে, কিন্তু হারানোর যে বিষয়টা, সেটা নিয়ে একটা বিরাট প্রশ্ন। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলার চেষ্টা করেছেন যে আমি যদি থাকি কোনো জায়গায় তবেই ঠিক, আর আমি যদি কিছুতে না থাকি সব বেঠিক। এই যে একটা চিন্তা ভাবনা, এবং আমার মতোই চলতে হবে। এর থেকে আমাদের যারা সিকোয়েন্স অফ বর্ডারে যে আমাদের সংগঠনের মধ্যে সমস্যা হয়, বুঝতে পারছে না কি হয়, ভয় দেখানো হয়। এ তো কংগ্রেস বা সিপিএম এর যে এখন একটা অ্যালায়েন্স হয়েছে, অশুভ অ্যালায়েন্স আমরা বলি, তারা বলে আর কয়েকদিনের মধ্যে আমরা চলে আসছি। আমাদের মধ্যে বলে আর 2 মাস আমি আসছি, আরেকজন বলে আরে 2-3 মাস, এই বলে বলে আমাদের মধ্যে আবার কনফিউজ করা। কি কারণে? যখন যে জায়গায় উপর থেকে আমাদের দেওয়া হবে, আমরা সেই দায়িত্ব পালন করব। যখন তুমি আসবে আবার আমরা সালাম দেব, বাস হয়ে গেল। এখন থেকে এত কেন? এই যে বিষয় নিয়ে আমাদের পুরো ত্রিপুরার মধ্যে এই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করার ফলেই কিন্তু আমাদের আজকে 41 যদি থাকতো, আমাদের 42 চেহারাটা ঠিকভাবে চিনিয়ে দিতাম। চেহারাটা ঠিকভাবে চিনিয়ে দিতাম। এই যে বললো না, আমরা এমন একটা জায়গার মধ্যে আছি, উপায় নেই, কম্পালশন। একজন তো বসেই ছিল কিং মেকার হওয়ার জন্য, দেখলো হলো না, তারপর নানা রকম গুটি চালাচ্ছে, এর সাথে কথা বলে, এর সাথে কথা বলে, আবার এর সাথে মানে ফোনেও কথা বলে, অদ্ভুত এক সিচুয়েশন করে রেখেছে। আমাদের পার্টির যে চিন্তা ভাবনা, যদি আমরা সমস্ত পার্টিকে ছেড়ে আমরা এমন এক পার্টিতে যদি এসে থাকি, তাহলে আমাদের মস্তিষ্ক ঠিক থাকা দরকার। আমরা কেন মাঝে মাঝে ডেভিয়েট হব? এমন কোনো কাজ আমাদের নেতৃত্ব এরকম কোনো কাজ করছে না, আমাদের সরকার এরকম কোনো কাজ করছে না যেখানে আমার
মাইন্ডেরও ডেভিয়েশন হবে। সরকার ভালো কাজ করছে, আমরা সবাই মিলে কাজ করছি, তো ভালো যদি কাজ করে থাকি তো ভালোর দিকেই যাবেন, আলোর দিকে যাবেন, অন্ধকারের দিকে কেন যাবেন? আর অন্ধকারের লোকগুলো আজকে আলোর কিছুটা আভাস পেয়ে ভাবছে যে আমি আলোকিত, ভুল করছে। আসলে ওরা অরিজিনালি অন্ধকারের লোক ছিল এবং ওইগুলোই ভালো বুঝে। বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টির অনেক কার্যকর্তা ইচ্ছে করে এখানে যখন সিন্ডিকেটের যে বিষয়, সিন্ডিকেট করে রাখে এক এক জায়গায়, এবং ওই সিন্ডিকেটদের আমি রাজা। আমাদের পার্টির সমস্ত লোকের আমি নেতা না, আমি কার নেতা? ওই সিন্ডিকেটদের নেতা, এবং সবাইকে আমি চিনি, আমি সবাইকে জানি। তো ন্যাচারালি সিন্ডিকেটে তো পয়সা দেবে, পয়সার আদান প্রদান থাকবে। তা আমরা কি এই রাজনীতি করব? তাহলে তো পশ্চিমবঙ্গে এখন যে মমতা ব্যানার্জি যে রাজনীতি করছে এটা করলেই পারে। আমরা তো এটা চাই না। আমরা তো চাই যে ত্রিপুরাতে ভারতীয় জনতা পার্টির একটা মডেল রাজ্য হিসেবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমরা সবাই মিলে সেটা চেষ্টা করি। আর সেটা 5 বছরের জন্য না, এটা চলবে। বেতন দিয়ে দেবো আরেকজনকে, আরেকজন চালাবে, তবেই তো চলবে। আর কেউই স্থায়ী না। আমি যদি মনে করি যে আমার ছাড়া এই ত্রিপুরা রাজ্য চলবে না, তো মূর্খের সঙ্গে আমি বাস করবো, অসম্ভব, হয় না এটা। বর্তমান 4 বছর 5 বছরের মুখ্যমন্ত্রীর কি অবস্থা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, আস্তে আস্তে মলিন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে কাজ ভালো করলে সেটা স্মরণ রাখে মানুষ, ব্যক্তি আনইম্পর্টেন্ট। এবং আমাদের ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, পণ্ডিত দীনদয়ালজি, তবেই তো আমরা ওনাদের আজকে ফুল চড়িয়ে আমরা কথাবার্তা বলি। এখন আমাদের সামনে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের সাথে আছে, আমাদের সাথে অমিত শাহজি আছে। এত বড় একজন, সবাই বলে চাণক্য, কি সুন্দরভাবে একটার পর একটা প্রদেশে আমরা ইলেকশন যখন আসে, আমাদের জেপি নাড্ডাজি কিভাবে সর্বভারতীয় সভাপতি, কি পরিশ্রমটাই না করছে। সকাল থেকে রাত্র অব্দি আপনারা দেখুন, যে কোন জায়গায় যাচ্ছে সারাক্ষণ পরিশ্রম করছে। ওনাদের কিছুটাও যদি আমরা সবাই মিলে, ওনাদের মতো আমি পারবো না, আমার মতো হয়তো বা নিচে পারবে না, কিন্তু খানিকটা তো করতে পারি, বা বেশিও করতে পারি, অনেকের বেশি যদি ইচ্ছা থাকে। তো সেটাও আমরা যদি করতে পারি আগামী দিন। আর মানে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের পরে গোমতী ডিস্ট্রিক্ট সব দিকে কিন্তু উৎকৃষ্ট মানে, সব দিকে উৎকৃষ্ট মানে। এখানে আমাদের সবচেয়ে যে সব যেই যে জায়গায় থাকুক, প্রথমে এসে মা ত্রিপুরা সুন্দরীকে প্রণাম করে তারপরে যা সবাই কাজ করে। দিল্লির থেকে পর্যন্ত লোক আসে। আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য অলরেডি 31 to 32 করোড় খরচ করেছি, আরো করছি আমরা, ডেভিয়েশন হয়েছে, আরো হবে। 4-4টে এখানের সারা ত্রিপুরাতেই হবে, এখানে রোপওয়ে লাগছে এখানে। তো এই ফিউচারই বেটার এখানে। আর আমাদের যখন সেই গেটওয়ে সাউথ ইস্ট এশিয়ার হয়ে যাবে, মৈত্রী সেতুর ওপেনিং, দুটো মঙ্গল পোর্ট এবং মঙ্গলা পোর্ট আর চিটাগাং পোর্ট অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন, খালি একটু ওয়েট করতে হবে। অবশ্য চেহারাই পাল্টে যাবে পুরো ত্রিপুরা, সব দিক দিয়ে আমাদের উন্নত ডেভেলপমেন্ট। আমি বুজন নগরে, আপনারাও যাবেন মাঝে মাঝে, আমরা অনেক সময় খালি বলি যে ত্রিপুরাতে ইন্ডাস্ট্রি নেই, মুখ নেই, তেমুক নেই, গিয়ে দেখবেন একবার। আমি নিজেও অবাক হয়ে গেছি মানে গিয়ে, এই যে রাবার থেকে আমাদের মানে কি ধরনের প্রোডাক্টস হয়। টায়ার কোম্পানির সাথে আমরা অলরেডি মুভ হয়েছে, ইলাস্টিক বেরোয়, ইলাস্টিক কত সুন্দর তার ফিনিশিং, ইলাস্টিক, রাবার গাছের ফার্নিচার, আমাদের আগর থেকে, আগর গাছের থেকে এত প্রেসিয়াস যে ম্যাটেরিয়াল বেরোয়, সেটা এখন আমরা এটাকে মুভ করেছি বাইরে যাওয়ার জন্য। বিভিন্ন যে ইনভেস্টমেন্ট সামিট আমরা করেছি, এখানে বাস ভিত্তিক বিভিন্ন যে ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করছে। ধূপকাঠি হচ্ছে, ধূপকাঠি আগে 4টে তাদের সারফেস ছিল, এখন এটাকে সিঙ্গেল গোলাকৃতির বিভিন্ন যে মেশিন এখানে এখন নিয়ে আসা হয়েছে, তাদের মশলাটা কম লাগে, তো সেগুলো বাইরে যাচ্ছে এখন ধূপকাঠি। মানে ইচ্ছে থাকলে আমরা চাকরির কথা বলি,
কিন্তু এত সুন্দর ত্রিপুরাতে স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে আমরা যেটা বলেছি বারবার যে আমরা কর্মসংস্থান করব, আমাদের মধ্যে ওই যে সিপিএম এর মতো কংগ্রেসের যে চিন্তা ভাবনা এখনো ঢুকে আছে মস্তিষ্কে, কিন্তু যারা করার কিন্তু করছে এখানে আইটিতে এত ডেভেলপ, এত কাজ হচ্ছে ভাবা যায় না। আমরা পুরো ত্রিপুরাটাকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না এখনো। একটু বেরোতে হবে, যেতে হবে, খালি মানে শুধু বসে থাকলে হবে না, দিতে হবে এই মানসিকতাতে বেরোতে হবে। উল্টো বলতে হবে আমরা দিতে পারবো এখন, এরকম অবস্থা দাঁড়ানো উচিত। ব্যাংক ফাইন্যান্স করবে, কোথাও কোনো সমস্যা হলে আমরা এইভাবে নিয়মিত কাজ করছি আমরা, এবং তার জন্য অ্যাওয়ারনেস দরকার। আমাদের সরকারের তরফ থেকে আমরা চেষ্টা করছি। কিছুদিন আগে, আজকে 2-3 দিন আগে আমাদের আইটি মিনিস্টার তথা অর্থমন্ত্রী এবং আমরা গিয়ে একটা এখানে যে আইটি ভবনে একটা ট্রেনিং সেন্টার আমরা করেছি, অত্যাধুনিক ট্রেনিং সেন্টার, সমস্ত পেপারলেস হবে, সমস্ত কাজকর্ম এখন সারা ত্রিপুরা, এবং অন্যরাও যেতে পারবে। টুইট করা মাত্র প্রধানমন্ত্রী যে প্রথম বোধহয় টুইট করার আধা ঘন্টার মধ্যে উনি টুইট করেছেন যে ত্রিপুরা এগিয়ে গেছে, আগামী দিন আরো এগিয়ে যাবে। সেই দিশায় আমরা কাজ করছি একটার পর একটা। আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে চাই, কিন্তু এই বক্রপথের যে রাজনীতি সেটা আমাদের দলেই হোক, আমি অন্য দলের কথা বলবো না, তার দিকে সবাই সজাগ থাকবে। কারণ এই রাজনীতি দিয়ে বেশি দিন চলা যায় না। অনেকে যারা পুরনো ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আছেন, ওনাদের মধ্যে একটা আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কোনোদিন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এই ত্রিপুরাতে হবে, এবং ওনাদের সম্মানার্থে যারা অনেক, আমি সবার কথা বলছি না, সবাই ভালো এরকম না, আমরা যথেষ্ট বুদ্ধি মানে আমাদের আছে এবং আমরা ম্যাচিউরড, ওইসব লোকদের সাথে কথা বলা যে আপনারা যা চেয়েছিলেন সেটা হতে যাচ্ছে কিনা, দেখবেন আপনাদের ভালো পরামর্শ দেবে। আর মিথ্যা কথা না বলা, কিছু লোক আছে আমাদের মধ্যেও আছে এমন সব বানিয়ে মাস্টারপিস, এত মিথ্যা কথা বলে, এত মনে হয় যেন কাল কি বুঝি এটা সত্য হচ্ছে। এইসব লোকের থেকে দূরে থাকা, সবসময় সত্য কথা বলা, মিথ্যা কথার কোনো অবস্থা নেই। পয়সা আসবে, পয়সা আবার থাকবেও না, কিন্তু যে আদর্শ ভিত্তি করে আমরা পার্টি করতে এসেছি সেই আদর্শে আমরা আদর্শিত হয়ে আমরা কাজ করব এবং সমাজের জন্য কাজ করব, সেটা বড় কথা। সবাই সবকিছু সব পদ পাবে তারও কিন্তু গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না, কাজের মাধ্যমে আসবে এখানে। এর আগে আমি কয়েকবার এসেছি, এইসব কথাবার্তা হয়েছে এখানে, কিন্তু এই আজকের এই সাংগঠনিক বৈঠকে আমি এক কথাই বলবো, যারা জুনিয়ররা আছে, যারা এখানে বিভিন্ন যারা মোর্চারা আছে, বিশেষ করে মহিলা মোর্চা, বিশেষ করে আমার যুব মোর্চা ভাইয়েরা যারা আছে, এবং অন্যান্য সব মোর্চারই সবাইরই, উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু অল দ্য মোর্চা, আমি বলবো তাদের অনেক দায়িত্ব, বডি আছে কিন্তু কাজকর্ম কিন্তু সমস্ত মোর্চাদেরই করতে হবে, এবং সেই তাদের কাজের ফসলেই আগামী দিন এই যে দুটো সিটের কথা বলছে, তবে এটা আবার আমরা এখানে প্রধানমন্ত্রীজিকে পুরো উপহার দিতে পারবো এই 2 সিট আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আগামী দিনে, এবং সেটা আমরা করতেই হবে বাই এনিমি। উনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, বারবার এসছেন বিধানসভাতে, বারবার কথা হচ্ছিল যে আমরা কিভাবে বিধানসভা আমরা জয়ী হই, এবং আমরা যে আশা করেছিলাম হয়তো সেই এক্সপেকটেশন আমাদের ফুলফিল হয়নি, এবং তার কারণগুলো কিন্তু অলরেডি আমাদের হাতে চলে এসছে, কারা কারা এর পিছনে ছিল সব চলে এসছে। যে আগামী দিন আমি শিওর যে আপনারা বিশেষ করে এই গোমতী জেলার সবাই অত্যন্ত মানে পুরনো কার্যকর্তা এবং অনেক কিছু আপনারা বুঝেন, এবং একটা সংস্কার আপনাদের আছে, এখানের সবাই পড়াশোনা শিক্ষিত লোক, এবং আমি চাই যে আগামী দিন এই গোমতী জেলা এবং তার যে মন্ডলগুলো আছে একটা ओम शांति। आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी,
ब्रह्मा कुमारी के सभी वरिष्ठ सदस्यगण और इस सभा में भारत के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य रहा है, मुझे कई बार आपके बीच आने का अवसर मिलता है। मैं जब भी यहां आता हूं, आपके बीच आता हूं, तो मुझे हमेशा एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। और ये पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार है जब मुझे ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला है। इसके पहले अभी फरवरी में ही आपने मुझे जल जन अभियान को प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित किया था। मैंने तब विस्तार से इस बात को याद किया था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से कैसे मेरी आत्मीयता में एक निरंतरता रही है। इसके पीछे परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद भी है और राजयोगिनी दादी जी से मिला स्नेह भी है। आज यहां सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ है। आज शिवमणि होम्स और नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का भी काम शुरू हुआ है। मैं इन सभी कार्यों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था और उसके सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में भारत की सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी का यह अमृत काल देश के हर नागरिक के लिए कर्तव्य काल है। इस कर्तव्य काल का मतलब है हम जिस भूमिका में हैं उसका 100% निर्वहन और उसके साथ साथ समाज के हित में, देश के हित में अपने विचारों और जिम्मेदारियों का विस्तार, यानी हम जो कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ करते करते ये भी सोचना है कि हम अपने देश के लिए और क्या ज्यादा कर सकते हैं। आप सभी इस कर्तव्य काल के प्रेरणा पुंज की तरह हैं। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था के तौर पर समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करती है, लेकिन साथ ही आप समाज सेवा से लेकर साइंस, एजुकेशन को प्रमोट करने, सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह समर्पित है। माउंट आबू में आपका ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, ये वाकई उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे बताया गया है कि इंस्टीट्यूट के जरिए यहां आसपास के गांवों में हेल्थ कैंप किए जाते हैं, रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं
अब जिस सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल का संकल्प ने लिया है, वो भी इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने में मदद करेगा। आप सभी इस मानवीय प्रयास के लिए अभिनंदन के पात्र हैं। साथियों, आज हमारा पूरा देश स्वास्थ्य सुविधाओं के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। पिछले 9 वर्षों में पहली बार देश के गरीब से गरीब को भी एहसास हुआ है कि देश के अस्पताल उसके लिए भी आसानी से उपलब्ध है। और इसमें एक बड़ी भूमिका आयुष्मान भारत योजना ने निभाई है। आयुष्मान भारत योजना ने सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे भी गरीबों के लिए खोल दिए हैं। आप भी जानते हैं कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाती है। इस योजना का लाभ देश के 4 करोड़ से ज्यादा गरीब उठा चुके हैं। अगर आयुष्मान भारत योजना न होती तो इसी इलाज के लिए उन्हें 80,000 करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह जन औषधि केंद्रों पर मिल रही सस्ती दवाइयों की वजह से भी गरीब और मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। और मैं हमारे ब्रह्म कुमारी संस्थान की जितनी इकाइयां देश के गांव-गांव में हैं, अगर आप लोगों को जानकारी दें कि सरकार की तरफ से ऐसे जन औषधि केंद्र चलते हैं, स्टैंडर्ड दवाइयां होती हैं, लेकिन बाहर जो दवाइयां आपको 100 रुपये में खर्च होता है, यहां आपको 10-15 रुपये मिल जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं गरीबों की कितनी सेवा होगी। तो हमारी सभी इकाइयां, हमारी सभी ब्रह्मा कुमार हो या ब्रह्मा कुमारी हो, वे लोगों में ये जागरूकता लाएं और देश में स्थान स्थान पर ये जन औषधि केंद्र बने हुए हैं। आपके संपर्क में आए हुए लोग आपको हमेशा आशीर्वाद देंगे। अब जैसे किसी परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति है, डायबिटीज की बीमारी है, तो उसको दवाई के पीछे जो खर्चा होता है 1200, 1500, 2000 रुपये तक हो जाता है। लेकिन इसी जन औषधि केंद्र से अगर वो दवाई लेगा तो उसको शायद वो खर्चा 1500, 2000 से कम होकर के 100 रुपया हो जाएगा। उसका जीवन में बहुत बड़ी मदद होगी। यानी इस बात को आप हर दूर पहुंचा सकते हैं। साथियों, आप सभी इतने वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं कि हेल्थ सेक्टर की एक चुनौती डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल कर्मियों की कमी भी रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी कमी को सुधारने के लिए भी देश में अभूतपूर्व काम हुआ है। पिछले 9 वर्षों में औसतन एवरेज हर महीने एक नया मेडिकल कॉलेज खोला है। 2014 से पहले के 10 सालों में 150 से भी कम मेडिकल कॉलेज बने थे। बीते 9 वर्षों में देश में 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। - 2014 से पहले हमारे पूरे देश में एमबीबीएस की 50,000 के आसपास सीटें थी।
50,000 स्टूडेंट्स के लिए जगह थी। आज देश में एमबीबीएस की सीटें 1 लाख से भी ज्यादा हो गई हैं। 2014 के पहले पीजी की भी 30,000 के आसपास ही सीटें थी। अब पीजी सीटों की संख्या भी बढ़कर 65,000 से ज्यादा हो गई है। जब इरादा नेक हो, समाज की सेवा का भाव हो, तो ऐसे ही संकल्प लिए जाते हैं और संकल्प सिद्ध भी किए जाते हैं। साथियों, आज भारत सरकार हेल्थ सेक्टर में जो प्रयास कर रही है, उसका एक और बड़ा प्रभाव आने वाले दिनों में दिखेगा। देश में जितने डॉक्टर आजादी के बाद 7 दशकों में बने, उतने ही डॉक्टर अगले 1 दशक में बन जाएंगे। और हमारा फोकस सिर्फ मेडिकल कॉलेज या डॉक्टर तक सीमित नहीं है। आज ही यहां नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का काम शुरू हुआ है। भारत सरकार भी नर्सिंग के क्षेत्र में भी युवाओं को नए अवसर दे रही है। हाल में ही सरकार ने देश में 150 से अधिक नए नर्सिंग कॉलेज को स्वीकृति दी है। इस अभियान के तहत यहां राजस्थान में भी 20 से ज्यादा नए नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। इसका लाभ निश्चित तौर पर आपके सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल को भी होने वाला है। साथियों, भारत में हजारों वर्षों से समाज में शिक्षा से लेकर गरीब और असहायों की सेवा तक की जिम्मेदारी हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं ने संभाली है। मैं तो गुजरात भूकंप के समय से और उसके भी पहले से आपकी निष्ठा और हमारी बहनों की मेहनत का कार्य स्वयं साक्षी रहा हूं। आप लोग जिस प्रकार से काम करते हैं, उसे बहुत निकट से देखा है। मुझे याद है कच्छ के भूकंप की उस संकट की उस घड़ी में आपने जिस सेवा भाव से काम किया, वो आज भी प्रेरणा देने वाला है। ऐसे ही नशा मुक्ति के लिए आपके अभियान हो, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ब्रह्मा कुमारी के प्रयास हो, जल जन अभियान जैसे मिशन हो, एक संस्था कैसे हर क्षेत्र में एक जन आंदोलन तैयार कर सकती है, ब्रह्मा कुमारी ने ये करके दिखाया है। विशेष रूप से मैं जब भी आपके बीच आया हूं, मैंने देश के लिए आपसे जो अपेक्षाएं की हैं, उन्हें पूरा करने में आपने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपने जिस तरह देश भर के आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जब आपने पूरी दुनिया में योग शिविरों का आयोजन किया, जब दीदी जानकी जी स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी, जब सभी बहनों ने स्वच्छ भारत की कमान संभाल ली, तो इससे कितने ही लोगों को देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिली है। आपके ऐसे कार्यों ने ब्रह्मा कुमारी में मेरे विश्वास को
और भी कई गुना कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि जब विश्वास बढ़ता है तो अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, और इसलिए स्वाभाविक है कि आपके प्रति मेरी भी अपेक्षाएं जरा ज्यादा बढ़ गई है। आज भारत श्री अन्न यानी मिलेट्स को लेकर एक वैश्विक आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। आज देश में हम प्राकृतिक खेती जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें हमारी नदियों को स्वच्छ बनाना है, हमें भूजल का संरक्षण करना है। ये सारे विषय ऐसे हैं जो कहीं न कहीं हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ते हैं। इसलिए इन प्रयासों में आपका जितना ज्यादा सहयोग मिलेगा, उतनी ही देश की सेवा और अधिक व्यापक होगी। मुझे आशा है राष्ट्र निर्माण से जुड़े नए विषयों को ब्रह्मा कुमारीज इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ाएगी। एक विकसित भारत के निर्माण के जरिए हम विश्व के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र को साक्षात करेंगे। और आप जानते हैं, अभी यहां G20 समिट की बात हुई। हम G20 समिट में भी दुनिया के सामने, दुनिया जब विमेन डेवलपमेंट की बात करती है, हम G20 में दुनिया के सामने विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। महिलाओं की अगुवाई में विकास, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके एक बहुत ही उम्दा संगठन, व्यापक रूप से फैला हुआ संगठन देश की इन प्राथमिकताओं के साथ जुड़ करके नई शक्ति और सामर्थ्य के साथ अपना विस्तार भी करेंगे और राष्ट्र का विकास भी करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मुझे आपने यहां बुलाया, निमंत्रण दिया। मैं हमेशा कोशिश करता हूं जितना समय निकाल सकूं आपके बीच आऊं, क्योंकि यहां मैं आता हूं तो कुछ लेकर के जाता हूं। चाहे वो आशीर्वाद हो, प्रेरणा हो, ऊर्जा हो, जो मुझे देश के लिए काम करने के लिए दौड़ाती है, नई शक्ति देती है। तो मुझे यहां आने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी व्यक्त करता हूं। ओम शांति। ओम शांति। आपके शब्दों ने, आपके वचनों ने हम सभी के अंदर एक अलौकिक शक्ति और ऊर्जा भर दी है। आपकी सकारात्मक सोच, मधुर वाणी और प्रेरणादायक शब्द सुनकर हम सभी कृतज्ञ हुए। आज ये इस कार्यक्रम का समापन नहीं, एक शुरुआत है एक दिव्य संबंध का, जो सदा हमें आपके साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरणा देती रहेगी। सभी भारत माता की, भारत माता की, आबूराज की इस धन्य धरा पर सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मां अंबा, अर्बुदा मां और भगवान दत्तात्रेय के चरणों में
कोटि कोटि प्रणाम। ये धरती तप और तपस्या की है। विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करती ये धरा है। मेरा सौभाग्य है कि एक सेवक के रूप में बार बार आपके दर्शन का अवसर मिलता है। और आपसे किए हुए वादे को भला मैं कैसे भूल सकता हूं। जब मैं नवरात्र के दौरान आया था तब आपसे कोई बातचीत नहीं कर पाया था। कानून की मर्यादाएं थी और डिसिप्लिन में रहना मेरा स्वभाव और संस्कार है। लेकिन उस दिन आपके दर्शन करने का मुझे जरूर सौभाग्य मिला था। और अब भारी संख्या में, रात देर हो गई थी, उसके बावजूद भी आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मुझे लग रहा था कि मैं बिना बात किए इतनी बड़ी तादाद में आए, आपको नाराज करके जा रहा हूं। पता नहीं आपका गुस्सा कितना निकलेगा, लेकिन ये आपके संस्कार है, ये आपके मन का बड़प्पन है, ये आपकी ऊंचाई है कि आपने उस परिस्थिति को स्वीकार किया और मुझे आशीर्वाद दे करके आपने यहां से विदाई दी। वो दृश्य मेरे जीवन में एक संस्कार देने वाला महत्वपूर्ण दिवस रहा था। और वो आप सबके उदार व्यवहार के कारण, वरना सार्वजनिक जीवन में तो पल दो पल में जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाता है। और आज मैं देख रहा हूं आपने उस प्यार को अनेक गुना बढ़ा करके इतनी गर्मी में आप आशीर्वाद बरसाने के लिए आए हैं। मैं राजस्थान की धरा को, यहां के संस्कारी भाई बहनों को और आबू के विशेष करके मेरे भाई बहनों को मैं आज शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज 10 मई है। आज के ही दिन 10 मई को 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी उठी, जिसने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था। आज के दिन विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे संघर्ष को एक नई दिशा मिली थी। इसलिए आज के दिन वीर भूमि राजस्थान आना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम के जो वीर नायक थे, कई वीर नायक उस समय
राणा प्रताप की इस पवित्र धरती पर आकर के अपनी योजनाएं बनाते थे। राजस्थान की माताओं और उनके वीर संतानों ने मां भारती के मस्तक को हमेशा गर्व से ऊंचा रखा है। मैं आजादी के लिए समर्पित पूरे देश के हर वीर वीरांगना को इस वीर धरा से आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। कल ही देश ने महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती भी मनाई है। पूरे देश ने, पूरे राजस्थान ने महाराणा प्रताप के शौर्य को नमन किया है। साथियों, आप लोगों को संभवतः पता हो, उस समय जो महाराणा प्रताप के साथी थे, सहयोगी थे, वो युद्ध भूमि में महाराणा के साथ अपना भी योगदान दे रहे थे। लेकिन इतिहास ने करवट बदली, स्थितियां बदली, लेकिन स्वाभिमानी लोग मुगल सल्तनत के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। और इसलिए उस समय के राणा प्रताप के जो साथी थे, उसमें जो आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़ करके राणा प्रताप को साथ दिया था, उन्होंने अपने प्राण प्रिय धर्म के लिए, अपने प्राण प्रिय महाराणा के लिए या तो मौत चाहिए या तो जीवन भर जूझने का सामर्थ्य चाहिए, ऐसा कह करके फिर से विजय प्राप्त करने का संकल्प लेकर के गुजरात के यहां से सटे हुए इलाके के लोग हो, राजस्थान के हमारी इस आदिवासी धरा के लोग हो, वे लोग यहां से चल दिए थे और निकल करके कुछ लोग महाराष्ट्र गए, कुछ लोग कर्नाटका गए। और उसमें कर्नाटका में आज भी वो गौरव से जीते हैं। उस समाज को वहां के लोग हक्की पिक्की समाज के नाम से जानता है और वो जड़ी बूटियों का काम करते हैं और कई पीढ़ियों से वहां रहते हैं। आज भी राणा प्रताप का गौरव गान करते रहते हैं। इनमें से बहुत सारे साथी अब अपने काम के लिए जंगलों से जड़ी बूटियां लेकर के सूडान और अफ्रीका के देशों में जाकर के कुछ न कुछ छोटा मोटा व्यापार करते हैं। ऐसे ही हक्की पिक्की समुदाय के सैकड़ों साथी कुछ सप्ताह पहले सूडान में चल रही लड़ाई में फंस गए थे। बीजेपी की हमारी सरकार इन भाइयों बहनों को सूडान से निकालने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी राजनीति को देखते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, हो हल्ला करना शुरू कर दिया। अब आप कल्पना कर सकते हैं, दूसरा महाद्वीप, दूसरा देश, चारों तरफ गोलियां चल रही है, बंदूकें चल रही है, बम फूट रहे हैं, आग लगी हुई है, हर तरफ लड़ाई चल रही है और यहां कांग्रेस शोर मचा रही थी इन समाजों के लिए। और उसका परिणाम ये आया कि यहां की चिल्लाहट का पता वहां चलने लगा। अच्छा भाई, कुछ लोग यहां पर है, चलो ढूंढो। अब ये लोग मौत के साये में जीते थे, चुपचाप बाहर लाना था, लेकिन ऐसी कांग्रेस वालों ने गलतियां करके उनका चेहरा जग जाहिर कर दिया।
कांग्रेस ने इस आदिवासी साथियों की जान खतरे में डाल दी थी। और ये क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि सूडान में इतनी गोलियां चल रही थी, एक आध को तो लग ही जाएगी, और अगर एक आध को लग गई और वो भी हक्की पक्की आदिवासी भाई को लग गई, फिर तो उनको कर्नाटक के चुनाव में खेल खेलने का मजा आ जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाए, उसी का इंतजार था ताकि फिर मोदी का गला पकड़ सके। लेकिन इस पूरी राजनीति में कांग्रेस एक बात भूल गई। मुझे लगता है अभी भी वो मोदी को पहचान नहीं पाई है। कांग्रेस वालों को पता होना चाहिए था ये मोदी है, संकट में फंसे एक एक हिंदुस्तानी की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। साथियों, मोदी का नुकसान करने के लिए, बीजेपी का नुकसान करने के लिए कांग्रेस देश का नुकसान करने से भी बाज नहीं आती। जब देश में कोरोना महामारी आई, 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया, तब भी कांग्रेस ने अफवाह फैलाने की कोशिश की, वैक्सीन के मुद्दे पर लोगों को भड़काया। कांग्रेस चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो और वो मौके की तलाश में थे कि मोदी की गर्दन कैसे पकड़े। लेकिन मोदी इन लोगों की धमकियां और साजिशों के आगे न झुका है न झुकता है। अगर मोदी झुकता है तो 140 करोड़ देशवासियों के सामने झुकता है। आप ही मेरे मालिक हैं। साथियों, भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, अपने लोगों की जान बचाई, इतना ही नहीं दूसरे देशों को भी मदद की। साथियों, कांग्रेस की स्वार्थ की राजनीति का परिणाम राजस्थान को भी उठाना पड़ रहा है। आप पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में राजनीतिक लड़ाई का भद्दा रूप देख रहे हैं, भद्दा रूप देख रहे हैं। जनता के हित के बजाय यहां कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगाए बैठे हैं। जब कुर्सी पूरे 5 साल संकट में ही पड़ी रही हो, तो ऐसे में राजस्थान के विकास की किसे परवाह होगी। इसलिए ही आज कांग्रेस शासन में राजस्थान में कानून और व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जिस राजस्थान में गंभीर अपराध सुनने में कम ही आते थे,
वहां अब अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और अपने वोट बैंक की गुलामी कर रही कांग्रेस कुछ लोगों के तुष्टीकरण करने के लिए कार्रवाई करने से भी डर रही है। साथियों, कांग्रेस सरकार के इस रवैये की राजस्थान के माताओं, बहनों, बेटियों को सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। राजस्थान में महिलाओं से जुड़े अपराध चरम पर है। यहां तक कि उन्हें तीज त्योहार भी शंका आशंका के बीच मनाने पड़ते हैं। भाइयों और बहनों, 2 दिन बाद 13 मई को जयपुर बम धमाकों की बरसी है। 2 दिन बाद जयपुर में सीरियल ब्लास्ट करके आतंकियों ने हमसे अनेकों स्वजन छीन लिए। आज भी उनके परिवार इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि एक ना एक दिन उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने वही किया जिसके लिए कांग्रेस कुख्यात रही है, उसका इतिहास कुछ कुख्यात रहा है, उसके कारनामे कुख्यात रहे हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए हमेशा आतंकियों पर नरम रुख अपनाया है। कांग्रेस आतंकी विचारधारा के साथ खड़े होने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसी सोच की वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जयपुर बम धमाके के केस में कमजोर पैरवी की। इसके कारण धमाकों के आरोपी छूट गए। कांग्रेस अब लीपापोती की चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जिस प्रकार की राजनीति की है, उसमें दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज का सबसे अधिक अहित हुआ है। आदिवासी समाज ने तो बरसों तक कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन क्या मिला? सिर्फ अभाव, असुविधा और अवसरहीनता। सिरोही जिला हो, जैसलमेर हो, करौली हो, बारां हो, इन जिलों में कांग्रेस के कुशासन के कारण विकास नहीं हुआ। कांग्रेस ने जिलों को पिछड़ा घोषित करके पल्ला झाड़ दिया था, जबकि जिलों में ज्यादातर आदिवासी समाज भी था। आपने बीजेपी को अवसर दिया तो हमने इन जिलों में विकास की आकांक्षा जगाई, इनको आकांक्षी जिला घोषित किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते काम शुरू किया। आज सुबह ही मैंने नाथद्वारा में, अभी हमारे अध्यक्ष जी इसका वर्णन कर रहे थे, आज नाथद्वारा में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसका भी सबसे अधिक लाभ राजस्थान के आकांक्षी जिलों को होगा। उदयपुर और शामलाजी 6 लेन हाईवे से राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर
और बांसवाड़ा क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। बिलाड़ा जोधपुर सेक्शन बनने से जोधपुर और बॉर्डर एरिया तक पहुंच सुलभ हो जाएगी। चार भुजा और निचली ओड़न के प्रोजेक्ट से कुंभलगढ़, हल्दी घाटी और श्रीनाथ जी के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। साथियों, तारंगा हिल आबू रोड रेल लाइन की डिमांड अंग्रेजों के समय से चल रही थी। इसे भी अब बीजेपी सरकार ही पूरा कर रही है। मावली मेवाड़ को ब्रॉड गेज से जोड़ने की मांग भी लंबे समय से हो रही थी। ये काम भी बीजेपी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार में आज का नया भारत नए हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। आजादी के इस अमृत काल में हम भारतीयों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है, बहुत मेहनत करनी है। लेकिन इसके साथ ही अतीत में कांग्रेस सरकारों से जो गलतियां हुई, हमें उससे भी सबक लेना है। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे मालूम है क्या बोलेंगे। कोई कहेगा 2G घोटाला, कोई कहेगा कोयला घोटाला, कोई कहेगा बोफोर्स घोटाला, कोई कहेगा हेलीकॉप्टर घोटाला, कोई कहेगा यूरिया घोटाला। सबके अपने अपने जवाब हो सकते हैं, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में एक और बड़ा घोटाला, एक और बड़ा फ्रॉड, एक और जबरदस्त धोखा जनता के भावनाओं पर, उनके जीवन पर 50 साल पहले हुआ था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये फ्रॉड था कांग्रेस द्वारा 50 साल पहले देश में गरीबी हटाने की गारंटी। कांग्रेस की हर गारंटी के साथ कांग्रेस के नेता और अमीर हो जाते हैं और देश का नागरिक और गरीब हो जाता है। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण 2014 तक देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास शौचालय नहीं था। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण 2014 तक करीब 50 करोड़ लोगों का बैंकों में खाता तक नहीं था। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण देश के लाखों गांव सड़क संपर्क से वंचित थे। कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण आजादी के इतने दशकों बाद भी 16 करोड़ घरों में नल से जल नहीं पहुंच रहा था। कांग्रेस ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का ये फ्रॉड शुरू करके बरसों तक हर चुनाव में इसे बुनाया, गरीब को झूठा वायदा कर बरसों तक तरसाया। साथियों, 2014 के बाद से बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के इस सबसे बड़े फ्रॉड की सच्चाई देश के सामने रख दी है। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने गरीब कल्याण के जो काम किए हैं, वो अब तक देश में जितनी भी कांग्रेस सरकारें बनी है,
वो उनके काम से ज्यादा है दोस्तों। ये बीजेपी सरकार की मेहनत है जिसकी वजह से आज देश के करीब 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुले हैं। ये बीजेपी सरकार की मेहनत है जिसकी वजह से आज देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। ये बीजेपी सरकार की मेहनत है जिसकी वजह से आज देश में 9 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से साफ पानी पहुंचने लगा है। मैं इस क्षेत्र की माताओं बहनों को याद दिलाना चाहता हूं, मैंने आपसे वायदा किया था कि आपके जीवन से मुश्किलें कम करूंगा। आज राजस्थान के 40 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है। राजस्थान की लाखों ग्रामीण बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल रहा है। राजस्थान के लगभग 19 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर की सुविधा मिली है। इनमें से अधिकतर हमारी माताओं बहनों के नाम पर है, वरना हम तो जानते हैं हमारे यहां तो परंपरा रही, घर होगा पुरुष के नाम पर, दुकान होगी पुरुष के नाम पर, खेत होगा पुरुष के नाम पर, गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर, स्कूटर होगा पुरुष के नाम पर, महिला के नाम पर कुछ होता ही नहीं। मोदी ने बदल दिया। हमने जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, ये घर ज्यादातर महिलाओं के नाम कर दिया हमने। और आपको मालूम है आजकल जो घर बनते हैं ना, वो मामूली नहीं बनते। एक एक घर के पीछे लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च होता है, लाखों रुपयों का खर्च हो रहा है। और जब ये घर की मालिक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाली मेरी गरीब माँ, मेरी दलित माँ, मेरी आदिवासी माँ जब उस घर की मालिक बन जाती है ना, लाखों के घर की मालिक बनती है, तो मुझे संतोष होता है कि वाह, मेरी ये बहनें लखपति दीदी बन गई है, लखपति दीदी। कोई सोच सकता है कि कोई सरकार करोड़ों की तादाद में लखपति दीदी बना दे? ये आपका भाई है जिसने काम करके दिया है। भाई और बहनों, कांग्रेस ने गरीबों को सिर्फ और सिर्फ चिंता दी, असुरक्षा दी। बीजेपी सरकार ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दिया। बीमा और पेंशन से जुड़ी 3 जन सुरक्षा योजनाओं को कल ही 8 वर्ष पूरे हुए हैं। 8 वर्ष पहले मैंने उसको लॉन्च किया था। और प्रीमियम कितना था? ₹1.25 प्रतिदिन प्रीमियम। उसके अंतर्गत चलती थी पीएम जीवन ज्योति योजना। और ₹1.5 महीना वो प्रीमियम वाली चल रही थी, एक पीएम सुरक्षा बीमा योजना। और इनसे पहली बार सामान्य परिवारों को दुर्घटना और जीवन बीमा की सुरक्षा मिली। इन दोनों योजनाओं से 30 करोड़ से ज्यादा देशवासी जुड़े हैं। इन योजनाओं के तहत उन परिवारों में संकट आने के कारण और ये ₹1 वाला बीमा होने के कारण, ₹1.5 वाला बीमा होने के कारण अब तक मुसीबत में आए हुए इन परिवारों को 15,000 करोड़ रुपए इन गरीब परिवारों को हम दे चुके हैं भाइयों। 15,000 करोड़ रुपया, यानी लाखों परिवारों को बहुत संकट के समय में ये पैसा मिला है। जब सरकार संवेदनशील होती है, गरीबों की चिंता करने वाली सरकार होती है, तो उसके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, कल्याण किसी का करने का तरीका
वो गरीबों से, दलितों से, पीड़ितों से, आदिवासियों से, समाज के पीछे हुए जो समाज है उनके हित में काम करने की होती है। और भाइयों बहनों, बीते दशकों में कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों ने सामाजिक न्याय के नाम पर, सोशल जस्टिस, उस नाम पर भी देशवासियों से विश्वासघात किया है। आजादी के बाद से ही सबसे अधिक पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पर बनी, सोशल जस्टिस का नारा लगाकर बनी। लेकिन इन पार्टियों ने देश को क्या दिया, समाज को क्या दिया? इन्होंने देश को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद दिया, गौर परिवारवाद दिया और भ्रष्ट इकोसिस्टम दिया। जब ये दल सत्ता में आते हैं तो अपनी वोट बैंक की बढ़ाई के लिए, समाज के नाम पर जो वोट बैंक बढ़ाई है उसके नाम पर आते तो हैं, लेकिन उनका भला नहीं करते हैं, भावनाएं भड़काते हैं, भला सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हित साधने में लगे जाते हैं। जिस समाज को ये अपना वोट बैंक बनाते हैं उसको तो और भी नुकसान हो जाता है। एक तो उनको कुछ मिलता नहीं, कोई कुनबाई खा जाता है, लेकिन लोगों को लगता है इन्हीं को मिल रहा है, तो बाकी समाज भी उनके प्रति उनकी सद्भावना कम होने लगती है, तो समाज में भी तनाव पैदा हो जाता है। और भाइयों बहनों, इतिहास गवाह है कि जो भी इन राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक बना उसका विकास रुक गया। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, सही विकास के लिए वोट बैंक बनने की गलती मत कीजिए। अच्छा होगा कि आप कर्तव्यनिष्ठ वोटर बने। भेड़िए की चाल चल करके वोट बैंक बनाई में जुड़ सकते हैं, लेकिन शेर की चाल चलनी है ना, तो वोट बैंक का हिस्सा मत बनिए, वोटर बनिए, सीना तान के वोटर बनिए, वोट बैंक मत बनिए। साथियों, कांग्रेस कैसे जनता से ठगी करती है ये राजस्थान के किसानों से बेहतर कौन समझ सकता है। आप याद कीजिए, राजस्थान में चुनाव से पहले किसानों से क्या वायदा किया गया था? 10 दिन के भीतर सभी किसानों को कर्ज माफी करेंगे। ये गारंटी दी गई थी कि नहीं दी गई थी, मुझे बताइए। ये गारंटी के ढोल पीटे थे कि नहीं? राजस्थान के लोग बताए, उन्होंने कहा था ऐसा? कहा था? ये गारंटी दी थी? 10 दिन तो छोड़िए, अब तो 5 साल पूरे होने को है। कितने किसानों का वाकई में कर्ज माफ हुआ है, ये आप राजस्थान के लोग, मेरे किसान भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। बीजेपी सरकार किसान के हितों को प्राथमिकता देती है, उनके लिए मेहनत करती है। हम छोटे से छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं ताकि उन्हें बैंकों से आसानी से मदद मिल सके। हम पीएम फसल बीमा योजना लेकर आए ताकि सूखा हो, बाढ़ हो या अन्य प्राकृतिक आपदा हो, किसान के नुकसान की भरपाई हो सके। हमारी नीयत का सबसे बड़ा प्रमाण पीएम किसान सम्मान निधि है। इसके तहत बीजेपी सरकार ने राजस्थान के छोटे छोटे किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा कराए हैं। अब उन्हें खेती से जुड़े छोटे छोटे खर्चों के लिए दूसरों के पास जाना नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, भारत सरकार की एक और नीति की वजह से राजस्थान के किसानों को बड़ा लाभ होने वाला है। मोटे अनाज को
बीजेपी सरकार श्री अन्न के रूप में देश दुनिया तक पहुंचाने जा रही है। यहां का बाजरा, ज्वार और दूसरे मोटे अनाज यानी श्री अन्न जब दूसरे देशों में जाएंगे तो किसानों का भी लाभ बढ़ेगा। साथियों, कांग्रेस किसानों की दिक्कतों को कम करने के लिए, सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कभी गंभीर नहीं रही। ये मेरा सौभाग्य है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने सरदार सरोवर डैम के लिए जो काम किया उसका लाभ राजस्थान के किसानों को भी मिल रहा है। आज राजस्थान के भी अनेक गांव और शहरों तक नर्मदा का पानी पहुंच रहा है, वरना कांग्रेस ने तो कदम कदम पर ये कोशिश की है कि सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा योजना के साथ जुड़ा हुआ है उसका काम अटक जाए। साथियों, कांग्रेस ने किसानों को कैसे धोखा दिया, इसका एक उदाहरण सालगांव बांध परियोजना भी है। ये परियोजना 4.5 दशक पहले तब बनी थी जब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए ये कभी धरातल उतरी ही नहीं पाई। ये बांध पहले बन जाता तो 30 लाख रुपए से भी कम खर्च होते। आज इसी बांध का खर्च बढ़कर 300 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र को तो प्रकृति ने भी समृद्ध किया है और यहां हमारी धरोहरें भी मौजूद है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यहां पर स्थित है। पास में दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। पहाड़ियों के बीच नक्की झील का एक आकर्षण भी अलग है। हम देश भर में ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। विकास को गति और विरासत को सम्मान, यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है। इसी रास्ते पर हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना है। एक बार फिर आप सभी का ये प्यार और इतनी तमतमा की धूप में इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज पूरे राजस्थान में गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष भाई नारायण प्ररोज जी से कि वो सभी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी अपने किए हुए वादे के अनुसार पधारे और पिछले कुछ दिन से मैंने न्यूज़पेपर में सुना है और मैंने देखा भी है फेसबुक सोशल मीडिया पोस्ट में, जिन लोगों को मैंने कैंडिडेट नहीं देके एमएलए बनाया, जैसे कि साबरूम से बुरुंगनांग जितेंद्र चौधरी, अगर तिपरा मोथा कैंडिडेट देता तो वो आज असेंबली में बैठता नहीं। वो मुझे फ्रॉड कहता है, वो हमारे तिपरा मोथा के लीडर्स को फ्रॉड कहता है। 25 साल तक सीपीएम ने हमारे ऊपर शासन किया, उससे पहले 10 साल और किया निपेन चक्रवर्ती के अंदर। तिपरासा का वोट लेकर सीपीएम पावर में आता था, लेकिन हमको मिला क्या सीपीएम से? आइडियोलॉजी। आपने पेट में खाना नहीं दिया, आपने घर के ऊपर छत नहीं दिया, बच्चे को शिक्षा ठीक से नहीं दिया। आज भी हमारे लोग पीछे हैं क्योंकि 35 साल तक सीपीएम ने राज किया। पहले 10,
उसके बाद 25 साल हमारे वोट से जीतते थे। हमको क्या मिला, हमारे कम्युनिटी को क्या मिला? और आज वो मुझे फ्रॉड कहता है, जिसने सब कुछ दाव में लगा दिया अपने लोगों के लिए फाइट करने के लिए। बीजेपी से भी एक दो लीडर्स लोग बोल रहे कि तिपरा मोथा खत्म हो चुका है, तिपरा लैंड का डिमांड अब बुबागरा नहीं करेगा। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के अंदर तिपरा लैंड है, ग्रेटर तिपरा लैंड है। मैंने किसी को उकसाया नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे दिल के अंदर जो बात है, हमारे तिपरासा के अंदर जो दिल का बात है, वो खत्म हो चुका है। अगर मुझे पोस्ट चाहिए होता तो मैं इलेक्शन के पहले भी ये पोस्ट ले लेता, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने कम्युनिटी के लिए फाइट करना चाहता हूं। मुझे इलेक्शन में, मुझे पॉलिटिक्स में कोई लोभ लालच नहीं है। अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूं। गलत बात है ये। अगर आपको गलत बात लगता तो ये गलती मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरा नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य के बारे है। मैंने बहुत दिन से बात नहीं किया है, आज करना चाहता हूं। ये लोग बीजेपी से भी एक दो जो जनजाति लीडर्स है, 100 को ले लिया। अरे आप 100 को लो, हमारे लोग के पास भी पैसा का कमी है, जा रहे हैं क्योंकि उनको सुविधा चाहिए। हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप तिपरा मोथा को तोड़ना चाहते हो, कोशिश करो। तिपरा मोथा टूट जाएगा, लेकिन ग्रेटर तिपरा लैंड का डिमांड नहीं टूटेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का भी डिमांड खत्म नहीं होगा। और शर्म करो, अपना ही तिपरासा होकर अपना ही तिपरासा को कुछ नहीं दे रहा है। आप लोग इलेक्शन के पहले मैक्सिमम ऑटोनॉमी का बारे बात किया, आज क्या बात कर रहे हो? आप बीजेपी सेंटर में है, स्टेट में है, डिमांड करो, नहीं होगा। क्योंकि दिल्ली का बीजेपी अलग है, स्टेट का बीजेपी अलग है। दिल्ली का सीपीएम अलग है, स्टेट का सीपीएम अलग है। दिल्ली का कांग्रेस अलग है, स्टेट का कांग्रेस अलग है। तिपरासा के बारे कोई परवाह नहीं करता स्टेट में, क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है। मैं अपने लोगों का अधिकार के लिए फाइट करूंगा। हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फाइट करूंगा। और बुबागरा डरता नहीं है। जब शेर चुप हो जाता है ना, वो अपना नेक्स्ट अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो मेरा चुप रहना आप डर मत समझिए। आई लव माई तिपरासा पीपल। और जो लोग हमें फ्रॉड कहते हैं, मैं फिर से बोलता हूं, मणिपुर से स्टूडेंट किसने लाया आपने पॉकेट लगाकर? आप तो पावर में है ना, आप तो एमएलए भी है। आप क्यों नहीं एक स्टूडेंट को भी वापस क्यों नहीं ला सकते खुद का पॉकेट का रुपया लगाकर? कोरोना के टाइम कितने हजार को लेके आए, आपने एक को लाया नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट देना बहुत आसान है, खुद के जेब के अंदर हाथ डालकर पैसा निकालकर अपने कम्युनिटी को हेल्प करना बहुत मुश्किल है। मंत्री थे, एमपी थे, अब क्या हुआ? Bobagra will keep on fighting for his people. Bobagra loves his people and his community. And Bobagra is not a politician. He is here to help his community. अपना लोगों को हेल्प करना चाहता हूं। आपको नेतागिरी करना है, करो। मैं अपना काम करता हूं। और जो कांच के घर में रहते हैं ना, किसी और के घर में पत्थर मत फेंको, नंगे हो जाएंगे। इसके लिए ये मेरा वार्निंग ले लो और देखो मैं क्या करता हूं अपने लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बेलाइनो हम भाई अब खनादी थांनाय चौमारियो चौमारनि सिगां अब जों साखलायखा त्रिपुरानि गोबांखुग बरक भाजपानि हाफांनो नायस्लायखा भारतीय जनता पार्टी सामुं सित्रा बरक चिनी कन्स्टिट्यूशन चिनी त्रिपुरा सारावहाय जरा बैकवर्ड बा अंडर प्रिविलेज सेक्शन बरक बरंनि जे राइट कन्स्टिट्यूशनल राइट हिंदी बा सिविल राइट हिंदी आबनो बरक बसिया बरक जे इ त्रिपुरा हास्तिनि जरा बिग्रा बरक
borongni bagui je socio economic development ni kok सबका साथ सबका विकास बरक साओ किंतु कुबुई जे सामुं बुतां बा जे याप्रि सानाय नांगो आबो बरक खाया सिदा फुनुंगनानै सिमी एडभार्टाइज खालामनानै सिमी किसु सामुं बरक तांगो चंगमारिनि रिजाल्ट नुकजाखा जे जों जे साख्लायमानि ककनो कुबुई भारतीय जनता पार्टी बाय IPFT नि जे अलायंस थांनाय 2018 नि चंगमारियो बरक 51% भोट मानो ताकलायनि चंगमारियो बरक 40% मानका 11% बरकनि भोट डाउन अंका अर्थात मेजॉरिटी जे 60% त्रिपुरा राज्यनि लोकरक बीजेपी नो नासलेयो अब नुकजाखा किंतु तोफानो बीजेपी टाइप ऐसे हापांगो सकपाइका बाहाय खाई जे बीजेपी नो नासलेनाय जे बरकनि डिमांड जुदा जुदा जेमन जों लेफ्ट फ्रंट चिनी मेन डिमांड अंका रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ ताई बरक जरा बिग्रा खांग्रा बरकनि बागै ओवरऑल डेवलपमेंट किंतु मथानी डिमांड बरकबो अगेंस्ट बीजेपी बरकबो बीजेपी नो नासली बीजेपी नो मसेंदी हने बरक अवाई खलाइखा किंतु बरकनि डिमांड अंखा बीजेपी नो मेसेनुई ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि लामा साइनानि खायदी इनखाय डिमांड जुदा जुदा किंतु बीजेपी ने अगेंस्ट मथाबो सुं लेफ्ट ताई कांग्रेस बो कांग्रेस चेनखा ए बीजेपी भोट कम मानखा किंतु भोट बागजाखा डिविजन अंखा तिनी ओ लामाने बिसिंतै भारतीय जनता पार्टी IPFT भोटो माइनॉरिटी अंफानो बरक मेजॉरिटी सीट तुई कोनो रकम 33 मेजॉरिटी नि किसा काइनई सीट माने बरक सरकार थांखा इनखाय आबो जे ओ गवर्नमेंट आबो जंखा बीजेपी IPFT बरक जे लुकरनि बागै सामुं काहाम तांगिया खाइया आबो नंनाय आं तिनिनो लंथराय बेलिनि होते किफेलो आं तिन फुङाव थांमानि आं लंथराय बेलिनि बरक चिनि गोविंदबारी मानिकपुर चाकबेहा लंथराय हाथाय सागारगो बरक माइमुसाइया तुइक्रुई मलेरिया गैस्ट्रोएंटेरिटिस अंतंगो डाक्टर क्रुई मानिकपुर हॉस्पिटल बंद आगे आमते खरान दिन लुमनाय तुई टैंकारो खाई आबुक जागो ई गवर्नमेंट सागो जे अटल जल धारा 90 चुं पाइपलाइन देखा बड़ पाइपलाइन बड़ तुई बरक तुई मानुंगिया इनखाय बीजेपी गवर्नमेंट हाथा अब हाफांनि कोनो खबर क्रुई केबो थांगियो जागारागो बरक शुधु उत्सव खाइयो बरक टंथक जागो किंतु खा खाममाने कगंखा त्रिपुरा मथा बरंनि ताबक 13 जना बरंनि MLA दङ बरंनो ताबक जे 19% भोट मानफानो जों कांग्रेस लेफ्ट जों 36% भोट मानफानो जों ताबक ऑफिशियली अपोजिशन पार्टिया जों सेकेंड लार्जेस्ट दङैबो जे भोट बागजाकबानि कारनो शुधु बीजेपी जितिया मथा ताबक ऑफिशियली बरक अपोजिशन पार्टी अपोजिशन लीडर मथानी लीडर न अपोजिशन लीडर किंतु ब जागा बरकनि कक ब जागा बरकनि अब खरां जों खानाया बोले बरंनि यागो ADC बरक तो तबक थांनान नांगो कांग्रेस हाख्लाय नांगो तामनि बगे रेगा रांक्रुई तामनि बगे रेगा सामुं तांगै वेजेस मान्याव तामनि बगे सिनि त्रिपुरा सामसे रगो तुइक्रुई तामनि बगे तबक जे साक हामनि बगे बिथि वाथि मान्या बरक माइमासे थुइतों इनखाय त्रिपुरा हास्तिनि लुकरमनि बगे फाइनाय बिसिबा बेलाय
खाई चाया कुक अंसिनाई थांनाय बिसिबा जे चाया अंका आबुनि सोलायबो ताबुक थाइबो चाया कुक নাই কারণ বিজেপি তাবুক বিন্দাস আরে আমরা কামনা করলে কি হইব আবার গভর্নমেন্টে আইছি কি হইছে কেবন বরক তাই ড্যাম কেয়ার বরক হাই কাজে ত্রিপুরালনি লুকরক ইজ এ রেজাল্ট যে ভোট ডিভিজন হই যে ভোট বাগজাগই যে বিজেপি এন্টি পিপল বরক বা আসুক নাচলে জাগইবো বরক তাই হইছে ফাইমানখা আবো চিনি বাগই বেলাইখে বিস্কামনি বাগই চাইয়াম নাই আবনতি নুগজাতমো Desa kami yang saya tapi bawa bakso kalau mau thayo chen sabun kok kamu lama kasu lagi bagi masa yang mana yang tu kamu pi tahu edisi am saya je kami yang saya village council election ini tu ini yang itu mana kamu dah main reason ni tahu না আবো ভিলেজ কাউন্সিল ভোট যে আবো অংখা তাই গেছে আবো যে আবো ভোট অমিয়া অমিন তুই করই বা এই সামুং করই মাই মসাই অং আবো কগিয়া আবো অংফান অংখাম কিন্তু ভিলেজ কাউন্সিল নি ভোট অংনা নাঙো কারণ যে কামি আমসেনি বরক ডেমোক্রেটিক্যালি বরংনি ইলেক্টেড বরকনো বরংনো তুদুলনি নাঙো তামনি বাগৈ বিজেপি নি গুন্ডা সান্ডা শিকক বাংকক বরক সরকারি রাং বা সরকারি স্কিম ন বরক চালং নানি আবো তংমানিয়া যিনি কনস্টিটিউশন আবনো পারমিট খাইয়া ओंखाय आबोबो कारण তিনি তৈকুরিয়ং মানি তিনি লামা করিয়ং মানি মাই মুসিয়ং মানি ইজ এ ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশন আবো করুই আবো কুথুই তাবো নো হ্যার কাজে আবো কারণ কিন্তু আবনো একমাত্র কারণ ইয়া আবো ওয়ান অফ দ্য রিজনস আবো অংখাই ও যে ইলেক্টেড বরক বরক তাইবো খরাংতে সেইমান খামু কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি বরক চিনি কনস্টিটিউশন নো চিনি যে ডেমোক্রেটিক রায়দানো আবো বরক গসিয়া বুখুক বাই থাগো ও রাজানি মূর্তি নামই রাজানি বুমুই কিছু আবো এই ছুটি ডিক্লেয়ার খাই কিছা বুখা নানা নাইও কিন্তু কুবি কুবি খাই ঠিক আছে আবো কাহাম সামুং তাংখা বরক ঠিক আছে আবো সায়াং হিনিয়া আবো খালাইকা কিন্তু আবো সিবি ভাই চিনি ত্রিপুরাসারংনি হামকারায়ংগিয়া নং চিনি ত্রিপুরাসা আমচৈরংনি লামা তুই ফেরাং সামুং তাই ডেভেলপমেন্ট আবনি যে স্কিম চলে তংমানি আবনো কন্টিনিউ খাইনান নাং আবো তা করিখা মুংসা করিখা উনসা আনসুমং করি শুধু নুকজাগো ফ্ল্যাক্স পোস্টার তাই লেকচার আবো সিমি কিন্তু সামুং খাই মুংসা করি jasa kamu Tirasa hampir berarti Tirasa mod kali je kaisa kok asai temen ke bahasa kami kasih dia boleh interlocutor proses cumi apa nanti lagi interlocutor tumang na interlocutor ni meaning tamo বাংলা বাইংখাই মধ্যস্থতাকারী চিনি কক বরবে হিংখাই হ্যাঁ মণিপুরের যে সমস্ত এলাকায় ইম্ফল থেকে দূরে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আছে এসকর্টিং করে তাদের ইম্ফল এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এনে রাজ্যে আনার জন্য এই বিষয়ে মণিপুর সরকারের সাথে কথা বলতে হবে তো এই বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম তবে আমি আশা করছি উনি মিটিং শেষে নিশ্চয় কথা বলবেন আমি ব্রিফ করব বাট রাজ্যের মানুষকে এটাই আমি বলতে চেষ্টা করছি যে the government is not playing an active role জনস্বার্থে আরো চিঠি লিখেছি যে খোয়াই জেলার অন্তর্গত অনেকগুলো জায়গায় শিলাবৃষ্টিতে যখন মানুষের ঘর বাড়ি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সমস্ত এলাকায় আপনারা যারা সংবাদ মাধ্যমের লোক আপনারা দেখেছেন আমি নিজে কোনো জায়গায় পায়ে হেঁটে আমাদের পার্টির যারা কর্মীরা বা ভিলেজ কমিটির যারা চেয়ারম্যান মনোনীত মেম্বারসদের নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে পরিদর্শন করার পর আমি চিঠিগুলো দিয়েছিলাম আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব
যে সরকার যে কোনো মাননীয় বিধায়কগণ যখন চিঠি লিখবেন বা নিজের এলাকার উন্নয়নের জন্য জনস্বার্থের কথাগুলো যখন উল্লেখ করে চিঠি দেবেন, অন্তত এই বিষয়ে সরকারকে মাননীয় বিধায়কদের জানানো উচিত। এটাই পরম। So I don't know why this culture has been abolished, এবং আমি অনুরোধ করব এবং সরকারের কাছে এটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই বিষয়ে সরকার অতি সত্বর পুনরায় যে সুস্থ কালচার, বিরোধীদেরও একটা ভূমিকা আছে। ওনারাই বলছেন যে আপনারা দেখান যে বের উন্নয়নের কোথায় দরকার, আমরা দেখাতে চেষ্টা করছি। We'll cooperate with the government wherever they want us to show where development is required. এবং যখন মানুষের দরকার হবে, প্রয়োজন হবে, মানুষের স্বার্থের কথা যখন বঞ্চিত হবে, তখন সে সিটিং ইন আগারতা or sitting somewhere in this state. We cannot feel the heat of communal violence in Manipur. We must have to understand the pain and the fear and the problem of safety and security through those people who are presently in Manipur. If there is no problem and if there is no heat of the communal violence faced by the students, why the students will call their parents? Why the parents will approach to us? Maybe no one has approached to Honorable Chief Minister directly, but it does not mean that there is no problem in Manipur. As you say, already 3 states they started evacuating their students. It is a wise step. Should we wait? আমরা কি অপেক্ষা করব যে something happens there, then only we start evacuating our students? Wiser step will be, before any accident takes place, before anyone dies, আমাদের কোন স্টুডেন্ট মারা যাওয়ার আগে তাদেরকে ইভাকুয়েট করার প্রয়োজন। And that is why, to bring the attention of the government, I have called this press meet. এটা আমাদের কর্তব্য। If I was in his position, probably 2-3 days back itself, I would have taken all these steps. এটা তো আমি ব্যক্তিগতভাবে স্টেপটা নেব না। The government machinery, secretaries are there, transport department is there, government is having money for all these kinds of situation to take it. So I'm not going to spend, or Honorable Chief Minister is not going to spend money from his own pocket or his own salary. It is a matter of instruction and to make a strategy to combat this situation. So I think whatever Honorable CM is telling, I think I cannot agree personally. Before anything happens, we have seen so many churches, so many villages are under attack, under fire. In this situation, we cannot allow our students to be in Manipur. Till this situation becomes normal, they should be evacuated and they should be brought back, they should be handed over to their parents. That is why government is required. যদি আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য নিজেরাই সব কিছু করতে হয়, তা সরকার কেন দরকার, কেন মেশিনারি দরকার? তাহলে কেন্দ্রের থেকে যে টাকাগুলো আসছে স্ট্রেট ওইখান থেকে প্রতি ঘরে প্রতি অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে দিলেই পারে। কমিশনারের দরকার নেই, ডিজিপিরও দরকার নেই, মুখ্যমন্ত্রীরও দরকার নেই, বিরোধী দলনেতারও দরকার নেই। যা বাজেট হবে 26,800 কোটি টাকা, ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ফ্যামিলি, দিয়ে দাও সবাইকে। গভর্নমেন্ট হ্যাজ গট এ রোল টু প্লে। এই সমস্ত সিচুয়েশনে কোনো ব্যক্তি বিশেষ এটাকে সমাধান করতে পারবে। Here is the role of the government. So I appeal to the government. Government should take immediate action and should take step to bring back the students. Thank you. One of the elected representative of TTADC has taken a step. I have seen in social media some 50 students are being brought back. So how do you see that? Yeah, see, this is what is the positive step. If TTADC, much smaller administration than the state, TTADC's budget is only 2% of the state budget. If TTADC can do this,
Why the state government is sitting quietly? It means state government is waiting some students to die there and then only they will take this step. This is wrong. Honorable CM himself is a doctor, well qualified chief minister, among the chief ministers in the whole of the country, and I am sure after this press meet he will definitely take the फंडिंग का प्रॉब्लम हेल्थ का हमने बहुत स्कीम उठाया है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक फंड रिलीज नहीं किया, उस विषय में बात की और बहुत चीज़ था जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बड़ी बात तो बहुत चीज़ों में बात। तो कल इंटरलोकेटर आने वाले थे, क्या आएगा क्या या नहीं? कल नहीं आएगा क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम है मणिपुर में, सिचुएशन बहुत ही खराब है और इंटरलोकेटर से भी मेरा बात हुआ है, सीएम का भी बात हुआ है और वो थोड़े दिन के बाद आएंगे। उन्होंने मुझे 2 बार आज फोन किया और रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा समय दीजिए क्योंकि मणिपुर में सिचुएशन बहुत खराब है और उनको इमीडिएटली मणिपुर जाना पड़ रहा है। जैसा मणिपुर में थोड़ा सा शांति होगा वो अगले हफ्ते या थोड़े दिन के बाद आकर हमसे सबसे नॉट ओनली विद मी, विद IPF, विद समाजपति, विद मुख्यमंत्री सबसे मिलकर। और जो 10 तारीख को आप जाने वाले थे होम मिनिस्टर से मिले? 10 तारीख को होम मिनिस्टर से दिल्ली में सीएम साहब का डायरेक्ट रिप्लाई मुझसे तो अच्छी तरीके से बात हुआ, लेकिन मैंने अपना स्पेसिफिक पॉइंट रखा है। सीएम साहब ने कहा है वो जैसे कि फाइनेंस का हो या जो बिल्स गवर्नर के संग पड़े हैं, जो हमारे ट्राइबल कस्टमरी लॉ बिल हो, हमारा जो भी बिल्स गवर्नर को पड़े वो बात वो अपने चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी से बैठकर बात करके मालूम करेंगे कि स्टेटस क्या है। थैंक यू। ठीक है सर सर নাইদের রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট নিয়ে বিতর্ক অনেক বছর ধরে চলিত जों যখন MLA नि फाइखा বিরোধী দলনি স্বীকৃতি মাখা বিধানসভাও Tipra Motha is not only state recognized political party, also Tipra Motha party has been recognized as the opposition party inside the assembly. Our bagino sungno birudhi dolonata post bo ma rakha ache. Mono opportunity manei kok borokno roman script by Sinani Bagai ত্রিপুরা রাজ্য বিশেষভাবে চিনি তীব্রাসারক দীর্ঘদিন দাবি খাই দমন আ দাবিনো উত্থাপন খাইনো সুযোগ মান খাইছে সারা ত্রিপুরায় সারা পৃথিবীও যারা ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া তমের বরক স্রাই স্রাই খাই নুখা রোমান স্ক্রিপ্ট নি স্ট্যান্ড ন রেনাথনি তীব্রামথানি ওয়ান এন্ড অল MLAs including the leader of opposition and 12 other MLAs, chini bhumika damu chung hunukai. Chung dabi khlaika je Tripura o kokborok subject, college thong, university thong, school thong, eba CBSC, ICSC bibhinno secondary education ni board question paper ebong bini পঠন পাঠন সিনানিতে পড়ে নানি দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই নমত কাইসাংনে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তে কাইসাং নাই বাংলা বাংলাকে আমরা মর্যাদা দিচ্ছি বাংলা হরফকে আগেও মর্যাদা দিতাম এখনো দিচ্ছি তাতে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই বাংলায় যারা পড়াশোনা করছেন তারা বাংলায় লিখবেন বাংলা স্ক্রিপ্ট যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে বিশেষভাবে CBSE ও যারা পড়িতঙ্গের let them write in Roman script কারণ বাংলা মিডিয়ামও তো পড়াশোনা খাই সো যুক্তিগত দিক থেকে আমাদের দাবি ছিল যে বাংলা এবং রোমান হরফ দুইটা স্ক্রিপ্টনো CBSE ও প্রশ্ন শিখে বিধানসভা আলোচনা নি দৈত্য মার্চ মাসনো আলোচনা খাইছে শেষ 17 তারিখ এপ্রিল
मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कैसे चिठी लिखी एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाक्सा नया लोपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नंगी आंग बनो कैसे चिठी सीखे चिठी वाल साइमन नमु चुंगा जे we had a discussion in the Assembly House on 27 March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. As per the discussion in the House, you were to instruct this Director of Secondary Education to write a letter to the CBSE authority on this issue. Both CBSE ni authority no चिठी सी जानो ग्रीनन बगी secondary education ni director no instruction none ko kindly let me know the status of the matter from your end 17 तारीख एप्रिल ni ani चिठी ni jawab rakhabo most probably 4 तारीख मेओ भइए फियाबा आ लेटर आणि या भाव क्लाई भेगा 8 तारीख मेओ আছে क्लाई बेमानी পরে না অনেক সোশ্যাল মিডিয়া নি গ্রুপ আন শেয়ার ক্লাইকা এন তাবু ত্রিপুরা গ্রাঙ্গি আবুনি চর্চা আরম্ভ হয়েছে আর লেটারও এমন বয়ানসি রহর কাপড় যে সিবিএসই কর্তৃপক্ষ বাই গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা তথা চিনি সেকেন্ডারি এডুকেশন অরনি যে ডাইরেক্টর বিবিসিংহ যে আদান প্রদান লেখা ক आ कबो आ प्रतिलिपि तिनी आनो त्रिपुरा सरकार निंगे खरकसा टांगफान डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन नि खरकसा फाइ मोर लेटर नो रिक्लाम थाके it has come from Central Board of Secondary Education Nidhi Chibbar IAS officer but chairperson Central Board of Secondary Education 7 तारीख दिसंबर 2022 नी मोचिठी न परक राज्य सरकार रेफरेंस इतिमध्ये डॉक्टर मानिक शाहनी लेटर माननानी परे आं दाबुक बिनी लेटर न उत्तर नानी बागी प्रस्तुति आंगो नाहार जागनो डॉक्टर मानिक शाह न लेटर साका जे कोनो स्कोप करे सीबीएसई একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বিভাগে মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট কোয়েশ্চন পেপারস নামনানি পরক গসিয়া and that was the letter in 2022 or last line of CBSE থেকে সিজার board will not be able to conduct examinations for one language in multiple scripts मोनो बैकग्राउंड नामवी डॉक्टर मानिक शाह आनो कैसा चिठी लिखा चिठी लोग सोशल मीडिया में नाउ माय क्वेश्चन इज आई वांट टू टेल डॉक्टर मानिक शाह हु आस्क्ड सीबीएसई अथॉरिटी दैट मल्टीपल स्क्रिप्ट को बरक सब्जेक्ट नि प्रश्न नाम दि साबसान का भाई वी वांटेड ओनली इन बाय स्क्रिप्ट दुईटा स्क्रिप्ट सिस्टम मल्टीपल माने 8টা 10টা 16 100টা স্ক্রিপ্ট নামনানো জন্য মাল্টিপল ইফ আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ কারেক্টলি দি ওয়ার্ড মাল্টিপল সিগনিফাইজ ইট ইজ মোর দেন 2 মোর দেন 3 নো ট্রাই স্ক্রিপ্ট ইন মান বাই স্ক্রিপ্ট के দুইটা স্ক্রিপ্ট সিঙ্গেল স্ক্রিপ্ট के একটা স্ক্রিপ্ট तीन अधिक इंग्लिश मल्टीपल स्क्रिप्ट निकॉप है so I want to tell honorable chief minister let us not get satisfied merely based on this letter that multiple script of who asked them for multiple script we wanted only in 2 scripts very clearly one is in Bengali script the other one is in Roman script amonosen clear marking plus ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহর অবগতির জন্য আমি বলছি ত্রিপুরা রাজ্যের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আজকে নয় বহু বছর ধরে
দুইটা স্ক্রিপ্ট প্রশ্নপত্র অঙ্গিতম উনি জানেন কিনা জানি না নিনান ধানি অরতম যে কলেজও যে 3 ইয়ার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম নি জেনারেল সেকেন্ড সেমিস্টার 2019 और कक बरक सब्जेक्ट नौ कैमरा बसकांग आं फुलुकमानो और बांग्ला स्क्रिप्ट बाय रोमान स्क्रिप्ट दुईटा बाय এই হলো রোমান স্ক্রিপ্ট এই হলো সেই বাংলা স্ক্রিপ্ট দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই নো और প্রশ্ন হইতো ইউনিভার্সিটি হইতো স্কুল হইতো और কক লগ্নাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি আমো অরব আইকেন সিকা কগলব নাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি কগলব নি বিসিংতে বল আমানি কগনো সাজাকা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই কগনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আইকেন সিজাকা তাবু ডক্টর মানিক শাহনো जोंमा सानाय যে মিয়ারলি মোর চিঠি কেছে দুর্বল একটা চিঠি রিমা পাই বজে ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে হাজার হাজার কক বরফ পরে নাই তে কক বরফ নো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সারা সেইমায়া আচারের উনি ভবিষ্যৎ ওয়ানসুদিয়া বড় বড় ডাইরেক্টরেট অফ কক বরফ এন্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে চিঠি রহরজাকা আরো সিগা বড় যে গভর্নমেন্ট ডিসিশন অনুযায়ী বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই নো খ্লাইজাক ওয়াই গভর্নমেন্ট ডিসিশন বুফুরুঙ্গা বল নোটিফিকেশন রিজাক খাইতে 2019, 20, 21, 22, 3 পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার নিজস্ব কলেজ স্কুল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন নিত কোনো বিতর্ক সে করে হঠাৎ কে পুরো ত্রিপুরা সরকার ডিসিশন না কা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিমিনার প্রশ্ন খাইনি মিস্টার চিফ মিনিস্টার হি শুড নো অ্যাবাউট দিস এবং আঙ্গিনি জরা সান নাই বনাম মালাই নেন ব্রিফ খাইনে আমি কাউকে ছোট করার জন্য খাটো করার জন্য কাউকে অপমান করা এটা আমার উদ্দেশ্য নয় উনি যদি না জেনে থাকেন আমি যাব ওনার কাছে বিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নাই ওনাকে আমি বুঝাবো ব্যাপারটা সমস্ত দলিল দেওয়ার ওনার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ত্রিপুরা রাজ্য বহু শিক্ষিত লোক শিক্ষাবিদ অর্থনীতিবিদ রাজনীতিবিদ ত্রিপুরা রাজ্য তম 1979 যখন কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হবো আজ ওরা আই স্টিল হ্যাভ দি বিল দি ত্রিপুরা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1979 কুইলা কক বরক সরকারি ভাষা হিসাবে ওরা এমএন খ্লাইজাকা যেখানে যেখানে বেঙ্গলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আর বেঙ্গলি এন্ড কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ সিডি নেই অ্যামেন্ডমেন্ট ক্লাই কক বরক 1979 থেকে ত্রিপুরা রাজ্য গেছে সরকারি ভাষা এন্ড ইন দিস বিল অ বিল ও আইনস নাম কোনো জায়গা সিজা করে যে কক বরক বাংলা হরফ বাইনে মা সিনে এনে কোনো উল্লেখ নেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এই বিলের মধ্যে কক বরক ভাষা লেখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো লিপির উল্লেখ নেই কোনো স্ক্রিপ্টের উল্লেখ নেই তার মানে ত্রিপুরা রাজ্য যারা কক বরক শিখবেন যারা কক বরক বলবেন যারা কক বরক শেখাবেন তাদের একটা মতামত নিয়ে লিপিটা তৈরি করা যাবে আমি আরো বলছি ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে একটা সার্ভে হয়েছে তিনটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন আরো একটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে তিনটা ভাষা কমিশনই বলেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কক বরককে সঠিকভাবে লিখতে গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট সিনিয়র নাম নাই এটা তাদের কনক্লুশনে ওনারা এটাই বলেছে এবং কলেজও যে সার্ভে রিপোর্টটা আমার কাছে আছে প্রত্যেকটা কলেজ ওরা যেভাবে সার্ভে ফুনুক জাকা ওয়ান্ডারফুল ও সার্ভে ও কাসাই পেকা যে ত্রিপুরা রাজ্য
Roman script by no. Just give me 1 minute. Orona Sarvini report of visa. No काम के परी खना रखे no बेलाय अपनो clearly बुझी नहीं. जे बुझुत बरो त्रिपुरा जो Roman script ते इनको बाई नहीं. अब और उल्लेख खाजक तो मैं. Okay. अपनो और दस्तावेज नो I'm giving. Yes. अब मान कर MBB College. Total number of Kokborok language student 536 জন. Mo 21-22 survey. Opted for Roman script all 536 students. Boro Roman script by senior পক্ষে Bengali script 0. BBM College আগরতলা 622 জন. 622 জন Roman script বিপক্ষে. বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই 0. ওমেন্স কলেজ আগরতলা 910 জন 910 জন বড় বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে। এইভাবে জিডিসি গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ খুললেন 1274 জন সংজাকা এবং বড় যতন 1274 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে শাখাইছে। একমাত্র একটা কলেজ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ শান্তির বাজার রো 113 জন ছাত্র নিবিসিংহ 4 জন অর্থাৎ 109 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে 4 জন স্টুডেন্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে। ত্রিপুরার সর্বমোট 22টা কলেজও 9147 জন ছাত্রছাত্রী সার্ভে ক্লাইজাকা তার মধ্যে 4 জন বাদ দিয়ে 9143 জন ছাত্রছাত্রী রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায় দিয়েছে। ও জাগাও বসাওই ডক্টর মানিক শাহ যদি সাকায় যে বাংলা স্ক্রিপ্টেই লেখা হবে, we don't agree. We have to take the issue for the interest of the students, next generation. যারা ভাষানো পড়ে নাই সেই নাই বরং স্বার্থে, এটা তো কেউ স্বার্থ ক্ষতি হবে না। যারা বাংলা দিয়ে যা লিখতে পারবে লিখবে, যারা বাংলা দিয়ে লিখতে পারবে না ওয়ানসান অবশ্য বাংলা তো যারা হোলি ক্রস স্কুলে ডন বস্কো স্কুলে পড়ে বাঙালি অথচ নিজেরাই বাংলা লিখতে জানে না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই খবরগুলো রাখতে হবে। বাবু মা সিনাই আমি মন্ত্রী হয়ে গেলাম, আমি বিরোধী দলনেতা হয়ে গেলাম, আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলাম, মানুষের যন্ত্রণা মানুষের চাহিদা আমি বুঝতে চেষ্টা করব না, আবার একটা সরকার দৃষ্টিভঙ্গি সরকার has to take the interest of the people into account and take decision, and we have to write another letter. আমাদের লিখতে হবে, বলতে হবে সিবিএসসি কে we are not demanding for multiple script, we are demanding only in 2 script and that is possible. মিজোরাম বাহিংতম বড়োল্যান্ড বাহিংতম সিবিএসসি সেখানেও প্রশ্ন করছে, রোমান স্ক্রিপ্টে করছে, দেবনাগরীতে করছে, বাই স্ক্রিপ্টে করছে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন হবে না? ও প্রশ্ন অনুযায়ী মা সিন্নাই এবং মুখ্যমন্ত্রী আন বিরোধী দল রাঙ্গিব কাইসা মেমোরেন্ডাম রেনাই লিখিতভাবে বিন বুঝিনানি। আমি জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের বিপক্ষে যাবেন না, উনি রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা রাজ্যের মানুষের যে ডিমান্ড সেই পক্ষে উনিও যাবেন, কিন্তু খবর নিয়ে সঠিকভাবে জেনে চিঠিগুলি যেন উনি লিখতে পারেন দপ্তরের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। এবং বিভিন্ন যারা সংস্থা তন্ত্র যিনি এনজিও ককবরক হুকুম মিশন ককবরকনতেই যারা চর্চা খাইত নাই বিভিন্ন সংগঠন, আমি ওনাদেরও আমন্ত্রণ করব, ওনারা যেন এগিয়ে আসুন মুখ্যমন্ত্রীর নজরও যে তিনি ত্রিপুরানি বরফনি লম্হো কি গুজারিশ সময় নিজে সানমুন নাইমুন রোমান স্ক্রিপ্ট মনোসেন চালু খাইনে বাকি যতন মাচাই বেলায় বেলায় abo ki ang kharoksa tipra sangnui ang kharoksa dabuna answer na nangnai na sa hul tipra saro abuna answer nangna abo noron wansukti tipra san ma wansukti klai tabu je dini
जेव क्वेश्चन जे इश्यू नते जों जे दाबो सालायनो थां दं आबो वान सुना नाङो सिनि बरक दाबो कक साना थाङाथाय पॉलिटिक्स ने कक mang फाय बुइ होनाय त्या कक साका मो पॉलिटिक्स कक साबला पॉलिटिकल फील्ड साइड जो कक साबला नो अमो पॉलिटिकल क्लाइमा हंगे तामो आव बर बुझे नाङो तो अमो बीजेपी खायो कांग्रेस खायो त्रिपुरा थाखाय सीपीएम खायो ने आ पॉलिटिक्स याव all politics in the tamo omunkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right notation soba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script by the sinai one ko ba the sinai tainini sanskrit by the sinai just ba sinai kasaba ano अधिकार तो तम सिने आं जेमुसुं आबुबन आं सिमान तम खाय तिनि नों खरसा हास्तेन मन्त्री नै तिनि अबहाय ताय आं हाति प्रसानो जों हाति प्रसानो नों बांग्लादेश मा सिने हिनो इम्पोज खलाय मान्या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अब टोटली इलीगल that total violations, that total of ST atrocity. ST Atrocity Prevention Act 1989. Tam koksa. Boss how particularly nini section 3.9 no joton nadi ara close 1 2 3 4 5 ni kebamato. Nang ST khorsa borongo nang Bengai Maya Nung ST Korosano Nung Lama Kidati Him to Honobono Mokari Kaimania Nung Tini ST Korosano Omog I had Bahan Sao Berama Sao Berambuti Sao Saki Sao Honibunung Sai Bengai Mania Bubuk Sao Honibunung Sai Bengai Mania ताई गोबां दङ नों खालायमोन खालायाखै न बेनि एगेन्स्ट डाइरेक्ट जों कमप्लेन केस खालायमानो ताम बखरसा हास्तेन मन्त्रिन दङै जों 12-13 लक्ष कौ बरक सानाय बसाबो जे जोंनो बांला स्क्रिप्ट मासिने नि सानाय थाजे नों साव गोबां ससियेल मिडिया रो बरक गोबां सालाय दं हाय दं आ ससियेल मिडिया सालायै तामंनाय जे गुनु खाखनो ससियेल मिडिया फाय जतन सालाय हिं अबा हिमांनाय अबा हिमांला अबा हायसमा खायनाय जतन सालाय केन साबला खायनायसा आगे जों TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act noko जों दिनै 2013 noko sin borno ha kamai tamaikha खरसा बरंनि खरसा फैमिली वो जुदिनो 100 कानि जागा तखाय आ जागाव नों 12.5 कानि बिसि तंगि मानग्ला आके न सलामु तंका आबनो जों चबा खाना आं त गोबां पावबो बसाका 2500 जों मेमोरेन्डाम साबमिट खामिनायाव हां स्ट्राइक तंका आबनियागल जों दिनाबो सक्सेस नुफुनु नमान फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर तो आरो गोबां खाथि दं जों जॉइंट एक्शन कमिटि नै बेफोर लैंड रिफॉर्म एक्ट आव खायफोर बोसोर जौते पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशिंग का न्यूज़ हो नों आप्रुव होननाय जों मा खायनो के मास मन ग्राउंड फाइके खायनो केलबे सामो नों साबनो जों मा खायनो साबके खायनो साबनो मा खायनो निसा
Similarly, tabo o borone Roman script bo haino. Sung japro 2002-3-4 Naikal Kokpin hune newspaper sung puila pruka weekly hati basa kaisa katiklai sung pai 3000 sung Naikal Kokpin paper no Bangku Human Rights Organization sung tiklai ang niji thangai babu tausini bangkundri borok tong ta Dilip song tong sung oba heke dai hebo song sini Dr. Mohan sung tong abro sung thangai kaisa nogo babu ahike no rango thuthum khong ni khai apro hunu suno tamo mukhra bura no ok phurung tai mukhra bura bua ka thangno ok no sung tai ring siu haida hani apro salo tamna bage hani sumla no Roman script ba siu hungka hani sa ngata musika parimansa ka Bangla script ba thế ai giờ rồi aba hakisin bor khasia khai Bangla script ba mu chi khó khăn even je bor sine ro bo Bangla script ba no sine surung ka even chini exam da Dr. Abdul the Burma bo wa haino 1980 dang na boino Bangla script ba suya kui award prize of man ka tai plus bo ok borok ni tamo chairman tong phurubo Bangla script by no master ni bon CBSE budong mo sine suru khai kya anga tabu nang sabno du sunai ni borose kemung tong ka do tabu ni generation ka juda agi bom TSF TUJS mula sa kesana ni sire khogi tini Roman script sung dai khai sung tini kem negin saya Bangalore script negin so ba sung tom kha sung tam nai chin kok borong no Roman script sikya ka kai proper spelling proper pronunciation proper sentence joto kuso thik nu plus je tabu English medium je pori phai tong nai ro kiba je Bangla medium pori tong khano Roman script ben ka kai borok tem kaham ka poribo manu e aba hai khai tini chin kok borong no tem saka kusogoti sana hangka kai jeng Roman script ne mas yu tang bagi hangka kai kok borong ti sana ka full prithibo full walo tamo ne British pana phai kya European country ne pana phai kya ne Latin America ne hate pana phai kya je borok o borong no singna thaka kai jokot borok Roman script bolte borok mane tong alphabet tam abo saina man tong kai ko borong no borok automatically borok serni manu kiba borok saibo manu poribo manu nga tini Bangla be judun sikya ka kai puila a Bangla sabama wan de box khane wan sana Bangla man nga afru se nang tini puila ko borok sunna ka Bangla smas no nai Bangla serng man porja ko borok serng nai engkai Bangla sereng pakai ke bokok baru sereng na musuh bini ki jora to bini ekta time period tong na engkai interest ba tong na engkai tini nini ane kogna sana ni script sudah thang tini Manik Saha handi tini jekuno government no jatong jekuno baru handi baru sabo ane kogna tam ka sine aba ane baru sedih sana bin thane kuno right kiri bos सरकार चीफ मिनिस्टर तिनी त्रिपुरा गवर्नमेंट नि चीफ मिनिस्टर पान तंगथो बिनि थाने कुनो राइट करे जे अबा आइतो सुने आबन बागन ताबना खाके जों बिनि अगेंस्ट Manik Saha नि अगेंस्ट जों एसटी एट्रोसिटी केस जों खालायनो मानो ता हाबनो आन्डारस्टैंड नि बिसिङो डायलॉग नि बिसिङो डिबेट नि बिसिङो जुदिनो ब अबनो विथड्र खाइ आउ borong je demand khaimani abonun jeng mar nai khani bo judino sawi ingya ka kai o Tripura hawo tini ko borok Roman script sinyani saba kaswiman aban tini challenge kharala kem kaswiman la tini Bangla ko borok jokote jefru official declare jago
kok borok bai Bengali official language नहीं आज जरा कुन स्क्रिप्ट न कब साजा तो कुन स्क्रिप्ट न कब साजा करे का बब्बा जागना तू भी तीन ओ स्क्रिप्ट बेंगलुरु स्क्रिप्ट न मांगना हनी साका ngai chung tini saka je wan je kok sana no tini kok borok se jes ko no ma sa se ne romni edc sarkar je wani chai khai to na ro tini kok borok mane ma sanai kok borok roman script no ma se ne hin la tam no borok tini accept khai no borok accept khai me ngai tini sing every man ne watching traditional dress ma kana hin ka kok borok dress ma kana ke borok kana kano kaya ngobor khai tongmano setetang ba khai tongmano abon bagina antini sanamu songo cinti prasarangno paguna wan subsidi nang social media o simi ahai ahake silai se hlai tongno kasen du suni tongo basa tongnai tini ko antun del ko kok sai tongka ulta pulta hune mo kulai mo tongnai kentu tini sanamu songo tini sing ahai borok je tiba sang je dokan ni samu khai tong borok keri hingga kai tinu je borok kulnai saja gengnai hnai abro tini or ko bor saibo kathang tong nagla haino komor thaku যেমন টাউনে আর ko borok sayawui wani ko sana শুরু হয়ে গেল এই পাহাড়িরা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়ামারটা একটু আনো উনি সাসে বেগে রহনানি aborong tin biang kemak kemai thangmai kya abon bagino tini sana musu sin borong no tini obo khorsa political leader bini samung simia tini khorsa activist ka bini samung simia tini khorsa writer ka bini samung simia tini kok borok movement for kok borok bini samung simia kok borok sahitya sabha bini samung simia Tiasan di sini samuyago, joto individual, every individual kiprasa dokter unis samungomo. Tino oba hake bot ini sui tino ko semua oba hake razu. Chief Minister ni kuat karena seng geru kaya nang tini. Bersabo, bar ter lokor kiprasa no, unko nijin kau borong rumah sekali bersini hendak bobada kaya, kenu seng kaya menya. Tahu nebang kaya. Sin bor thansa kering joto jagana sing politics thung huni saw kento asol ni political right to nung thungna sing yaku political right sini ani kogna tamo be sinaba ani right that is my political right abun bagino khub wana masisa jesin borro ko borro roman script ba hamje ga hne bagone script ba ni sai tongna ro tini nar sau sini do parak sung kong na kenu no tini bon kaza no nung nai tu bon kaza no nung practice khai tu bon samu no sai tu bon kong samu no kong sai tu bon sumo no nung sui tu ngaka nung ti prasa nung pakai kai nung tini ni odikar nung manai ni odikar manya agabu munuka goria khuru goria ter khai hune se tini daga sok tu wo tini warji MLA no tini khamplaya yakung bera woi ahke khai tului yakung su bor khang sokia chini ti prasaro kim chung bunia kung sunaja kento abono no omo sichine kalcha ahai agin dino chung nugui phai wajini yakung su se brahmani tamo yakung su se yakung tuinungu bor khang sokia buni molla buni sitra abon hanga kai sing nai chini sobiwo chini ngo thuya chung abo dal bunai bo ba hai chung ti prasa ka hanu dharma pu tamo dharma chini ti prasa dharma tamo so hindu boya christian boya sang tamo chini hapu hatai tima tisana chung khulum phainara borong ba tung phaina tima ba tung phainara chung wathap khai ke matai khai goria khai malimara huni chung ko kabana sin ko tong tong sarabana ka chung respect khai li othoso buni ka jana sun romnan suru ka abun bangun tini aba hai khaima bangun tini an ko borok
आं तिनी सेरजाबि दं आबन बागै आं तिनी रोमान स्क्रिप्ट बाय मास किया नों बांग्ला स्क्रिप्ट बाय मास किया सितो अबन ति कुट जगते बोबगरा गवर्नर नो सबमिट खाके मेमोरेंडम न रोमान स्क्रिप्ट नि बागै आको अनरबा हाई कोर्ट समोटो केस खाइबा परे आं आसन एडवोकेट ने आं एडीसी पार्टी इंखा एडीसी नोंनि आं एपीआर इंखा वान जा खबर खरसा को बरक 12-13 रको को बरक साराय ताफन स्क्रिप्ट थिकरि बाकिनि न कमन नों प्रोटेक्शन खाइना नाय आबनि यागलो हंगाका हियरिंग मां तिनी गवर्नर सरी हाइनिया गवर्नर फाइमेया गवर्नर रिप्लाई दिमे हमा दुई वर्ष लाई थाका आबनि यागलो ताइसा एक्टिंग ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस तंपुर हंगा केन साका आरे इमीडिएट अबनो जों सल्व मा खाइने ताउन बागै तिनी अबा हाके स्क्रिप्ट करि गनो बोलखाय त्रिपुरा गवर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गवर्नमेंट बोलखाय सेंट्रल गवर्नमेंट सम्मान खाइका सेंट्रल गवर्नमेंट साका इट इज नथिंग टू डू विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज अ स्टेट चार्टर स्टेट से दी सम्मान ना बनो जोंनिया हनि साजा आबो करे हंकानो ऑनरेबल को एक्टिंग चीफ जस्टिस टाउन बागै जिनि केस सुनते कंटिन्यू खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायना का संका हम टाउन बागै उदा लेने रिजन ना अब कोर्ट से केस खाना कोर्ट निसा अब तक कुनो रिजन नंगे जों डिस्प्यूट खाइका अब न तैनो जों ताइसा आफरो सावो जे न खायना न खाइति न हेते न लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो अब न तै ओंखाय तब जों कोर्ट माध्यमिक थाना दालम माध्यमिक थाना किंतु तिनी त्रिपुरा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला रखन सुइतो जों बॉयकॉट खायना आबन यागलो हंगाखाय जों प्रेसार खायना तिनी बरफ सभा खाय छ तिनी तेलंगाना है झारखंड है छत्तीसगढ़ है के क्षेत्र स्तर के खायनाय मान हंगाखाय तिनी जों तिनी कम बरनो स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खके जों तिनी मान्या तान बागै जों खाय जत जागनो फेलियर कायसाना कारण जों थानसानि बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताई दर्जा फाइ सापायनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दर्जा फाइ सापायनाय देवनागरी से कहा इको बर थान सोके जतन सेल्फ सेंटर जों चिन्ति प्रसार निजी जे हामजामन सिमि जों सानामु जों तिना बर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजाना बन सार नंबर जनो इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जगह सैनाय सीबीएसई बोर्ड न ते सेंट्रल गवर्नमेंट सिने बदिनी निजिन बिन बुम रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बो रोमान स्क्रिप्ट सिबले बकि बांग्ला सिके बिन बुमो ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय तिन ताकजा सानमसु थाइसेमनो उदयपुर कोर्ट ने फाइसा पाइ आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 खानि तो बिनि नखथाय दालां दङ आरो नख तांजा आबनो से तिनी खरसा थुरसा केस खायो बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि र जागा पाइ माफु हने कायसा 67 दलिल फुनुगु न दलिल फुनुगु बर केस हारि थाका केस हारिमन परेको बर ताबु एपिल थां ना आबन साथे साथे एग्जीक्यूशन थांजाका एग्जीक्यूशन तामुका ताबु कमिशन चंगरे जाका कमिशन ऑफ इंक्वायरी खायका को खायका ताबु हंका का एग्जीक्यूशन जों सेला बंग न आ न देखलाय नक्स खबाया होय और थुसर न जागा दे सेला हंगा ताबु 67 न जागा पायो न ताबु लागा निनि
प्रचार खाइमाइनाको ताई नों जागा दखल खाइमाइनाको ताबो 2019 से आबा हाके फाइ बर क्लेम खाइ बर नाइन फाइके तिनी बर मिया नर फाइके गां साका ठीक आसा आं थाना फाइनो आंबा तिनी विकास थाङो जों फाइ अबजार्भ खाइनो ताम nga जों थाङै एपिल कोर्टआव थाङै जों रेकर्ड नायख्या एक्जिक्यूशन नि जागाव जों थाङ रेकर्ड नायख्या nga जों नु पाइखे जतो ताबो आइन मते नकाय 69 नि जे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसापन जेकुन बर एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा काका आ जागानो जोंताय रेस्टोरेशन खाइमानिया आ जागानो जों याफान बारना आबा हाय आइन किन्तु 69 नि परे आबोनि ताबुनि परे हंकाय नंताय विदाउट परमिशन विदाउट कोनो 187 नि जे सेक्शन मुताबिक नि लैंड उनि न ट्रांसफर हुइमाय nga tini o borro sirisi tinsim tongi फाइनेरो बुफा फाले कौन था कहने से दल खुनुगे बर जाका मानसी ने हमें बर तिनी एजुकेशन में तो मैं ना क्या वो उकिल लोकी बर जे उकिल हर खाम ठीक देखा क्या खाया तुम फालतू घाती तिनी परी नहीं ले बाकी ने नंग 67 नो दल खुनुगे न ताला का म्यूटेशन खाइमिया पोजीशन में नहीं मिलिया नंग बाकी बिन बुफा थैथा का दुहा का सद बुफा फाल कलां थाका नों ताब केस खाइमोन बसा आमसे बरसे केस हारिजा nga sungalo nugu tu nga e oba केस गोबां तंगना आं सिन ताको बुरो सानमु सो oba केस तंगा न रा केस चैलेंज मा खाइना ता 16 तारिख नेक्स्ट डे सवा केस त तिदिन सिमके सिन याबा हेनोवर का बंग जागिन उके वानजि तंगनि बो नो ऑब्जर्व सदे सो यापा nga tahu Allah hasil no solito nga tahu ni kogno sutu se buni do phase non जबरदस्त enforce खाइसे ना बरना कुन आइन करे आनी डिसिजन आनी सिंगना नांगना आनी चॉइस आनी सिंगना नांगना बिनि कुन राइट करे जोनो बेंगल स्क्रिप्ट बाइस मास ने हेने इम्पोज खाइनो बागा आबुन बागे आंनि सानामुसु ni kogno tamno bagai bongno kogo sini ni dagi to ekta na ka nung bin screen bai dongi nung accept ma khayo second nung nung bin kogno surung thangsena ni kogno ka kogi thangsena kalni ko ulur plorung thangsena karan chaudhary ang to wan ko ma এখন chaudhary sine thaga kaise belung screen bai kaham ka sen exact pronunciation khaye spelling se khlaimanya even antinan mung Anthony hone sinan thaka bui rasa ka rabo Anthony Bangladesh ki babe legbo nga to saimen ki babe leki ta ami jana gai abor aga bui baksa na khari Anthony speak ki amoni Bangladesh ro hone bui wan ja agaman bagen kun jaga wan ani mungno Bangladesh ne thaka bolo abdul satubui angna ka angno sir na ya bakara sanka ro bang makhai na thik abon bagen tini sanamusu tini Manipuri ro माइटेरो आगे एक दिन साथा बोन स्क्रिप्ट कमाई थांग बर बाहायनो बेंगल स्क्रिप्ट सुनो सुरु खायके उलका बर साइमान का बोन स्क्रिप्ट बर नुतुक माति खलायनो हनो कुबिया बर स्क्रिप्ट खलामै इखलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर मीडिया जतन बोंनि स्क्रिप्ट उन खलामै बर ताबु उनि थांबायके बुसो बालखौ बर स्क्रिप्ट खलामा किन्तु बर जतन थांसा हरसा इंटेलेक्चुअल से फुनो का अवश्य सिनी जतन यूनिवर्सिटी बने मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर बर गसिना बायखे केदिसिन तिप्रसाद हंका गसिमाया हरसा ताउ रुमल स्टुडेंट से गसिमा गरायको नि स्क्रिप्ट सामो न साना थाकाबो नका बाखाने तलाबाय ताफात आहासिन थाबाय आबुन बागैनो तेनि सानामुसु स्टुडेंट अर्गानाइजेशन हुन्तु जे परि तंगाय रखनो हुन्तु नर आ जागाओ नन बांग्ला में फनो प्रश्न खाय तो नर रोमान स्क्रिप्ट से सिफुनो जुदिन मासा फेंटा रखांगा का आबुन बचिन कायसा चैलेंज तो ना खाका ताबु बर इंटरप्रेटर समाना नाय तिनि खरसा बर वान जे कोंनाया ओ बर तिनि कुटो विटनेस सबमिशन थायका का बर इंटरप्रिटेशन
खायनानै बायद' गाबोनावनो जों सिना ना जों दिन ताम बा बाहाय खायजा जोंनि बर' सिया जों परिमाण हिंगाखा कायसानो कारण पासंगे सार्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आमनो बागै जों पर केतु जों परिमाण आं सिना बागै होनो जों परिया ना खाखौ तमका सानमु जों तिनि आं परियो माने साख्रि मानांगो परिया होनो जों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागै आं नलेज बागै आं परियो होनो मा खायनाय ए आबागा जुदि नों सि परिखा काय आबो गुबुन नि intellectuality दंनाय गाबा नों निनि सेन्टिमेन्ट दं थानाय निजिनो को रोमान स्क्रिप्ट बायसे सिने होनो जों जबा खाय दं मजा गाबो ना बांला बायसे मा सिने होनो डाइरेक्ट सोननाय जों सेन्टिमेन्ट ना रोंगिया जों थि दंना रोंगिया आं फ्यूचर बसे दि सना सनाय बर थां सयके आबनो वासुसुका बेलाखे जलिवा साक्षात जलु आं जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आनो तेति प्रसाद ताकोtai बुku बर तासे सिना ना मावनसु तान बागे हिंजाखाय जत जागन जोंखाय थुइतु जत जागन सिनि याक मतो जत जागन सिनि ब्रेन डिस्टार्ब तान बागे हिंजाखाय जेकुनो थादा सिनि बागे चाया खाना सिनि बखर क्लिन खायाव सुचिबे सुजामा हिं थां ओंखाय जोंनो सिलियाना जे सिनाय रावखौ तो कुन बखर मुजायो जे सिनाय रावखौ बांला स्क्रिप्ट थाने तो उनका बरखा इंटेलेक्चुअल ना आबो नांगो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाके ना किसा नरसन सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु आबो बागे न खूब वानाव आबो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन है यूनेस्को बरक से जे बरनो क कमामानि in danger ngano bor protection khai world wide jotone agri khaija ga bahike protection khai na a ko se salai to a jaga o sin ngaka bar lokote lokok ko bor asirisit ni simas joton se research language in the world hine hinjaman a borok se tini khai nang roman script se ni saja tongnai ha jotabu nung sala bangla script ang sisinai सिरिदी बागे सिने रमिन बांग्ला माना के साल सिरिदी बागे बांग्ला बा सिने चेरेकदी बागे नंको बांग्ला बा सिने हा चिरदी बागे सिने सिनेमा आप रोनो वासुनो ना दोसो नताम नमगे सिन बरक किसिम सिन बरक केबेन आं बुनो दुसुरिया को आन बरनो सान दुसमारु ह बुले जतन थांसा दिन नखना 10 बोसोर बन कासन बर रेस्पेक्ट तिनि रविन्द्र संगीत दांकुम रविन्द्र रसामु काबो जत जागा बर जेकुन प्रोग्राम को बर एकदम ठीक थासा सेकाचिन तबार दान बिदा तमसुदु से संखाय आबनो उससे देखे सिंगाबनो प्रोटेक्शन थाय आबनो मानिउ कहां थाय सिन रेस्पेक्ट ना रिया ना सुंबर थां सुदुसु कायसना हायना सानानि कायसना कुलनानि कायसना उखलुबा हायना सानानि कायसना बायके सा काना थांगा का बनो सकलन नांगनानि आबनो माससो नायले एलेक्शन फाइटिं काबो बन खिबि बस थांमाना आंसो थाना आंतरा हमनो जों सेरलायदो बुलिदा पाकेताम जे सिनाय नुगनाय बरनोसे मार हनाय कक साथिनि बरनोसे मार हनाय डिसिजन मेकिंग नाथिनि बरनोसे मार हनाय आ मीटिंग अटेंड खाना बागि हुनिरो बर सिलेक्शन सिनरो हंकाका जतना सेल्फ इंडिपेंडेंट आंसंनाय अथच उनि थांगा खबो आरो जों कोनो कंट्रीब्यूशन थाय माने आरो जों थै आबन बागै आं सानो मोसो सिनि बरन फारि खासि बासि फारि पाल खायै अ रोमान स्क्रिप्ट खाया हंगा गाय जों चीफ मिनिस्टर नि नंग खोया सेक्रेटारिएट लाबानि जों जेसमन कासुना तो जोंताय अंखया हने फारि जत सारा ति पाव तवा सिनि बुकुम बारा जत फारि
जों नाथाय যত জানো ব্লক লাগে নাগে না বচনো রোমান স্ক্রিপ্টটা ইনফোর্স খাইমা হ্যাঁ খরচা বড় দিশনাল সারাটি প্রসানি কালচার কম দংশ খাইলে হয় আবু বড় নং খাবো যে ইলেকটেড মেম্বার তাম খাইলে খায়া আবু বড় লাইতে বড় খায় ভারি जों ताई जत त्रिपुरा सार थाजा उंलायै और रोमन स्क्रिप्ट बागै फादि कायसे जागाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाय ता मुम फक क बर बागै ब सब खाय क बर साइते सब क बर बागै ब सब खाय त ताव ता कसे तब दा बिखे राय प्रेसिडेंट आबो ग्रुप तासे जतन न तुबै कायसे ग्रुप खानो बर बाहाय कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाई आं खुलाय तो तिनी यूनिवर्सिटी रो बाहाय न आबनो तै बर साइतो जे स्टूडेंट द आबनो साइतो बर प्रोटेस्ट खाय तो नंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाय तो मसाय कासे जतन त्रिपुरा सांगै नाका बुमुरलिया तिनी मुम फक बर खंका बाहाके प्रॉब्लम को तिनी तेसा खंका बाहाय प्रॉब्लम को तिनी कबर साइतो सब खाय के बाहाके प्रॉब्लम को हने गाय आबु मुबु नासना लिया फाय जत कासे जत त्रिपुरा अंखुर सब खाले सिने नागेना सिने ककरनो साबसनो बांग्ला स्क्रिप्ट मा सिने निसनो इनफोर्स खायमा आबति थांसा दंमनो आबाखौ सबदा खायमानो खायमा गाकाय सिन थांसा फादिताय केवनो नासले उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तग फिनाल खुनियावै फादि सब खलालाय आबसे थानसानो न आं साजानो सब समय नों बीजेपी दा खाय तो सीपीएम दा खाय तो कांग्रेस दा खाय तो तीटा मत दा खाय तो नि पार्टी जेकोनो पार्टी किंतु त्रिपुरा कायसा थानसा निजिने कालचार फायखौ निजिने कमनि फायखौ निजिने मुकुमन फायखौले आरो ताई अमति बेनार ता होनासिदे पाल खासे फायसो सब खायनो न उंगिदा मान फादि आबो उंगकाय साकलाय बेदि बुफुर सिमे खायने जों सीआईबी फ्रु सीआईबी फ्रु मीडिया थ्रु साकलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा त्रिपुरा 3 दिन जों पारलास खायनो कबले आबो परसनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुगु आ परसेसन दिल्ली थां केन सुना फ्रु बहनलाय का दिल्ली थां रातुबि रह जाखाना बुकुको आ बागाव सिरि बाय तिनि सानो मुसु रातुबि रह जागिया साइ रहरु नर थांनै पाल खाय जतन रेडी प्लान खाय फाइनल एग्रीमेंट से खाय जों सलाम जा प्लान थां जा सब केदुंबा चिन बर्ष केदुंबला अबस जों मा खाय अबस जों एग्रीमेंट सैमा खाय हायपनो आको होनो जों आफु सारा लिया आवर बगे जों सिरि चुखा मा तंखा आ बगे बुइसाव तांग चुबु तो सिसुसन बुजिया बोसर स्ट्रेटेजी प्लान खाय स्लामै आको एग्रीमेंट और साइन खायने रेडी जों जतो सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारे केबेनले आ बावसे जों तिना एग्रीमेंट साइन खायमिया nga tini sing joton success sing thangma khu je kono jaga chin borok se office kalne kaswo a kasma baga se sing tini success sing ngiam abun baga tini sanamu sumo hari parun generation ole amtile ilengya na khakau karo chung jotono thansa jotono jotono obo nayu tini ko borono tui agi CPM sarkar tongkrubo commission selamjaka पवित्र सरकार कमिशन स्लामजाका तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खायमन जागलोबो पैसा सैटिस्फाइडिंग क्वेश्चन स्लामजाका आ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटेलेक्चुअल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को ना क्वेश्चन बागजाका बागजामन यागलो बर तामनाय बर जतन सय उनको रखा केतु जत ना जागने बिसिमो 75% नो तिनी रोमान स्क्रिप्ट नो ठीक को बरोम बल कहामुनि साजाका नके आमुना आबा हके न तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खायका
दिनै मानसिफोरखौ आबनो इमप्लिमेन्ट खालामनानै सामसरन कमिसन होनोबो खालामजाका सामसरन त्रिपुरा दंफोरबो आबो रिपोर्ट खायजाका इनका ताबो कुमो मुकुंद चौधरी कुमुद रंजन चौधरी बिनि फुरुबो हमको जाका जतो मोमन स्त्री मानसिफोरले दिनर खायमानो सखाय चिन्थानि आ क्वेश्चन दं बर साफ आंसर का आनो पूरा फाइल जों देखलाय रिमान न तिनि सिनि कबर सिने न गबामा दं बर बुसुक जरते कबर न हाबलागे बय सिमां सित तिनि यूनिवर्सिटी बांके को कबर सही क्या तिनि जेसिनि इंटेलेक्चुअल न कबर सिने राइटर अफ जतो न गवर्नर न थांनि सालायफोर गवर्नर नियर अबाउट 35 बॉय 35 बॉय निजी रांनि पाइना रखा मुनो फर उनका कबर आबनि जागलो लग लगे न बास सेशन रिगे कबर खुलुक दिनि मा खुलुका आके तिनि कबर यूनिवर्सिटी ले अब गवर्नर से खला सासन सालो इ फायो बाहायनो एनआईटी बाहायनो ना तिनि खे खलजाक मु कबर ना आबुन बागिनो तिनि सिन बर सिनाना जे जागा सिन बर केबिंग एउ तो का सुन जतो जागा सक्सेसफुल केबिंग मा का आनि खरकसा सेल्फ सेंटर सेल्फ से बागिसे तिनि सिन त्रिपुरा सार कलुगु मातो मोबिन सेल्फ इंटरेस्ट बागे बिन पॉकेट बागे बथाने पनो धेररि दे 12 लख कक साइतो डिमान्ड खाइतो कारो खरसा पण आबो थां केबिंग ए आबा हासिसि सोसलतो सुदु आबो सिमिया ताबते सानामुसु एसटीजीटी टीआरबीटी गवर्नमेंट ऑफिशियल क्लार्क हुंदी ऑफिशियल उनका ऑफिसर हुंदी साके त्रंग तंगमनि दिनका बरो फाइजा आनथनि एसटीजीटी रो टीआरबीटी रो 230 द गुजिनि एसटी रो सीट ओ एसटी रो सीट अंता यू आर on के something 60 द 84 इनके एसटी रो नाके तो आबनो एडवर्टाइज मोटे खाए बरो एग्जाम रुबाय क्या ताबताम खाका खरसा दीपक दार को दीपाय रहने कैश खाइरि लिखा कैश खाइ मन जागलो कामखा कैश खाय क्या कैश खाइमन जागलो का कोड छाय रेखा हमना अब 50% एग्जिस्ट तो रिजर्वेशन अब बाकी में आस पर रिजर्वेशन सिस्टम का खला देनो कोड राय लिखा अगर 230 20 में 17टा समान से ना 230 टा मन बा 230 टा अब त्रिपुरा सारनि एसटी रोनि अब कोटा सीट खाली तंग बैकलॉग आबनो फुल खाइनो बागैसि न तिना आबनो ति तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खाइ आबनो तो बर फाइट खेलिया बले न जे एसटीजीटी सिनियर टीआरबीटी पर सिनियर बरता को तो केस को देखाया तब लगा तो 40 खाइनो नंग छ प्रमोशन क्षेत्र में हमति न एसटी सीट वाचनो सुपासित खाइ यू आर जतन नाय तो मैथा तो बाबो जागा जों ताबो थैथौ केन्तु थिन बर बुजिया न जोंखै टाइम बिसो खाइनाबा न जोंबो जदो दल साफुन मान आसे जोंबो फारमाने बले न केबो फारि जोंनो न लगिनो न केबो फाइने करि ए अबा हाइ सिचुएशन आबन बागैनो त्रिपुरा सारा निजे कालचार हुकुम दाना निजे कौन दाना न के और मन स्क्रिप्ट बाले जों खाइ सिन कौन आबलिप खाइना गाका जों बेलाखि इम्पोर्टेन्ट नांगै दं कारण ताबो बो बर बांग्लामेनो पढनाय दं कामिनो बर जे चु जायगा रंग सिम बांग्लामेनो मार हबले उनका तातो जतन जे चुना के जतन इंग्लिश मीडियम उनका बांग्लामेनो म पढुले नंबु जर सा कायमाना बा ह आउन बागनो चकलु दंले उला इंग्लिश पढि बाइसे नों तिनि सिन बर अमेरिका बनुकनाय अस्ट्रेलिया बनुकनाय जार्मनी बनुकनाय कैनेडा बनुकनाय दिल्ली मुंबई के जतन नुनाय न बांग्ला में सिंपल था इंग्लिश पढि का रोमन स्क्रिप्ट पढि का नों तिनि थांना मा खम जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा वानसु ते खलायो वानसु जों सामु कथा थांना आम से कॉप परिणाम के लिए बेहतर व्यवस्था
और नीतिगत पहल की दरकार होती है। 2014 के बाद से ही देश में वैज्ञानिक परिदृश्य में अविश्वसनीय बदलाव के प्रेरणा स्रोत हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। करतल ध्वनि के साथ आइए एक बार फिर अभिनंदन करें अति सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी हम सहृदय स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य और हमारे साथ विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी प्रख्यात शख्सियतों, विशिष्ट अतिथिगण का भी हार्दिक अभिनंदन। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तरुण मन में प्रज्वलित नवोदित विचार अनुसंधान की धरा में फल फूल रहे हैं। छात्र इनोवेटर से एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। नन्ही आंखों के सपने वास्तविकता के धरातल पर साकार हो रहे हैं। देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति खुलकर सांस ले रही है। आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर चलते हुए नवीन प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की ओर अग्रसर है भारत देश। इसलिए नेशनल टेक्नोलॉजी वीक का विषय है स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से सबसे पहले विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया पौधा भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। And now I request Dr. Jitendra Singh to kindly present the welcome address. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका आभार। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। प्रधानमंत्री जी, गत 9 वर्षों में आपके नेतृत्व में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण और नवाचार के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने एक लंबी छलांग लगाई है और इस लंबी छलांग का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ देर के लिए हम ये अंदाज़ा कर सकें कि सन 2014 से पहले का क्या आलम था और आज 2023 में क्या दृश्य है। सन 2014 से पहले इस देश में मात्र 350-400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आपने कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, और आज इसकी संख्या 97,000 से अधिक हो गई। 115 यूनिकॉर्न और हिंदुस्तान इकोसिस्टम स्टार्टअप में दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़ा हुआ। सन 2014 से पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर हम 81वें पैदान पर खड़े थे। आज 41 का जंप लगा करके हम 40वें पैदान पर हैं। सन 2014 से पहले हिंदुस्तान की बायो इकॉनमी $10 बिलियन थी, आज 8 गुना बढ़ करके $80 बिलियन हो गई है। सन 2014 से पहले पूरे देश में कुल मिलाकर के बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र और मात्र 50-55 थी, आज बढ़कर के 6,000 हो गई। सन 2014 से पहले किसी ने सुना ना था अरोमा मिशन का अर्थ क्या है, पर्पल रेवोल्यूशन का अर्थ क्या है। आज लेवेंडर कल्टीवेशन के साथ जुड़े हुए किसानी के माध्यम से एग्रीटेक स्टार्टअप्स का एक नया वर्ग उभर करके आया है। सन 2014 से पहले हिंदुस्तान में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट ना था, आज उसी हिंदुस्तान को दुनिया का वैक्सीन हब कहा जाता है। सन 2014 से पहले हमारे यहाँ कभी कभी अखबार में खबर आती कि श्रीहरिकोटा नाम के एक स्थान से एक रॉकेट लॉन्च हुआ है। आपने उस श्रीहरिकोटा के दरवाजे खोल दिए। आज उसी श्रीहरिकोटा में लगभग 130 प्राइवेट स्टार्टअप्स इसरो के साथ काम कर रहे हैं और हमारा गगनयान भारतीय मूल के एक व्यक्ति को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी में। सन 2014 से पहले किसी को मालूम ना था कि पृथ्वी विज्ञान का अर्थ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का मैंडेट क्या है। आपने डीप सी मिशन की घोषणा की। आज हिंदुस्तान के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के साथ बसे हुए सागर के भीतर की अपार संपत्ति खोजने के लिए हमारा समुद्र यान निकल चुका है।
एक के बाद एक अनेकों ऐसी क्रांतिकारी उपलब्धियां और यह सिलसिला निरंतर जारी है। अभी इसी वर्ष में सन 2023 में आपने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। लाइगो, जिसका लॉन्च आज आप कर रहे हैं, इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 और अभी हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन, जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के चंद एक गिने चुने देशों के एलीट क्लब में ला करके खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जहां आपने हिंदुस्तान को विज्ञान की ताकत से दुनिया में लोहा मनवाया, वहां साथ ही साथ आम नागरिक के जीवन में सरलता लाने के लिए सेक्टोरल डेवलपमेंट में विकास के कार्यों में साइंस टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाने का रास्ता भी हमें दिखाया। और आज जब हम ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहे हैं और ये अटल जी की स्मृति के साथ जुड़ा है, तो ये आप ही की कल्पना थी, अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, ताकि कम अवस्था में, बचपन में, स्कूल के समय में बच्चे अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को खोज सकें, तलाश सकें, तराश सकें और आने वाले जीवन में उसे देश की सेवा के लिए समर्पित कर सकें। आज का बच्चा कल सन 2047 के हिंदुस्तान का युवा होगा और 2047 का युवा शताब्दी भारत का निर्माता होगा। और इसलिए आज जब ये 25वां नेशनल टेक्नोलॉजी डे, पहली बार भारत सरकार के 12 मंत्रालयों और विभागों द्वारा सामूहिक तौर पर होल ऑफ गवर्नमेंट मंत्र का पालन करते हुए मनाया जा रहा है, तो ये मात्र एक सांकेतिक अवसर न रह करके एक उत्सव का रूप धारण कर चुका है, एक फेस्टिवल का रूप धारण कर चुका है। इट इज अ सेलिब्रेशन of India's scientific supremacy. It is a celebration of India's growth story under Prime Minister Modi. It is a celebration of Prime Minister Modi's new India. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh. देवी और सज्जनों, रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को हासिल करने की ओर तीव्र गति से अग्रसर है हमारा देश। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को भी संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियों के साथ स्वागत करें केंद्रीय रक्षा मंत्री जी का। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, भारत सरकार के सभी अधिकारी वर्ग, वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट्स, अन्य सम्मानित अतिथिगण, देवियों व सज्जनों, आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब के बीच होना हम सब के लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की और इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे विशेष खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। वैश्विक परिदृश्य में भारत एक नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन सबके पीछे अगर कोई प्रेरक शक्ति है तो वह है आपके आह्वान की शक्ति, आपके संकल्प की शक्ति और आपके समर्पण की शक्ति। साथियों, आज हम सब यहाँ देश के साइंटिफिक अचीवमेंट्स का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सब ने ग्लोबल स्टेज पर लोगों द्वारा यह कहते हुए सुना है कि 21वीं सदी यह भारत की सदी है। वर्तमान में दुनिया को भारत में आशा की एक नई किरण नजर आ रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दुनिया को यह दिखाया भी है कि भारत रूपी सूर्य का उदय हो चुका है और हमारा सूर्य अब अपने पूरे तेज के साथ चमकने को तैयार है। मैं यहाँ सूर्य का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं में देखें तो हम पाएंगे कि सूर्य के साथ हमारे बड़े अद्भुत संबंध रहे हैं। हम सभी बजरंगबली के उपासक हैं। एक प्रसंग तो आप सबने सुना ही होगा
कि बजरंगबली ने किस प्रकार फल समझकर सूर्य को ही निगल लिया था। बाद में देवताओं के मनाने के बाद उन्होंने सूर्य को मुक्त कर दिया था। इस कार्य से बजरंगबली ने अपनी अपार शक्ति का परिचय तो दिया ही, साथ ही उन्होंने हमें यह भी संदेश दिया कि अगर हम अपनी ताकत को बढ़ाएं तो सूरज भी हमारी मुट्ठी में आ सकता है। 1998 में दुनिया ने भी देखा कि श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन शक्ति के तहत कैसे भारत ने अपनी वह ताकत दिखाई और पोखरण और रेगिस्तान में एक नहीं 5-5 सूरज बो दिए। प्रधानमंत्री जी, पोखरण के परमाणु परीक्षण पर मुझे केवल जीआई साहब की लिखी पंक्तियां याद आती हैं, जब उन्होंने यह लिखा था कि अब न छोड़ेंगे कमी, अब न छोड़ेंगे कमी, कोई भी अपनी शान में 5 सूरज बो दिए हैं हमने रेगिस्तान में। रेत के सागर में बसे हुए पोखरण की हम यदि ज्योग्राफी और क्लाइमेट देखें तो यह भले ही एक रेगिस्तान की तरह दिखता है, लेकिन रेगिस्तान की इस रेत में भारत के परमाणु शक्ति की हरी भरी फसलें आज भी लहलहा रही हैं। साथियों, हमारा देश शांतिप्रिय संस्कृति और सभ्यता का देश रहा है। इस देश ने न केवल स्वयं के लिए शांति की कामना की, बल्कि समस्त विश्व को शांति का संदेश दिया। दुनिया को बुद्ध और गांधी जैसे शांति पुरुष ही इस देश की देन है। यह देश वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म को मानने वाला देश है। हमने किसी भी देश पर उसको गुलाम बनाने के उद्देश्य से कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन इतिहास में हमें कई बार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। और आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही ज्ञान पर आधारित रहे इस समाज ने दुनिया को शांत आचार, विचार और व्यवहार का पाठ पढ़ाया है। हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज ने देश ही नहीं विदेश के शिक्षार्थियों को भी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी, जिसमें नालंदा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। पर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हश्र हुआ। एक बख्तियार खिलजी अपने दलबल के साथ आता है और इस महान विश्वविद्यालय का ध्वंस करके चला जाता है। पुस्तकों के रूप में ज्ञान की ऐसी अगाध संपदा कि बताते हैं महीनों तक यहाँ किताबें जलती रहीं। इसी तरह सोमनाथ मंदिर का उदाहरण लिया जा सकता है। यह मंदिर देश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का एक विशाल केंद्र है, लेकिन हमारी शांति प्रियता का फायदा उठाकर इसे भी 1-2 बार नहीं अनेक बार तोड़ा गया और इस मंदिर के माध्यम से अनेकों भारतीयों का विश्वास और उनकी आस्था को यह तोड़ा गया। ऐसे में इस देश ने पुनः अपने उन आराध्यों की ओर देखा जिनके एक हाथ में ज्ञान के प्रसार के लिए शास्त्र होता है तो दूसरे हाथ में अधर्म का नाश करने के लिए शस्त्र भी होता है। ऐसे में हमारे परमाणु परीक्षणों ने दुनिया को यह मैसेज कन्वे किया कि हम भले ही शांतिपूर्ण राष्ट्र हैं, लेकिन हम नालंदा दोबारा जलते हुए नहीं देखेंगे और हम दोबारा अपने सोमनाथ के सांस्कृतिक वैभव को किसी गजनवी द्वारा कुचले जाते नहीं देखेंगे। हमने इतिहास में सीख ली है और यह सुनिश्चित किया है कि हम ऐसा इतिहास कभी रिपीट नहीं होने देंगे। हम अपने आत्मसम्मान के खिलाफ उठे हुए हर कदम का पुरजोर जवाब देंगे। साथियों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमें हमारी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट को एक्नॉलेज करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की यह प्रेरणा देता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा भी गया है कि बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात शक्ति का स्रोत विज्ञान ही है। जब हम देश में साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देते हैं तो इससे राष्ट्र तो प्रगति करता ही है, साथ ही यह हमारी युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। साथियों, भारत अभी डेमोक्रेटिक डिविडेंड के फेज से गुजर रहा है। हमारे पास एक सामर्थ्यवान ह्यूमन रिसोर्स है। हमारे इसी ह्यूमन रिसोर्स ने
हमें इस स्थिति में पहुंचाया है कि आज हम दुनिया के सामने गर्व से सिर उठाकर खड़े हो सकते हैं और यही ह्यूमन रिसोर्स हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक भी पहुंचाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। बस आवश्यकता है तो इस ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करने की। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने इस विजन में पूरी तरह से कामयाब होंगे और एक नए भारत के निर्माण की ओर कदम आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं एक बार पुनः हमें अपना मार्गदर्शन देने हेतु यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और यही अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय रक्षा मंत्री जी। Ladies and gentlemen, Government of India is working on the strategy to transform India through science and technology. विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश नए आयाम हासिल करते हुए नए कीर्तिमान रच रहा है। कैसे देश में ये परिदृश्य बदल रहा है, आइए इसी पर देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। आधुनिक भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में से एक है। पिछले 9 सालों में सरकार ने देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में पेश करने के लिए साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसी का नतीजा है कि आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर लंबी छलांग लगाकर 81 से 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 2014 के मुकाबले आज स्टार्टअप्स की संख्या 300 गुना बढ़कर 97,000 हो गई है। 115 यूनिकॉर्न के साथ आज भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों के जरिए देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। अटल इनोवेशन मिशन में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और इंस्पायर स्कॉलरशिप के जरिए स्कूली बच्चों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया गया। हमारा प्रयास है कि 6ठी क्लास से ही विद्यार्थी अटल टिंकरिंग लैब में जाएं और फिर कॉलेज से निकलते ही उसको इंक्यूबेशन का, स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार मिले। आज भारत सरकार के 11 मंत्रालयों और विभाग मिलकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। यहाँ आप मिलेंगे मशहूर टेक्नोप्रेन्योर्स और उनके हैरत अंगेज नवाचारों से, साक्षी बनेंगे देश की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों के और करीब से समझेंगे भारत के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को। भारत में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्यमियों को उनके विचारों को बाजार के लिए तैयार उत्पादों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार ये माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आजादी के अमृत काल में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब नए नए कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता आने वाले अगले 25 सालों में देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के तौर पर स्थापित करना है। सही नीतियों और कार्यक्रमों के साथ भारत विश्व में अग्रणी प्रौद्योगिकी केंद्र बनने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है।
देवी और सज्जनों, 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत द्वारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाना शुरू किया गया। इन 25 वर्षों के सफर को चिन्हित करते हुए आज एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि पहले अपने कर कमलों द्वारा डाक टिकट का विमोचन एल्बम द्वारा करें। भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा 25वें नेशनल टेक्नोलॉजी डे के उपलक्ष्य में विशेष रूप से इस डाक टिकट को तैयार किया गया है। And now may I please request Honorable Prime Minister to kindly release the commemorative coin. Thank you, Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, Government of India is continuously upgrading and creating science and technology infrastructure in the country. विज्ञान के क्षेत्र में सुविधाओं और ढांचागत विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई पहल का उद्घाटन व शिलान्यास किया जा रहा है। The facilities which are being dedicated to the nation by Honorable Prime Minister are Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center, Visakhapatnam, Women and Children Cancer Hospital, Navi Mumbai, National Hadron Beam Therapy Facility, Navi Mumbai, Radiological Research Unit, Navi Mumbai, Fission Moly 99 Production Facility, Mumbai, and Rare Earth Permanent Magnet Plant, Visakhapatnam. और जिन फैसिलिटीज का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है वे हैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जटनी, ओडिशा, Platinum Jubilee Block of Tata Memorial Hospital, Mumbai, and Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, India. May I please humbly request Honorable Prime Minister to kindly dedicate to the nation and lay the foundation stone for these facilities by pressing the button of remote. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन फैसिलिटीज को राष्ट्र को समर्पित किया गया है या जिनका शिलान्यास किया गया है, ये सभी फैसिलिटीज, इनकी विशेषता क्या है और किन मायनों में ये खास है, महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है।
एम्स के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों में वृद्धि और टीकाकरण अभियानों सहित कई महत्वपूर्ण पहलों ने इस प्रगति में योगदान दिया है। देश में कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स और 20 टर्सरी केयर कैंसर सेंटर्स भी स्वीकृत किए गए। ऐसे में टाटा मेमोरियल सेंटर, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है, देश भर में स्थित अपने विभिन्न केंद्रों के माध्यम से कैंसर के आधुनिकतम इलाज को सुलभ बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ओडिशा के खुर्दा जिले के जटनी में 200 बेड वाला होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। 650 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली इस परियोजना में 400 करोड़ रुपए का योगदान परमाणु ऊर्जा विभाग तथा 250 करोड़ रुपए का योगदान टाटा ट्रस्ट कर रहा है। ओडिशा सरकार इस परियोजना में कई तरह से योगदान दे रही है, जिसमें परियोजना के लिए 42 एकड़ भूमि शामिल है। मुंबई, महाराष्ट्र में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का प्लैटिनम जुबली ब्लॉक स्थापित किया जा रहा है। 938 करोड़ रुपए की लागत वाली इस सुविधा में 880 करोड़ रुपए बिल्डिंग के निर्माण में तथा 58 करोड़ रुपए सामान्य उपकरणों के लिए लगाए जाएंगे। सीएसआर के तहत अतिरिक्त 390 करोड़ रुपए सुपर स्पेशलिटी उपकरणों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। 557 करोड़ रुपए की लागत से बना 100 बेड का यह अस्पताल कैंसर के निदान और उपचार के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। टीएमसी के नवी मुंबई स्थित एक्ट्रैक परिसर में 38 करोड़ रुपए की लागत से बना 270 बेड का कैंसर अस्पताल देश का पहला एकीकृत केंद्र है, जो महिलाओं और बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए समर्पित है। 3 गैंट्रियों को एक साथ संचालित करने वाली देश की पहली नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी एक्ट्रैक नवी मुंबई में स्थित है। 468 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये एक अत्याधुनिक प्रोटॉन थेरेपी इकाई है। भारत की सबसे बड़ी नाभिकीय चिकित्सा सुविधा रेडियोलॉजिकल रिसर्च यूनिट 93 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये यूनिट विभिन्न प्रकार के कैंसरों के उपचार के लिए सेवाएं प्रदान करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग प्राचीन भारतीय उक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संकल्प धारण किए प्रगति पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ठोस कदम उठाते हुए अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं। बीते 9 वर्षों में हमारी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। नए मेडिकल कॉलेजों और एम्स शाखाओं की स्थापना, अस्पतालों को अपग्रेड करके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना तथा आधुनिकतम इलाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता इन सफलताओं के आधार स्तंभ हैं। इस उद्देश्य में अपना योगदान देते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय चिकित्सा और कैंसर उपचार के क्षेत्रों में अग्रणी कार्य करते हुए उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। 300 क्यूरी के मेडिकल ग्रेड हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी मोलिब्डेनम 99 के उत्पादन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में ब्रिट द्वारा फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी की स्थापना इस दिशा में की गई एक प्रभावशाली शुरुआत है, जो भारत को ऐसी क्षमता रखने वाले विशिष्ट देशों में से एक बनाती है। मोलिब्डेनम 99 डायग्नोस्टिक रेडियो आइसोटोप टेक्नीशियम 99M का जनक होता है, जिसका प्रयोग 85% से भी अधिक डायग्नोस्टिक स्कैनों के लिए किया जाता है और इसीलिए इसे न्यूक्लियर मेडिसिन का वर्क हॉर्स कहा जाता है। विभिन्न रोग प्रभावित हिस्सों पर विशिष्ट अपटेक वाले बायोमोलिक्यूल्स का उपयोग करते हुए टेक्नीशियम 99M का प्रयोग टेक्नीशियम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के फॉर्मुलेशन के लिए किया जाता है।
इन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का उपयोग करते हुए स्पेक्ट स्कैन से किडनी, लीवर, हृदय और मस्तिष्क जैसे विभिन्न अंगों में रोगों के शीघ्र निदान में मदद मिलती है। 295 करोड़ रुपए की लागत से बनी फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी घरेलू मांग को पूरा करने के साथ ही अन्य जरूरतमंद देशों की रेडियो आइसोटोप आवश्यकताओं को भी पूरा करने की क्षमता रखता है। Our goal is to make healthcare accessible and affordable not only for our citizens but for the whole world. Reducing disparity in India's priority, serving the unserved is an article of faith for us. मेडिकल रेडियो आइसोटोप के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर करने की दिशा में फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी की स्थापना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को उच्च तकनीक क्षेत्र में दुनिया के विकसित देशों के समकक्ष लाने और संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ निश्चय निहित है। आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस संदर्भ में रेयर अर्थ तत्व विशेष महत्व रखते हैं। रेयर अर्थ तत्व स्वच्छ ऊर्जा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर, बैटरियों सहित अनेक अति विशिष्ट क्षेत्रों में अपरिहार्य रूप से प्रयुक्त होने के कारण अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। इनके महत्वपूर्ण उपयोगों में से एक समैरियम कोबाल्ट स्थायी चुंबकों का उत्पादन है। समैरियम कोबाल्ट स्थायी चुंबकों में असाधारण गुण होते हैं जो इन्हें रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे सामरिक क्षेत्रों में उपयोग के अनुकूल बनाते हैं। स्थायी चुंबकों का आयात प्रायः प्रतिबंधों और आपूर्ति अवरोधों से प्रभावित रहता है, क्योंकि इन्हें बनाने की तकनीक विश्व के कुछ विशेष देशों के पास ही उपलब्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में भारत सरकार के समन्वित प्रयासों और लक्ष्योन्मुख समग्र सरकार के दृष्टिकोण ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिणाम स्वरूप रेयर अर्थ चुंबकों के क्षेत्र में भारत अब पूरी तरह से स्वदेशी सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके औद्योगिक पैमाने पर समैरियम कोबाल्ट स्थायी चुंबकों के उत्पादन की जटिल तकनीक में महारत हासिल कर चुका है। विकसित की गई इस प्रौद्योगिकी को आधार बनाकर विशाखापट्टनम के अच्युतापुरम स्थित BARC कैंपस में परमाणु ऊर्जा विभाग की एक औद्योगिक इकाई IREL इंडिया लिमिटेड द्वारा एक आधुनिक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट की स्थापना की जा रही है, जहां प्रतिवर्ष 3000 किलोग्राम समैरियम कोबाल्ट मैग्नेट का उत्पादन किया जा सकेगा। 197 करोड़ रुपए की लागत से बना ये प्लांट सामरिक क्षेत्रों के लिए समैरियम कोबाल्ट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट की स्थापना उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में देश पिछले 8-9 वर्षों में अनुसंधान और विकास में अभूतपूर्व वृद्धि का साक्षी रहा है। इस वृद्धि ने कई वैज्ञानिक उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें लाइगो इंडिया की परियोजना उल्लेखनीय है। लाइगो इंडिया अमेरिका और भारत के बीच एक सहयोगी परियोजना है, जिसका उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना है। लाइगो इंडिया का निर्माण और स्थापना उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है। The greatest scientist of the last century, Albert Einstein, had given the theory about gravitational waves. It is a matter of immense pride for all of us that 37 Indian scientists from 9 Indian institutions participated in the International Laser
Interferometer Gravitational Wave Observatory LIGO collaboration and proved this theory correct 3 years ago. लाइगो इंडिया, परमाणु ऊर्जा विभाग DAE और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के परस्पर सहयोग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली एक मेगा साइंस परियोजना है। लाइगो इंडिया, कैलटेक और MIT, अमेरिका की लाइगो लेबोरेटरी के सहयोग से बनाई जा रही है और ये इन 2 वेधशालाओं के साथ ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टरों के एक वैश्विक नेटवर्क के रूप में काम करेगी। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में लाइगो इंडिया के लिए 428 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और परियोजना के लिए राज्य सरकार से पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लाइगो इंडिया भारत में स्थापित होने वाली पहली मेगा साइंस परियोजना होगी। ये बड़ी संख्या में भारतीय शोधकर्ताओं और छात्रों को इस उभरते हुए क्षेत्र में योगदान देने का अवसर प्रदान करेगी। ये परियोजना एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक क्षेत्र में हिंगोली को वैश्विक मानचित्र पर पहचान देने के साथ साथ विश्व भर के शोधकर्ताओं को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। लाइगो इंडिया से अर्जित क्लीन रूम निर्माण की विशेषज्ञता, सेमीकंडक्टरों और बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों में दक्षता प्राप्त करने और प्रगत अनुसंधान परियोजनाओं के लिए आवश्यक बड़े अल्ट्रा हाई वैक्यूम सिस्टमों के निर्माण में योगदान देकर राष्ट्र की महत्वपूर्ण सेवा करेगी। ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने के प्रति समर्पित अत्याधुनिक शोध की दिशा में लाइगो इंडिया की स्थापना देश के लिए एक गौरवशाली एवं उन्नतिशील कदम है। तो देश में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र को रफ्तार देंगी ये सभी फैसिलिटीज। तो रुख हवाओं का मोड़ दे, लोगों के भरम को तोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, मंजिल की ओर अब कदम बढ़ा, हासिल कर मुकाम नया पन्ना इतिहास में जोड़ दे, तो रुख हवाओं का मोड़ दे। देश के छात्रों और युवाओं की कल्पना शक्ति की परवाज को ठोस आधार प्रदान करने वाले, प्रत्येक देशवासी के हृदय में राष्ट्र समर्पण के संकल्प की लौ को प्रज्वलित करने वाले, हर जन की आंखों में कुछ कर सकने का विश्वास जागृत करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्रतापूर्ण आग्रह करती हूं कि अपने सुवचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। करतल ध्वनि से स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, साइंस और टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के सभी सम्मानित सदस्य और मेरे युवा साथियों, आज 11 मई का ये दिन भारत के इतिहास के सबसे गौरवमयी दिनों में से एक है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने पोखरण में वो उपलब्धि हासिल की थी जिसने मां भारती की हर संतान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी। पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया बल्कि भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी।
अटल जी के शब्दों में ही कहूं तो अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के समक्ष कभी झुके नहीं हैं। मैं सभी देशवासियों को आज के दिन की नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर कई फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। मुंबई में नेशनल हेड्रोन बीम थेरेपी फैसिलिटी पर रेडियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर हो, विशाखापट्टनम से के बार्क कैंपस में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट हो, मुंबई की फ्यूजन मौली 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, या विभिन्न शहरों के कैंसर हॉस्पिटल हो, ये सभी संस्थान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से मानवता की और भारत की प्रगति को गति देंगे। आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी लाइगो इंडिया का शिलान्यास भी हुआ है। लाइगो 21वीं सदी के सबसे बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव में से एक है। दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही इस तरह की ऑब्जर्वेटरी आज है। भारत के स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट के लिए ये ऑब्जर्वेटरी आधुनिक रिसर्च के नए अवसर लेकर आ रही है। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी देश के वैज्ञानिक समुदाय को, सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, इस समय हम आजादी के अमृतकाल के शुरुआती महीनों में हैं। हमारे सामने 2047 के स्पष्ट लक्ष्य हैं। हमें देश को विकसित बनाना है, हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं, बल्कि देश की प्रगति को गति देने का एक टूल मानता है। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस बार की थीम स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट ये रखा गया है। आजादी के इस अमृतकाल में भारत का भविष्य हमारी आज की युवा पीढ़ी, हमारे आज के स्टूडेंट्स ही तय करेंगे। आज की इस युवा पीढ़ी के पास नए सपने हैं, नए संकल्प हैं, उनकी ऊर्जा, उनका जोश, उनका उत्साह, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, हमारे देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम कहा करते थे, नॉलेज विथ एक्शन कन्वर्ट्स
एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी। आज जब भारत एक नॉलेज सोसाइटी के तौर पर सशक्त हो रहा है तो उतनी ही तेजी से एक्शन भी ले रहा है। भारत के यंग माइंड्स को इनोवेशन की तरफ प्रेरित करने के लिए बीते 9 वर्षों में देश में एक मजबूत बुनियाद बन चुकी है। कुछ साल पहले शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब्स ATL आज देश की इनोवेशन नर्सरी बन रही है। आज देश के 35 राज्यों में 700 जिलों में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंक्यूबेशन का ये मिशन केवल बड़े शहरों तक सीमित है। करीब 60% अटल टिंकरिंग लैब्स सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में खुली है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में बच्चों के लिए पढ़ाई के मायने बदल रहे हैं, वो इनोवेशन की तरह प्रेरित हो रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज अटल टिंकरिंग लैब में 75 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 12 लाख से ज्यादा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर जी जान से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में लाखों जूनियर साइंटिस्ट स्कूलों से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं। इनकी हैंड होल्डिंग करना, हर तरह से मदद करना, इनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में सहायता देना, ये हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व है। आज सैकड़ों की संख्या में स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनका इंक्यूबेशन अटल इनोवेशन सेंटर्स में हुआ है। अटल टिंकरिंग लैब की ही तरह अटल इनोवेशन सेंटर्स AICs भी न्यू इंडिया के लेबोरेटरी बनकर उभर रहे हैं। आप देखिएगा भारत के ये टिंकर प्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स हम देखते थे, ये टिंकर प्रेन्योर्स हैं। कल ये लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं। साथियों, महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, परमाणु परम महत्व अंतः अस्य वशीकारः। यानी जब हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ वश में आ जाता है। 2014 के बाद से भारत ने जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देना शुरू किया है, वो बड़े बदलावों का कारण बना है। हमने जो स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया, जो डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसने भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की सफलता को नई ऊंचाई दी है। पहले जो साइंस केवल किताबों तक सीमित थी, वो अब एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स में बदल रही है। भारत में 10 साल पहले एक वर्ष में 4000 के आसपास पेटेंट ग्रांट होते थे। आज इनकी संख्या सालाना 30,000 से भी ज्यादा हो गई है। भारत में 10 साल पहले सालाना 10,000 डिजाइन रजिस्टर होते थे।
आज भारत में सालाना 15,000 से ज्यादा डिजाइन रजिस्टर हो रहे हैं। भारत में 10 साल पहले सालाना 70,000 से भी कम ट्रेडमार्क रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो रहे हैं। साथियों, आज भारत हर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो एक टेक लीडर कंट्री के लिए जरूरी होता है। आप में से कई साथी जानते हैं 2014 में हमारे देश में करीब 150 के आसपास ही इंक्यूबेशन सेंटर्स थे। आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या 650 भी पार कर चुकी है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पे था, वहां से ऊपर उठ करके 40वें स्थान पर पहुंच चुका है। आज देश के युवा, हमारे स्टूडेंट्स अपने डिजिटल वेंचर्स खड़े कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहां स्टार्टअप की संख्या भी कुछ 100 के आसपास थी। आज हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप की संख्या भी करीब करीब 1 लाख पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है, भारत का टैलेंट दिखाता है। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, पॉलिसी मेकर्स के लिए, हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए, देश भर में फैली हजारों रिसर्च लैब्स के लिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल टू स्टार्टअप्स की यात्रा हमारे स्टूडेंट्स करेंगे, लेकिन आपको उन्हें निरंतर गाइड करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। और इसमें मेरा आप सभी को पूरा सपोर्ट रहेगा। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी के सामाजिक संदर्भ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और असंतुलन को मिटाने का भी माध्यम बनती है। एक समय था जब टेक्नोलॉजी सामान्य भारतीय की पहुंच से बाहर थी। आपको भी याद होगा, कभी जेब में क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर चलना स्टेटस सिंबल हुआ करता था, लेकिन भारत का यूपीआई आज अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से न्यू नॉर्मल बन गया है। आज रेहड़ी पटरी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट डाटा इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। इसे